morning, you're watching The Verdict on DeKoder. I'm Nidhi Razdan. In about half an hour from now, counting will begin for the all-important Bihar Assembly election, which is essentially a battle between two alliances. The Mahagathbandhan of the opposition RJD, Congress and other parties versus the NDA, Nitish Kumar and the BJP. We'll know, hopefully, what the picture is in a few hours from now. But let me first introduce our terrific panelists today. Joining us here in the studio, we of course have Dr. Prannoy Roy, who's going to take us through all the analysis and data. They've been on the ground in Bihar for weeks, so I think it'll be interesting to see what your feedback is, Doc. I.प analyst and colleague joining us, political analyst Manisha Priyam is back with us. Great to see you this morning. Senior journalist Shikha Trivedi, who was traveling through Bihar as well and has some interesting stories to tell. Durab Supariwala is back with us. He was there too. And it's over to you, Doc. Who's winning? Who's winning? That's such an easy question to answer. It all depends. That's the answer. I'm Bengali, na? It remains to be seen. Yeah, time will tell. No, but I think we need to understand that when we look at what the base is, what the foundation is, and where the swings will be from here, the 2020 assembly election looked like a really close race. But that is not quite the base. Look at the 2020 assembly elections. 125 to 110 with votes at 37-37. But with the new alliances, go to the further right of that graphic, it's 41% to 39%, but the seats are 156 to 81. Why is that difference? Because Chirag Paswan, who had got about 6% of the vote last time, has now joined the NDA. And that has made a huge difference. So when we are talking about the base and the swings from 2020, it's more relevant to look at 174 to 62. Just a huge, huge sweep for the NDA if Chirag Paswan had joined. That's why he's joined and that's why they took him on. Smart decision. And actually, if you look at the Lok Sabha election, but it's still, even from that 174, only a 3% swing and they lose majority. 3%, and that is not a huge swing. That is very feasible. It is a very volatile state, and 3% has happened very often before. So 174 will go below 122. 122 is the halfway mark. It will go with just a 3% swing in votes. That's amazing. So Dorab, there will be a 3% swing? Well, could be plus or minus. well, the exit polls suggest that there is a sort of unanimity, but exit polls, as we know, have been known to be right and have been known to be wrong. If you look at the last three elections, there are 113 seats which the NDA has won every single time. So to dislodge that, 122 is the majority. They won 133 seats, 13 seats three times on the trot. Wow. So it is difficult to displace them. And I would like to greet my friends in Vancouver who are watching today. Vancouver, 13 and a half hours away. So we have global. So we should make one correction, that 174 base is the Lok Sabha 2024. Yes. If you look at 2020, it's 150. And if you add Chirag Paswan votes, 156. So both ways, it's, see, this is the 2020. That's 125 what they actually got. But if you add Chirag Paswan's votes, it's 156 to 81. So what I'm saying is, if you take 2020 with Chirag Paswan, 2024 and 2015, there are 113 common seats, which they won all three times. Right. You know, it is maybe by 2%, half a percent, but you know, it really sets a picture. I had, with my skills in Excel, I had Iram to check it out yesterday for me. That is 130 seats. So you're basically saying something. Anything could happen. But here's the 174. This is the more recent election, the Lok Sabha election, where they won 174 assembly constituencies in their Lok Sabha. So, Baj, that's quite a very difficult, and of course, Paswan was with them at that time. Quite a huge
base to start with. Yeah, and like you said, there's a 3% swing could change this completely. I think for the BJP and NDA, they got 77 of their seats of 125 in just 4 regions. They swept those regions. Some of them they got 70% of the seats, some they got 67. So they need to defend that. And in Maghal, they did very badly, and in the Patna region. So they need to improve there if they're going to repeat what they did in the general elections. Right. I just wanted to ask Manisha Priyam, I mean, in terms of what is at stake for the big players, it's actually quite remarkable if the exit polls are correct that Nitish Kumar, after having been chief minister for nearly 20 years, would make a comeback. He's not in the best of health. Bihar is the poorest state in India. And what would then explain the fact that he still seems to have a lot of love on the ground? Right. Yeah, I mean, elections are like a scenario where all the hypotheses that you go with, most of them are falsified. I started off saying this is sunset Nitish Kumar, and I started saying that this is out both the socialist brothers separated, although Lalu Prasad Yadav and Nitish Kumar. I'm ending up by saying that it looks again like an election more between Nitish and Lalu than anybody else. And what would be the reasons? On the ground, the BJP, whatever the majority, and the JDU have fought 2 separate elections, not a rally together. Even the Prime Minister's roadshow in Patna, not accompanied by Nitish Kumar. After Nitish, nobody knows who's the next strong JDU leader who's pulling the EBCs and the Mahila vote for which the JDU is known together. So is there a way in which the machine of party politics just carries voters in 113 seats, sans leaders, sans appearing together? The manifesto itself, I've been brought up in Patna looking at party political speeches in Gandhi Maidan. This time the scenario of action was a prized hotel just across. The Maurya Hotel was the hot seat of action, including the NDA manifesto released there. So much has changed, but still the political parties that hold the ground are those that you talk about. We just have to go across to Alok Pandey now, who is in Patna and joins us from the BJP office there. And Alok, I don't know whether workers have already started gathering there, or they'll wait to see how counting plays out. But this time, of course, the BJP and the JDU, in terms of seat sharing, we saw it was an equal number of seats, 101 each, that they contested. And so that the whole talk was that Nitish Kumar is no longer the senior ally in this relationship. So how's that played out in this campaign? Well, I have to say that ultimately, the election has been fought on Nitish's face, whatever you may say. I'll just show you some visuals where I am right now. So to this side is the BJP office that my camera person Manoj is just showing you. Right now, there's nothing at all here. The leaders have not come. It's just us, the camera crews, who've come. But you can see these photos here. Obviously, it's the BJP office, so you'll have Narendra Modi more. But you have Mr. Modi's posters here outside, all of them, and you have a lot of preparations that we believe are going on inside. But right now, it's like mostly empty. The buzz is to the other side. That's where I'm going to go right now. It's to this side. And that is what I want to show you more in the morning. So this is this nice tea stall right opposite the BJP office. And I was very attracted to it early in the morning because I came here and I saw this tea brewing. I'm just going to get you a few visuals of this. Just look at this nice tea that's brewing here. And there's not only tea, there's also some very good littis and kachoris that you can see early in the morning. ये आप सुबह-सुबह देखें कितनी बढ़िया इन्होंने कचौरी बनाई है। रोज सुबह आप यही स्टॉल लगाते हैं क्या? यही लगाते हैं? हाँ, यहीं पे लगता है बीजेपी के दफ्तर के सामने। बीजेपी का ही नेताजी आपके पास आता है कि सब लोग आते हैं? आदमी आते हैं भैया, सब आदमी है बीजेपी के। बीजेपी वाला नहीं। कितने का बेचते हैं चाय और पकौड़ी भैया? ये कैसे बताएंगे सर, बाजार के ऊपर डिपेंड करता है ना सर। अभी कितने का बेच रहे हैं आजकल? बिकेगा तो ना पता चलेगा सामने। तो ये कितने का बेच रहे हैं एक कचौड़ी? हम ले आपसे एक प्लेट तो कितने? 10 रुपया पीस। और चाय? 10 रुपया 6 रुपया है। 10 रुपया और 6 रुपया, क्या फर्क है 10 रुपये और 6 रुपये वाले में? अबकी का फर्क है, छोटा वाला है बड़ा वाला है। 6 रुपये का बेच रहे हैं, बड़ा वाला 10 रुपये। दाम बढ़ाए हैं हाल फिलहाल में कि उतना ही चल रहा है? वही है मेरा फिक्स है। और यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आर हियर अर्ली इन द मॉर्निंग टू ड्रिंक टी आल्सो। आपका नाम क्या है? विजय कुमार।
कहाँ से हैं विजय जी? यही के लोकल हैं। लोकल हैं। हाँ, इसी आज चुनाव का रिजल्ट है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? बस एनडीए सरकार। एनडीए सरकार। बिल्कुल सर। एकदम आप बड़ी श्योरिटी से बोले, ऐसा क्यों? सर, मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैं 54 इयर्स ओल्ड हुई हूँ, ठीक है। तो मैंने वो भी सरकार देखा, ये भी सरकार देखा, विकास देखा और पहली के सरकार के देखा। हाँ। तो इसलिए एनडीए सरकार सर वो अच्छा काम कर रहे हैं। हम जैसे युवाओं को रोजगार दिए हैं, प्रगति बहुत हुई है, विकास हुआ काफी। 54 में आप अपने आप को युवा मान रहे हैं, तो बहुत अच्छा बात है। मेरे बच्चे लोग भी है ना, बच्चे लोग का भी भविष्य अच्छा है। जी जी, बस चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। But I think it's good to see that early in the morning there's a buzz, at least at the tea stall outside the BJP office, if not at the BJP office itself. But right now, that's what it is on the streets of Patna. I think in the next few hours we'll get to know what happens as the counting progresses. But right now, this is what's playing out here. But Alok, Prannoy here. Did you have only tea in the morning or something stronger? Not allowed in Bihar. I don't think he can hear. No, he couldn't hear. No, we actually, everybody that we met on the ground in Bihar said it's freely available. They now deliver it to your house even, but it is more expensive. And sometimes when it's not a little bit scarce, we have smack or tablets. And they have the names of all the tablets. So it's available, but a little more expensive and unreliable. The Thana delivers it very often. Right. You don't have to worry. But just taking off from something Alok said, I'd just like to welcome Geeta Bhatt back with us on Welcome, election day. Shikhar, this whole sort of simmering tension between the BJP and the JDU over projecting Nitish Kumar as the chief ministerial face if they actually win. Amit Shah stopped short of that. He said he is our face going into this election, but the chief minister will be decided later, and that's why you see Mr. Modi's posters at the BJP office and not Nitish Kumar's. How did that sort of resonate in the campaign? Because clearly Nitish is still, if the exit polls are right, still a popular leader on the ground. He's certainly very popular. And in fact, most of the people, if they were supporters of the NDA or they were going to vote for NDA, they said, we are voting for Nitish Kumar. And this was very, very clear, especially amongst women voters. They are not voting for the NDA, they're just voting for Nitish Kumar. And I think that has a lot to do with the 10,000 rupees that they see Nitish Kumar has given them. And so on the ground, it is Nitish Kumar who is the face of the NDA, in spite of what the leaders might say or might not say. But what changed in the last 5 years, Geeta Bhatt? And I ask you this because the JDU actually did not do very well in the last assembly election on its own. It was, I think, 44 seats. The BJP had more than 70. What changed? And in that time, Nitish Kumar switched sides and went back to the NDA. So what has he done in the last 5 years that has changed the mood, maybe? Well, I think that overall, if we see Nitish Kumar, I mean, it's not just we can see last 5 years, but for the last 20 years, the way he has been nurturing, his own voters, especially women voters, that is something which is he has kind of worked on it, right from giving of bicycles to laptops. And interestingly, even women reservation is there for, in Bihar police, it's 35% reserve, it is reserved for women in panchayats. So all this, I think he has, in a way, this maternal welfare, scheme that has been, and prohibition is one of the very big attractions. So that it is a matter of, this culmination of all these policies working consistently for them. And one aspect that he has a very clean image, a personal, as an individual. He has, that dynastic tag which is there with others, that is not there with him. Right. And a very clean image in terms of, personally, there are no corruption charges. I'll just show you exactly what you're saying, and you can have a look at the graphics about how women's voter turnout is huge in Bihar. Look at that. Since 1962, when men and women turnout was actually first given by the Election Commission,
men's turnout has dropped by almost 1%, 0.8%, but women's turnout has gone up 84%. And if you look, this in fact is the first election where women in numbers, not in percentage turnout, will exceed men. Men voter turnout this time is up 8.3% and women voter turnout nearly 12%, from already high to even higher. And that means the last time the number of men voters were little more than women in numbers. The turnout may be less, but because the electorate size of men is bigger, 1/3 of a million men were more voters than women. But in 2025, this time, first time in the history of Bihar, 0.4 million women voted more than men. It just overtook. It's amazing women's participation in these elections. And the key point is here, that where women turnout is high, the NDA does well. Where women turnout is low, the Mahagathbandhan does well. If you look at the top regions where highest women versus men turnout, say Kosi and Darbhanga, the BJP or the NDA has won 77 and 73% of the seats. So they sweep where women's turnout is very high. And conversely, if you look at where women's turnout is low, Patna and Magad, minus 4.5 below men, they only won less than 1/3 of the seats. So women's vote is really crucial. And as Geeta was saying, it's a history of Nitish, the cycles, the prohibition, the reservation, and now the blatant buying of votes, 10,000 rupees. That is brilliant, but blatant. And therefore women, you think, would rather go with the tried and tested, those who've already delivered, rather than those who are promising them something which may or may not come tomorrow. We had heard that, Tejeshwi announced, I'll give 30,000 rupees in January. And we asked women and they said, look, this we've got, and whoever's given us something, we have to vote for them. And how do you look at the overall voter turnout data? Highest ever, the Election Commission says, more than 67%. What does that mean? Well, historically, it's lower voter turnout that helps BJP because they have the cadre, they get their basic turnout easily. Other parties are disorganized, so they have to rely on spontaneous. So a higher turnout is a bit of a worry for the BJP. So it's actually interesting, Dorab, because it's a sort of contradictory thing. A higher voter turnout overall could be a problem for the BJP, but more women coming out and voting actually Don't forget the BJP originally was a male-oriented party. Over the years, through these schemes in Bihar and elsewhere too, I mean, look at Maharashtra. They've become a party that attracts a much larger proportion of women than they used to in the past. So they now have strengths, both the original strength in the men, amongst the men, and amongst the women. This is the answer to your question, where in high turnout seats, the BJP's margin of victory is 3.3%. But in low turnout seats, its margin of victory is 9.1%. So it was much better, 3 times better in low turnout seats. That's again this cadre-based party. It generally happens with all of them. Manisha Priyam, if you could come in on that, on the women vote and the sort of history, the legacy that Nitish Kumar has built amongst women voters right from the cycle scheme, I think that was the mid-2000s, to now this, well, everyone's now announcing, it's become a thing, right, before Maharashtra, etc., announcing these sort of financial packages for women. Yeah. 2005 and 6, when Nitish Kumar came to power, he's never had that appeal and in getting the mass elected, but he was committed to changing Bihar for the better. And his erstwhile education secretary, M.M. Jha, who I had some role in getting him to Oxford and a PhD in education, he went over to Andhra Pradesh, learned the model, came and apologized to the court. The court was what was giving the tag of Jungle Raj to the Lalu Prasad Yadav regime and others from his family who were the chief minister then. And it was largely on what is known as teacher bharti. And the world's largest vacancies of teachers was in Bihar. Now Nitish Kumar bridges all that, gets Shanta Sinha's team there. And that's when he realizes if he gets the girls into school, he resolves the problem. And that's when he begins this hand-holding, this dialoguing with families. He goes over to districts. The chief minister
locates himself in districts of Bihar, it wasn't just the cycles. And then he begins this famous cycle scheme. Now, together with the road construction scheme, suddenly in the next decade or so, you could see in my state girls on cycles in rural roads. Now, 10 years down the line, that translated. And school enrollments went yes, up, didn't they? If you get girls in. And dropout rate for girls. Yeah, so, and he stopped something called alternative schooling or non-formal schooling. You could see women having chaat in rural area bazaars, and I think that was a real transformation. I'd also like to add here that the performance of the JDU and Nitish Kumar in 2020, by then the BJP had become a strong critic of him. And that is something that he's managed. After 2022, no criticism of Nitish Kumar. So the one point where he lost was because his own erstwhile allies were against him. And you could see the slight that he got from Chirag Paswan was actually a backdoor maneuvering within the Gadbandhan itself that stops. But that doesn't mean that he didn't focus on governance. Even from 2020 until now, even though he's had poor health. Just to take on what you said about cycles, we used to cover him at that time, and the brilliant thing about it was that really showed his acumen. He didn't give a cycle, he gave cash. And we asked him, but you know that cash, he said, no, if I give cycles, there'll be a bidding, there'll be corruption, who will supply the cycles? I give cash, and there'll be a lot of social pressure. And sure enough, every family who got the money gave a cycle to their daughter. Gave cash, much less corruption. And can I just add just half a line to this? Bihar was the only state perhaps in India that didn't serve a midday meal to its own children. Now that's where he gets in what are known as Rasoiya Dedis. So mothers come in and the school becomes a site of care for young ones. So I think it's that relationship with the care economy that somewhat feminizes local state administration. Actually, taking off from that, what I also find interesting about Bihar and Nitish Kumar's schemes is that they've also sort of aimed at encouraging women, to become entrepreneurs, to start their own businesses, these self-help groups, Jivika, etc. Even now, the 30,000 or the 10,000 rupees is meant to ostensibly help them start a business, and then they'll get more money later. But on the ground, what did you see? I mean, has that really worked, for women to transform this into successful businesses, or is it a little more complicated and layered than that? I think Shikha knows much more about this, but we, DeKoder, sent people who went and talked to Gen Z. And for them, all this stuff about what has been done for women didn't seem that important, especially to the girls. They are looking for the same thing that women are that men are, or young people are looking for. Jobs. They feel that these kind of handouts are not helping them particularly. And I have another question. I mean, only 1.4 crore women got this money. That means 2.1 crore did not get this money. Are they not going to be peeved off or feel that, why have we been left out of this and why should we vote for? Let's get Shikha to answer that. Yeah, so like Bart said, 40% of the beneficiaries they are Jivika Didis. They're linked to these self-help groups in the villages. 60% have not got this. So we don't know how that 60% is going to vote. Secondly, the timing was very important. The money came into the account of these beneficiaries just before Chhat Puja. Now this is one time of the year where women go out and spend money on themselves. And in a village I found women buying saris, and although they were a bit hesitant to admit this on camera, but they did say that we are only spending a fraction of the money on buying 2 or 3 saris. So that feeling of that we have money in our hand to buy something for ourselves, whether it's clothes or, so that I think the timing of giving this money was important. And in the village where a woman is still restricted to her house or works on the little plot of land that might be there, what they would do with the money was very different from what we heard outside. Here they all said, 9 out of 10 women said we'll either buy a goat or a sheep or a sewing machine. The opposition alleges that they have been tutored to say that because
I mean, how could all women be buying goat, sheep, and sewing machines? But the minute you step out of the village, you know, the roadside, the markets, where a woman has set up a tea shop or has a vegetable cart or something like that, they said, oh, we'll spend the money to expand our business, but they always added 10,000 rupees is not enough to start a business. So that's something they were not buying at all. But you know what is, sorry. No. No, you finish up. But at the end of the day, having the 10,000 rupees in hand, It's still money in your hand. it's money in your hand, and it's very important. But that also sets the bar so low that 10,000 rupees is all that it takes. By the way, we don't call it freebies anymore. Right? But you know, Not on the other side. 20 years. I just wanted to add, but you know, prioritizing women voters, I think almost all political parties have been trying to do that. I remember when Jharkhand election, assembly election was to take place, even before that, JMM also, you know, had did the same thing, and that also started this. And Jai Lalita, of course, she started with that. So again, that also, when we were doing that analysis, it came out that JMM, it really helped them because, you know, in winning the election. In the You know what analysis. surprises me is that he's been in power for 20 years. The share of Bihar in the national economy remains 4.4 in 2001, 4.3. So economically, there are still 30 lakh Biharis migrating every year out of Bihar. I mean, you know, it's obviously it is perhaps the reminder of Lalu's Jungle Raj, but I see, you know, I mean, normally we say if you do well economically, you get votes. But, you know, nobody can say that Bihar has done well economically. Bihar or UP both. I mean, they are 25% of the country's population that's stagnating, yet the people keep coming back into power. Right. Is it caste? Is it incentives like these? A lot of people, is there anti-incumbency? Yeah. And we looked at the figures, and there's no anti-incumbency any longer. In fact, in Bihar, there's a little bit of pro-incumbency. In the last 20 years, 60% of governments, 60% of the time, the government's been voted back. Earlier, before 1977, here it is. Latest, that's 2002 to 2020, 60% of so moderate pro-incumbency. Earlier than that, 33% of governments were voted back. In other words, 67 were thrown out. That was real strong anti-incumbency. And before that, just post-independence, the euphoria of being independent, 100% of governments were voted back. Strong pro-incumbency. But the latest shows that there's no real anti-incumbency in Bihar. And that every party that wins promises something to women before the election. You look at the last 3-4 elections. Right. And of course, the financial consequences of that we will see sometime or the other, particularly, say, Karnataka or Maharashtra, where the schemes are ongoing. You've given things. And in Maharashtra, they've had to actually walk back on some of the stuff because particularly because some men were also involved. Reality hit also. Reality hit. Well, counting is actually going to start in another minute or so. And Baj, if I could ask you that question that we always ask when counting begins at 8, postal ballot or EVM? How long postal ballot? Last time I remember from the last election, we covered postal ballots actually carried on for quite a long time. It was well into 9:30 before you actually started getting any leads from the EVMs. So I don't think Bihar is going to be much faster. So we shouldn't expect. The number of booths have been increased. At 1200, they have a cutoff, and they've made many more new booths. So not just the postal ballot. I've been adequately warned it's a long day. But they open the boxes at 8. Yeah. And there are probably a couple of thousand postal ballots. It takes an hour to count them. Yeah. I mean, the Christo education is that bad that one can't count ballots. But that is the eternal debate that we have. I believe we are also joined by Manish Kumar. Manish, from the hero of these Patna. elections. His coverage has been absolutely outstanding. It's in his DNA, and for once in his life, he worked hard. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रॉय, आप हमेशा काफी जेनरस रहते हैं। उसका कारण कोई दूसरा है, मैं ऑन एयर नहीं बताऊंगा। लेकिन ये बिहार का जो चुनाव है, ये कुछ कई सारे कारण हैं जिसके कारण डिफरेंट है।
पहली बार एक चीफ मिनिस्टर हैं। एनडीए ने इस पूरे चुनाव के दौरान हमने पहली बार देखा पिछले 30 सालों में जो रूलिंग पार्टी है उसने आज काउंटिंग हो रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया। जो चीफ मिनिस्टर हैं और शायद जो एग्जिट पोल के जो रुझान है उसके हिसाब से फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पूरे चुनाव के दौरान एक भी मीडिया वाले से एक साउंड बाइट भी नहीं दिया। और इंटरव्यू कौन दे रहे थे? वो थे होम मिनिस्टर अमित शाह। ये सब बिहार के चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बिहार के चुनाव में आज से पहले कभी भी चुनाव के दौरान महिला वोटरों के खाते में पैसे भी नहीं गए। ये पहला आप कह सकते हैं कि एनडीए के लिए सबसे महंगा चुनाव, करीब 30,000 करोड़ के आसपास जो है लोगों के खाते में पैसे गए। तो लेकिन उनका ये कहना है कि ये वन ऑफ था। हमने महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक से और मध्य प्रदेश से लेसन सीखा, जहां पर जो वादे किए गए उसके कारण जो स्टेट का फाइनेंस है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ, एडवर्सली इंपैक्ट हुआ और उसके कारण डेवलपमेंट अफेक्टेड हुआ। लेकिन ये जो बिहार का मॉडल है कि चुनाव के दौरान आप खाते में 10,000 डालिए, अगर ये सफल हुआ तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कई सारे स्टेट्स में इसे रिप्लिकेट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2015 और 2020 इन दोनों चुनाव में आप देखेंगे डॉक्टर रॉय, तो बिहार के बारे में जो एग्जिट पोल हुए, अधिकांश एग्जिट पोल जो है वो गलत साबित हुए, वो 15 में भी और 20 में भी। तो देखना यह है कि इस बार कौन सा एग्जिट पोल जो है वो सटीक बैठता है। निश्चित रूप से एनडीए के लोग जो हैं इस बात को लेके काफी ज्यादा रीएश्योर्ड हैं, आश्वस्त हैं, अपनी जीत को लेके थोड़े से कॉन्फिडेंट हैं कि महिलाओं के खाते में जो पैसा गया, उनका जो टर्नआउट रहा वो उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन उनके अंदर ये भी चिंता है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसका जो टर्नआउट बढ़ा है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के फेवर में गया है, और साथ ही साथ जो महागठबंधन के द्वारा वादे किए गए 30,000 रुपए उसने कहीं ना कहीं महिलाओं को एक डिलेमा में भी रखा। और तीसरी बात यह है कि 2020 के में महागठबंधन में जो दो नए एलाइज आए, मुकेश सहनी और पान पार्टी के आई.प गुप्ता, उनका वोट भी उनके ट्रांसफर हुआ है। इसलिए बीजेपी हो या जेडीयू, उनका यही मानना है कि रिजल्ट जो है वो शायद लैंडस्लाइड अगर नहीं हो तो ये काफी क्लोज भी होगा। और बिहार का जहां तक काउंटिंग है, मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर दूं कि इस बार चुनाव आयोग ने एक नया डायरेक्टिव दिया है कि अंतिम के 2 राउंड के पहले आपको पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो पूरी करनी है, यानी कि थोड़ा सा जो पूरा काउंटिंग का प्रोसेस है थोड़ा स्लो भी चलेगा। लेकिन देखना यह है कि आज चुनाव आयोग, क्योंकि महागठबंधन के नेता ने कई सारे चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए हैं, तो चुनाव आयोग आज दिन भर जो है। मनीष, एक सॉरी टू इंटरप्ट यू मनीष, हमारे साथ योगेंद्र यादव अभी जुड़ चुके हैं एंड जस्ट लाइक टू वेलकम योगेंद्र यादव जस्ट एज काउंटिंग हैज स्टार्टेड इन बिहार। योगेंद्र यादव, you know, your thoughts firstly, why is this Bihar election, as somebody asked me last week, why is it such a big deal? What's at stake? Well, for Bihar, a lot is at stake. Bihar has had a delayed and somewhat deferred transition. I would say stalled transition in multiple ways. Bihar was one of the first states in North India to begin social justice transformation from a rather feudal order towards what could have been egalitarian order that was stalled, reversed, and remains where it was. So the election in Bihar are important because they could possibly pave the way for it. Second, the transition towards Sushasana, good government, which is what has been talked about in Bihar for long, that is also stalled because Mr. Nitish Kumar's government initially brought about big changes in Bihar, brought about infrastructural changes in Bihar. Over the years, that has slowed down because a government that feels that, well, you really don't need to do very much to earn people's votes. Will that change? That's important. I'm not sure that may happen because the problem with Bihar has been that a certain settled, somewhat frozen social equation has come in the way of making political transition. I do not know if that equation is beginning to change. I'm unsure of that, but as always, look forward to the electoral results.
Yogendra, just can you explain to us one thing which I really don't understand? Bihar is the lowest per capita income in this country by far, well below even the second lowest, which is UP. So Bihar per capita income per month, per person's income per month on average is 6,700 rupees, while let's say Telangana is 29,000. So, you don't find that kind of discrepancy of 5 to 1 in any other country. This one state to the other, and Bihar so low, but pro-incumbency, 60% of the time they vote the government back. The poorest state, doing everybody really, when you go around, everybody says things are just in terrible state. We don't want to go outside and get a job. We miss our families. We want jobs here. Terrible, terrible state. And then they vote the government back. What is that? And why is that? Thanks, Dr. Roy. So good to be with you, the Adi Guru of Indian Psephology. I've always said the best psephologist in this country. No, this time I've beaten you. I've said Adi Guru of Indian Psephology. Oh dear. Dr. Roy, absolutely. It's not just in numbers. You've traveled, I've traveled, so much of many of us have traveled. The poverty hits you in the eyes. Really does. You really travel, does. especially in North Bihar. So many children walking barefoot coming back from school. They do not have chappals. You look at what's available in shops, and you can see that much of the fake stuff is being sold, that it's actually very low grade stuff that's available. The poverty is everywhere for you to see. So one simple question would be, why is it that democratic politics does not become a vehicle? Bihar, in a sense, is almost a textbook example of how mass poverty can coexist with mass enfranchisement with somewhat functioning electoral democracy. To my mind, and what is most shocking, Dr. Roy, again, all of us must have experienced, is how low people's expectations from the government is. You ask someone, अच्छा कुछ विकास हुआ? हाँ, 10 साल पहले सड़क बना था यहाँ पे. What about schools, hospitals? नहीं, सरकार थोड़ा करती है ये काम. So there's actually very little. This is shocking part of it. The very low equilibrium of demand and supply of governance. And for that, of course, the political establishment of Bihar must be blamed. To my mind, what has happened, that's what I was hinting at in response to Nidhi. There is a rather frozen social equation that has come to be in Bihar. Once what I call the social revolution began in Bihar in 1990 with the rise of RJD, and then its very poor record of governance in the second and third regime. After that, Bihar has gone into as I said, initially Mr. Nitish Kumar brought in development, changes, infrastructure. But with the passage of time, it has now consolidated into a social bloc, specifically a bloc of caste and communities, where there is not much change that is taking place. And personally, I didn't see much change in this election either. So there is a caste community bloc, and overlaid upon that is a gender issue, is a gender slope, which, as you have rightly pointed out, has made a huge difference. And that makes almost impossible for any other issue to come up and trump. If we recall, Nidhi, just for 1 second, if you recall, 2020 was an election that took place in Bihar just after the pandemic, just after the country and the whole world witnessed people walking back to Bihar. And everyone thought that that would be reflected. But no, it doesn't, because politics is not political alignments are so frozen that they are not amenable to changes, immediate changes by issues
and by perceptions of governance. It reminds me of what happened after demonetization and UP, which was then swept by the BJP not long after. But, just quickly, we have a lot of leads coming in already. So, 15, not a lot. No, that is a lot. For the first 5 minutes, 5-10 minutes. Tarapur that came in is the Samrat Chaudhary's seat. Right. BJP But chairman. Yogendra, information on leads in 10 seats with probably all postal ballots. 10 to NDA, that's 11 now, a gain of 3. And the RJD, Congress, the Mahagathbandhan, 4, down 5. Postal ballots, but certainly worrying, wouldn't you say, Yogendra, for the Mahagathbandhan? Into these leads in the first 10 minutes or so. But my overall sense is that this is going to be tough for Mahagathbandhan for some very simple reasons. Now the elections are over. I must put it on the table that I am part of Bharat Jodo Abhiyan, which campaigned against the BJP in this election. But the elections are over. We are analyzing. And let's look at the basic. To my mind, the simple fundamentals of Bihar politics are such that the NDA is a larger political coalition. While last time the election was very, very close, but that is because one of the major allies of NDA was outside. If you calculate them by today's alliance structure, the NDA is almost 4.5 percentage point bigger than the Mahagathbandhan. In terms of social coalition, which is what I've been talking about, Mahagathbandhan draws upon a core of Yadavs and Muslims, which are about 32%, and a very tiny auxiliary of Ravidasis and Mallahs and others, which are 8 to 10%. So about 40% is the pool from which they draw their votes. The NDA, on the other hand, draws upon something like 50%. Their core is smaller, about 28%, the upper caste, Kurmis, Paswans, etc. But they have an auxiliaries of EBC, which is nearly 20%. So they have a much larger social base, and on top of that is the inclination of women cutting across caste towards the NDA. So in that sense, it is a harder task for a Mahagathbandhan. The only way the NDA could be defeated is by a popular wave of anger and resentment against the ruling party. There was an element of that, but it wasn't very strong. Right, walking around, when we talk to people, the young people of Bihar definitely wanted badlav, badlav, badlav. But if you look at the, postal ballots or the leads in so far, one surprise compared to all exit polls is the Prashant Kishore's Jan Swaraj party is doing well. Yeah. 3 seats. It's got 3, is leading in 3 seats, which is, most exit polls said at the end of 200, all the seats being counted, 243 seats, he'll get 1. Here he's already leading in 3. That is very different to the exit polls. But exit polls can be wrong. Postal ballots. But Dora wouldn't know that. You don't know how to get it wrong. Saheem's job. Prashant Kishore himself has said that I'll either get less than 5 or over 20. So, sounds a bit like you. Did you learn from you? No, but I could either do this or that. No, he's saying either be wiped out or I'll do very well. But in postal votes, he should do better because he's reaching out to the social media people rather than the voter in the village. That's Yogendra, this election has also, taken place in the backdrop of a huge controversy over the revision of electoral rolls and the Election Commission's role. Rahul Gandhi held a long yatra in the run-up to these elections in Bihar. How do you think? And at the end of the day, neither side's fears were actually, they didn't seem to really materialize into much because the EC's claim of weeding out infiltrators didn't turn out to be true, and there didn't seem to be any sort of thing from the other side either. But how did that play out on the ground? Did this whole vote chori campaign, you think, not really resonate with people? To my mind, vote chori campaign has resonated. Unfortunately, it has dented the reputation of the Election Commission. And I must say, Election Commission hasn't done very much to improve its reputation.
I heard Manish talking about that transfer of 10,000 rupees as a clever political move. The one thing that we must remember is that Nidhi, all this happened at the time when the model code of conduct was very much in operation. Right. The money was being transferred at that time. This is something similar moves Election Commission has prevented in other states. So Election Commission role continues to be rather unfair, increasingly doesn't look like an empire which is sort of overseeing the game. Did it translate into an electoral issue? Did it translate into an issue which would work more towards one party or another? I'm not sure because that Election Commission's role itself was seen through partisan angles. Some who thought, "Theek hai, ho gaya, doesn't matter," but others who thought, no, there was a grand conspiracy behind that. But I do believe that SIR in Bihar is the beginning of diluting the universality of the universal adult franchise. Although the Election Commission was stopped in the track by the Supreme Court. But do remember, in the last instance, 44 lakh names were deleted, taking everything into account. Assuming that 3/4 of those deletions were legitimate, even then we are looking at about million plus deletions, which are doubtful. And if this exercise is carried out in the rest of the country, that seriously is a threat to the quality of democracy, irrespective of its impact on electoral outcome. Just a quick word from Baj. So we've got about 14 first rounds coming in. Most of them the parties are holding, but Prashant Kishore seems to be picking up 2 seats at the moment on the 14 first rounds. Yeah. Wow. Manish Kumar has a question for you, Yogendra Yadav. Manish, go ahead. योगेंद्र जी, एक सवाल आपसे था कि SIR पे आपने इतना कंसोलिडेटेड या कोऑर्डिनेटेड आपने एजिटेशन किया, लेकिन चुनाव के समय में ये मुद्दा जो आपके प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनके भाषण से गायब था और उसका इको भी ग्राउंड पे बहुत कम देखने को मिला। हालांकि दूसरे राउंड में जो बॉर्डरिंग एरियाज में, खासकर सीमांचल में जो वोटिंग हुई, उसमें यह कहा गया कि SIR के डर के कारण इतना हाई परसेंटेज है, लेकिन ये आपका मेन पॉलिटिकल कैंपेन या आपके कैंपेन में इसका इको क्यों नहीं सुनने को आ रहा था? मनीष भाई, आपकी बात सही है। हालांकि वो मेरा कैंपेन नहीं था, मतलब महागठबंधन का कैंपेन था, हम तो बाहर से उसको सपोर्ट कर रहे थे। ये बात सही है। देखिए, पहला एक तो कि जितना मेजर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होना था SIR में, वो 2 चरणों में होना था। पहले चरण में तो हुआ, 65 लाख वोट काट दिए। दूसरा चरण जिसमें अगर कागजों की कागजात जांच होती और इसी अपने नियमों के अनुसार करता, तो कम से कम 1-1.5 करोड़ वोटर और कटने थे। वहां पे चुनाव आयोग रुक गया क्योंकि लगा कि सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाएंगे, 65 लाख पहले कट गए हैं, बहुत बदनामी होगी और इलेक्शन का इशू बन जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन रुक गया। जिसकी वजह से एक साधारण गांव में जो इंप्रेशन पड़ा वो ये कि हाँ, कुछ लोगों ने फॉर्म भरे नहीं, उनका नाम कट गया है, लेकिन वो जो था कि भाई टारगेट कर करके चुन के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वैसा इंप्रेशन बना नहीं और वो हुआ नहीं जो टारगेटेड था। उस वजह से उस तरह का रिजेंटमेंट नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं हमारे कैंपेन से ज्यादा ये जो वोट अधिकार यात्रा हुई, उसकी वजह से चुनाव आयोग अपने उस बड़े मिशन में नाकामयाब रहा। चुनाव आयोग रुक गया वो करने से और उस वजह से वो इशू नहीं बना। तो वो तो अच्छी बात है कि इशू नहीं बना। चुनाव के अंदर चुनाव आयोग क्यों इशू बने? इशू तो बनना चाहिए जनता की मुद्दे, जनता की दुख तकलीफ। Yogendra, Manish, just look at this data now, which is round leads, not postal ballots. And the NDA has got 14, that's a gain of 2, MGB 8, that's down 3, and Jan Swaraj Party 2, of course it didn't fight before, so it's a gain of 2. So this is now not postal ballots, and still the NDA is winning 14 out of 24, a pretty good strike rate. Sorry, carry on. Yeah, Dr. Roy, I just wanted to say one thing about, yeah. Sorry, please go ahead, Manish Bhai.
ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है और पोस्टल बैलेट जो है अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन पोस्टल बैलेट का पूरा काउंट अभी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि 9 बजे तक जितनी भी काउंटिंग हो जाएगी पोस्टल बैलेट की, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पोस्टल बैलेट का जितना बच जाएगा उसे Manish, just to clarify, these are round leads. We excluded postal ballots. These are actual EVM counting. And the strike rate on round leads is 69% for the BJP at the moment. That's, I guess, 14 out of 24. So, really... That is from the 2020 result, not from adjusting past one. No, right. Sorry, carry on. So these are rounds. We are separating rounds from postal ballots, actual counting. Yogendra, go ahead. It's very important, Dr. Roy, that we can do the separation because that has been a problem. As you know, when we were doing it, we would always be confused about whether it's round lead or whether it's postal ballot. Right. The only thing that surprises me is 2 seats of Jan Swaraj, where Jan Swaraj appears to be leading in the round lead. I would be surprised, frankly. I thought Prashant Kishore's hard work, his political astuteness, did ensure that Jan Swaraj's name was registered throughout Bihar. Not in a single village, people did not hear the name. I did think that Prashant Kishore managed to influence the language, the discourse, the issues that people were talking about. But I did not feel that in the last instance, he managed to hold on to that, especially after he announced that he was himself not contesting. And after the distribution of tickets, I thought the potential voters shrunk very, very rapidly, as it always does in a first-past-the-post system. And I thought that finally he would be struggling to get even a handful of seats. So I'm a little surprised with those 2 seats that we see right now. I agree. When we went around, yes, people, as you say, were aware, but very few said they would actually vote for him. So this is... and the exit polls didn't say this at all. So 3 at the moment. But you know, there has been, and since we love discussing conspiracy theories, Yogendra Yadav, there's been a lot of speculation about the fact that Prashant Kishore set up this party. He only actually launched it a year ago, then contested these elections. And who was he meant to hurt? Who put him there is the conspiracy theory, isn't it? Yeah, I know, Nidhi, there's been a lot of, politics is all about conspiracy theories. And the trouble is that we do not have good explanations for unintended consequences. So we all fall back on conspiracy theories. Many people have said that Prashant Kishore was a B team for the BJP. I personally, while I must again confess that I campaigned against him, I personally felt that he was his own A team rather than B team of anyone else. The support that Prashant Kishore drew. Here's something which will stimulate your psephological mind. We looked at seats that swapped, either gained or lost by either side, not held, because you can't tell. When we said to swap, what was the swing needed to a seat to change hand? And we now take the averages, only rounds, no postal votes. And at the moment, it shows a plus 4% swing to the NDA. And if that 4% continues, it could win 186 seats. I mean, that is, of course, it's very, very early, and this swing may not be plus 4 all along. But you would get the point as a psephologist, when a seat changes hands, you can work out what was the swing needed for it to change hands. So this is a net of that. That's significant. I mean, even at this stage, I don't know how large the sample would be and how many constituencies are we drawing it from. So small sample, but the fact that it's leaning towards NDA, the plus itself, irrespective of the number that you put on plus, the fact that it's a plus sign for NDA is itself significant. So for me, it's more important than the number of seats that we are looking at right now. Just to come back to Nidhi's question. This is plus after taking the new alliances into account. In other words, this is looking at 2020 with Chirag Paswan
with the NDA. So actually, already the vote was higher, and now another 4% on top of that. Absolutely, that's important because in 2020, on the face of it, NDA and Mahagathbandhan were tied in terms of vote share. But if you look at them in terms of today's coalition, then actually NDA has a 4.5% advantage over Mahagathbandhan. It's a larger political coalition. And if they have any plus swing over and above that, that would certainly be more important. That would be a very positive sign for NDA. Just to get back and complete that question that Nidhi had asked, I thought of Prashant Kishore always as his own A-team. What raised eyebrows, of course, in Bihar was the kind of resources that he could amass. And frankly, no one in public has heard a good explanation for where the resources came from. Though it's not clear that they were necessarily from the BJP. I thought Prashant Kishore's support was of two kinds. One was support for Prashant Kishore as person, as party, for the kind of issues that he was raising. That was not necessarily from Mahagathbandhan supporters. In fact, I often felt that most of Prashant Kishore's vocal supporters tended to be a little more NDA than Mahagathbandhan. The second component of Prashant Kishore's vote was the votes that his candidates would draw personally. In that, there was an element of targeting of Mahagathbandhan. But in the last instance, if the vote share is about 4 to 5%, which is what exit polls are saying, I would not say that Prashant Kishore, this 4 to 5% damage that he caused, if you call it damage, it damaged only one party or one alliance in a big way. But Yogendra Yadav, again, looking at these numbers at the moment, and this could potentially be a landslide win then for the NDA. Having supported the Mahagathbandhan's campaign, when you look back on it now, what could they have done differently? Because if you say that in Bihar it's all about social alliances and social arithmetic, which is in a way set in stone, then does that not give anyone hope in hell? Very quickly, Nidhi, Saharsa, which is called bellwether seats, it's been voted the same as the winning party for the last 11 out of 11 elections, and BJP is leading there. These bellwether seats are a bit dicey to follow, but just out of interest. Sorry, carry on. Please, sorry, just asking Yogendra about the Mahagathbandhan's campaign and what could have been done differently. Yeah, though I'm not much of a proponent or supporter of the bellwether theory, but I do take swings very seriously. The swings I take very seriously, and just already showed something significant that we should look at. Yeah, but it's too early, Nidhi, to speak of a landslide or anything of that kind. But yes, as I said, right, look, we somehow tend to imagine that every election is decided towards the end in the last 1 week or 2 weeks. But there are elections which start with a big advantage to one of the coalitions. And I thought this election actually started with a big advantage for the reasons that I mentioned. Could something have been done? Yes, something could have been done, to my mind. The two big things that were needed was shift in the social coalition, because do remember, Mahagathbandhan did not have in its coalition a significant proportion of the EBCs. So yes, they get the VIP party and the I.प, but other major parties representing the EBCs could not be shifted. So this is, if a Bihar election goes the NDA way, it would go for reasons which were very, very well known and could easily be anticipated. Number one was the EBC issue. Number two was the inclination of women voters. And on both these, could Mahagathbandhan have done better? I think they could have done much better. I think, and also the issue of poverty, the issue of migration, the issue of quality of infrastructure, issues that Prashant Kishore personally raised very well. Could Mahagathbandhan have raised them better? I think they could have raised them better, especially it's not just talking about it, but appearing to be credible carriers of possibility of change.
That is something which could have been done better. And these are things you don't do just in the last 15 or 20 days of elections. These require more long-term sustained work, which may not have happened. But as I said, it's too early to speak of which way the results would go and whether it's a landslide or not. If this holds, but Baj is going to update us on how counting is going. The interesting thing is that Mahagathbandhan is losing seats in the Patna region where it did very well. It got almost 1/3 of its seats in that area, and they're down 5 already. So that's quite a big loss if this carries on. That's a change, yeah. But it's interesting. Just wanted to ask you, Doc, that when you all traveled through Bihar and this whole Jungle Raj charge that kept being, labeled against Lalu Prasad's old government, how much did that really resonate with voters, particularly Gen Z? Younger With vote. Gen Z, not they very don't know much. that either. Not very much. They heard about it. What resonated with them was jobs. Gen Z, it's really women versus Gen Z. And Gen Zs are much smaller, especially male Gen Z, compared to about 47% of the population, or the electorate was women. And they were uniformly for Nitish. And I mean, it was 10,000 rupees. Definitely made a huge difference. The Patna loss is being offset by in Darbhanga, the NDA is losing more than, it's NDA is gaining everywhere, but couple of places losing. One is Darbhanga, where they were very strong. They had 17 seats, they're down 7. That's a huge thing. That's huge. That's the traditional stronghold of the RSS as well. So and the MGB is up 6, yeah. What does that tell you, Manisha Prem? Why has possibly Darbhanga gone this way, or is going in a certain way? It's a huge surprise for me, really. But I would say that the BJP has learned the lessons. And the lesson is that in the Patna and the Magad region, they seem to have tightened up their belt. And the great victories of the MGB in this region came in its alliance with the left parties. Remember, it's a CPI-ML that did very well, even in the erstwhile Lok Sabha elections in the central and south Bihar region. This time around, the BJP doesn't have the ideology, but they've perfected the caste equations. They've looked for an alliance. Raj Ballabh Yadav, an erstwhile ally and strongman of the RJD, is now with the BJP in the Nawada constituency. Rajbanshis, for example, Kushwahas, they're not doing so well. So I think on the Mahagathbandhan side, not projecting their Kushwahas, who led them to victories in the south and central Bihar, not projecting as much. I mean, Dipankar Bhattacharya, Tejasvi's appeared together with, but I think there's much more that could have been done. Tejasvi is not seen campaigning with women leaders of this party or of the left. So I think if women votes were to be taken, if EBC votes were to be taken, I think his campaign, he didn't have a record of governance. So his campaign needed to be much more rainbow and much more embedded in the social coalition. Just thank Yogendra Yadav for joining us, because he has to go. And one last thing, Yogendra, I just want to show you the swing, because you'll get that. We have now 100 seats where we've got round information, and the swing now is no longer 4% to the BJP or NDA, it's 1%, but that's over and above 2020, including Chirag Paswan. So the kind of forecast we're talking with, a 1% swing is 160 to 170 seats. A 1% swing, again, early, I think just first round, but as you see, from 4% to 1% with just a few more rounds being counted. Just to get your psychological mind working. This is the most important piece of statistics. This is the most important piece of statistics we've seen so far. I mean, we have the number of seats and all kinds of analysis going on, but as you know, what really matters is vote swing analysis. Now, what you're saying is that we have data from more than 100 seats, and the data is not of ballot papers. The data that we are presenting here is data based on actual round counting. Yes. Early round doesn't make a difference because these are random places. There's no specific pattern as to which would be the first booth being counted in round 1. So what we are looking at is a decent random sample. And if it's, whether it's +1 or +2, the fact that it's plus, and plus is over and above not just 2020, plus is over and above the current coalition, which already places NDA in an advantage of something like 4 percentage points.
Right. That clearly is a signal in favor of NDA. There is absolutely no doubt based on this. So far, so irrespective of the number of seat leads and so on and so forth. Correct. This is perhaps the most important signal that we have, that things are beginning to swing in favor of NDA, and this could get better than it was in 2020. Right. Thank you very much. And you have to come back, Yogendra. Sure. I know everybody wants you everywhere, but See you later. Very happy to be with you. we will throttle you if you don't come back. You have every right to. Yeah. No, the point that Dorab made, that Darbhanga seems to be going the other way, at least till now. Darbhanga sees very large-scale migration. Now, this time, unlike 2020, when the elections were held before Chhath, so the migrants came for Chhath, but they didn't come for the election. This time, the elections were held after Chhath Puja. People have stayed back. So maybe the migrant vote, it depends on whether they're voting for change or they are voting because they're back in their families, they're voting, according to on caste or community lines or whatever it is. So I think the migrant vote could possibly... That's a good point, Manisha. I just think that I would, and it's a hypothesis, whether the vote transfer of the JDU to the BJP has happened that effectively in that region or not. And I would say as we progress through the day, there's hope for great deep analysis, and that will be in the regional pictures that emerge. See, Magad, Shahabad, Patna, the BJP had not done well. And what we get the information from here is that they're doing well in Patna. And on the other, in fact, remember in Digha, for example, they have a very good candidate in Divya Gautam, who's the sister of, the late Sushant Singh Rajput, the left parties, etc. So Shahabad and Magad for the BJP, and Darbhanga and the Tirhut region if the MGP does well. Manisha, just have a look at this graphic. The NDA, actually the BJP is only doing a little better. It's the JDU that's doing much better than last time. That's because the NPR is separate. Sorry? Paswan is not hitting them as he was doing last time. Right. But I mean, so that's to the go up to modification. 48. Who was the strongest critic of the JDU in 2020? The BJP. The BJP's urge for power, therefore, has been modified. The BJP has realized that their road to victory in Bihar lies through an alliance with the erstwhile socialists. And that's a hypothesis that will probably hold till the very end. We're also joined by Santosh Singh, Senior Assistant Editor with the Indian Express from Patna. Mr. Singh, thank you very much for being with us. How do you look at these leads so far? Abhi to it's only been not even 40 minutes. But what's your takeaway from this so far? So far, it is along the predictable lines. I would not go too much into the numbers so far. Let us wait for some more time. As Manisha ji was saying before, that they are also discussing. It was a closely fought election. Region-wise, it has different dynamics. Shahabad has different dynamics with Lanchal has, with speaking some other language. So NDA did start with advantage of arithmetic advantage of 5%. But I think BIP, Vikasshil Insan Party, and Indian Inclusive Party of I.प. Gupta, they were the good addition to the Mahagathbandhan. So if they could bring the battle closer, I think these could be the two factors they can bring the battle together. We had expected that Prashant Kishore would be a weak factor. He can make some kind of triangle. But this time, I don't think he was able to make a triangle. It was about likes and views. It was social media hype, which did not resonate with the ground. In fact, I was at his village, Konar village of Rohtas. Once I was out of his paternal house, even there were dissenting voices in his village itself. So, of course, everybody welcomes the kind of politics he wants to do, but it will take time. 3 years is too little a time in politics. I think Prashant Kishore is an investment in Indian politics. I would not say just Bihar politics, in Indian politics. It would take time. I had once asked him in my recent interview, how could you challenge the deeply entrenched caste system of the state?
Then he got irritated with the question. You media guys have been asking this question over and over again, and he didn't have any Right. answer. Santoshji, can I ask you also, the JDU in particular in this NDA alliance, when you look at the party-wise breakup, seems to be doing better than last time. Certainly, they had fallen to around 44 seats in the last election. क्या बदला 5 साल में for Nitish Kumar? Even I sense so. Yes, that's very strange. Nitish Kumar, in much better health last time, was taken as a liability, and now much worse health is taken as an asset. He shouldered the entire election. He was the face of the election. When campaign started, people would have thought that it would be Prime Minister Narendra Modi and Amit Shah would be in the NDA campaign. But it was Nitish Kumar. He attended 84 rallies, 84. Just one sort of at this age. So I would say it was the social and political capital of Nitish Kumar, which added up to this election. I would say that was the biggest factor. Right. Of course, the overriding woman factor we have been discussing all along. The women voters, see the mobilization of Jivika. Jivika has become an apolitical force of JDU. I can say that safely. Right. Let me just get Geeta Bhatt, on this question of Nitish Kumar, and there's been so much speculation about his health. As Manish Kumar was saying earlier, he didn't address a single press conference, didn't do a single interview. He's been doing, his campaign. But I guess if these results hold and the JDU does end up doing much better than the BJP, that explains why the BJP was also reluctant to fully go out and, perhaps say that they would project a chief ministerial face. They were careful in how they projected him. Yeah, I think on the contrary, time and again the question is coming that the NDA was not projecting Nitish Kumar, as a chief ministerial candidate. However, Home Minister also and many other political leaders, they have time and again said that we have gone into elections in his leadership time and again. But Amit Shah on the also contrary, said we'll elect the chief minister later. Yeah, so I mean, if you say officially that process has to take place, it is. But on the contrary, if you look at Mahagathbandhan, where the chief ministerial projection of Tejasvi Yadav, that needs to be questioned, and the kind of projections that are coming right now, that also reflects the kind of coalition that was being carried forward by Mahagathbandhan, the Congress, and the friction which was there between RJD and the Congress party, and how Mr. Rahul Gandhi did not turn up for when when Tejasvi Yadav was being announced as the chief ministerial candidate, and when the photograph of Mr. Tejasvi Yadav was all over in the press conference, Mr. Rahul Gandhi was missing over there. So actually this also needs to be asked, that the Mahagathbandhan's coalition was right from the beginning. When Yogendra Yadav ji has left the program, but I really appreciate how he can defend what was being when the vote adhikar rally was going on. Actually, you raised some very, very valid points, which we'll get into, I think, once it becomes clearer. Nidhi, I just wanted to finding something interesting, which will be a little sobering for the BJP. You're seeing that they are leading overall. If you look at the 127, now that looks huge compared to 82. But if you look at postal ballots, they're doing much better. They're winning 2/3 of the postal ballots. But if you look at the rounds, they're winning only 55%, which is just above last time. So as rounds come in and postal ballots get eliminated as a counting, they may be tempered a bit. We're looking at 127 is postal ballots plus rounds. But rounds, they're not doing so well. Still doing well. They're still winning, but not. One small point that I can already see in the overall leads, it's the RJD that seems to have the largest. Here's the thing. Just have a look at this. Postal leads, NDA 52 out of 80. But rounds 1 to 5, 75 out of 136, which is a lower proportion.
Yeah, so the RJD... I'm just going across to Vivek Kumar, who is the spokesperson of Prashant Kishore's Jan Suraj party, joining us this morning. Mr. Kumar, thanks for being with us. I'm sure you're pleased with how it's looking for your party so far, with the lead in 4 seats. We don't know where you'll end up, but your thoughts? Thank you so much. Of course, we are not pleased, but we are still, I think, early days of the time. Still, there's a long way to go. But as we have said, what we could do in last 1.5 years, and we have done everything possible to go out and take out. Mr. Kumar, I'm so sorry. We can't hear you very clearly. We're just going to try and fix that and come back to you in the next couple of minutes. But I just wanted to get back on a point that Manisha Priya made again. When you look at the party-wise breakup, the RJD is actually doing, I mean, in the opposition alliance, they're doing pretty well so far, and the Congress is already down, I think, some 16 from last time. In fact, I want to go from Manisha to Manish. Manish, what's your reading so far? Dr. Ray, it is on the expected lines, क्योंकि महागठबंधन में RJD was always supposed to do better, और जहां तक NDA है उसमें JDU का परफॉर्मेंस सब मान के चल रहे थे कि बीजेपी से बेटर होगा। उसका कारण है ना केवल 1,60,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया, बल्कि उसके अलावा 40 लाख ऐसे लोग हैं जो ओल्ड एज पेंशन या विडो पेंशन या कोई और पेंशन मिल रहा था, जिनकी राशि 400 से 1100 की गई थी। इसलिए जेडीयू का परफॉर्मेंस इस बार थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा बीजेपी से। और दूसरा एक कारण ये भी है कि जो जेडीयू का वोट है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री, वो अपनी किसी भी सभा में, किसी भी पब्लिक मीटिंग या इंटरव्यू में उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। उसके कारण बीजेपी की सीट्स पे जेडीयू का वोट उतना ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं था। वो वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज चाहे आप महिलाओं का देखें या जो जेडीयू का कोर वोटर है वो कम हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो मनीषा प्रिया में एक बात करी थी कि दरभंगा या चंपारण में इस बार महागठबंधन का परफॉर्मेंस बेटर होगा, उसका कारण यह है कि 2020 में इन इलाकों में एक रिलीजियस पोलराइजेशन हुआ था, जो इस बार कैंपेनिंग का समय कम रहने के कारण ना कहीं रिलीजियस पोलराइजेशन हुआ, खासकर मिथिलांचल के रीजन में, और साथ ही साथ एक लास्ट टाइम फर्स्ट फेज के बाद एक कास्ट कंसोलिडेशन आरजेडी के खिलाफ दिखा था उत्तर बिहार के इलाकों में या सीमांचल के इलाकों में, वो भी इस बार नहीं दिखा, जिसका फायदा इस बार महागठबंधन को सीमांचल में भी और मिथिलांचल में भी, मिथिलांचल में कई सारे जिले हैं वहां इस बार कैंपेन के दौरान देखने को मिला, और साथ साथ वोटिंग के दिन भी उनको अच्छी खासी संख्या में पिछले बार के नुकसान को वो कंपनसेट कर पाए। मनीष, ये जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है अभी 4 सीटों में लीड कर रही है, डज दैट सरप्राइज यू एट ऑल? क्या ये भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे है? निश्चित रूप से निधि, देखिए जब चुनाव होता है, प्रशांत किशोर का जो पूरा हाइप था वो डिजिटल मीडिया के ऊपर बेस्ड था। प्रशांत ने मेहनत काफ़ी किया था, लेकिन बिहार के राजनीति की सच्चाई यह है कि यहाँ पर जो 11 पार्टियाँ हैं वो सब कोलिशन में लड़ती हैं और आप अकेले जा रहे हैं। तो अगर आप कांग्रेस या बीजेपी जैसी पार्टी, अगर उन्हें अलायंस में जाना पड़ रहा है, या बीजेपी जैसी पार्टी जिनके पास नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह जैसे राजनीतिक और या आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्हें नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव में जाना पड़ रहा हो, वहाँ पर प्रशांत किशोर अकेले जा रहे हों, तो निश्चित रूप से वो उनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। फिर जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव के पहले करप्शन के एलिगेशंस लगाए, उसको बाद में उन्होंने फॉलो अप नहीं किया, लगा कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो मैनेज हुए हैं, और जो उनके उम्मीदवार थे वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं थे। जो वोटर होता है वो हमेशा जीतने वाले को वोट देता है। निश्चित रूप से 5 से 6 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी होंगी जहां पर उनके कैंडिडेट फ्रंट रनर थे तो उनको वोट मिलेगा, लेकिन जो उनकी पूरी भूमिका थी वो वोट कटवा की थी। और हर चुनाव में आप देखेंगे एक पार्टी या एक व्यक्ति ऐसा होता है
जिसे जो पब्लिसिटी मिलती है वो डिस्प्रपोर्शनेट टू हिज एक्चुअल वोट्स होता है, और वही फैक्टर प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में थे। निधि। Right, Manish, we'll come back to you in just a moment, but if we just look at these numbers, Doc, again looking at the breakup of the NDA and how individual parties are doing, the BJP, okay, but it's the JDU and even Chirag Paswan's doing much better than last time. Yeah, this is a very, very important factor. Will the BJP have a larger number of seats than the JDU, and then the whole discussion about chief minister? As it did last time. It did last time too. Right. Yeah, so but it's getting closer this time. It was much wider last time. Yeah. By the way, Prashant Kishore went to all the districts and all the whatevers. Right. Most of his seats are coming from Patna. Right. 3 out of 4. Yeah. Prashant Kishore's seats are coming from Patna. Yeah. 3 out of 4, 1 is from Tirupati. And that's what Mark Badna is losing, mostly to him and partly to JDU. Partly to the NDA. But he's getting 3 of his 4 seats. In coming Patna. back to the point of chief ministership, who will it be? What will the BJP do? Will they make Nitish? Because the women are really voting for Nitish, not for anybody else, because of what he's done for the last 15 years. But will it be, at least somebody said this election is not over, it'll be over 2 years from now. Nitish may be made, then he'll switch, then will something happen. This is just a semi-final. But in the semi-final, who's going to be chief minister if this trend continues? And one should see early trends, these do change. Yeah. So, we also have to see that this time BJP is contesting little lesser seats in comparison to what it did last time, right? And they have given those seats to LJP. So, this also shows that the kind of coordination which was there in NDA alliance, it was much better. There was more coordination than the last time between JDU and BJP workers and their supporters also. That also is reflecting in the early trends. But they didn't really announce categorically that Nitish will be chief minister. No, they didn't. But almost in all the rallies, all the spokespersons who have been coming on, on the TV channels, they have been reiterating that we are, under Nitish Kumar's leadership. High command? Command said didn't say it. That's exactly what I'm saying. But in all the rallies, we'll decide later. We're fighting under him, but we'll decide Actually, later. my question is, if the BJP ends up with 15 seats more than the JDU, will they make Nitish chief minister? Will they have more seats? I think earlier also it has happened when BJP had a larger number of seats, but they made. But the situation is very different this time. His situation is different because he's not giving any interviews. People say he's not all there, and they haven't made any announcement. So rather tempting. See, Dr. Roy, the kind of the rallies that he has done, such large number of rallies. So you have the Maharashtra example where Maharashtra was won under Eknath Shinde, right? But then he was made deputy chief minister after the elections, and Fadnavis became chief minister. Yes, but you had Fadnavis had been chief minister in Bihar. You don't have a leader in the BJP who has the same stature. Does that matter? Does that matter? Remember what Madhya Pradesh happened? No, exactly. So the question is, I think it's more politics than numbers. No, I'm saying that where places like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, they picked non-entities. In Maharashtra, there wasn't a non-entity. So it's not here. There is no entity. So who will they pick? So they can pick a non-entity. They've done it before. That's what you're saying. Not when they have another guy like Nitish against them. I think only Chirag Paswan has come out from the NDA and said clearly that Nitish Kumar will be the chief minister. He's the only one who said that. Only Chirag Paswan Akshat Sonak of the Jan Suraj Party is joining us this morning. Akshatji, thank you very much for being with us. A lead in 4 seats, that's pretty good for a party that was born only a year ago. How are you looking at the lead so far? Well, thank you for inviting me on your show. See, we have been very firm since our first day that Bihar is looking for a very strong alternative which has the capacity to bring fundamental change in the
administrative as well as the political scenario. And people have been taking us seriously since day one, because we are talking about the fundamental issues of Bihar: quality education, more pension for the elderlies, palayan. So we have been focusing on issues which have been very core to the voters of Bihar. And this is reflecting in the seats today. We have been very firm of this kind of result, because a party which was formed just a year ago, had 10% vote share in the by-polls, is strongly performing in compared to the other parties today. So we are very confident, and by evening you'll see a significant improvement in the number of voters, the number of seats and the vote shares. As analysts have been pointing out repeatedly, you're up against a very difficult challenge in a state like Bihar, where caste and social equations matter so much. Prashant Kishore has been trying to break through that and speak a language that perhaps Gen Z voters, find particularly appealing. But I'm sure you would acknowledge that these are realistic factors in a state like Bihar. Caste, hierarchies, etc. See caste as one of the most predominant factors in this particular election, though it might be a criteria wherein we can segregate that whom to vote, the Janta can whom to vote for. But the core issue in this election was, who is the face of change in Bihar? We wanted to change the narrative from caste to development politics and to the issues which are core to the voters of Bihar. You have seen that in the past also, all the elections for the multiple decades have been fought predominantly on caste. It is the first election in past 30-40 years wherein the Janta of Bihar is actually winning. They have actually won before the election only. I'll give you 2 pointers on that. Firstly, we were the first party who raised the voice that the elderly pension in Bihar has been 400 rupees since past multiple decades. And it was due to our endeavors only, our struggles only. It was raised to 1100 rupees. Secondly, the 10,000 rupees which was given to the Mahila voters. We had been struggling on the ground, saying that the promise of 2 lakh rupees for micro and small entrepreneurship was not given to the people. So it is the win of Jan Swaraj, it is the win of the narrative of Jan Swaraj which kept the audience of Bihar at the center. And the audience, the voter of Bihar has absolutely won. We've got a question for you from my colleague Manish Kumar. Manish, go ahead. I wanted to ask you that, do you think that you played all your cards too early? Because Nitish Kumar and his entire government, they started giving 10,000 rupees, and besides that, they also hiked the pension money, which has really worked wonders for them. And do you think that it was a mistake to go in this election without any alliance? Going solo is not the solution. You can get some votes, but you cannot win any seat. See, your question itself answers what I'm going to tell you, that our alliance since day one has been with the people of Bihar. When you say that we opened our cards very early, because the intention was not only Satta Parivartan, the intention was Vyavastha Parivartan. A system which is plagued by the people of the bureaucracy, the incompetent leaders who are not in a position to understand the pulse of the people. Prashant Kishore ji in the past 3 years has traveled across 3,500 kilometers, 5,000 villages, and he has been successfully able to grab the pulse of the voters. And it is the give me a moment. I'll just come back to you. I'll just come back to you in a second, because Alok Pandey is with BJP leader Ashok Chaudhary in Patna at the moment. Alok, sorry, JDU. Chaudhary here with me. As you can see, he's keenly watching the election results. He's also speaking to the media, one of the few ones who's speaking early in the morning. Sir, I first want to start by asking you, I see that it appears that the JDU is individually also doing better than what it was in the last election. What would you attribute that to? No, I think this time people has voted for Nitish ji. So that definitely
BJP is doing well, and I think it will do. If you'll wait for another 2 hours, you will find BJP is doing much better. All right. So you feel that the BJP JDU alliance has worked in the state, and what would be the predominant factor for you if that is happening? No, if you see that his Nitish Kumar, the combination of Nitish Kumar and Modi ji is very lethal, and people has realized that development is the major issue for Bihar, and for that they have voted in the favor of NDA. There are those who would say, perhaps your opponents, because they're still, of course, very much in the race, that it was a kind of quote-unquote dole, a 10,000 rupee dole to women of Bihar that kind of pushed you ahead in the entire campaign for the Bihar Assembly elections. What did you say about that? No, it is not that. It is a first-time scheme. If you see the other states, they are giving 2,500 rupees per month. That can you say that that is a freebie. But if we are working on strong economy and trying to increase the financial level and financial independency of women in the state, and this is not a freebie. This is a for your this, what do you say, for starting a new economy, or starting up a new what do you say, that small industry, small. So for that they have given. I don't say that everyone will start doing that. But if 50%, even a 50% woman will do something, and he has said that, the CM has said that we can contribute to till 2 lakh rupees. So it will be a big thing in the... just an add-on question, sir. I will say, though, that I did see a lot of your campaign posters and a campaign planks, and it did emphasize on the fact that you isko lautana nahi hai. That was something that was very prominently highlighted when you spoke about this scheme. No. Then again, somebody would say that perhaps this again is a kind of freebie or dole, the thing that I'm saying. No, because the opposition was trying to say that you have to return it back. If you won't do it, then you have to return it back. That was not the idea. Idea was that it has given you, if you will spend it on your own, then you are gone. And if you start doing something for yourself and your family and for the society, and you will start giving some people some employment, then I can give you, the government will contribute till 2 lakh rupees. So it is basically increasing per capita income. So it was like that. So because we were countering the opposition rumors that you have to return it back after election, so we were doing that. No, you don't have to return it back. You have to do something. Don't spend on yourself. Yeah. Spend on something doing better for your family and the society. Absolutely. One more question, sir. So, assuming that these leads do translate into a victory for the NDA, the election was fought with Nitish Kumar as the face, perhaps, is something that we would all say. He's going to be the next chief minister. That's fully confirmed. Yeah, I think that there is no confusion about it. There is no vacancy. Nitish ji face was more strong, or after 20 years of working as a chief minister, still there is no anti-incumbency against that face. It means that the leader resides in the heart of the people of Bihar. So I don't think so there is any vacancy. One more thing I want to ask you, sir, that you see the NDA and Mr. Kumar have ruled Bihar for about 20 years now. It's a long, long time. देखिए पहले वो आर्ग्यूमेंट होता था कि गड्ढा बहुत ज़्यादा है, हम 2009 में यहाँ थे, तब नीतीश जी कहते थे गड्ढा बहुत है, उसको भरना है, बहुत ज़रूरी है. अभी तो देखिए 2025 हो गया, गड्ढा भर गया, लेकिन अभी भी जैसे कल ही मैं देख रहा था कि बिहार इज अमंग्स द पुअरेस्ट स्टेट्स इन द कंट्री. In terms of industries, you don't have too much. You may have electricity, you may have roads also. We all saw that coming up when we were posted here. But you still don't have industries. Your per capita income is abysmally low. Now, how do we go from here? I mean, you see, it's one thing to make promises. It's one thing to give out 10,000 rupees to women. How do you ensure that the state moves ahead per se as a whole, and in terms of per capita, in terms of actual income in the hands of the poorest, you can do better? What is the roadmap for that? If you first of all, on what condition? If you're discussing that you have been there for 20 years, what you have done, still this is a problem, still this is a problem. But for that, you have to realize that from where we have started. You have got a car where there is no battery, no steering, no headlight, no tires, and you want that you should win this state among the Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat. So first what you will do? First you will do that law and order,
First, you will make sure that the people from outside the Bihar, they are comfortable spending in Bihar and having a basic infrastructure. So Nitish ji has done that. Earlier, what was that? There was a 700 megawatt electricity used to be consumed in the one day. And now it is 8,800. Who has done it? There was 46% people were living in below poverty line. Now there is only 16. The 30% has come above the poverty line. So earlier there was a 7,000 rupees per capita income. Now that per capita income has increased. So he is doing it. Now we are saying that in coming 5 years, we'll give you employment. 1 crore employment will generate through industrialization. We have taken land in every district of Bihar, almost every district of Bihar. In last 2-3 months back cabinet, we have the BIADA is working, the new industrial policy has come. We are attracting, and the new industrial policy is having a employment-based rebate subsidy. If you are giving 5,000, then you are having that much of subsidy. So that's we are working on it. So it is not that people say that still we are poor. You have to realize that we are having, if you see Muzaffarpur having a population of like a country like a Denmark. The Prime Minister, the Defense Minister, the Finance Minister work. And right now our District Magistrate and SP conducts that. The population wise, we are per square kilometer, we are the most dense populated state in the world. I mean, so we are having some problem, basic problem also. Yeah, I totally agree. But some would again then say that, from the politicians, you do get a lot of these big words and a lot of these statements. It does not translate into actual action on the ground. Again, the argument is that 20 years is a long, long, long time. So if you are going to focus, if you were to form the government, what would be your two major focus areas? Say two, just two. Industrialization and increasing per capita income. That should be the main focus. Yeah. All right. Thank you so much, sir. We'll leave you to watch the results more. We'll come back to you. So there you have it. The BJP and the JDU are confident that they are the ones who are going to win, given the leads that are coming through right now. Mr. Chaudhary, very vehement, of course, that he feels that Bihar is on the development path. Of course, the statistics would say that much more needs to be done. And if the BJP and the JDU and their allies were to form the government, well, we'll wait and see how things move ahead in this state, which really needs a big development push. Alok, thanks very much. We'll be back with you soon as those leads and results keep changing and pouring in. What's interesting about the party-wise breakup, Doc, is that if you look at, let's say, the RJD's individual performance, they're doing pretty well. I mean, from better than last time, up 36, if you compare to last year's Lok Sabha elections. The JDU is up 16 from the last assembly election, but down 10 from the last Lok Sabha election. Just want to take us through that. Yeah, if you just compare with the 2020, this is the important one, that the Congress is doing appallingly badly. They're losing half their seats, more than half, and the CPI-ML Liberation is doing terribly. The RJD is doing reasonably well. It's doing better than it did in 2020. The real failures in this election are the Congress and the CPML Liberation. The Congress also so last time. The strike rate was very low last time. No, it's lower than that compared to last time. They had 17 at this stage last time, now they're 9. That's a huge drop. I think the RJD has been able to retain its score. Yes. But questions must be asked of the Congress. Which region has it done well? What has it done? Up until September 1, which is like curtains down on the pre-election phase, it was Rahul Gandhi who was being portrayed as the Jan Nayak, etc. But come electioneering, you can see that the Congress has been completely wiped out. The left parties also, they claimed that if ideologically the RJD allowed them to become the big brother, perhaps they would lead it to victories. This time around, I can see that in Tirhut, for example, apart from the core strength areas in central and south Bihar of the left, they had some influence in the Tirhut region, in the Siwan region. In Tirhut region, the CPIML not doing well. The RJD, on the other hand, gaining some of what it had lost in the Tirhut region and retaining its strongholds. So certainly many different... Actually, good points you're raising, because the key point, if the Congress and CPML just did as well as last time, this would be a neck and neck fight, not a landslide. The landslide so far, and I must say so far because lots of rounds still to be counted, landslide of the NDA or the
victory of the NDA now may not be a landslide. The victory is because of the poor performance of Congress and the CPML liberation. Make a point on, so far we still have 80 seats where postal ballots are coming in. So if you look at the seats that have been into rounds, BJP is gaining 13, RJD is gaining 19. So that's very important. Yeah. So it's not that BJP is definitely going to be the largest partner in the alliance. One of the senior leaders, Shakil Ahmed of Congress party, he resigned on 11th. Yes. Yeah, that, and he's contesting. Contesting, yes. One Shakil Ahmed, yeah. The very sorry state of affairs of Congress in Bihar. Yeah, exactly. So, Manisha Priyam, I mean, coming back to this question of the Congress, we saw the Congress, I guess every political party will haggle for better tickets, more seats, etc. But is there a complete lack of disconnect or from reality about where they stand politically? The fact that Geeta Bhatt raised earlier that if wasn't Tejasvi Yadav as the chief ministerial face, who else would it be? There was haggling over that, haggling over seats, infighting, unhappiness with the way the Bihar in charge was running the campaign, etc. So a lot of the warning signs were there. Yeah, so Tejasvi Yadav being declared the chief ministerial face comes a little late. I think the Congress lost ground as soon as the ticket distribution phase was started. A very high-pitched campaign on vote chori or voter adhikar yatra. And after that, you saw the Congress disappear completely and work in what I best believe is the agency model. Krishna Allavaru is the face of the Congress, or the name of the Congress. A new Congress chief called Rajesh Ram. So what I couldn't understand is which regions were they working in? And I could see on the other side that the BJP, which is a national party, was completely talking about fighting this election regionally. So I think the question for the Congress is to tell us which are the areas they were fighting in, which was the caste groups they were working on. What was, I mean, they weren't a left party to be known for their ideology. What is it that they actually got on the ground? So catching on to the tailcoats, they've actually pulled the RJD down. That's what it looks like. When we were talking to Prannoy Kumar, who's a candidate there, we said that, the Congress appears to be given up on Bihar. Since 1990, there is no national leader. There's of any stature. This is state from, S.N. Sinha and Rajendra Prasad and the Mishra brothers, and there's nobody at the national level, state level. Right. There is no clear leader. You can't get Rahul Gandhi parachuting in and hope it will make a difference. So, I mean, on the Chhat Ghats, for example. But even if he does, I mean, a local leader. Priyanka Gandhi, was she campaigning at the time of Chhat? We always go back and say, oh, they gave 10,000 rupees. But they gave it to the women and then timed it well around Chhat. Who was the congresswoman? Was Meera Kumar going to the women on the Chhat Ghats? I mean, campaigning for Bihar has to be done in a Bihari sort of way. Correct. Who was doing it on behalf of the Congress Congress party? They don't have anybody. In the first phase of the election, I didn't see any strong Congress campaigning. It's only towards the end when the Kosi Simanchal region comes in and you see all of them coming in. I think Akhilesh Yadav perhaps had a better campaign than the Congress party itself. The Congress performance has been appalling, and Tejasvi Yadav just now, RJD has overtaken the BJP as the largest single party. I mean, just 71 to 70. But Prannoy fought 140 odd seats versus 100 so seats for the BJP. So one small thing. It's a point of which is the largest party. Yeah. I mean, they've done much better than last time. Congress is down 50% of last time. So one small point that I want to raise is that if this time around Nitish Kumar is announced as the chief minister, which I don't know he will be or not, he will owe it to his bhatija, because Tejasvi and him together numerically are larger, and therefore the BJP has been hesitant. They've said, the best statement I've heard is, इस सीट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है भाई, क्यों पूछते हो मेरे से? So I think there is no vacancy. If the RJD does well and the JDU does well, add up the numbers. So yeah, I mean, oh my God, I have lost count of how many times he switched sides. But is that also in the realm of possibility? He won't, you pose a Kumar threat. said this to us. He said, this election, I think you mentioned it, is what's happening today is not the result. It's going to happen. No, but of course, Nitish will never walk over to the RJD. I mean, there is something which is
doesn't go down well between. With Nitish, you can say never. But that has national implications. The On JDU is a behalf key of the ally of the JDU. centre. No, but I would like to say that when we spoke to both Tejasvi Yadav and then Kanhaiya Kumar, both of them were very soft on Nitish Kumar. Doc kept asking Tejasvi, would he be, would you be open to take welcome? And he kept dodging the question. He did not say no. Kanhaiya was also very soft on Nitish Kumar. So both the leaders of the Mahagathbandhan were very, very soft on Nitish Kumar, would not give any definite answer about anything. But that has, like I said, implications for the centre, because right now the BJP at the centre relies on the JDU and the TDP to cross the halfway mark in the Lok Sabha. So there are, the BJP, I think so too. To be fair, the BJP is doing way better than the JDU. In terms of strike rate, in terms of number of seats. They're going to be the largest party, most probably. BJP, in that alliance, they'll be way ahead of the JDU. Now, when the BJP is ahead of the JDU, very tempting to have their own chief minister. Not at this But Prannoy, they were even further ahead of BJP JDU last time. Last time the gap was even larger. It's not exactly the same situation. The politics have changed. This man is not as, let me float another tentative theory. And that is the man called Nityanand Rai, most trusted by the HM who led the campaign for Bihar, also Yadav face. That could be a way of counter-checking the RJD, because how else does the BJP grow? The BJP cannot grow by cannibalizing the JDU, which is its alliance partner, but by eating into the RJD, right? Which for Manish, we have Satish Chandra Dubey, the Minister of State for Coal, joining us now on the program. Satish ji, program पे आने का बहुत-बहुत शुक्रिया. सबसे पहले आप क्या कहेंगे अभी तक जो लीड्स आ रहे हैं एनडीए का ये परफॉर्मेंस देख के आपकी क्या राय है? देखिए, बिहार कानून का राज स्थापित करना चाहता है. बिहार 2005 में ही महागठबंधन को उखाड़ फेंका था. आज निश्चित रूप से सेवा भाव से जो कानून का राज स्थापित हुआ, हर वर्ग को एक साथ लेके चलने के लिए एनडीए गठबंधन ने बिहार में जो काम किया है, उस काम के बदौलत, उस सेवा भाव की बदौलत प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी. और निश्चित रूप से बिहार में एक विकसित बिहार का जो काम चल रहा है उसमें और ताकत मिलेगा. लेकिन सतीश जी, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? अभी देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, ये बिहार आप जानते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है. उसके बावजूद भी रिजल्ट होने के बाद बैठ के सारी तय करते हैं सीनियर लीडर लोग, और लगभग तय हो चुका है कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से 2025 नीतीश जी के नेतृत्व में चलेगा. लेकिन ये तब भी जायज़ होगा अगर आपकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, अगर बीजेपी की ज़्यादा सीटें आए जेडीयू से, तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? पिछला बार आपने देखा होगा कि अधिक सीट था मेरे पास, फिर भी हमने समर्थन किया और सरकार चलाया. ठीक उसी ढंग से 2025 में भी वैसा ही होने वाला है. Satish ji, are you worried that if you don't make him chief minister, he may switch to the other side? देखिए, हमारा जो दल है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन हमेशा विकास के साथ खड़ा रहा है और नीतीश जी की छवि एक बिहार में स्वच्छ छवि रही है और एक विकास की उनकी मॉडल रही है. भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हमेशा जंगल राज को उखाड़ फेंकने से लेकर अभी तक उनके साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी. Ji, we also have Anukriti, spokesman of the of Prashant Kishore's party, joining us at this time. Anukriti, your thoughts, like we were saying, better than expected perhaps for your party at the moment, a lead in 3 seats. It was 4 earlier. How are you looking at these leads? Nidhi, first of all, good morning. Good morning to Dr. Roy. Good morning. See, the kind of narrative that Jan Suraj has set in Bihar, I think that's our major victory. Never had Bihar elections been fought on such issue-based, politics
Nobody even dared bring in Hindu, Muslim, Jat, Path. Nobody, in fact, all the other parties started campaigning in our language. Suddenly, Palayam was the buzzword. Suddenly, people who were starting trains for our guys, our people to go and become Mazdoors in Maharashtra and Gujarat are talking about Aapka beta ghar pe rehna chahiye. So this is our main victory. So, this is beyond statistics, beyond data. I'm really sorry I'm saying something that psephologists won't like to hear, but this is much deeper than just, polling day numbers. This is a rise in Bihar's glory, in Bihar's conscience, as far as, governance is concerned. Very interesting. Can you tell me what you're going to do from now onwards? Because 3 seats is a tough. You must be disappointed with that, but you must have a plan for the future, right? Yes, Dr. Roy. Dr. Roy, we are here to stay. Jan Swaraj is not going anywhere. We have our plans for, the future. So everybody has been, talking about Jan Swaraj like aap log vipaksh ki bhumika nibha rahe hain, things that the opposition should have been doing for the past so many years. You guys have suddenly come in 3 years ago. You've, roamed around the villages of Bihar, gotten to know the real issues, and are bringing up points and stuff that the government had taken for granted, that nobody will question their lack of good governance or their rampant corruption. So Jan Swaraj plans to continue doing that. Our press conferences, our kisht as installment, as Prashant Kishore calls it, they'll keep continuing. And we've had most probably one of the most corrupt regimes in Bihar in the last 40 years. Earlier it used to be Jungle Raj, Bahubaliyon ka. This is Adhikariyon ka Jungle Raj. So we are going to keep working against that. And, there are issues that are not going anywhere anytime soon, even if, sorry, yes, Nidhi, go on. No, you're articulating your points really, really well. I just had a question for Satish Chandra Dubey from the BJP. Satish ji, what is your view about Prashant Kishore? आप उनको कैसे देखते हैं और उनकी परफॉर्मेंस? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी पार्टी अपने मैनिफेस्टो लेके उतरना चाहिए। उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो लेके जनता के बीच में उतरा है, और एनडीए गठबंधन अपनी मैनिफेस्टो लेके उतरा है, महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो लेके उतरा है। अब जनता किसको कितनी एक्सेप्ट करती है, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए को एक्सेप्ट करेगी और बिहार में मजबूत सरकार बनेगी। जी, I'll just sort of take this back to the studio for a moment, and again I think now the chatter is really centered around the Congress and the left's very poor performance Really? in Bihar, because as you said, they're really dragging down the Mahagathbandhan. The RJD seems to have held its own. It's their partners, Yeah, Manisha in fact, they've Priyam. done a little better. But even in the NDA alliance, just looking at the figures, the BJP strike rate is nearly 80%, 78%. Very high. The JDU strike rate is only 67, less than 70%. But Chirag Paswan's strike rate, 29%. He's just had a terrible election. That's what I said. Yes. Chirag Paswan was And being Ham's 17% strike rate. These are non-entities. These are just flowers in the bouquet on the side to give that picture to the BJP that it's also got some toehold in the politics of the backward caste. As far as Chirag Paswan is concerned, very different from Ramvilas Paswan. He is neither considered a Gen Z leader, nor is he considered a Samajik Nyay ke Purodha. So what is his differentium? Does he stand for? Nobody understands that quite well. I think I'm really surprised by the Hum not doing very well. That would be the party of the Dalits that was there strongly with the BJP. So the BJP on its own taking up Dalit votes. Baj was saying, okay, BJP strike rate is nearly 80 and JDU is under 70. But JDU is doing better in rounds, and there's still postal ballots being counted. There's still about 15 seats to come. Only 15. By the way, So the it's other much parties lower. that's also not doing well is Oasis. Oasis done very bad. Yeah, which is interesting, Shikha. If you remember last time, there was that whole thing of him cutting into opposition votes. I think this time the Muslims have decided to consolidate their vote behind the RJD. And I think
they have been seeing, they think of, like some of them told us on the ground, they think of Owaisi, like they also said about Prashant Kishore, as vote katuas. And so I think this is especially true of the Muslims. And so I think this time they have decided that they will just go with the RJD and Tejasvi Yadav. So maybe that's why Owaisi seem to be losing out. Campaigning by Akhilesh Just one correction, the 36 postal ballots. Paswan that you're talking about, Paswan did very well in the Lok Sabha. He went 29 segments. Is it that this time Nitish is paying him back? Possibly. This is for the Nitish is 2020 paying him elections. back, and RJD or Tejasvi is taking the Gen Z votes very strongly, or the Jan Suraj is taking it In away. fact, speaking of Gen Z, because Anukriti is still with us, just to, and I'm assuming you are Gen Z, Anukriti, but what does Gen Z want? Just give us a sense of, people of your generation in Bihar, which is the poorest state in India. What are your dreams, aspirations? What do you want? Nidhi, first of all, thank you for the compliment. I am at least a few generations away from the Gen Z, but that's fine. I can tell you for sure. I can tell you for sure that I am very, very happy with how the youth is thinking at this point in time, especially people who've just turned adults, people who are first-time voters. Thankfully, they are not communal in their thought at all. At least in Bihar, it's been very heartening to talk to them, and they have nothing to do with what the brainwashing that has been happening from the center and the kind of politics we've been seeing since 2014. Thankfully, there's not much impact of that. The flip side is they've also not seen the pre-2005 Bihar. So they also don't know what RJD can stand for and what they did when we were growing up. So is my voice audible? Because I can't hear any of y'all. Very clear. But I'm going to ask you a question, and please don't answer it. What do you think of the older generation? We've left you corruption, we've left you environmental problems, we've left you lots of other things. Don't answer that question. Carry on. No, the thing is, see, every generation. So the point is, it's not just problems. We've also grown up with the kind of value system which made India the country that it is supposed to be, and that is trying to get eroded in the past 10 years. We're actually trying to go back to what you just, everything that you just mentioned. There was also a lovely, more pleasant side to all of that. So we're trying to get that back in our, it was democracy. Yeah. Now, you know what Mr. Kanshiram once said, sir, you'll fight the first election to lose, the second to make the other guy lose, and the third to win. And this guy's only, Prashant Kishore, only 48, 49. So it's a long game. Probably he's playing a long game. And he had an impact, no doubt about it. But interesting, because Shikha spent a lot of time talking to women in Bihar. And what do you see, in terms of the difference between first-time women voters and, other women in Bihar, since they're such a big factor in terms of, what they want, what they're looking for? So the older women, I think, are content, unfortunately, with the lot that they have. But for instance, when we spoke about this 10,000 rupees, very few young first-time voters or young women said that this was enough. They felt that they wanted more investment in their future. Now, if you look at some of the statistics, there are 7 colleges per 1 lakh population in Bihar. And it has remained stagnant for the last 5 years. Look at the national average, 20 to 30 colleges per lakh. Now, there are no educational institutions, there is no infrastructure which can help empower these girls. They want investment in their future. And when we were in Begusarai, if you recall, Kanhaiya showed us a college which was shut, but which has students
enrolled in its on its rolls, but nothing happens there. The college wasn't bigger than this floor. College. So they want good education. So they want an investment in the future, and somehow they're able to see that in Prashant Kishore. Now, in fact, it was very interesting. I spoke to a family of young boys who were all first-time voters. They said, we are going to vote for Jan Swaraj. I said, but your mother has not even heard of Jan Swaraj. They said, now she has, because we took the manifesto or whatever, what's been put out on social media, and we have been showing her the reels and trying to educate her about this party. So maybe not now, but by the time the next election comes around, she will also know what Jan Swaraj is and vote for Prashant Kishore. So he's here to stay, perhaps, as a force. So that just reminds me regarding this 10,000, when Dr. Roy asked Tejaswi Yadav about this 10,000 that has been given to the women. His first response was कि महिलाएं क्या business करेंगी. This was his first response, which itself I think is a very misogynistic tone was there in that reply. That not considering that women are capable enough of being entrepreneurs. And also, if the number of women in RJD rallies, this has been a question which has been raised by a lot of people, that the presence of women in RJD rallies was much lesser in comparison to other political parties. So, though that also that across the board, I think everybody was guilty of not giving enough tickets to women. So women are a huge vote bank, but in terms of political representation, it's still abysmal. Yeah. No, I mean, Renu Devi has been a deputy chief minister for the BJP. Can I just understand how many campaigns have been led by her? I mean, she was the EBC face, etc. So can't understand why women form the base of this political churn or political stability, whatever you want to call it, but nobody is willing to get them anywhere in the leadership. And as far as, ditto to Shikha's huge points, and the fact is that when I spoke to young girls who were going to a college ahead of Jahanabad in a block, Kako, and they said, we don't want any Arakshan. We need Suraksha to be able to go to the college. Yeah. So they are looking at women police officers to be posted in the Thana. They are, of course, looking at colleges. Many girls who are taking these online entrance exams, and they say, "Chup ke entrance exam de diya hai BHU ka. Agar ho jayega tab dekhungi. My chachi or my dadi will fight with my father." So a very patriarchal society. Still, we are saying the women voters are, leading this political churning and change. So I do think important to look at the fact that there's a Gen Z emerging. Even amongst the women, the girls who took the cycle to the school are now going to college and want to look towards the future. Let me ask Anukriti, last comment from you, Anukriti, on that and the difference in aspirations between young women. You said you are many generations away from Z. I don't think it's that many, but how do you, look at those different aspirations amongst young women in Bihar today and the generation before? Nidhi, to just add to the whole 10,000 point. Now the problem here is that our numbers have been static since 1990. We've been the poorest state since 1990. 2015, 2025. We've not improved. Our Human Development Index data, we were still number 36. So the point is, if the women were actually, they had improved, whatever, irrespective of the generation. I'm talking about the generation which apparently is voting for NDA and Nitish Babu. The timing of the 10,000 rupee reaching their bank accounts 1 hour before the model code of conduct is implemented, 2 days before the first poll, and again 1 day before the second phase of polling. Now these are all women who belong to a certain category, and which, by the way, were supposed to get 2 lakh. So, because after the caste census, Nitish Kumar had gone ahead and declared that 90,000 families will get 2 lakh each, BPL families. That never happened, and kind of what is called ravery in popular lingo, that was sent to their bank accounts. Now, I don't see a correlation between women feeling empowered. Women were hardcore bribed with those 10,000 rupees reaching them around Chhat.
So the whole debate of Can I just, sorry, interrupt and ask you a question, which for me, the slogan of this election, having traveled around and met politicians and the voters, that Bihar is, as you mentioned just now, the poorest state in this country by far and for many, many years. So is Bihar, I found, had the brightest people, very politically aware, very intelligent, very analytical, and the worst politicians in the country. The people of Bihar, the best, let down by their politicians. Is that true, or is that an exaggeration? Dr. Roy, as Abraham Lincoln had very famously said, elections belong to the people. It's their decision. If they decide to turn their back on the fire and burn their behinds, they'll just have to sit on the blisters. So we can't really. As Joe Ramaswamy once said, Joe Ramaswamy, forget Abraham Lincoln. Joe Ramaswamy said, it's like we have to vote between a pickpocket and a thief. That's going a bit far. That's exactly what Jan Swaraj is still trying to do here in Bihar. That we are trying to tell them that there's a vikalp. There's an expiry date to your bandhua mazduri, to your bonded labor. You're scared of BJP, you vote RJD. You're scared of RJD, you vote BJP. That has to stop. And, okay, let me just bring in Manish here, and you can listen to what he has to say, because he really, if you ask me, is the hero of this election coverage across all media. Manish, the MGB has been totally let down by the Congress and by the CPI-ML liberation. What happened? They have a 20-25% strike rate. 75% of their seats they lost. Why that sudden decline? डॉक्टर रॉय, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चुनाव के अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं, उससे एक बात जो मैं और दोराब कई बार हमने इस बात की चर्चा की है कि आज just come back to you 1 second, because the BJP state president one of the poorest states in the country. आगे कैसे करेंगे? 20 साल से आप ही लोग पार में मोटा-मोटी इसी वादा के चक्कर में तो इंडी गठबंधन साफ हो गया। आप लोग के जो वादे हैं उसका पता हो ना, हमारा वादा साइंटिफिक एंड टेक्निकल है। हम फाइनेंशियल एडवाइजर को बैठा करके कोई वादा करते हैं, लेकिन सामने वाला जो है पता नहीं, आसमान से लगता है कि पैसा गिर जाएगा और हम कुछ भी कर देंगे। तो जनता ने पकड़ लिया झूठ को। जनता बहुत तेज है। मतदाता आजकल कागज कलम लेके जोड़ती है कि 3 करोड़ 80 लाख जो बिहार के परिवार हैं, सब परिवार से एक नौकरी देंगे तो 13 लाख करोड़ चाहिए, और बिहार के पास 3 लाख करोड़ ही है। तो जनता ने पकड़ लिया। 10,000 तो आप भी दे रहे हैं महिलाओं को, कुछ लोग कहेंगे वो भी आसमान से ही आ रहा है। नहीं, मैंने कहा ना कि हमारा साइंटिफिक एंड टेक्निकल है। हमने कागज कलम लेकर के 5 फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बैठा करके जोड़ करके कोई वादा किया है। Thank you so much. So there you have Dilip Jaiswal. He's surrounded by the media right now. I did ask him earlier about also whether Nitish Kumar would continue to remain the chief minister for the next 5 years. He said that it's going to be an NDA government, and it is ultimately something that will be seen in the next some time. As of now, it does appear that because the JDU is doing so well in comparison to the last elections, it will be Nitish Kumar as the chief minister. What happens in the next 5 years, of course, remains to be seen. Remains to be seen is a phrase that's banned, you know that, Alok. Only thing worse than remains to be seen is only time will tell. Right? Okay, Manish, back to you on the terrible performance of the Congress and the CPML liberation. Why? मैं आपको बता दूं, उसका आपके वाई का एक ही जवाब है। आजकल जो चुनाव में जो विक्टर होता है, जो जीतता है, उसको आपको ये देखना होता है कि आखिर उसने वोटर के खाते में कितना पैसे डाले। और बिहार में भी कोई एक्सेप्शनल चुनाव नहीं हुआ है। बिहार में भी सीधा सा चुनाव था कि एनडीए ने नोट दिया और जनता ने और खासकर महिलाओं ने उनको वोट दिया। महिलाएं जो हैं, और खासकर 10,000, मैं अगर आज के तारीख में अगर आपको बोलूं तो बिहार में सबसे बड़ी जाति कौन है, तो वो है 10,000, यानी कि 10,000 रुपीज़। और इसी ने चुनाव में आप कह सकते हैं कि एनडीए के लिए पूरा
गेम को जो है सेट किया है। कोई ऐसी बात नहीं थी कि नीतीश और तेजस्वी, क्योंकि नीतीश कुमार का जो कैंपेन था वो अब तक का सबसे होपलेस कैंपेन था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री या अमित शाह का जो भी भाषण होता था उसमें कोई नई बातें नहीं होती थी, कोई ऐसा नए बिहार के भविष्य के बारे में वो बात नहीं कर रहे थे। वो बिहार के जंगल राज की बात कर रहे थे जो 2005 के पहले की बात थी। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस और सीपीआईएमएल का परफॉर्मेंस है तो उसका कारण ये है कि उन सीटों पर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनका परफॉर्मेंस बेटर है, और उस परफॉर्मेंस के पीछे इस 10,000 और महिला वोटरों की जो भूमिका है वो काफ़ी बड़ा, आप कह सकते हैं कि गेम चेंजर है, क्लिंचर है। और पूरे आप देखेंगे आखिर एट द एंड ऑफ द डे भी आप जब रिजल्ट को एनालाइज करेंगे तो ये विमेन वोटर 10,000 रुपीज़ और जो पेंशन की राशि 400 से 1100 बढ़ाई गई, उसने सबसे बड़ी भूमिका अदा की है। खासकर ये जीविका की जो दीदियां हैं, हमने पहली बार देखा कि नीतीश कुमार की रैलियों में महिलाओं का अटेंडेंस और उनको सेल्फी लेके अपलोड करना होता था, क्योंकि उनकी एक मॉनिटरिंग थी। और साथ ही साथ वोटिंग के दिन भी जो जीविका की जो क्लस्टर की हेड थी वो मॉनिटर कर रही थी कि आखिर महिलाओं का टर्नआउट कैसा है, सभी दीदियों ने वोट डाला या नहीं डाला। तो आप कह सकते हैं कि जो तुम मुझे नोट दो और हम तुमको वोट देंगे, ये जो प्रिंसिपल है और ये जो आजकल बिहार में पूरे देश में चल रहा है, ये महाराष्ट्र में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, और वही कुछ बिहार में भी रिप्लिकेट हुआ। और बिहार में चूंकि अमाउंट ज़्यादा था, एक बार महिलाओं के खाते में, और वो भी चुनाव से वोटिंग से 2 दिन पहले खाते में 10,000 आना, उसके बाद लोग अपने आप को ऑबलाइज फील कर रहे थे कि आखिर एनडीए को वोट ना करे तो क्यों ना करें। I think Manish is making a very important point here. The fact that Bihar has now made this large infrastructure of parastatals, contractual employees at the last end who are women, the Jivika Didis doing the monitoring of the booth processes, taking women out, the uploading of their photographs on the selfie. We can have normative issues about this, whether it should have been done or not. But the fact that a parastatal whose future hangs in the hands of the state, they did the monitoring for the last mile and on behalf of the incumbents. So what we see as pre-incumbency also largely being manufactured by a large cadre of parastatals who happen to be poor women of the state of Bihar. Right. We also have Priyanka Khushwaha of the RJD joining us at this point on Decoder. Thank you very much for being with us this morning, Priyanka. Firstly, to get a reaction from you on the lead so far, the RJD by and large seems to be doing pretty well on its own, but the disappointment seems to be with your allies in the Mahagathbandhan, the Congress and the left, which really are pulling the MGB down. Good morning to all of you, and my name is Priyanka Bharti, not Priyanka Kushwaha. And My secondly, apologies. it's okay, it's all right. Actually, I think it's too early to say anything, and I believe that Bihar has voted for change. And we don't trust any exit polls, you see, because in 2015 also the BJP were bursting crackers in the BJP office, and we want them to burst crackers this time as well, because in the evening they won't get a chance to burst those crackers. So we are happy and we are hopeful and we are confident that we are winning this time elections in Bihar, and no vote chori will happen like the last time it happened. Just because of 12,000 could not form the government in Bihar, and this time you see vote percentages also increased drastically, and the reason behind this I believe is the immigrant population who came to Bihar during Chhath Puja and stayed here. They have voted for us, they have voted for change, they have voted so that they remain in Bihar for jobs. And we also trust that the youth population has also voted for us, just because the reason was that they were brutally beaten up when they protested against the paper leaks in either in UGC or in the NEET or in the BPSC. So we are hopeful that this time all the people, all the Biharis have voted for a change in a government which talks about jobs, poverty index, hunger index, unemployment, and all those issues which concern us, rather than katta, kanpatta, and sixer ke chhe goli chhati mein thoki. So I think we are definitely winning.
And about the confusion when introducing you, but you didn't answer my question specifically. I understand, what you're raising about, the issues, etc., and why people may have voted the way that they did. But are you not disappointed, particularly with the Congress, which was your main ally and is right now doing really, really badly? Why we will be disappointed? I mean, the results are not out, so there's nothing to be disappointed about. But so far, based on the leads. No. You see, these are the numbers which you are talking about. The ECI hasn't updated on all 243 seats till now. It's just the beginning. And in this postal ballot, Mahagathbandhan has always remained far behind NDA. But this time, you see, there is a neck-to-neck fight between us. And I would also say that ECI has not yet given any data, any information about those seats which are stronger for us, where it's we are holding the grounds. So I think this is too early to say, and we are confident that we are winning, and we would not say that we are unhappy about any of our alliance partners, because everyone is going to perform very well. Only time will tell. No, it's not fair, because if you look at the votes, you've made a valid point that you can't just talk about postal ballots. So we looked at 50 seats where votes have started coming in, and this is what it looks like, and it's not very good news for the MGB. If we just have a look at that graphic, the NDA is around 49% compared to 42% in these 50 seats. That's a swing of up 7%. Of course, they've got Chirag Paswan with them. That would have helped. The MGB down from 41 to 38. That's a swing down of 3%. So up 7 and down 3. And the Jan Swaraj Party 4% up, because it didn't contest last time, of course. So that is a bit of a worry. I get your point that seat numbers don't matter, but votes are a bit disturbing for you as well. I have my own opinions. Reason being, I was on the ground. I have talked to people, and I believe the women have voted for change, and the numbers will definitely change. Just let us wait for at least 2-3 hours. Yesterday, also Ganesh Kumar, PCI said that the election commission will update everyone by 10 or 10:30. It's still too early. Fair enough. I think you're right. We should wait. But there's one worry about waiting. Whoever's in the lead, this called in seats, this called the last minute bump. They do even better. So don't wait too long. We won't. We believe that after 20 years, the sun will rise for change. And we are very much hopeful. 20 more years. You're waiting for another 20 years. No, we are not. We are definitely not. Today we will form a new government in Bihar. I mean, today the results will come, and that's why I'm saying that it's too early. God bless your positivity. God bless you for that. Thank you so much. I just wanted to ask Baj if we can get an update. So how much of the postal is left? Are we Almost none. So now we're really fully into the EVM, and how the rounds will depend on what? Just now we're mostly first round, there's a few second rounds. And if you look at the EC side, the number of votes are very low at the moment. In most of the constituencies, there's less than 7,000-8,000. So in the first round. So I think there is some way to go, but Priyanka is making a point that we should go slow. The constituency should have about 2 lakh voters. If you assume a 65% turnout, about 20 to 140,000 votes to come. But overall. Another interesting thing I thought about this campaign, Manisha Priyam, was that the absence of Hindutva from the BJP's campaign, and apart from a few stray comments here and there, but was that a very deliberate strategy? Does Hindutva not work in Bihar the way it does like in other states, maybe like UP? I had somewhere along the campaigning part, when I started looking at it, I realized that the BJP was fighting the Magadh Shahabad region very intensely, and the BJP had focused on its battle straight on with the CPI-ML, and they were putting up Rajwanshi candidates, they were putting up Kanu candidates,
this was Sudama Prasad of the Kanu Jati who had defeated R.K. Singh, the power minister. So they were concentrating on Kushwahas in this area. Now that meant therefore that this was essentially an agde pichde ki ladai, and there if they invoked communalism, the pichdas would have gone away from the BJP. Right. So even from an Amit Shah led campaign, if you see in the first phase, I did not hear a communal pitch or overtone to it. It may have happened towards the last when I wasn't really following the BJP rallies, but in the first phase, there was quite a lot of reference to Ghuspetia. Apart from that, but it didn't but the fact that on the SIR, the election commission had not been able to catch Ghuspetias, number one. Second, the huge reality of Bihar is that inter-regionally, for example, if you go to Gaya or to Jahanabad region, they don't even know what the route to Chhapra is. Nobody has ever crossed the river. There are no intermarriages. So let alone a Ghuspetia from Bangladesh, they haven't seen a Ghuspetia from Chhapra coming to Gaya. So what are you talking about? So it's a regional joke. Don't foist it on us. In fact, the big cultural thing is that, if somebody gets married from Chhapra to the Tirhut region, they'll say, oh, down culture has come here. So I think regions have mattered very much, and the BJP has got that part right. By the way, just look at this, that the BJP and JDU are now very close, 73 to 68, just 5 seats. Yeah, they're doing very well. We have SN Singh from the BJP joining us at this hour as well. Mr. Singh, ये बताइए सबसे पहले कि अभी तक तो लीड्स अच्छे हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारे राउंड बाकी हैं, तो अभी आपकी पहली राय क्या है अभी तक लीड्स के बारे में? मिस्टर सिंह, कैन यू हियर मी? बोले। हाँ जी, मैं आपकी सबसे पहले आपकी पहली राय जानना चाहती थी। अभी तक जो लीड्स आ रहे हैं जिसमें एनडीए अच्छा कर रही है, जेडीयू बीजेपी दोनों अच्छा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि फाइनल टैली क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं भूर प्रणाम करूंगा बिहार की जनता को कि बिहार की जनता ज्ञान की धरती ने विकास को चुना। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आज कोई वोटिंग का समय तो है नहीं कि एक नैरेटिव गढ़ने का कार्य किया जाएगा। जो भी बिहार की जनता मैंडेट दे रही है, जिसको भी वो सर झुकाकर उसको स्वीकारना चाहिए। फिर भी जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था, हमारे बड़े नेताओं ने कहा था, लमसम जो आपके चैनल के माध्यम से, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से दिखाया जा रहा था कि 160-70 सीटें एनडीए के पक्ष में आ रही हैं। वो रुझान में भी दिख रहा है कि 160-70 सीटें वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आप देखे होंगे कि चुनाव में जो हमारे विपक्ष के लोग थे, वो कोई ऐसा मुद्दा आप लेकर नहीं आए जो जनता को लगे कि नहीं वो मुद्दा है। और पांचवी बात मैं कहूंगा कि एक लंबे समय तक कोई भी किसी के साथ तब जुड़ा रहता है जब वो विकास का कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने जिस तरह से उजाला योजना की बात की, उज्ज्वला योजना की बात की, किसान सम्मान निधि योजना की बात की, गरीब कल्याण योजना की बात की, उसके नाते बिहार की जनता को लगा कि जो ये डबल इंजन की सरकार है, वो जिस गति से बिहार का विकास कर रही है, उसमें रुकावट ना आने पाए। इस नाते पुनः जो है वो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों के साथ एनडीए की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्धता जारी की। लेकिन मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि अगर आज एनडीए जीत गई तो आप किसको क्रेडिट देंगे सबसे ज्यादा, नीतीश कुमार को या बीजेपी को? बिहार की जनता को। बिहार की जनता का जो भरोसा है, उस भरोसे को कि जिसने मोदी जी के नीतियों पर, नीतीश जी के नीतियों पर, एनडीए सरकार के विकास पर भरोसा दिखाया, उस भरोसे को हम देंगे। क्योंकि आप देखे होंगे लगभग 65 से 70% अगर महिलाओं का वोट वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में जा रहा है, नीतीश जी के पक्ष में जा रहा है, तो ये मान के चला जा रहा है ना कि जो हम मेट्रो, मखाना और लखपति दीदी की बात करते थे, बिहार के विकास की, समृद्धि की, खुशहाली की बात, मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा? नहीं, देखिए, ये तो आपका प्रश्न हो सकता है। पीएचडी का सवाल प्राइमरी स्कूल में पूछेगी तो कैसे काम चलेगा। लेकिन हम लोगों ने कहा था 25 से 30 पुनः नीतीश, आप देखे होंगे सब में चल रहा था कि एनडीए की ही सरकार बनेगी, एनडीए का ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो बार बार सवाल उठाया जा रहा था और बार बार इसका जवाब मिल रहा था कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही वहाँ पे सभी सहयोगी दल मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं। वो अलग बात है, चुनाव तो अब हो गया, लेकिन अब अगर आप लोग जीते, जैसे अभी तक जो लीड्स आ रहे हैं लग रहा है, तो क्या नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे?
नहीं, आपको कहीं से संदेह लग रहा है तो आप बताएं किस बात का संदेह। आप हाँ या ना स्वीकार तो बोल कीजिए दीजिए कि ना, वो बहुत भारतीय आसान जनता सवाल है। पार्टी- क्या वही नीतीश तो कह रहा कुमार हूं। बिहार के मुख्यमंत्री फिर बनेंगे? मैं वही तो कह रहा हूं कि बिहार की जनता अगर चाह रही हाँ है या कि ना एनडीए सर, की हाँ या सरकार ना? बने, बिहार की जनता चाह रही है कि एनडीए की सरकार बने, तो हम तो आपके तरफ से चाह रहे हैं कि एक खुशखबरी मिले कि आप दिखाएं कि 10वीं बार शपथ ग्रहण नीतीश जी ही ले रहे हैं। आपका ये आपको जवाब कहने में- बहुत कुछ बता रहा है। आपके कहने में क्या दिक्कत है? आपको भी कहना चाहिए। ना कहने में भी वो क्या, ना कहना आप भी एक बहुत छोटा- कुछ कहना है। नहीं, आप एक चीजों को देखिए ना। नहीं, आप एक हाँ या बार ना भी- बोल दीजिए ना, एक नीतीश बार कुमार भी आप लोग मुख्यमंत्री ये नहीं बनेंगे कर या पाए। नहीं? मैं कह रहा हूँ विपक्ष सरीखे, आपको किसी भी चैनल के लोगों ने एक बार भी नहीं कहा नीतीश जी पे आपने क्या आरोप लगाया। भाई 20 साल सरकार चलाने के बाद भी हमारे विपक्ष के लोग भी तो यही कह रहे थे कि नीतीश जी की सरकार अच्छी चल रही है। लेकिन हम नीतीश जी मैं को आपको चाह रहे ये हैं। सवाल, बिहार सॉरी, की यू वांट जनता टू So I just wanted to point out, sir, that now JDU is the largest party, 5 seats more than BJP. अभी कैसे डिसाइड So, आप कर रही हो? Nitish 100%. जेडीयू मतलब 50-50. एनडीए, जेडीयू मतलब महागठबंधन नहीं, जेडीयू को एनडीए मानकर चलिए। एनडीए की जीत को स्वीकारिए और अपने चैनल के माध्यम से जनता के बीच में मैसेज डालिए कि एनडीए जिस तरह से कार्य की थी, डबल इंजन की जो सरकार के जो कार्य थे, मोदी जी की जो नीतियां थी, नीतीश जी की जो नीतियां थी, उस पर जनता ने भरपूर आशीर्वाद और मोहर लगाया है, दिखाया है। इसको बताइए अपने माध्यम से, क्योंकि नीतीश जी मतलब एनडीए, ये नीतीश जी को सेपरेट करके आप नहीं देख सकते हैं। नहीं, नीतीश जी ने लेकिन लोग तो स्वयं जानना चाहेंगे ना कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, और अगर जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है आज के एंड ऑफ टुडे, तो क्या आप ये मान के चले, हम लोग मान के चले कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? प्लीज हाँ या ना बोल दीजिए बस। आप बताइए ना, 2005 में, 2010 में क्या जब एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश जी ज्यादा सीट नहीं पाए थे? कई बार नीतीश जी कम सीट पाए थे तो भी मुख्यमंत्री बने। ये तो आपको बताना चाहिए। इससे बेहतर, आपसे बेहतर समीक्षा कौन कर सकता है कि एनडीए में जो है बीजेपी अपने सहयोगियों को सर आंखों पर बैठा लेकर चलने का कार्य करती है। 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की हम सरकार केंद्र में भी बनाते हैं, तब भी अपने हम सहयोगियों की जन भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, उनको मंत्री, मुख्यमंत्री और आप एक बनाने का कार्य करते हैं ना। महाराष्ट्र में चुनाव तो उनके अंडर लड़ा, लेकिन बाद में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जीते आप। नहीं, वो आपको लग रहा है, पहले ही आप देखे होंगे कि पहले ही कहा गया 20 से 25 पुनः नीतीश, इस घोषणा के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां गई थी। और निश्चित तौर पे एनडीए को आप स्वीकारिए कि एनडीए की बड़ी जीत हो रही है, और ये तो स्पष्ट हो गया आपके चैनल के माध्यम से, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि एनडीए की भारी जीत हो रही है। और अब विपक्ष के लोगों को कहिए कि वो फिर ये नहीं कि ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, फिर एसआईआर पर सवाल उठाएंगे, उनको स्वीकारना होगा जिस तरह से आप स्वीकार रही हैं कि एनडीए की भारी जीत हो रही। जी बिल्कुल, आई थिंक दैट्स, Thank you, जी, thank you. Thank you, Mr. Singh, and all the best Thank for the rest of the day. That will be interesting to see. Sorry, Baj had a point first. Well, we've been saying that the Congress is doing very badly. Suddenly. They've actually picked up, and so they're now only trailing in 2 seats. RJD is trailing in 17, and So it's changed. and the left has taken a huge beating. I mean, they're minus 13 or something. Oh, so that's they a huge beating. Huge beating. Also, wherever in Bihar the left-wing extremism was, at a time, that also has gone down, and those areas, Jamui, Gaya, there also women turnout is really very high this time. And places where CPI, ML actually, they used to hold their conferences, in those areas in 2009-10. In those areas also women turnout is very, very high. So, But they did very well in the Lok Sabha. Very interesting to see. We've had 2 senior women BJP turnout is leaders very on in a span of 1 hour, and very different points of view on whether Nitish Kumar would be chief minister or not. But I think an interesting point the BJP spokesperson raised, Shikha, was about whether the opposition would accept the results, especially if the NDA wins. When you travelled in Bihar, how much of an issue actually was vote chori amongst the people you spoke to, or what? Even though Rahul Gandhi drew large crowds when he did his yatra, do you think that necessarily resonated as an election issue? No, it did not. It was just not heard of on the ground. I mean, nobody spoke it's about a vote very chori. important issue. It's a shocking thing that the Election Commission did. And in my 49 years of covering the Election Commission, I've never seen a decision so arbitrary. 3 months to go and you say something, it was a huge exercise.
terrible decision, but not an election issue, right? Would you agree? I agree. It was just not an election issue on the ground, not at all. Yeah. No one spoke about vote chori. And then yet they attended Rahul's rally in big numbers. So the Congress sort of got a boost at that time, thinking that they were going to be doing really well. No, I think it was also maybe an effort at that time to establish their presence on the ground. But like we've seen often in the past with the Congress in different states, they start off with a bang and then everything just sort of fizzles out. And the same thing happened here. You know, they instead of building on the Rahul Gandhi's rallies and the march, nothing took off after that. And they just sort of disappeared from the scene. Why didn't it resonate as an issue? I mean, you would think that people... Just one second, this new graphic come on. Just looking at the seats that have changed hands to get a percentage vote swing. Currently, and this can change because this is just early, 2% swing to NDA, which if it continues could get them 170 odd seats. Wow. Quite a big landslide that would be. Sorry, carry on. Congress has nothing on the ground. You can't make rallies and speeches and vote chori, and there's nobody on the ground. I mean, you can't win an election of state this size with no ground game. They have no ground game. Right. In fact, this vote Adhikar rally and subsequently Rahul Gandhi, the way he has been doing his hydrogen bombs and all that press conferences, coming out with data, coming out with names, which actually fell flat because there was nothing to substantiate it. Naming Brazilian models and then... No, I say those presentations were quite good and a very important issue, but not a voting issue. For the voter, irrelevant. The point is that even Election Commission didn't have to kind of verify it. The media itself went out and find out, the reports that the names that they were coming out. There were 20 pictures. So... Yes, but the guys way living in a house. they went to those villages, they asked those people who had voted, and there were people who came out, women who came out that yes, we are voted. There was one huge joint family which over the years, 2 decades, they have grown in number, so the number of voters, but the address remains the same. So what I'm saying is they could not substantiate it or put I forward agree, some what they could not, but there is some major problem with the electoral and the voting issue. No, I think the worst thing is that maybe that's why SIR is required. No, yes, you are right. But the question, in fact, yes, but as the long as question it's is done impartially and you see, all professionally. voter lists, all data should be available to everybody. Look at the American election; they know what the guy's income, everything. I'm not saying we should do that, but the voter list, everything the Election Commission has, whatever it has, should be accessible by all citizens. Why not? There's nothing secret about it. Then why not make it available to everybody? But again, what voter issues are we talking about when ultimately everyone is saying that the game changer was the 10,000 rupees that was given to the women and they turned out in large numbers and swung this election? Then what were the... Which is what happened in Maharashtra too. What are the issues? Yeah. I mean, there are hundreds of issues and hundreds of issues plaguing the women. But only difference about the game changer, I feel there was huge women pro Nitish feeling throughout, and this just added to it. I mean, he really has done a lot for women over the years. And men have all gone out of state anyways. The men have left the state, and so he's doing No, not that. Yes. They didn't have any real alternative to that. I mean, and Gaurav, it's interesting that JDU is now up 31 seats. BJP is down 5 seats. So interesting how it's changing. And so JDU is now the lead party. Last time at 40 odd seats, struggling because that's of okay, but BJP is trailing in 5 seats at the moment, which is surprising if this is a sweep as... So perhaps not that huge sweep that initially... No, the sweep may be there, but the sweep is being led by JDU, not... as opposed to the BJP. So if he gets these kind of numbers, it'll be his victory, But this whole model of what is the freebies, the handouts, Manisha Priyam, before elections. Now, we've actually been commenting on this for a while because it's not unique to Bihar, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra. It's been happening continuously. Is that though not a worrying model, both not just fiscally but also for democracy? Because you can pretty much then
have these handouts and buy votes. Anyone can do it. Where is the debate on this, that this is a threat to democracy? I mean, these transfers could be programmatic transfers, as they have been in Latin America, Bolsa Familia, etc., the Progresa in Mexico. They've been programmatic transfers linked to better schools, better health centers, and then empowering the woman with cash transfers. But there the model is that if the woman and the children don't show up at the health centers, then the state says, red flag, we need to go out to these women who are so vulnerable that they can't even walk up to the health center. But here it's a model of keeping the woman in a limbo. Remember, the contractual employment of the Jivika Didi, that's linked to being present at state events, that's linked to leading them on. It's a thank you moment from them. Just continue me here as I am. Remember, the Gen Z is not an autonomous Gen Z. It is their mothers and their 10,000 rupees and their work as Panchayat Samiti secretaries or Panchayat representatives or Jivika Didi, Rasoiya Didi, Asha workers. That's giving some hope to them studying in low-cost coaching centers. Let me add to Shikha's point here that Bihar is the only state where the younger generation of the Gen Z, almost 62% of them are studying in private tuition centers, coaching centers. And these are all crammed urban gullies where they are studying, outside Khan sir, who I believe is the Shah Rukh Khan of the coaching gully. Outside his class, 3 years, I have seen if there are 2,000 inside, 10,000 young people stand outside. Why? To get a PDF or a photocopy of what Khan sir is teaching. So that's where we are. I know victories are very delightful moments, lots of optimism in those who are winning today, but many sobering facts in terms of how the poor are negotiating in their contingent circumstances. So I look at it like this, and I believe who argues on behalf of the poorest? I mean, how do you argue? They don't have an option of exit. In fact, they have the severe fear of punishments. So what do they do? So let me just ask you, and I'll ask Manish as well. I know it's a complex One thing which I explanation. love about elections, the poor actually get something. Yeah. You get 10,000 rupees, you get 2,500. If there were no elections, in between they're forgotten. You ask these women how do the politicians contact you at all in between? Nothing. Elections, so if we have one election, one country, they'll hardly get any money. Only once now they're at least getting 2 or 3 times a year. Election, instead of freebies, they are good welfare measures forced by elections, and it really goes to the poorest. So I think the neoliberal, it's the most positive thing that elections do. Change in Bihar is that elections are a time of wealth redistribution, and I am very happy, and that's my political statement, कि मुर्गा दारू के बदले कम से कम औरतों को 10,000 रुपया दे दिया, तो मुर्गा दारू की पार्टी देके और चुनाव करते तो 10,000 रुपया देके Okay, कर दिया. here's another bit of interesting data. Just look at who's doing better: Congress, JDU, etc. Now look at the NDA alliance. The BJP strike rate, they're winning 70 out of 101. That's a win rate of 69%. JDU, 74%. So even at their rate of victory is higher. It's the LJP which is really low. Even though it's gone from 1 to 12 seats, it fought so many more, it's winning only 43%. So Chirag Paswan, sorry? 29 seats fought by the LJP. Well, 28, 29, maybe one's a friendly fight, I don't know. Maybe this is so far announced. Okay, fine. Sorry, I may be HAMS, wrong. 67%. You know, you were saying yes earlier, you're surprised. They are actually doing well, you were right. RLM, very bad. And let's move on. So basic bottom line here is JDU 74%. Now look at the MGB alliance. RJD winning 41% compared to Congress 26%, and the VIP only 8%, 1 out of 12 seats. 41% not good, but Congress winning only 16 out of 61. No, it's no worse than last time. No, I'm just bad. comparing with RJD each declined actually. RJD did more than 50% last time. Just comparing who's doing amongst each other, not compared with last time. Just a polling rate for Congress, 26%. And the person wanting to be chief minister
Deputy Chief Minister VIPs winning 1 out of 12. So we have Sanjay Kumar joining us, election analyst and political scientist. Sanjay Kumar, it's very nice to have you on the program this morning. What are you taking away from how this election is going so far? What are your three big takeaways? I think first, if you look at the alliance pattern, so if you look at the NDA, so NDA alliance partners actually brings different sections of voters. So that makes the alliance much formidable compared to the MGB alliance. If we look at the BJP brings the upper caste vote, the Nitish Kumar brings the Kurmi vote, Upendra Kushwaha brings the Koiri vote, the two Dalit parties brings the Dalit vote. So that makes the alliance more formidable compared to the Mahagathbandhan, because Mahagathbandhan has a core support base among the Yadavs and the Muslims, and so they are able to reinforce. So I get a sense that Muslims and Yadavs have voted for Mahagathbandhan in a big way, but they have not been able to attract voters of other caste community. Second, if you look at the nature of campaign, BJP used a bigger narrative that if Mahagathbandhan comes to power, it will be a return of Jungle Raj. So that also resonated with a large number of voters. And they also mentioned that forget about this election. This is not an election to elect your MLA. This is not an election to elect your chief minister, because there was a ifs and buts about who is going to be the chief ministerial candidate among the NDA. So they took the election campaign at a higher pitch, that this is not an election. Don't worry about your MLA. Don't worry about your chief minister. Just think of, if Mahagathbandhan wins, what is going to be the condition of the state? It is going to be a return of Jungle Raj. So taking the narrative at a bigger plane, that also helped. And we are all talking about the women voters. Many panelists have already mentioned. If you look at women voters in very large numbers, they have voted for they have voted in favor of NDA in a very large numbers. So I think these are the few factors which seems to have worked very well in favor of NDA, and that has not gone well with the Mahagathbandhan. Sanjay, this is Prannoy here. Really, thank you very much to have you. You are one of the most brilliant election analysts, you and Yogendra, honestly. So it's great that you are joining us. Thank you very much. We were just discussing the impact of welfare measures, what some people call raveries. A, do they have an impact? And B, are we going to see much more of that? And is it a good thing? Very difficult to say whether it is a good thing or not. Manisha already mentioned it is better than Murga Daru to give money to the women. I am not sure whether it is a good thing or bad thing, but first, there is a straight correlation, direct correlation, if you look at the beneficiaries of the welfare schemes. And it is not only about Bihar. You can keep looking at the data of other states as well. The beneficiaries of the welfare schemes tend to vote more in favor of the ruling party. I am not saying all of the beneficiaries vote in favor of the ruling party, but straight correlation. Beneficiaries go more in favor of the ruling party, and that is why more and more ruling parties, more and more governments are doling out welfare schemes aimed at specific sections of voters. It has increased over the last 5 years, and I think it is going to increase. The trend is going to strengthen further in the coming years when, next year 4-5 states goes to poll. We might see more, welfare schemes aimed at women and other sections of voters being doled out by the ruling party. But Sanjay Kumar, also this point that you made right in the beginning about the fact that the EBC vote, extreme backward caste vote, hasn't really floated in big numbers to the Mahagathbandhan. Why do you think that is? Why have they not been able to go beyond that Muslim Yadav vote base that they have, despite trying to stitch up alliances like with the VIP party this time? Is it that, that old sort of tussle between different caste groups and the reminder of the bad old days that has prevented the EBCs from voting with the opposition? I think I'm looking at the big narrative. See, in order to defeat the formidable alliance like the NDA, not only in Bihar but in other states as well, the opposition needs to generate a narrative which is attractive to the voters, which is attractive to the non-attached voter. The opposition has failed not only in Bihar but in other states also to generate some kind of an positive, euphoria.
there's nothing which attracts the voters who are non-attached. So, yes, Mahagathbandhan has been able to attract a very large number of Muslim vote, a very large number of Dalit, very large number of Yadav vote. My own sense is that maybe in this election in much bigger numbers compared to the past. They have got a little bit of Dalit vote. They have also got a little bit of the lower OBC vote, and that's the contribution of VIP and some other smaller parties which are in alliance with the Mahagathbandhan. But you need a very positive alliance. You need something to promise to the voter which looks attractive. That's not coming out, that has not come out by Mahagathbandhan in these elections. Sanjay, I've read a lot of your work and it's always of the highest quality, and read much of your data. Just to ask you again about whether when two parties join, like say Chirag Paswan joins the NDA, are the votes additive? Or is it kind of 70% additive, 90% additive? In other words, do all of them get transferred, or it varies from party and state to state? No, I think first, no, all the votes don't get added. Again, you said whether it is to the tune of 90%. I think 90% also would be a very high proportion or numbers which we are talking about. But right, yes, the votes get transferred to the tune of say 70 to 75%. I don't think I have a very careful measuring tool to say yes, it is 70-75%. But my own sense is that certainly not all votes get added. Certainly it does not get added to the tune of 90%, but a very sizable number. And if I have to attach a number to this word sizable, it is in the range of 65 to 70%. Right, that is sizable. Now, what we are finding in this election is that the NDA, there's a swing of 2% to it, over and above if you added all of Chirag Paswan's votes last time to the NDA. So it's quite a big swing. So now it's 3% actually. So it's like, of course, this can change. It's, as you know, as rounds get counted, things keep changing. So it's old NDA plus Chirag Paswan plus 3%. That is quite a phenomenal achievement, right? Absolutely. At this moment, my own assessment would be NDA would be roughly somewhere about 46 to 47% vote, 47-48% votes that maybe. Huge. And huge. Yeah, 47% vote. And Mahagathbandhan would end up with roughly about 40, 41, 40. So it is going to be a gap of roughly 6 to 7% vote. And that is only and only because NDA put up a good alliance and the vote transfer is taking place. And if there is a gap of 6 to 7% vote, it is bound to give us the kind of results which we are looking at this moment. These are early trend. It would also be difficult to say early trend because it's already 2 hours since the counting has already started. I don't think that the trend is going to, the results will change. Trends might change up and down, but this is what is going to be, what we are going to see by end of the day. So we've got the NDA at about 160 leads right now. Do you believe in Shekhar Gupta's finding from the last 15 years that in the final stages, there's always a further bump for the leading alliance? The bump. Yes, it is. It's not, the theory can be tested by looking at, if you look at the counting very, very carefully in different states over last 10, 15 years. If there is a big wave in favor of an alliance or a party, you will see a very large number of seats going in favor of that party or an alliance by end of the counting. But I don't think that 160 is going to be 180 or 175. I think this is kind of the numbers which we are going to see by end of the day. Right. So a lot of interesting data to actually take away from this. How do you look at Prashant Kishore's performance in this election, Sanjay Kumar? Kishore's party is not doing well. We all know from the initial estimates. Maybe the party would end up with, I think, 4% votes. Maybe they might get 1 or 2 seats. But I will not take away the entire credit from Prashant Kishore. I was looking at his campaign very, very carefully. And one contribution
Prashant Kishore's contribution to the campaign, because he changed the nature of campaign. He actually brought about the issue of Biharis should get employment or work opportunities in Bihar. They should not feel proud about going out of Bihar and working in, states like Maharashtra, Gujarat, Delhi, Haryana, and somewhere else. He picked up that issue, and if you look at the campaign very, very carefully, if you turn back and see, all the political parties were started towing that line. And they said, yes, it is important to, develop some industries in Bihar so that the migration could be stopped. I think there was an euphoria in the beginning. That's also because the NDA and the Mahagathbandhan was lying low. If a new party comes up, there is an initial euphoria. But Bihar politics is largely, I'm not saying only, but caste equation does matter. And what worked against Prashant Kishore was, a lot of people believe that yes, this is a good formation. Prashant Kishore is a promising leader, but maybe this is not the election. He's a young leader. He can succeed in the next election. Maybe he needs to wait. I think that perception got created, which has hurt the Jan Swaraj party much more than the kind of support he was generating during the campaign. Right. Manish, do you have a question, I think, for Sanjay ji? Manish, go ahead. संजय जी, अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से अब साफ है कि ये चुनाव एक बार फिर एनडीए जीतने जा रही है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें तो अब कोई शक नहीं दिख रहा। शक दिख रहा है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी बिहार के ऐसे चुनाव हुए हैं, अचानक पलट गए थे, लेकिन वो अपवाद है। और मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है, इस बात में शक सुबह नहीं है कि एनडीए की सरकार बनेगी, और एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आप एक कह सकते हैं कि 2025 एक बार फिर से एनडीए के खाते में गया? निश्चित रूप से मुझे लगता है इस वक्त कम से कम मैं जो कहते हैं आई कैन स्टिक माई नेक आउट एंड से कि एनडीए के खाते में निश्चित रूप से जाता हुआ दिखाई पड़ता है। सीटें कितनी आएंगी, क्या 152, 150, 148 पर होंगे या 160-62 पर होंगे, सिर्फ इंतजार इसी का होगा शाम तक, लेकिन एनडीए के खाते में जाता हुआ निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है। Sanjay, we've seen that Bihar is by far the poorest state in the country, has been for 20 years, but there's a pro-incumbency. 60% of the time, the same government is voted back. How do you match these two? Extreme poverty. There was a time when they used to say Congress keeps people poor because that makes them vote Congress again and again. Does poverty mean pro-incumbency? Or how do you explain it? No, I think this would be too simplistic to summarize that poverty means pro-incumbency. But I think a couple of things which Nitish Kumar government has done, maybe the government has done long back when, it came to power in 2005. So between 5 and 10 was the first phase of Nitish Kumar government when they improved the law and order situation, and then situation of electricity and roads were improved. People still have those memories, and people also have the memories of Jungle Raj, and this was, narrated time and again by NDA partners during the campaign. So two things people still remember: the Sushashan of Nitish Kumar with respect to at least three things: Bijli, Sadak, and law and order. So people think maybe Nitish Kumar's government may not have been able to give, employment opportunities, maybe other facilities may not have been provided to the voters, but at least the three things which are important for people's life in the day-to-day aspect. And they always compare, okay, these are important aspects in their day-to-day life. You are safe, you get electricity, and you can travel from one place to another much easily now compared to what it used to be during Lalu Rabri time. So this contrast people keep looking at, and migration. Some parties were trying to make migration as a big issue. I think a lot of poor people in Bihar, I'm not saying they take the pride, but they think that if they look at the monetary economy, so they think, okay, I am working outside Bihar, I am in Gujarat, I am in Maharashtra, I am working in Haryana, and I get good money. My family is in Bihar,
I come back, I send money, good amount of money to people back to my family back in Bihar. And they also think, even if they were working, suppose they get an opportunity to work in Bihar, they may not get the kind of economic returns which they get working in Punjab, Haryana, Bihar, Delhi or some other places. So they don't take migration as a extremely or a very, very bad thing. They think going out of Bihar is better because they get good economic returns. That's an interesting take. Shikhaya. I just wanted to ask you, you said with great confidence that Nitish Kumar will be the Chief Minister of Bihar. Now, this is a sentiment that has not been shared. The only one who's got confidence. This is a sentiment that has not been shared by the BJP leaders who have come on the show. What if he is not made the Chief Minister? What do you think will happen? What can happen? I think you and Prannoy know that I do different kind of research. My research does not tell me that, you know, when I said Nitish Kumar is going to be the Chief Minister, I am going purely by the numbers. I am not going by what is going behind the scene, you know, the kind of politics which may be going on. But look at the numbers. Because the NDA has contested the election under the leadership of Nitish Kumar, JDU is performing very well. If he is not made the Chief Minister, do you think the people of Bihar will find that acceptable? You know, in other states, they've just sort of taken whoever has made the Chief Minister and they're fine with it. But do you think the people of Bihar will accept it? I think in this respect, people of Bihar should be seen as different compared to people of other states. I am not naming the state, but we have seen states where a successful Chief Minister led a successful campaign, you know, won the election for the party, but still the Chief Minister was replaced. I think if BJP tries to do that, NDA tries to do that, it is not going to be easy. People are not going to accept it easily because JDU is performing far, far better compared to its previous performance. There is a sense that large number of people have voted for NDA in the name of Nitish Kumar because they also saw that this may be the last election of Nitish Kumar. So replacing Nitish Kumar will not be as easy for BJP as it has been in other states. Right, Sanjay Kumar, it's been great to talk to you this morning. We hope to see you later again. Thank you very much for joining us. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you. Right. Have we run out of things to say? No, how can that be? Manish, give us a quick summary of the situation so far, Manish. Dr. Roy, you can call the elections for NDA. The numbers may vary, लेकिन साथ साथ इस चुनाव का जो सबसे बड़ी बात अब ये है कि जो नीतीश कुमार को लेके जो कहा जा रहा था कि थोड़ा सा सस्पेंस रहने दीजिए, वो थोड़ा सा सस्पेंस अब क्लियर हो गया इस रिजल्ट के बाद कि बीजेपी को, जैसा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस किया या ड्रॉप किया या राजस्थान में वसुंधरा राजे के दावेदारी को दरकिनार कर एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बिहार में ऐसा अब होता दिख नहीं रहा है। ये अब तय है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस है उसके पीछे अगर आप 10,000 को क्रेडिट देते हैं या जीविका दीदियों को आप उसका क्रेडिट देते हैं तो जीविका दीदी हो या 10,000 वो नीतीश कुमार के साथ आइडेंटिफाइड है। और बीजेपी आज की तारीख में अभी नीतीश कुमार को हटाकर, क्योंकि अभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं अगर आप देखिएगा तो जो एक कहावत कही जाती है और या पोस्टर होता है जेडीयू का कि नीतीश सबके हैं, तो नीतीश के भी विकल्प खुले होंगे और बीजेपी नहीं चाहेगी कि नीतीश को फिर से एक बार आरजेडी के पास जाने दिया जाए, क्योंकि आरजेडी का आज की तारीख में जो नंबर है तो वो नीतीश कुमार को तुरंत मुख्यमंत्री मान लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी ऐसा कोई भी हैराकिरी अब इस परिणाम के बाद, इस रिजल्ट के बाद नहीं करेगी, क्योंकि जो दोनों पार्टियों का सीटों की संख्या है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो भी जाती है तो वो फिलहाल कम से कम अगले कुछ सालों के लिए चाहेगी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर बार ये होता है कि ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, लेकिन फिर से स्लोगन यही आता है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो ये भी स्लोगन रहा है
भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी भी अपने भाषणों में ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन आज के परिणाम के अब तक के जो रुझान है उससे तो यही लग रहा है कि उनको अब नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री मानने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। Right, we have Sanjay Kumar, the JDU, Dr. Sanjay Kumar, the JDU's working president, joining us now on Decoder. Sanjay ji, thank you very much for being with us. You must be very pleased with how this election is going. At the moment, the JDU in particular is doing really well. So, is it now settled that Nitish ji will come back as Chief Minister? I am the spokesperson of JDU, Nidhi, not the working president. The working president is Mr. Sanjay Kumar Jha. Sorry, I apologize. No, not a problem. So, yeah, Nidhi, I think, we were anticipating this result since the time we started the preparation, and there was overall pro-incumbency that we were able to see on the ground. And yeah, we are so far happy with the the trend and the result. Like, results are not yet out, but we are happy with the trend, and it shows how people have showed faith in the Nitish Ji's government and the NDA alliance. So it's quite visible. It looks like quite one-sided and very big victory is going to come to us, Nidhi. We've had two senior BJP leaders who have actually been reluctant to openly endorse Nitish Ji's chief ministership on the program. Does that worry you at all, the BJP's reluctance? In any case, they were reluctant to sort of say that he would definitely be CM if the NDA won. But even now, they seem to be hedging their bets. Nidhi, I think that's a kind of narrative which keeps it came from the opposition side more, and also some of the journalists kept asking this question. But I think the agreement between JDU and BJP, and that we were fighting the election with Nitish Ji's face, and many BJP leaders even said that there is no vacancy on the chief ministerial seat. So that was quite obvious, and we are pretty sure that Nitish Ji is going to lead the government. Sir, if you could just tell us, you've done a lot for women, and they really do support Nitish Ji. What are you going to do for men? I think. What about jobs? I mean, don't they need jobs? Aren't men important? No, men are very important, and it's not that the government has not been doing anything for men. There are so many schemes where men are also taking advantage, starting from self-employment to employment, and other like economic support that the men of states, EBCs and poor families that they are getting. It's just that Nitish Ji's empowerment model started to focus on women and also on the extra backward caste or the Mahadalits, because in the Nitish Ji's development framework, it's always been the issue has always been, or the focus has always been on the importance of empowering those who were lagging behind in the development, on the development curve. So that was always the focus of Nitish Ji, and somehow whatever he did for the women and whatever the government offered to the women are ready to catch, starting from the bicycles to, their reservation in panchayats, their reservation in police. If you go, all of these really worked very well. Women were quite receptive of whatever they were getting by the government. 30 lakh men are emigrating every year. So the question is, what is the government going to do about that? That's a lot of people. And whatever the government is doing for the men, it's not the men or the women, it's the people of Bihar. 30 lakh are emigrating out of Bihar. And there's nothing that one can see that the government is doing to reduce that number. So
if you look at our the manifesto, and I was also part of the manifesto team, we really focused quite a bit on industrialization and employment generation. And I think the industries are going to be the focus of the Bihar government from now onwards. For the next 5 years, we are going to, welcome, and we have already the new industrial policy in place, and that is going to create a very good ecosystem. We have, by improving the law and order, by improving the roads, by improving all the infrastructure, including electricity, now there is a very positive, conducive environment for the industries to come and invest in the state. And now we are hoping that, and we will very actively work towards, both central and state government will actively work towards, generating employment through bringing industries into the state, big industries. When I'm saying industries, that for at least 10 years that you're going to bring industry in, and there's nothing coming. Is it that some people say that you ought not to go for these fancy industries, but for things like agri-industries, like textiles, which utilizes the semi-skilled labor that's available in Bihar, rather than expecting guys from Harvard to come and work in Bihar? No. So that's not the case. We are very much going to focus on agro-based industries. We have also set up this Makhana board. Makhana, maize, banana, these are big produce of Bihar, and we are going to bring investment and industries into this sector. So agro industries will be very big, textile will be very big. It's not that we are talking about fancy industry, but on the other hand, we will also create, software parks or the industries where the tech-savvy new young generation can also. Oh, we've just Sanjay, okay, we can hear you again. Sorry, please go ahead. No, so I was saying that we will be focusing, starting from the labor-intensive industries to, technology-based industries, technology-based opportunities, so that all kind of Biharis can be accommodated and can get jobs within the state. So that is going to be our focus. That is going to be our main focus. But that can only be built on education. And education, Shikha just mentioned, the number of universities you have are so few in relative terms. I mean, we saw a place in Bagusarai, which was one huge room, and that was a college, we were told. One big room. So the question is, where is the infrastructure? Sorry? You can buy degrees from there. Yes, you can buy degrees. I don't know what the price is, but I mean, I'd like to buy a few, I must say. It's about You say you want to invest in industry, but we are told that in Bihar, the price of land, which you would need to buy in order to set up industrial parks or anything, is almost as much as it is in Faridabad and Gurgaon. So given that you've given away 20,000 crores just now, where's the money coming from for all this? Cut off. Unfortunately, we've just lost that audio. We'll try and fix that in a moment. Let me just go across to Alok Pandey in Patna. He is now at the residence of Tejasvi and Lalu Prasad Yadav. And what's going on there at the moment, Alok? Is it quiet? They're doing as badly as the Congress. I think victories and losses do tell you a story. I remember being here the last time around, and it was absolute bawal, if I can use that Hindi word. There were lots and lots of people, ठेले, चूड़ा बिक रहा है, बहुत सारा काम हो रहा था. इस बार, it's just, I just want to first show you this actually. So, it was Tejasvi's birthday a few days ago, and a lot of his supporters had actually put up these banners and posters. Yeah, one of these reads, if you just, Manoj will just go there, it says, भारतवर्ष के होने वाले सबसे युवा मुख्यमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. And similarly, there are other posters in this line, all of them, of course, praising Tejasvi a lot. But now I'll ask Manoj to just come this side. If you can just come this side and just pan to the other side where Lalu's house is. And I'll show you the contrast. There's nobody here, actually. That's the thing. There's nobody here. Some of us media people are here.
Lalu Yadav himself just left. I don't know where he went to, but he left. Tejasvi has another residence, which is the leader of opposition's residence. We believe he's there. I done a round there also, and I found absolutely no one there, no entry to his house also. And this side, of course, as you can see, again, just an empty gate, no supporters. This, of course, has been the residence of Rabri Devi, the former chief minister, in her name. It's been allotted in her name, of course. And the Lalu family lives here. Generally, on an election day, you'd have a scenario where, you'd have thousands of RJD supporters here. The last election was much closer, and you had lots and lots of people here. Not the case today. In fact, it's very poignant. One thing that you can see over here is this almost, सूख गई है ये माला. पता नहीं कितने दिन पुरानी है और ये यहाँ पे पड़ी हुई है. But this is about the only presence of anything remotely close to any kind of celebration outside Mr. Yadav's residence here. So if these trends hold, and they do appear like holding, I guess this is what it's going to be out, at least at Circular Road, the long-standing residence of the Yadav family. So, I mean, it's pretty desolate there, as you said, Alok, and last time was a much closer election. In fact, Doc, when you look at the numbers now, Durab, as you were pointing out now, the RJD is actually not doing as well as it was earlier. And the entire Mahagathbandhan seems to be in a spiral. The RJD, the Congress down 11 seats from last time, and the left is down significantly as well. I think it seems to be a sweep against all components of the Mahagathbandhan, every part. Of course, the communists seem to have lost the most. The CPI, MLL, they seem to have taken the biggest hit. But 75 to 48, 19 to 7, they're all about more than 50% hit. Doc, any thoughts? BJP is back to being single largest, but marginally. All along, RJD has been winning only just about 40% of its seats. But Congress is winning less than half that, less than 20% of its seats. That is a shocking difference, 20%. From 19 to 7? No. Now seats contested you have to look at. So I'll give you the exact figure. 50 seats, I think. Yeah. And again, 60, as we pointed out, the AIMM of OAC also down, only leading in a couple of seats. And by the way, Prashant Kishore is now only leading in 1. Started at 4. So things are changing, Manisha Priyam. Yeah, so it's quite clear that there's a massive mandate for the NDA, all its components, and a massive mandate against the MJB, all its components. We can discuss all its components separately, but the fact that the alliances with the Mallas have not worked, which means that the larger alliance that Amit Shah has been instrumental in stitching together with the Nishads, which are another similar community in eastern UP, the Purvanchal has worked. Yogi has been campaigning, which means the campaigns amongst the Thakurs or the Agada Jatis have worked. The BJP itself is concentrated in the Magad Shahabad region to defeat the CPI-ML. They took on a small task for themselves. And I'd not be surprised if they've done very well in that region, taking on Sudama Prasad as a very serious contender. He defeated R.K. Singh of the BJP, and the CPI-ML won that entire belt. So giving an assurance to the upper caste that the BJP will come up and take the CPI-ML makes for the BJP a very, very resurgent vote. Chirag Paswan is doing very well too. He's up 17 from last time. See, last time he was fighting only a few seats in order to... Yeah, that's the key. His number of seats contested is key. He's leading in 18 out of the 29 that he's contested. 29 is what the segments that he won in the Lok Sabha. That's why I asked for about 29 seats to contest. He got it. But if you were to then take a look at, as you said, the different components of the Mahagathbandhan and what has happened with them, Geeta Bhatt, let's talk about the RJD first. I mean, this was in a sense Tejasvi Yadav's big first test out of his father's shadows to lead this election, be the chief ministerial face. He's a young man, he's articulate. What's not working for him in your view? Is it his father's legacy? Yes, of course. I think that plays a very significant role, because there are the large population of Bihar which is still there, who have lived those days, who have seen the kind of a crime, looting, that they had witnessed. People can't go out of their homes after 6 o'clock. Women, kind of rapes taking place. Everything so brazen
and with the approval of the administration. So all that people are still living there, large chunk of them who have seen, witnessed all that. So nobody wants to live those days again. Along with it, I think another aspect is that the kind of a family feud which has come out in open for RJD, Lalu Prasad Yadav, both the brothers, going parting ways. Everything in today's social media, one can see they were at the airport together, not even talking to each other, one mocking the other. These things, this also, it has you see, because here in our country, these social values, family values, these are very significant and important. So that also drives a message to the people that they are not able to hold their family together. So that also has driven, it may not have, politically the elder brother may not have made any significant contribution, but there is a narrative that is set along with the other issues. So I think for RJD, and also if you look at Tejasvi Yadav, I feel that their alliance with Congress and the Vote Adhikar rally where he participated, and later there was so much of conflict between the two political parties, and declaration of chief ministerial position by Mahagathbandhan delayed so long, and everything open, Congress, Mr. Gehlot coming from Delhi and then in a way making a patch up and agreeing to the demands of RJD. So that his leadership, or had it been announced, let us say a month before that, it may have helped him. It may have helped Tejasvi. But that also has, the delay that showed that there is a friction among the coalition partners. So the message to the people of Bihar was that if this is the case today, when they still are in the election, if suppose they get voted then and get elected, then what kind of a governance they are going to give? I think there are more things than that. The fact that this time around Karpuri Thakur has been accorded or awarded the Bharat Ratna by the BJP-led central government. Look at Tejasvi Yadav, does not claim this space as an ideological space. Politics is not an inheritance. One of the important criticisms that the Prime Minister Narendra Modi has been making of them is ye parivarwadi partiyan. One of the important criticisms that Nitish in his finest moments and even in Bonhomie has been making of the RJD is सबसे बड़ा गलती किया कि आपने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया. But the RJD not willing to step beyond its family fiefdom. If the women vote was so important, I would ask that what were the two sisters, one of them in the parliament, the other one was a candidate for the Chhapra Lok Sabha constituency. How much did they do to get the women votes back to the RJD? So definitely ideology needs to take a forefront. The BJP is turned into an ideological party or a caste-based pichhadon ki party in Bihar, and that space being ceded by the RJD is a huge setback for the RJD. The agde pichhadon ki ladai this time around, the BJP may have lesser numbers, but it's able to ground itself now in Bihar saying, हम पिछड़ों की भी लड़ाई लड़ते हैं और कर्पूरी ठाकुर की थाती हमारी है. Wasn't it a legacy that the RJD should have fought for, rather than fighting just for family में ये या परिवार में वो? Politics is about tyag of a certain kind. Both Nitish Kumar and the Prime Minister represent that model. Karpuri himself, Prannoy made a comment on the politicians of Bihar. I think the last leading political leader we had was Karpuri himself. I'd like to take a moment to tell you that Karpuri ji's wife died while doing ropni in the fields. Both her lungs had contracted pneumonia because she stood knee deep as an agricultural laborer in the agricultural fields. This was the life that Karpuri led. These are his chelas. So I think the lessons come, the moment of reckoning has come for both political leaders of the Karpuri tradition, Lalu in his own way and Nitish in his own. And they do owe at least a letter to the Bihari voters and the Bihari politics lovers as to what they learned from Karpuri and in which ways have they lived up to those ideals. Didi, let me ask you a question. Oh dear. You only ask questions, you don't answer. So is this election all about just women? Women voted for the NDA and that's why they won.
I think that's a big factor, and that has been firstly in Bihar. Answer yes or no? Yes. Like you were asked. Yes. And that's why everyone's wooing women across states. Across states. But shall I bring Baki sab. Right. When you give me 10,000 rupees, it's about which women. I've not seen any state. No, but you're an unusual person. I know, so we that I am. expect, We've known that for a long time. Sorry, unusual is an understatement. You are No, there's something that I have not seen in any state. There are all the leading contestants, parties, virtually none of the leaders is contesting. Yeah, interesting. You know, but to tell me, let me ask you a question. When do you think? No, one sec. When do you think Nitish Kumar last fought an election for the Vidhan Sabha? You know, could be before your birth. Must have been sometime. 1995. Yeah, I knew that. He's been the 30 years ago, legislative. he hasn't fought an election. Been an MLC, yeah. He says, I'm for everybody. So if all the leaders now say, By the I'm way, for everybody. that is something about him. He is something for but everybody. everybody is now taking it. Paswan didn't fight. Mr. VIP did not fight. Nobody. Prashant Kishore did not fight. Only Tejaswi fought. I mean, do you find that in any other state where a guy who's a major contender of party doesn't fight elections? Very unusual. But doesn't explain why this victory is women's victory. It is the women's Simple victory. as that. No question about it. Seedhi baat. It's surprising that. Would you go one step further, Shikha, and say not only women, it's the 10,000 rupees? It is, but I wish it would change things for them on the ground. To give you a quick figure, most of these women take loans from private microfinance companies. They are perpetually in debt. They spoke to you about this? Yes, and so the figures say that in 2020, the total number of loans dispersed by these microfinance companies was 5,000 crores. In 2023, for which data is available, it went up to 49,500 crores. Wow, so this is the kind of money that is dispersed, loans that are given. They live in debt all the time. They take one loan to repay the other. And even the 10,000 rupees, we met a number of women outside the banks where the money had come into their accounts. And they said that the recovery agents of these finance companies were waiting there to take the money for the debts that had not been paid. There was a book written in the early 1900s which says an Indian peasant is born in debt, lives in debt, dies in debt. Still true. Add that this was a time that I learned from the women that the price of a cow would be about 50,000 rupees, and that this money was not even enough to buy a guy, but that they would buy bakris, which are like 4,000 or 5,000 rupees. They can buy 2 bakris, which is good enough, which means they can maintain the cycle of milk production if they get 2 bakris. But a lot of them said, बकरी लेके तो घर में रहना पड़ेगा, चराने जाना पड़ेगा, इस पैसे से मैं अंडा चाउमीन का दुकान लगाऊंगी, ठेला लेके कम से कम बाजार में मैं खड़ी रहूंगी. So I think that part I appreciated, that at least it gave them one opportunity where none existed. And one will have to understand that both these political formations going hereafter will have to bring up some political leadership in the form of women. You cannot just have them as tokens and then say, तुम्हारा काम पूरा हुआ, नेतृत्व से अब तुम निकल जाओ और तुम नीचे अंडा चाउमीन बेचो, बकरियां खरीदो, लेकिन सत्ता तो हमारे हाथ में रहेगी. I think those will be arenas for future mobilization by political parties. But today I think it's definitely game set for the NDA. Do you think the opposition spoke enough about women in the campaign? No, not at all. Not at all. You think they did? No, they didn't. So Manish, is this election mainly about women? And a brilliant strategy of 10,000 rupees before, brilliant and blatantly unethical. It was done during the model code of conduct period, etc. But it was brilliant. And so is this election all about women? And now it's coming up to 190 seats for the NDA. Talk about a landslide. डॉक्टर रॉय, ये 190 का जो नंबर है वो सही में सरप्राइजिंग है, लेकिन विमेन इस चुनाव के एक्चुअल किंग मेकर कहिए, गेम चेंजर कहिए. गेम चेंजर मैं कहूँगा कि जो पहले पेंशन की राशि 400 से 1100 बढ़ाई गई और बाद में जो 10,000 रुपये देने की जो पूरी घोषणा हुई, और ये जो 10,000 रुपया दिया गया, ये चुनाव के 2 महीने पहले नहीं दिया गया,
ये चुनाव के 15 दिन पहले से स्टार्ट हुआ और ये आपको मैं बता दूं कि दूसरे चरण का चुनाव हुआ है 11 तारीख को और 9 तारीख तक जो महिलाओं के खाते हैं करीब 30 लाख और महिलाओं के खाते में ये पैसा गया है। तो जब अकाउंट में पैसा होता है और 10,000, मनीषा प्रेम की बात सही है कि मुर्गा भात से अच्छा है 10,000 की राशि, और 10,000 में आपको बताऊं कि ये जो राशि है एक किसी के भी खाते में होता है, किसी ने कोई अभी पैसा खर्च नहीं किया है, सब महिलाओं के खाते में ही पैसा है। और उसका जो इम्पैक्ट जो था वो वोटिंग के दिन खास कर दिखा। और जिस प्रकार से इस बार जीविका दीदियों ने इस पूरे बेनिफिशियरी को मॉनिटर किया, उनको इंश्योर किया कि वो रैली में जाएं, उसके बाद उनका अटेंडेंस पोलिंग डे के दिन 12 बजे तक अधिकांश महिलाओं ने वोटिंग कर दिया था। तो ये पूरा जो आप कह सकते हैं कि महिलाओं के आसपास की जो रणनीति थी वो काफ़ी कारगर साबित हुई। दूसरी बात यह है, अगर डॉक्टर रॉय आपको याद हो, पूर्णिया में हम एक व्यक्ति से मिले थे, उसने कहा था कि नीतीश कुमार भले बीमार हों लेकिन उनकी शख्सियत लोगों को अभी भी इसलिए पसंद आती है कि वो ना केवल बीजेपी और आरजेडी दोनों के जो समर्थक हैं या जो आप कह सकते हैं कि अति उत्साही जो उनके उग्रवादी जो थोड़े से एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो सबको चेक में रखते हैं। और ये आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि ये सबसे बड़ा नीतीश कुमार के पक्ष में गया। भले ही उनके सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार वो पुराने नीतीश कुमार नहीं रहे, लेकिन जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, भले ही वो इलेक्शन रैलीज में फंबल कर रहे हैं। उनको इतना ही लगता है कि देखिए अगर नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी पर बैठे हैं तो बीजेपी और आरजेडी दोनों के जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं दोनों को वो चेक में रखेंगे। डॉक्टर राय, So, what are the issues that did not carry any weight in this election? Did Ghuspetia, was that important? Ghuspetias? वोट चोरी? डॉक्टर रॉय, वो घुसपैठिया वगैरह कुछ नहीं था, वो कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन मैं आपको जैसा बताऊं कि इस बार वो जन सुराज हो या तेजस्वी, दोनों ने 6 महीने पहले से ये जो वादा करना शुरू किया कि हम अगर सरकार में आएंगे तो महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये देंगे, पेंशन की राशि 400 से हम 1,500 कर देंगे। उसने आप कहिए कि एक तरह से एनडीए गवर्नमेंट को प्रेशर डाला और या कहिए कि आपने अपने पत्ते बहुत जल्दी, अपने कार्ड बहुत जल्दी खेल दिए, जिससे कि एनडीए को संभलने का मौका मिला। और एनडीए आप कह सकते हैं कि जो आज से 2 महीने पहले उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो इस पैसे के ट्रांसफर से ना केवल एंटी इनकम्बेंसी खत्म की बल्कि पूरे चुनाव का मोमेंटम भी सेट किया। और आप देखिए, आपने सबसे ज़्यादा बिहार में ट्रैवल किया है, आपने देखा होगा कि कहीं भी लोग नीतीश कुमार की सरकार की आलोचना नहीं कर रहे थे। उनके लिए 10,000 रुपये के बाद भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं था। बिहार के यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक सेशन जो है वो सालों साल लेट चल रहा है, वो कोई मुद्दा नहीं था। थाने में भ्रष्टाचार है, वो कोई मुद्दा नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि पैसे के बाद जो लोगों के खाते में जो नोट गया, उसके बाद उनको एक तरह से आपने वोट देने के लिए आपने कंपेल भी किया और एक तरह से ऑब्लाइज भी किया। No, but I would like to contest what Manish ji is saying, in the sense that, I mean, this projection that 10,000 as if it has been, they have been bribed for voting is something. You see, but the point is that even if somebody has given some money, I mean, when a voter is going inside and on which particular symbol they are pressing the button, nobody can force the voter to do that. That means out of their own will they feel that it is something good that is happening to them. Well, 10,000 is good. Because in Jharkhand just 1,000 rupees JMM gave and they won, so substantially. So they felt that this is going to help them in elevating them out of their present situation, whatever, like it was being told by madam that there is they take personal loans from traders, and so in that they are getting, in fact RJD tried to put this narrative that this money is basically a loan and it is going to be taken back from you with interest. But why not give the 10,000? JDU had to come out with posters saying that this money is for your empowerment. Why the fact that it was given right when the election was happening, when the model code of conduct had kicked in, is that not a bribe?
You see, I mean, they have, it was before that, it did not happen after, otherwise all the opposition parties would have gone to the court. It happened before that, but yes, one can say that it was just before the election was coming, but saying that the voters are being bribed by it, there was no compulsion going inside, and which symbol they are pressing the button, nobody at gunpoint, nobody can tell them. But so it is out of their own will that they were doing. I want to ask you a question. We had also promised 30,000 more, right, on this same scheme, or 20,000 something. This is just the beginning of the law. So do they have the money, and do you think they're actually going to deliver on that now that they've got such a verdict? Once the government comes, then they are going to tell. But overall, I mean, you see, as Dr. Roy has been saying, in Bihar, people, the kind of political maturity, understanding they have, that is, they also understand whatever the negatives which are there in the system which exists. And that is something which has built over the decades. So for any government, yes, it should be a priority that they need to check on that. And how they are going to, in terms of infrastructure, if you look where it stood at 2001, 2002, Bihar, like about opening of industries, 17 public sector companies were shut down, but one signature of Rabdi Devi when she was the chief minister. 2001 or 2002 that had happened. So the kind of... You're saying one is worse than the other. What I'm saying is that the alternative which people of Bihar had in front of them, the kind of history that they had, was something which was not encouraging enough to go and vote for them. But they didn't. They have a baggage. They have a huge baggage with them. But they didn't open those factories again in the next 21 years. They could have opened them. No, 21 years is a short period. Talk about same kela ki kheti, makhana ki kheti. I remember Devilal was once traveling to Bihar. To me, Anisha, why is it the poorest state in this country, 1/5 the largest, the highest income, 1/5? It's 5 times. Why is it the poorest state with the brightest people? I mean, when they leave Bihar, they do so well. That's true, Bengal also. I mean, all I have, even somebody like me who's so well-to-do now, right? I own a few saris. I don't own any land. And the moment I go and claim back, my whole joint family stands up to say that this land is so small, you have a permanent job in the city. Why don't you leave it for us? So a large family just living off land, pushing women out largely to ensure that some of it remains. Agriculture has been hit very badly by climate change, one of those things that nobody is talking about. You go and talk to mothers in the schools. No, but why didn't industry come there? No, jobs. I think the political leaders have let them down. Remember, roads and electricity, both of them build a large network of contractors. So what has happened in Bihar, that this middle caste so-called OBCs, they've become the small-time contractors for public expenditure being rotated through these monies. What has been very credibly done, as she's rightly saying, that in the Nitish Kumar government, the political leader himself is not being blamed for, gaming on public expenditure, which was what the Chara Ghotala was. He's not corrupt. So doing public works, the workfare way of keeping the poor, what Nizamuddin Aulia did by building the Bawlis here, that's all that is happening. Ki garibo ko leke road bana liya. Acha lagta hai. I can go back home, there's a light bulb there. I have studied under kerosene lamps. I can see light bulbs. But what does my mother call me back for? Just saying, ab road ban gaya hai, ab yahan ek bulb hai. And then I have to turn back and ask her, माँ मेरे लिए क्या कोई नौकरी है? एक जगह जहाँ सबसे ज़्यादा नौजवान हो दुनिया के, forget इस thing, वहाँ कॉलेज में पढ़ाने के लिए मेरे जैसे इंसान के लिए एक नौकरी नहीं है. So there are no country roads that are taking me home. There are no country roads that are taking me home. And unfortunately, this time around, the poor women of Bihar have benchmarked us for a transfer of 10,000 rupees. So I think that's the benchmark of electoral redistribution, which is a new form of neoliberal redistribution because the welfare state has collapsed. Why aren't the state investing the same Nitish Kumar, the girls who went to cycles, 20 years, why haven't you done anything for the higher education sector? To look at a slightly positive way, the women have broken through caste differences. Seems like it.
Yeah. Seems like Because these are That's a women big across change. caste, right? Yes, Who are and I think women across caste lines. the It looks panchayat like it. elections have done the trick, and I feel that the lower caste women Panchayat elections, you mean women? reservation for women in panchayats. yeah, because they are speaking out now, and the ones who are speaking out a lot more. And it's not caste based. I mean, women. I mean, men are definitely caste based. So if a woman from the upper caste wants to win, she cannot just stand there because her husband will campaign. She needs the vote of the lower caste. So community-based solidarities at village level have emerged, which are combining the Agda Pichdas and the women candidates because of reservation. So if you have to make somebody's wife or anybody win, the woman win, you need votes from all of the castes. So there are more organic solidarities at the community level, combination politics of Agda Pichda happening, than we would see the trenched battles of the Agda Pichda that the Lalu Raj was known for. So I think the community dynamics has changed immensely. You cannot any longer say, let's exclude the Bhure Bal, etc., and do our politics. Women are leading it. Yeah, women are leading it. And for example, the lower and backward caste women laugh on the upper caste women who say, oh, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मेरे पति मेरे जगह पे मुखिया का काम संभालेंगे. Because the panchayat level representatives from the backward caste, the women, they are out in the public sphere and doing things. So there is a challenge to caste. I don't think we've reached a casteless society. In fact, the reverse. But less caste among women than among men. They're looking at solidarities. Yeah. We have JDU spokesperson Pooja joining us now on Decoder. Pooja, thank you very much for being with us this morning. This would be a great day for the JDU, which I think, yes, is clearly emerged as the single largest party as of now with the leads and results. You must be very pleased. Yeah, after seeing the Rujhan that is coming on the screen here, we are happy. Our whole double engine Sarkar and NDA, if we have the other spokesperson from the NDA also, they must also be rejoicing here. But the rejoice is because we went to ask for the votes of the people on the basis of the welfare that we had done in these 20 years. As the saying goes in Bihar, that the people in Bihar, they don't cast their vote, they vote their caste. But I think 2025 elections, the Bihar Vidhan Sabha elections, are going to change the concept, are going to change the misconception that the people earlier had, that only caste-based election is done in Bihar. Only caste is the decisive factor that is taken into account. But this time, it was only the welfare, the development that was done in these 20 years by our double engine Sarkar and the crusader, I would say, Nitish Kumar ji. He is the maker of Bihar, the person who changed everything, the person who changed the face of Bihar, not only in India, but outside India. So I think he being called by the UN, he was called as the climate leader and a global thinker. So that statement goes perfect. And with the scores that we are having on the board, that stands a proof to it. Well, we're also joined by the BJP spokesperson Rohan Gupta this morning. Rohan, the last time you and I met, you were in the Congress, so forgive me for cracking a little joke on that. But good day for the JDU and for the BJP, which has also done well on the basis of its own performance. Given the way the results are going so far, would you say that the chief ministership question has now been put to rest? It will be Nitish Kumar once again. See, basically, I was on ground for last 5 months in Bihar, and I could see the result, the sense that it is pro-incumbency this time. You have heard of anti-incumbency, but this was the first time that pro-incumbency Bihar could see. What Mr. Modi has done across the country for last so many years, same is getting repeated in Bihar, that you have to work on ground. All your narratives, all your caste, religion, all these narratives are not going to work. Are you able to make changes in life of common people? Yes. If the answer is yes, definitely they'll vote for you. So if you see the result, till yesterday we were talking that only women voter will vote for NDA or that the increase is because of that. Today, if you see, irrespective of caste, irrespective of religion or gender, everybody has voted for NDA. And now today evening, all these Mahagathbandhan leaders will cry outside the office of Election Commission that vote chori hua, because they are not able to understand the pulse of people. This is the win of the work which is done on ground. This is the win
of last 20 years of good development which Bihar has seen, and this is the win of the expectation of people for next 5 years, that on ground the same work will be repeated and Bihar will touch the new heights. So all the negative politics or narrative has Chief Minister completely again. Is that settled? That, so again, the answer is very, very clear that the board will meet. The member of Legislative Assembly, they will meet and they will decide their leader. The stand has been very clear, and the same is today. So there is absolutely no confusion on that. And this kind of win, we have to be very, very careful. We have to fulfill the expectation of people of Bihar. So the member of Legislative Assemblies, they will meet and they will decide their leader, and that will be the CM of Bihar. Right. So I think you're saying that you're going to follow a certain process, but when you say that the sentiments of the people of Bihar have to be respected, that means that clearly looking at the numbers, you would have to respect Nitish Kumar back in the chair. Yeah, so that's what I'm saying. So once you follow the process, last time also our number was more than JDU. But at the end of the day, the sentiments were respected and the voice of the ground. When you have such a huge mandate from people, you have to be very, very careful. We are not like Mahagathbandhan or Congress party that even after being national party, they don't hear the voice of the people. We have to hear the voice of Bihar. What is the message out of this mandate? And we have to follow that mandate. So we were actually, Rohan, just to be cheeky, we were trying to add up RJD, JDU and Congress and all, and wondering whether they could also form the government. Are there any secret fears in the BJP that if you don't make Nitish the chief minister, that he may do a runner? Not unheard of. It's a win of team NDA, right? So I don't see that, there are ifs and buts. This is an unprecedented win, what Bihar has seen. And one side, whatever exit polls and all the exit polls have been proven wrong now when we are talking. Because the sentiments on ground are completely different. People have seen the development and they want to see more from Team NDA. So whatever this Team NDA is going to decide, I think people will see that NDA will come stronger, work stronger, and ensure that Bihar is one of the top states of the India. Right. Let me just go back to Pooja for a second. The point that Rohan Gupta was making was that this wasn't just about women voters, but a huge sort of pro-incumbency verdict for the JDU, for the NDA alliance. Would you agree with that? How much of a factor do you think women voters were, and how much was it others? See, I think whenever women have casted their vote and the vote percentage of the women has been high in any of the assembly elections in Bihar, it has always been for the double engine Sankar and for the NDA. And with the percentage that was taken out by the election commission, then women have voted more. I would like to bring in the statistics and data a little here. You must also be having it. In 2010, JDU 115 seats, but the women voted, the women turnout was on 79 seats. In 2015, JDU won 71 seats, but more women turnout was on 61 seats. And in 2020, 43 was won by JDU, and the turnout of the women voters was more in 37 seats. So whenever the women have stepped out of their houses and they have casted their vote, it has always been based on the welfare or the women empowerment schemes, women empowerment steps that were taken by the India government and steps taken by Nitish Kumar ji. So I think women play, the Adi Abadi as we call, they play a very, very decisive role as far as the Bihar elections are concerned. We also have Bibek Kumar, spokesperson of the RJD, joining us. Thank you very much, Bibek Kumar, for being with us. It's not an easy job to be on air when your party isn't doing so well. You must be pretty disappointed the way it's going so far. First of all, thank you so much for having me on the panel. Certainly, I mean, the numbers are not very encouraging for us, but we'll have to accept that this is the trends, not the final results. Okay, so please wait. Don't call the election just right now. It's 11:10 a.m. in the morning. So we are still hopeful, but if this is the final result, what people are saying, I mean, especially if you heard the NDA people in different panels,
they are thinking that this is the final result. If this is the final result, then obviously you'll have to sit and retrospect. Then what happened and how which votes went which side, and if the kind of expectation that we had, okay, and the narratives that was played by the NDA, if they became successful in that. But if you just had to take a look at your campaign for a moment, and assuming that this is the way the result goes, plus minus a few seats here and there, what do you think you did wrong in the campaign? What could you have done differently? No, it's not. It's not about doing. It's all about the numbers. I mean, it's not about. We fought our election with sincerity and unity. But the point is, if you look at the campaigning, I mean, we are very hopeful, and still we are hopeful, and even if you followed the media, I mean, obviously your people were there in the ground. Okay, we could pull the crowd, and people were coming with us. It was not like that. Our rallies were empty. Okay. But let us see. I mean, the narrative that was played by the ruling, especially Prime Minister, is saying that हमें double engine की सरकार चाहिए. Okay, so these are against say the system that we have, the federal system that we have, that we are at the center and bring us in the state. Okay, that these kind of campaigning, and the 10,000 rupees, we should not forget the 10,000 rupees bribe that was given just before the first page and just before the second page on 7th of this month. Can I ask you about your allies also? I mean, one is your what looks like a disappointing performance for the RJD itself, but your allies have taken a really big beating at the moment, including the Congress, which is right now only leading in 5 seats. It's behind the CPI-ML at the moment, which has 6. Again, will you need to go back to the drawing board and relook at these alliances a little more carefully after you get all the results? Problem is not about alliances. Certainly, whenever the things are not in your favor, and we believe in going back to the drawing board and discussing this and doing the Atma Manthan and Atma Chintan, and that obviously party will do. But please don't call the election. I mean, this is at only 11:15 a.m. in the morning. So let us wait and see the final results. 6 p.m. Then only we should be judgmental about the body of Bihar. But Manisha ji has a question for you. Manisha. अभी देखिए, जो भी समय घड़ी की तरफ एक तरह से देखना हो सकता है, वो भी नंबर ही है एक, लेकिन आप आंकड़ों की तरफ देखिए, सुबह से गिरती जा रही ढलान ही, कभी आरजेडी 75 सीटों के आसपास, 72 के आसपास थी, और अभी सीधा आधा 36 सीटों पे है. और जहां जहां आप हार रहे हैं, आपके पूरे गढ़ थे ये इलाके. खेसारी लाल यादव ट्रेल कर रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी ट्रेल कर रहे हैं, और ये सब लालू जी की कर्मभूमि के इलाके छपरा सारण में है. तो कुछ सवाल तो हम पूछ ही सकते हैं. आप हमें इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, हम करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा आपका जो ओरिजिनल जो गढ़ रहा है, वहां भी आप अच्छा नहीं कर रहे हैं. तो अब सवाल कभी तो पूछेंगे हम आपसे. नहीं, बिल्कुल हम लोग यही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं. देखिए, अवध जी सिवान से ट्रेल कर रहे हैं. अवध जी के लिए लालू जी ने कितनी लड़ाई लड़के उनको टिकट दिलवाया. खेसारी जी ट्रेल कर रहे हैं. आप बताइए, आप छोटी कुमारी से खेसारी लाल यादव ट्रेल कर जाएं, तब भी हम सवाल नहीं पूछें. ना, सवाल पूछने के लिए कोई मना नहीं है, और सवाल का जवाब देने के लिए भी है. और जनता, देखिए, जनता का मैंडेट है, जनता का मैंडेट को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना मैम. और ये मानना पड़ेगा कि अगर हम अपने गढ़ में, जहाँ पे हम 60% 80% सीटें जीत रहे थे, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की सीटें जीत रहे थे, अगर वहां पर भी हमें अभी ट्रेल कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि अभी कितना प्रतिशत वोट वहां पे काउंट हुआ है. ये भी जरूरी है ना देखना. अगर वो ट्रेल कर रहे हैं का मतलब ये नहीं कि 2 घंटे में फिगर चेंज नहीं हो सकता है. नहीं हो सकता है. मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, वो राघोपुर के लिए. देखिए, मैं बोल नहीं रही थी,
लेकिन मुझे चिंता व्यक्त की गई थी कि राघोपुर में पिछली बार भी तेजस्वी जी का विनिंग मार्जिन स्लेंडर था और इस बार तेज प्रताप जी सीधा कैंपेनिंग के लिए उनके वहां पहुंच गए, तो वहां की जनता में भी कुछ एक दिक्कत थी, तकलीफ थी उनको। तो राघोपुर में ये ट्रेलिंग भी आना, यहाँ तो एकदम थंपिंग मेजॉरिटी से उनको जीतना चाहिए था। आप अभी जो हालात हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे राघोपुर के लिए विशेष रूप से? नहीं, राघोपुर जो ट्रेलिंग अभी कर रही है, ट्रेलिंग की स्थिति नहीं रहेगी। मैं तो अभी यही कहना चाहता हूँ, वो राघोपुर हम लोग जीत रहे हैं। मार्जिन पिछली बार भी कम था, हम जानते हैं, लेकिन इस बार हमने उसको पाटने का कोशिश किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि राघोपुर हम लोग ठीक पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। जी। But sir, you said how many rounds? We are already more than 50% of the constituencies are at 4 rounds and plus. So, where do you think the change will come? Sir, 50%. Are you saying that 50% votes have been counted? I'm saying 50% of assembly segments have counted 4 rounds at least. Some have counted 6, some have counted 9. 50% कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 राउंड हो चुका है। नहीं, ठीक है, कितने राउंड में से 4 राउंड हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। टोटल राउंड्स 16. Total rounds. It's quite a good survey. It depends upon the size of the constituency. 16 से 18. If you look at the EC side, your candidates are trailing by 5,000, 7,000, 8,000 votes. So it's not that easy to make up this kind of margin. तो बिल्कुल देखिए, 5,000, 7,000, 2,000, 3,000 वोटों का जो ट्रेलिंग है, वो तो अब अगर आप कह रहे हैं कि 50% जो सीट्स हैं जिनमें 4-4 राउंड हो चुके हैं और जहां पे 20 राउंड, 22 राउंड, 25 राउंड, 18 राउंड का वोटिंग काउंट होना है, तो इसको अभी आप कॉल ना करें। दिस शुड नॉट बी टेकन एज ए फाइनल डिसीजन। ये एक ट्रेंड है और ट्रेंड की तरह से ही देखा जाए, और जो फाइनल डिसीजन हमारे इस चर्चा में रहते रहते अभी और क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग बात करेंगे। बाकी आपको भी पता है कि बहुत कम मार्जिन का संभावना इस बार हम लोग पहले से ही इसलिए भी कर रहे थे कि इस बार चीजें डिफरेंट थी। नए नए प्लेयर्स भी बिहार के इलेक्शन में आए थे, आप सभी जानते हैं। तो ऑब्वियसली वो वाला नहीं सिचुएशन है कि इट्स एनडीए वर्सेस यूपीए, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। तो अभी जिस तरह का जनसुराज पार्टी भी आया, जो कि नहीं था पिछली बार, है ना, उसके 5-7% वोट भी बहुत मायने रखता है। तो मार्जिन हो सकता है बहुत कम रहे, लेकिन हम पूरा होपफुल है कि अभी जैसे 50-60% वोट का काउंट होगा, हम लोग। सर, अभी एनडीए का वोट शेयर है 48%, आपका है 37%, तो 11% काफी नहीं है गैप। बिल्कुल सही है सर। देखिए, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे 2-3% का वोट से भी सीटें काफी प्रभावित होती है ना। तो ये तो बहुत बड़ा गैप है अभी एनडीए और यूपीए का। लेकिन उस तरह से एग्रीगेशन में चीजों को अगर आप नहीं देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखेंगे, तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा अच्छा से एनालाइज कर पाएंगे। Right. Just to briefly go back to Pooja of the JDU, that how do you sort of deal with the criticism of the so-called bribe to women voters with the 10,000 rupees being announced on the eve of elections? Is that not an inducement? Should it not have been announced earlier? How do you see it? See, I think the Mahagarbandhan, they tried to set a false narrative that we are trying to lure the women votes in Bihar through the 10,000 amount that was given or was sent in the account, which we call as the direct benefit transfers. But if we go back to history, in 2005 when Nitish Kumar ji came into power, in 2006 he made a 50% reservation in Panchayati Raj, and that was not the time of election. In 2007 he made a 50% reservation in the Nakar Nikayas, that was also not the time of elections. He came out with his cycle schemes, distributing cycle to the girls who went to school. That was also not the time of elections. So Nitish Kumar ji has always been a pro-woman empowerment person. And I think putting that blame on us, that 10,000 was given to lure the women vote, I think with this number that is there on the screen,
It puts a shut to each and every allegation that was put on us. And why did Tejasvi Yadav in his manifesto, if according to him, we were bribing the women by giving 10,000, then why did he also have that 30,000 to be transferred, which he made in the press conference that he had a few days back? He said that 30,000 amount, if we come into power, will be transferred on the 14th of January. So if you are criticizing us, if the Mahagathbandhan is criticizing us that we are trying to bribe the women votes, then what is that 30,000? Nitish Kumar ji has always, since the time he came into power, he has worked marvelous. He has worked in a splendid way as far as the women empowerment is concerned. We sitting as women here, we know, we have seen, because I used to go in the Lalu times, the Jungle Raj time, I was there as a student. I have seen the black days of that times, and women who are voters here, they have not come out of the fear of Jungle Raj. So I think that point has compelled the women to come out of their houses because they don't want the Mahagathbandhan. And Tejasvi Yadav ji, he had said that when he comes to power in just a 20-month span, he will be bringing industries. So I always question that what kind of industry he was talking about. Was he talking about the industry of loot? Was he talking about the industry of dacoity? Was he talking about the industry of ransom, industry of rape? What kind of industry he was talking about? Because we teach history. They ask us that why we repeat the statement Jungle Raj. We as being in the power for 20 years, it is our duty to remind the youth who have not seen the black face that what that Jungle Raj was. Because history tells us that please don't repeat the mistake that you have committed in the past. So that is why the word Jungle Raj is always addressed from each and every munch, each and every sammelan that the NDA had. Madam, you asked a question saying what kind of industries would Tejasvi brought, or rape or whatever. What kind of industries has Nitish brought in the last 20 years? So we and next 25 years? Bihar is stagnating. There is no question about that. And through all governments, I'm not saying only your government, but all governments. But 20 years is a long time to give somebody a chance to do something. And nothing has been done. People go abroad, out to the state year after year after year. The economy is stagnating. There's no industry. How are you going to, Bihar and UP between them account for 25% of the population of India? If they don't grow fast, how is the country going to grow? Sir, whatever point you're making, if we go into a comparative, what was there in earlier to 2005 and what is there after 2005, there has been a growth, there has been a drastic jump in the growth rate. Now the growth rate is about 14.47%, which is 10% more than that was a decade ago. The GSDP has also increased from in 2011 to 2012. It was just a minor 2.47 lakh crores. And now in 2023 to 24, we need to see a comparison that was there. If we see that in 2025, this is what it is, but we need to go into a comparison of the statistics and the data. So in the GSDP in 2023 to 24, it is 8.54 lakh crores. Madam, if we go to the, yes sir, yes. Madam, please, like we keep saying, we are the largest and fastest growing economy in the world in India. We grow at 6%. China grows at 4%. China is 4 times our economy. So the question is, your base is so low that you have to grow faster and faster to increase your share. In the 1970s, your share of the Indian economy was 7%. Now it's 5%. It's just going down. So you need to do that. Great that you're doing 11%, but is that enough is the question to bring you out and lift all of us up as a country? Because Bihar and UP, they must lift themselves up to lift us up as a country. Yes, sir. I agree with you. So that is what our manifesto also tells, that we will be bringing a revolution, an industrial revolution, if we are given a chance, and we are getting a chance. Correct. We are seeing the scores on the screen. We have signed in 2023, we had the Bihar Investment Summit, and around 278 MOUs have been signed. So we are on a process of creating Bihar now an industrial state. So that is why we went to the people, we asked 5 years more so that we work harder and harder, and we can see that the people have put in their faith on us,
and they have voted for us. Vivek Kumar of the RJD wanted to respond to something you said. Go ahead, Mr. Kumar. So thank you. Actually, they are very good at building the narrative. Okay. So just give me 2-3 minutes, ma'am. I just want to share some information about the development that have taken place in the country, the growth that have taken place in the country. So all of us know that what was the growth rate before 1991 in the economy? Obviously, it was called a Hindu growth rate, all of us know. So Bihar was part of India, so Bihar is still part of India, and Bihar was one of the Bimaru states, okay, along with Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and all. And the economy of India started growing faster from 2002 to 2003. So the Bihar also got the benefit of that growth that India was achieving after second generation of economic reform that began after 2002-2003. So, but my point is that if in 20 years you could not bring any industry, okay, and the tag of Jungle Raj that is levied on RJD government of that time, that was, we are telling this again and again, that this Jungle Raj comment from High Court was for the Patna Municipal Corporation on a waterlogging problem in the Patna city, not on the governance issue. And secondly, that for last 20 years, you have nothing to show that you have achieved in the state in terms of progressing, stopping the migrants who are going out of Bihar and bringing industry and all. You are only giving us the data of electricity and the roads. And if anybody can tell me in which state in last 20-25 years the roads have not improved in the country and the electricity availability have not improved in the country. If you look at the NFHS data, latest 2023, then you find that across states, whosoever is ruling this state, these infrastructures have improved. But Bihar is a special state where, despite improvement in the road infrastructure and the electricity, along with other states that have taken place in the country, industry have not come. And Bihar is still the lowest per capita income state in the country. Yeah, well, I think so those are the contradictions. Those are the contradictions that we have been talking about all morning, actually, to try and understand which way the people of Bihar have voted and why, and how this plays out across different groups. Thank you very much, to all of you for joining us. Coming back to those contradictions again, Shikha, the point that has been made is why, despite the poverty, and again, when I saw all of your reports, you highlighted the very sort of corruption that's so common on the ground that people just take it as a given. Like even for rations, if you're allotted 5 kilos of rice, you'll get 4 because 1 kilo will be siphoned off. Like yeah. So we met a scooter driver who said I was given 2.5 lakhs loan from the government, but officials took 50,000. I got 2 lakhs. I got the rest. But officially into my account, 2.5. This is for all the housing building loans. You have to pay between 10 and 20% depending on which part of Bihar you're in. And yet, they've even the voted, it's a pro-incumbency vote. The women who have obviously voted for the NDA, the loan that they take from the microfinance companies, a woman told me that she took a loan of 1 lakh rupees, but she only got 70,000 in hand because 30,000 had to be paid as bribes. On that, the interest rate is between 5,000 to 6,000 rupees per month. So they take one loan to pay off the other loan. And I just also want to point out one thing with the focus on women and how much Nitish Kumar has done for women. The national average of women who in the labor force is around 50%, nearly 50%. In Bihar, it is less than 30%. Yeah. So that is the 20% gap between the... When we were driving around, it was harvest time. Yeah. Only women harvesting, only women carrying. What are the men doing? Good life, man. The less educated you are as a woman, that's the only chance you have of getting any work. So the most disadvantaged is any Bihari woman, whoever aspires to get educated,
And God forbid if she does get educated, there's just no employment for her. So you can see the conundrum. Bihar is a trapped state, it's a labor reserve. I can't quite remember, maybe you know. The NDA has got all these seats based on the women. How many women candidates have they got? 34, I think. Out of 243. Yeah, it's not good for women to raise these issues. Ultimately, it's my sisters who've got the 10,000 rupees. So please don't ask me to raise any more issues about women. I'm happy. By the way, but did you get 10,000? Why should I tell you? Okay, he might give you 7,000. No, the other thing that I read was in Bihar, 20 to 25% of the people who are supposed to be employed are working in what is called home industry or home thing, which actually means they're working for some family business in a shop and this kind of thing. So they're not shown as unemployed. That's why the unemployment rate is 10%, because all this is hidden. Yeah, and these people are not earning almost nothing. Right, it's a family business, correct. Now you're shocked at the women, but I don't know why you're shocked at this result. In 2010, is this going to break that record? The JDU, BJP got 206 seats. Are they going to break that record? How many are Just neck there, and I neck. think. Only 2010. Yeah. This is research done by Namrata and Iram. All the data is done by Namrata and Iram. And God bless them. So any errors is their fault. Sorry, This any is errors is amazing Gora's result. fault. Amazing result. I mean, the one thing that does surprise me is that it was the CPI-ML that had kind of articulated these voices about you get the 10,000 rupees, tomorrow those who are giving the loans to you, they'll come knocking at your doors. They did have a woman leader in the form of Shashi Yadav who they were taking around. And in the Lok Sabha elections, when there was such an onslaught against the RJD, it didn't do well in the Chhapra or the Tirhut region or even in the Kosi region. But the CPI-ML and the RJD had held ground in the south central Bihar. It does surprise me whether it's now the entire alliance that's being pulled down, and even the left has not been able to protect its stronghold. So tomorrow is a different day, and I believe that Tejasvi may be a Gen Z attracting leader or whatever, but doesn't really understand the ideology that holds the politics of poverty together. There will be harakiri, and I believe that these results are unanticipated, not because of the victory of the NDA, which I had seen coming, but the scale of victory of the NDA and absolutely disappointing results from each one of the alliance partners of the MGB. Any issue that they put forward to the electorate, all of it rejected lock, stock and barrel. Yeah, it is. It's actually like every constituent has been. Yeah. But harakiri, what do you mean by that? What As do in you a think will happen? churning internally, politically. Yeah, I mean, guns will be out. I mean, look at the fact that this election was different, and the BJP and the JDU had sensed it. Nitish Kumar did not go out campaigning. There was no chehre ki rajniti. The BJP didn't do it. On the other side, RJD did such a strong chehre ki rajniti. Ye hamara chief minister hai. Baki alliance partners who were very active and in the forefront till September 1. Suddenly you had Tejasvi at the forefront. So I think they've got a lot of things abysmally wrong. Tejasvi not flanked by even his party members. There's somebody called Sudhakar Singh, who's a member of parliament from the Sasaram side. I don't remember the exact constituency. He's been fighting on issues of farmers. Very good member of parliament from the RJD. Sudhakar was nowhere in the picture. Abdul Bari Siddiqui couldn't see him. Abdul Bari Siddiqui's son is now quite They're showing Kosi, which has got the highest percentage of women turnout over men. They've gone up 6% from 44 to 50%, and it had a very high turnout last time also. And how well has the NDA been doing in this area? That would be the... Always has done well. It's won 70% of its seats. So this is the Rome mein Pope, Madhepura mein Gop. So neither the high script, politics or the vernaculars of Indian democracy that Lalu Yadav was the champion of
even that script is being rewritten. I mean, you have to concede this defeat. Let's just go across to Manish back in Patna there. So Manish, now I think it's pretty clear, although the RJD was trying to put up a brave face, but do you agree with what Manisha Priyam was saying about sort of the internal churning now, especially within the opposition and the RJD in particular, about what to do next? Will the knives be out for Tejasvi? ऑफ कोर्स तेजस्वी को ये सोचना होगा कि आखिर आने वाले दिनों में क्या रणनीति बनाए, क्योंकि जो भी उन्होंने रणनीति इस चुनाव के लिए बनाई थी वो तो कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको निधि बता दूं कि डॉक्टर रॉय ने जब बिहार के फर्स्ट ट्रिप के एंड में ही उन्होंने कई बार मुझे कहा था कि ये चुनाव जो है वो लैंडस्लाइड होने वाला है एनडीए का। तो डॉक्टर रॉय को पहले मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि लैंडस्लाइड एनडीए की विक्ट्री है। और दूसरी बात है कि हर चुनाव में एक मुद्दा होता है, एक मुद्दा जो काफ़ी कारगर होता है। एसआईआर का मुद्दा उठाया, ऑपोजिशन उसमें गैल्वेनाइज हुई, उन्होंने काफ़ी अच्छा कैंपेन किया, लेकिन जो इलेक्टोरल रोल का जो मैल प्रैक्टिसेस है, क्योंकि हमने कई सारे चुनाव के दौरान देखे कि जो वोटर जिन्होंने दिल्ली में वोट किया, हरियाणा में वोट किया, वो बिहार में भी वोट कर रहे थे और ये सारे बीजेपी के ही समर्थक निकले। तो वो लगता है कि चुनाव आयोग ने जो दावा किया था कि उनका सब कुछ फ्री एंड फेयर है, वो शायद उतना वो इफ़ेक्टिव नहीं था। लेकिन इस चुनाव का जो गेम चेंजर, निधि में शुरू से और सुबह से बोल रहा हूँ कि पहली बार बिहार में 10,000 रुपये जो है 1,60,00,000 महिलाओं के उससे कहीं अधिक भी जो है उनके खाते में आए, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इस चुनाव के ऊपर देखा गया, क्योंकि जातियां इस चुनाव में भी टूटी। जब भी लैंडस्लाइड विक्ट्री होता है तो उसमें जो इस्टेब्लिश्ड जो या ट्रेडिशनल जो उस स्टेट का वोटिंग पैटर्न होता है वो ब्रेक होता है। इस बार भी ब्रेक हुआ है। महिलाएं, क्योंकि मैं आपको एक विजुअल बताता हूं, डॉक्टर रॉय भी गए थे उस बैंक में। हम एक मनेर एक जगह है जो पटना से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आरजेडी का स्ट्रांग होल्ड है, आरजेडी के एमएलए जो हैं वो वहाँ से फिर जीतेंगे। लेकिन वहाँ पर एक एसबीआई का ब्रांच था, उस एसबीआई के ब्रांच में करीब 400 महिलाएं बैंक के ब्रांच के अंदर और बाहर लाइन लगा के अपना पासबुक अपडेट कर रही थी, और वो मोस्टली जो है वो यादव जाति से महिलाएं आ रही थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि जातियां टूटी हैं। 10,000 आज की तारीख में बिहार की सबसे बड़ी जाति बनकर उभरी है, और इसने जो अब तक की बिहार की जो जातियों का वोटिंग पैटर्न था उसमें एक शिफ्ट दिखा। और यही देखिए, बीजेपी या जेडीयू जब चुनाव जीतती है तो उसके पीछे कई सारे कारण गिनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस के कैंपेनिंग का दारोमदार होता है और अमित शाह के ऊपर में बीजेपी के कैंपेन का। लेकिन अभी भी अगर मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी बड़े अच्छे नेता हैं, बड़े ऑनेस्ट नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार से जितनी ईमानदारी और जितनी मेहनत से अमित शाह चुनाव के मैदान या चुनाव के दौरान मैक्रो मैनेज करते हैं, कई शहरों में वो रात में उन्होंने रुककर वहाँ पर लोगों के साथ में रिव्यू किया, जो भी वहाँ पर कठिनाइयाँ थी सीटों पर उसका समस्या का निदान करने की कोशिश की, सॉल्यूशन ढूंढा और चुनाव में एक तरह से कमबैक किया। वो पूरी तरीके से जो है राहुल गांधी के कैंपेन में वो अभाव दिखता है। और जब तक कांग्रेस चुनाव में मैक्रो मैनेजमेंट नहीं सीखेगी, कहीं ना कहीं उनको चुनाव लड़ना आज के नरेंद्र मोदी या अमित शाह से सीखना होगा। ऑफ कोर्स निधि, ये बात सही है कि अभी तक जिन भी राज्यों में महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं वहाँ पे इनकम्बेंट गवर्नमेंट री इलेक्ट हुई है। एक एक्सेप्शन है जगन मोहन रेड्डी का, लेकिन मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, सभी जगहों में सरकार री इलेक्ट हुई है और बिहार में भी यही कुछ कमोबेश यही हुआ है। ये है विक्ट्री का जो लेवल है, वो आप कह सकते हैं कि किसी ने शायद इसको एंटिसिपेट नहीं किया था। लेकिन डॉक्टर रॉय, मैं फिर डॉक्टर रॉय को बधाई देता हूं, क्योंकि डॉक्टर रॉय ने 4 दिन के ट्रिप के बाद ही कहा था कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है। निधि, मनीष जी, एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किसने किया था? राहुल गांधी 1 सितंबर के बाद चले गए,
आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया कांग्रेस पार्टी का? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो कुछ भी होता है वो राहुल गांधी ही के अंतिम मोहर लगने के बाद होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में भी धांधलियों की शिकायत हुई, लेकिन धांधलियां कम थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब आपके हाथ से जैसे ही सरकार ने 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डालने शुरू किए, मनीषा कहीं ना कहीं वो पूरा मोमेंटम जो है ऑपोजिशन के हाथ से निकल चुका था। उसका काउंटर भले ही उन्होंने कहा कि वो 30,000 रुपये देंगे, लेकिन जब खाते में पैसे जा रहे हों और चुनाव वो भी वोटिंग के 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले आ रहे हों, वैसे में महिलाओं से ये उम्मीद करना कि वो पैसे देने वालों के पक्ष में वोटिंग ना कर पैसे देने का वादा करने वालों के पक्ष में वोटिंग करेंगी, थोड़ा सा अनफेयर होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये समझ में नहीं आता है कि कोई भी दमदार कैंडिडेट किसी भी मुद्दे पे कहीं भी जीतता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस की अगर 5 सीटें रह जाती हैं, जो कि अभी ट्रेंड्स यही दिखा रहे हैं, तो ये केवल 10,000 की बात नहीं है। क्या कोई स्थानीय नेता भी नहीं रह गया? क्या कोई उनके मुद्दे और आइडियोलॉजी पर पुराना गढ़ा हुआ नेता भी नहीं रह गया? तो कांग्रेस की स्थानीय जो लीडरशिप है, चाहे वो राजेश राम जी हैं या कृष्णा अल्लावरू जी हैं, इन लोगों में से कोई तो जिम्मेवार होगा। राहुल गांधी जी ने टिकट तो खुद नहीं दिए होंगे ना, तो ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं कोई किशोरी लाल भी नहीं थे क्या वहाँ कांग्रेस पार्टी के, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कम से कम से के रखते? They will do introspection after the high command. We are joined now by Mr. K.K. Mishra, spokesperson of the BJP. Mr. Mishra, sorry to keep you waiting. There were some technical issues. With everybody saying women's vote was crucial, significantly BJP has an image of being a more male dominated support base. So do you give a lot of the credit of this victory to Nitish Kumar? I think Prannoy ji is speaking. Prannoy ji, मुझे लगता है कि it is not a one factor, it's a multifactorial. अभी हमसे पहले जो बोल रहे थे वो सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे थे कि महिला को जो पैसे गए, और it's multifactorial. और ये डबल इंजन की सरकार है, इसने अपनी रिलायबिलिटी को प्रूफ किया है, और सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे देश की बात है। एक तरफ तो ये सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश जी का जो सुशासन था, एक तरफ ये रिलायबिलिटी थी, दूसरी तरफ आरजेडी का जंगल राज। कल का अगर तेजस्वी यादव का सुबह 10 बजे का ट्वीट देखिए, उसकी लैंग्वेज देखिए, जैसे जंगल राज लाने की धमकी देने की बात कर रहे हैं। एक ये सबसे बड़ा फैक्टर, और इससे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है कि कांग्रेस को और जो इंडी गठबंधन है या महागठबंधन जो भी कांग्रेस के साथ एलाई कर रहे हैं स्टेट में, वो बीजेपी का विरोध करें, दैट इज ओके इन लोकतंत्र। बीजेपी के साथ एनडीए का भी विरोध करें, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन जब वो बीजेपी और एनडीए का विरोध करते करते जब वो देश का विरोध करने लगते हैं, देश के खिलाफ बाहर जाकर के बोलने लगते हैं, और जो सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी है हिंदुओं के विरोध में सीना खोल के खड़े हो जाते हैं, और खड़े ही नहीं होते। अगर कोई उसको कुछ गलत भी कर रहा होता है, चाहे देश के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ, वो उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करते। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आपका जो मोटो है ना, जिस इंटेंट से आप आना चाहते हैं लोकतंत्र में वापस, वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बीजेपी जो भी करे सब गलत है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना। आप अपोज करो, दैट इज ओके, वेलकम ऑलवेज, लेकिन आप लोकतंत्र की किताब संविधान को हाथ में लेकर के हर जगह संविधान पे सवाल उठाते हैं। एसआईआर की बात आई, एसआईआर उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा, उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़, और फिर जब एसआईआर हो रहा उसका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात करें, जो युवराज आज भी बने हुए, अभी कहां पर हैं? 2 दिन पहले शायद वो मस्कट में थे। प्रियंका जी कहां पर है? वो न्यूयॉर्क में है। अगर इस तरह से देश का ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे बिहेव करेगा, और वो जिसके साथ भी खड़ा होगा, जनता उसके साथ कैसे हो सकती है? अल्टीमेटली जनता बीजेपी के साथ आज है, पर वो जनता देश के साथ ज्यादा है।
जनता विकास के साथ ज्यादा है, जनता डेवलपमेंट के साथ ज्यादा है। फ्रेजाइल 5 से आज चौथी इकॉनमी बन गए हैं और जितने भी इंडेक्सेस नेशनल हो इंटरनेशनल हो, कुछ को छोड़ करके लगभग सभी में देश का रैंकिंग बढ़ रहा है। तो जनता बेवकूफ नहीं है और बिहार की जनता तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव है। वहां पर आप ये सोचते हैं कि वोट चोरी का झूठा मुद्दा देंगे। आपसे सवाल है जी मिश्रा जी, मेरा एक आपसे सवाल है कि बिहार के चुनाव में 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करना जीत में उसने कितनी बड़ी भूमिका अदा की है? वो एक फैक्टर है, लेकिन अगर ये कहा जाए वही सबसे बड़ा फैक्टर, आई डोंट एग्री। दैट इज अ फैक्टर, आई एग्री। आपके हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर विचारधारा, आइडियोलॉजी। अगर आप देश के खिलाफ काम करेंगे तो कोई भी जनता आपको नहीं चुनेगी। आप देश का विरोध करेंगे, कोई भी जनता आपको नहीं चुनेगी। आप ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाएंगे, आप जो दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी है उसके साथ आप खड़े होंगे, आप आतंकियों का पक्ष लेंगे, तो कैसे दिल्ली के ब्लास्ट के ऊपर आप राजनीति करेंगे? तो आप उम्मीद करते हैं कि देश की जनता आपके साथ खड़ी होगी? मुझे लगता है यही सबसे बड़ा फैक्टर है। अदरवाइज आप ये देखिए हर अलग अलग जस्ट 10 सेकंड बिहार में हर अलग अलग स्टेट में। मिश्रा जी, बिहार में परिणाम आ गए जी। अब ये बताइए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश जी जिसको चाहेंगे वही होगा, ओपन एंड क्लियर। नीतीश जी कंटिन्यू करना चाहेंगे तो बीजेपी को कोई आपत्ति होगी? मुझे नहीं लगता। हालांकि ये मेरे कद से बड़ा ऊंचा सवाल है, लेकिन जितना मैं अपनी पार्टी को समझता हूं, जितने मैं अपने संगठन को समझता हूं, मुझे नहीं लगता ऐसा। जो नीतीश जी चाहेंगे वही होगा। नीतीश जी, आपके हिसाब से नीतीश कुमार का नेतृत्व, उनका चेहरा इस चुनाव में आपकी जीत में उसने कितनी बड़ी भूमिका अदा की है? ये कहना बहुत डिफिकल्ट है। आप ये समझिए कि एनडीए का जो गठबंधन यानी नीतीश कुमार जी और जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है, वो चाय में चीनी और पानी की तरह है, या चाय में पानी और दूध की तरह है, और उसमें बाकी सारी चीजें पत्ती की तरह और एक अच्छी सी चाय बनके पूरे बिहार ने पूरे देश को दी है। तो मुझे लगता है कि ये डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है कि इस चाय का टेस्ट किसकी वजह से है। लेकिन आप ये मानते हैं, क्योंकि अभी हाल के हमने जितने भी राज्य हुए जहां पे इनकम्बेंट गवर्नमेंट की वापसी हुई, उन सभी में एक चीज कॉमन है कि वो चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो, या महाराष्ट्र में आपकी एनडीए की गवर्नमेंट थी, या मध्य प्रदेश में आपकी बीजेपी की सरकार है, जहां जहां महिलाओं के खाते में पैसे दिए गए वहां वहां पर इनकम्बेंट गवर्नमेंट की वापसी हुई। अगर ये आंकड़े कह रहे हैं तो मैं इस पे कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बीइंग साइंटिफिक विजनरी मुझे नहीं, मैं इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं। बट एक चीज ये भी तो फैक्टर समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में सिर्फ एक फैक्टर जीत के लिए जरूरी नहीं होता है। अगर इस तरह से चले तो हम ये देखेंगे कि पिछले 2014 से लेकर अभी तक जिस तरफ मोदी जी रहे वही जीतता चला आया है मेजोरिटी टाइम। तो इस तरह से किसी एक फैक्टर को लेकर के चलना बहुत डिफिकल्ट है। Right. Manish, Dorab has a question here for Mishra ji. जी मिश्रा जी, आप वो डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, तो 10 साल से तो डबल इंजन चल रहा है मगर कोयला नहीं है, क्या नहीं? क्योंकि बिहार का प्रोग्रेस ही नहीं होता है। क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हो सेंटर से? सेंटर में तो आपकी सरकार है, तब बिहार को व्हाई इज नॉट बिहार गेटिंग इनफ हेल्प सो दैट इट मूव्स आउट एंड दैट पीपल स्टॉप माइग्रेटिंग? इसके दो आंसर देता हूं। मैं डॉक्टर हूं। जंगल राज के समय में जो हालत बिहार की थी, इसको मैं ऐसे कहूंगा कि एक ऐसा पेशेंट जो आईसीयू में वेंटिलेटर पे पड़ा था, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो अगले दिन खड़ा होकर के दौड़ने लगे, मैराथन करने लगे, वो चैंपियन बन जाए, टाइम लगेगा। दूसरा जवाब, अगर जो बेसिक इंडिसेस होते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ में बिहार ने जंगल राज से पिछले 20 सालों में कितना प्रोग्रेस किया है, वो कैसे किया? आप ये देखिए कि लालू के जमाने में एक भी हॉस्पिटल नहीं बने, आज एम्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल एकदम बहुत ही ड्रास्टिक चेंज कर दिया, पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें जो पेशेंट मिला था वो किस हालत में था और आज पेशेंट कहाँ खड़ा है। अगर हम मृत्यु दर को देखें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखें, वो बेहतर हुई है। आप सोचिए कि जो मैं डॉक्टर हूँ इसलिए ये बातें बोल रहा हूँ, जो पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है,
वहां पे आरजेडी के जमाने में मंथली विजिट जो मरीजों का था, मेरे ख्याल से 40 से 50 के आसपास मंथली 50 मरीज उस सरकारी अस्पताल में जाता था। पीएचसी की बात कर रहा हूँ। आज वो मंथली 11,000 हो गया। ये आपको नहीं पता था कि कॉन्फिडेंस आया है? वो आदमी जो चरवाहा विद्यालय की बात करता था, लाठी पियावन रैली किया जाता था आरजेडी के जमाने में, उस जगह पर आप देखिए विश्वविद्यालय बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एम्स का नंबर 2-3 हो चुका है, मेडिकल कॉलेज 2 गुने से ज्यादा हो चुके हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज 2 गुने से ज्यादा हो चुके हैं। हमें टाइम देना पड़ेगा। ये सोसाइटी है, समाज को बदलने में समय लगता है, उसको हम जादू की छड़ी की तरह बदल नहीं सकते, लेकिन जनता ये देखती है कि क्या हम बदल रहे हैं, क्या हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस पर डिसीजन लेती है, मुझे ऐसा लगता है। Mishra ji, thank you very much for joining us. Big day for the BJP and the NDA there in Bihar. This does not appear to be a tight contest by any stretch of imagination. It's quite a landslide actually, if this is how it holds for the rest of the day, because I understand, Baj, that I believe my mic has fallen, so I am going to shout the question across. It's on round. On rounds, we are on average about 5 to 6 rounds. And there are about another 20 rounds to go. But you've got quite a large number of votes in, and since it is a reasonably random sample, would you say there's going to be a lot of change? I don't know. I think its numbers are very large, but I don't think it's a... let's take a constitution like Greater Kailash. Now, whether you open the first lot in the slums or in the fancier part makes a difference. But as the rounds get to larger and larger numbers, the sample becomes representative. But I don't think we have... But I think there's no question of overturning the results. We're talking of minor things here and there. It's a result. There's no question about that now. So then my question to you is, did the exit polls miss this thing completely? You know, it's a difference of 3 or 4%, Baj. That's a lot. In the end, 3 or 4% is a hell of a lot. And you can't expect an exit poll, you know. I think more, if you noticed our elections, last few elections, they're all landslides. And most of the polls give a tight... Yeah, I think that's what the exit polls have missed, the landslide. And I think the thin number of... Some did say that. Actually, only one exit poll, which was Access, said that it was a closer fight. The others, more or less. There's only one that said 187 and one said 200. Wow. But I always say exit polls one are a poll diary or something. 170. I mean, look at the fact. 90 to 200. Somebody will be right. Mehboob Alam of the CPI-ML trailing in Balrampur. Shakil Ahmed of the Congress Party trailing in, no, they're all in Kadwa. Yeah, but he's trailing in Kadwa. Rajesh Ram is trailing. So all the important... But Renu Devi is also trailing, surprisingly. Also trailing, surprisingly. I mean, that's why perhaps the BJP somewhere along the way realized this and never put her at the forefront. Let me introduce Ruhi Tiwari. She's a journalist and author now. In fact, she's just come out with a book on women voters and how important they've become to Indian elections. So the timing is perfect. I hope you have the book here so you can hold it up with somewhere. I'll bring it. But that's what we've been talking about all morning, just the huge turnout of women in Bihar. And would you say that that's been the single biggest decisive factor in this, or is there much more to how this result has played out? No, I think it is certainly a big decisive factor. I'm not sure if it's the single biggest decisive factor, but I think it's a natural progression, Nidhi, as I've written in my book as well. Now that women voters are becoming equal stakeholders in elections, in politics, there is a conversation political parties are having with them. And Nitish Kumar is a master of that, right? He thought of it way back in 2005, much before many of his contemporaries did. It's a natural progression that women will willingly come out and vote more. They're not doing it as a duty, they're not doing it as a box to be ticked, they're using it as an instrument of assertion, of getting their voice across, of choosing their favorite leader and choosing the side that's giving them the most. So that's a natural progression, and as far as Bihar is concerned, we've known the kind of effort Nitish Kumar has put in cultivating this constituency. He thought of it as a standalone electorate 20 years ago, that was a long, long time ago, and he's reaping benefits of it election after election.
I think it's a bit simplistic when people say that 10,000 rupee, scheme is what has got women voters to come and vote for him this time, or to vote in such large numbers. I think it's a continuous effort of the last 20 years that has culminated in what's happened in Bihar, and that's going to happen across states. The more you involve women in the election process, in terms of talking to them, in terms of talking about their issues, the more you involve them in the policy making arena of various states. I go back 5 years, and I've been saying this, that Nitish didn't do so well 5 years ago in the assembly elections, and it actually was the BJP that did much better. So if it's about 20 years of his women-friendly policies that we're talking about, then obviously something has shifted in the last 5 years, and women have outperformed men at polling booths, the last 5 elections, I think, in Bihar now? Since 2010. Yeah. So wouldn't therefore the 10,000 rupee scheme be the game changer? No, I'm not sure it's a game changer. As I said, it's just adding to something, a dish that was already ready. It's a nice garnish on that dish. And as I said, I think women coming out to vote is a natural progression at the end. You're going to see more and more of that across states. It's not just going to be limited to Bihar. That's going to happen now because there are political parties who are going all out to woo women voters, and they understand, women understand today that we are stakeholders and we have a voice and we have a vote and we are important, so we should go out and vote. But yet and only 12% of seats are given to women by the NDA. Unfortunate. So why isn't that moving up? Why are the women pushing for that? But I think that would be the next in the evolution stage, because right now women were deprived of so much more, such basics. They were so vulnerable, so marginalized that it was all about everyday issues. But as they become more assertive, they will ask this question. It is going to be a natural next question about why there are such few women when it comes to power, when it comes to policy making. And then political parties will have to, in that sense, I think the BJP, by enacting the 33% reservation, has sort of already got its answer ready, that look, we've already done it, because they anticipate in some way that will be the next question women voters will ask. And therefore, when I asked earlier, Shikha, about the opposition's campaign, and did they do enough to tap into to women voters, and you said a resounding no. I mean, what was missing? I mean, there was an announcement of 30,000 rupees, etc. But what did you find really missing from their narrative about women? Or was it that the campaign was too much focused about vote chori and other things and kind of didn't have a cohesive messaging? 30,000 rupees in the future does not compare to 10,000 rupees in hand. Which are already there, yeah. Yeah, so even if they were willing to listen to what the others had to offer, what mattered was that they had that money in the hand. And like everyone has said earlier, Nitish is seen as women friendly. Women for some reason trust him. He has done things for them in the past, and they are willing to carry that trust forward. It's unfortunate that all these SOPs or handouts that have been given to women have not really improved their condition on the ground. I mean, the kind of poverty that you see and the way these women live and how they work, it's astounding that the bar is set so low. I mean, whether it's a Nitish Kumar or anyone else, 10,000 rupees, and that's all that it takes. Right. I mean, sorry, Manisha Priyam, you were adding to that. I've already said many times, the bar is really set low. I mean, I come back to an Uttar Pradesh, I find many girls, even from the Mufassil areas, they take the entrance exams on computers. And I find these girls in BHU, I've interviewed hosts of them, and they say, हमने छुप के कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट लिया, फिर मेरी दादी ने मेरे पापा को मनाया, फिर मेरी भाभी ने मेरे मम्मी को बोला, वगैरह वगैरह. So even young girls have to hide and take these entrance exams. They have to, negotiate pressures to come out. And the fact is, a girl from Jahanabad, for example, who got into this entrance exam, she told me that I was sent here because if I had gone to a college in Jahanabad, it wouldn't have been safe enough for me to go to college. So the fact is, yes, girls got onto the cycles and went to the schools. Fact is, yes, women cooked meals and became Rasoiya Didis. The fact is, yes, there are many more Asha workers working in Anganwadis. Even compare it to neighboring Jharkhand, I think the road to minimal levels of women's equality is really far away in Bihar. You see a far more assertive lot in Jharkhand than you see here. Girls from Jharkhand don't necessarily have to migrate out
or run away and negotiate in these entrenched structures. And I think the issue of landlessness hits women the most. I mean, a large majority simply works as agricultural laborer, bent down in fields, and agriculture is in distress in Bihar. Climate change, the untimely rains this time. I was told time and again हमारे धान की फसल लगभग तैयार थी, इतनी बारिश छठ तक होती रही है कि आखिर हम कटाई कैसे करें. So I think the distress of women is less articulated. The fact that they got the 10,000 and gave the vote, that becomes the predominant picture the story. Yeah. Let me just go across to Alok Pandey, who is with senior leader KC Tyagi at the moment. Alok? Alok, can you hear me? Yeah, I can. Yeah, I think I lost the last part of your question, but I'm just going to describe what I am seeing right now, Nidhi, so that you can get a sense of what Nitish Kumar's party is thinking. This is a very prominent Patna intersection, one of the main intersections in the city. And this poster is just being put up as we speak. It says, Bihar ka matlab Nitish Kumar. I'll just ask Munna or Manoj, my camera person, to walk with me a little to this side as I talk about this entire scenario that's playing out. The Nitish Kumar's party, the Janata Dal United, appears to be doing very, very well in this election as compared to the last time around. Now, if you remember in the campaign, of course, we've all discussed this. There was speculation about whether Nitish would be made chief minister if the NDA were to win. There were some statements that said that, chunav ke baad dekhenge and so on and so forth. But this is a statement by the Janata Dal United and by an individual leader, but it's like a big, big, big poster, so you'd assume that this has the blessings of the party. So this is a statement by the party now that, look, we are more or less in a dominant position in this particular election and in this particular alliance in that sense, because they've increased their seat tally a lot, and that is why you have a situation where posters like these are coming across, or are being put up, across Patna. This one, like I said, says Bihar ka matlab Nitish Kumar. So one would assume that right now Nitish Kumar is in pole position, so to say, and that is why posters like these are coming through. I have a few people here with me, at least one or two of them. आपका क्या नाम है? चन्नू कुमार। तो जी आप किसी पार्टी के समर्थक हैं या आम आदमी हैं? नहीं, आम आदमी। आम आदमी। ये जो पोस्टर यहाँ लग रहा है बिहार का मतलब नीतीश कुमार, इससे सहमत हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये होना चाहिए था। ये मान के चलिए कि अभी तो नीतीश कुमार जो है ये चौथे बार सीएम बन रहे हैं बिहार के, और इनको और उससे 15 साल और पहले बनना चाहिए था। तो 20 साल से हैं ही मुख्यमंत्री। 20 साल से है ना, 15 साल और पहले बनना चाहिए था। मतलब 40 साल वही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि देखिए इनके काम पे वोट दिया जाए। लोग ये चाहते हैं कि सामने जो नजर आए वो नजर आ रहे हैं, ठीक है, और ये आगे लोगों को युवा के लिए सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छा चीज़ है बिहार के लिए, और बिहार ऐसा स्टेट है कि यहाँ हर चीज़ जो है माना जाता है। बिहार का बहुत एक बिहार के नाम पे मतलब समझिए ये ब्रांड बोल सकते हैं। बिहार की बात कर रहे हैं आप। आपका नाम क्या है? हाँ, रामचंद्र कुमार। रामचंद्र जी, आप कह रहे थे कि काम के नाम पे वोट किया है। हाँ। कुछ लोग कहेंगे कि 10,000 के नाम पे वोट किया है। नहीं। क्यों? ये इनका काम दिख रहा है ना, पटना में देख रहे हैं। इनका कोई भी बच्चा से भी पूछिएगा तो बताएगा कि काम हुआ यहाँ पे। आज से 15 साल 20 साल पहले जाइए तो बिहार में आने से कोई डरता था? थे यहाँ पे आज से 15-20 साल पहले यहीं पोस्टेड। हाँ, यहीं थे। लेकिन मतलब ये बताइए कि ठीक है, चलिए, तब नीतीश जी कहते थे कि गड्ढा था, गड्ढे को भर दिया, बिजली नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, लेकिन कितना धीरे होगा? अभी भी बिहार सबसे गरीब राज्य है देश का, ऐसा क्यों? ये आने वाला समय में जो है ना, ये बिहार हमको लगता है भारत का ये 1 नंबर पे होगा। मगर हाँ, हम लोग बिहार के लोगों को भी सहयोग नीतीश सरकार को करना चाहिए कि हाँ, आप इस राज्य को 1 नंबर पे पहुंचा दें। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सनी है सर। सनी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार ही रहेंगे 5 साल? अभी पहले तो बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे, उनको बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। नहीं सर, बनाना तो तय ही था, इनको ही आना था, क्योंकि हम लोगों ने इनको 5 सालों में जितना काम इन्होंने दिखाया है बिहार के लिए, वो तो जनता खुद देख ही रही है। आज बिहार में बहन बेटियां 12 बजे रात में या दिन बजे 2-3 बजे कहीं भी चले जा रहे हैं निश्चिंत होकर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज बिहार में शांति माहौल देखने के कारण लोगों ने वोट किया और इनको जिताया है। जी, थैंक यू। So I think that's the overriding sentiment, at least amongst those who support the chief minister.
Mr. Kumar or those who support the Janata Dal United, they feel that this is a mandate for Nitish Kumar's work in governance, and that is why, like I said again, at the risk of repeating myself, posters like these are now making their appearance in Patna, signalling that Nitish Kumar is perhaps here to stay as the Chief Minister. Quite a remarkable political career when you look at it in totality. Thanks very much for that, Alok. Well, let me go across to our guests at this hour. We have K.C. Tyagi, senior leader of the JDU, joining us at this moment. Also, Pradeep Bhandari, national spokesperson of the BJP, joining us in a bit as well. Tyagi ji, first of all, I guess congratulations are in order. अब तो ये लग रहा है that it is a landslide. तो क्या अब ये तय है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या बीजेपी के साथ कोई विवाद है इस बात को लेके कि क्लियर है? नहीं, बीजेपी के साथ तो विवाद 2005 में समाप्त हो गया था, जब अटल आडवाणी जी ने उनको संख्या कम होते हुए भी उनकी एफिशिएंसी को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। हमारे और बीजेपी में बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है, संख्या हमारी कम हो या ज्यादा हो। जो नीतीश जी का चमत्कारी नेतृत्व है उसी को आगे रख करके एनडीए चुनाव लड़ता है। पिछली बार भी हमारी आपस की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसकी वजह से हमारा जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पाया। दो हमारी सहयोगी पार्टी एलजेपी और आरएलएम हमारे सामने चुनाव में आ गई थी। पिछली बार भी हम 80+ सीटें जीत रहे थे और इस बार में मैं पहले दिन से कहता हूं कि 2/3 10 जो 2010 का उसका रिपीटेशन और जेडीयू की 80 सीट है। लेकिन त्यागी जी, what will you attribute this big win to? Would you attribute it only to the women voters who came out in their largest ever, in the biggest numbers in this election? क्या आप women voters को इसके लिए credit देंगे, और was there something more to it? ये ऐसा है कि ये एक तो जो ये प्रचार किया जा रहा है कि 10,000 रुपए चुनाव के मौके पे मिले, उसकी वजह से महिला वोटर्स ने वोट दिया, ये गलत है। असल में 2006 में, और मैं आपके जिम्मेदार चैनल पे बैठा हुआ हूं, 50% का आरक्षण जो वो है वो पंचायती राज्यों में दिया गया था, पूरे बिहार में, देश में कहीं भी नहीं है। उसके बाद 2007 में हमने 35% का आरक्षण महिलाओं को पुलिस में दिया। एवरी थर्ड वुमेन इन बिहार इज महिला पुलिस। उसके बाद ये 2006 में हमने जीविका ग्रुप बनाया जिसमें 1.5 करोड़ के करीब महिलाओं को हमने एंगेज किया। लड़कियों को पोशाक दी, साइकिल दी, नियर बाई स्टेशन पे जाकर के पढ़ने के लिए। और अब ये चुनाव से पहले के 10,000 रुपए नहीं है मैडम, ये उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की शुरुआत है। महिलाओं से बात की जब पत्रकारों ने, उन्होंने बताया हमने 4 मुर्गी ले ली है, किसी ने बताया हमने साइकिल की मशीन ले ली, हमने सिलाई की, किसी ने बताया हमने 4 बकरियां ले ली है। तो ये उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट था और सही है, लॉ एंड ऑर्डर भी था और भी कई काम थे। लेकिन अब ऑल जो वुमेन एम्पावरमेंट, तो जो शराबबंदी है जिसको लेके हमारे कई दिल्ली के मित्र भी आलोचना करते रहे, नीतीश कुमार जिस मीटिंग में जाते थे महिलाएं घेर लेती थी कि अब गांव में, तो बिहार के गांव में क्या सभी गांव में ऐसा पति आता पी करके और मारपीट शुरू कर देता। महिलाओं पर जो था, वुमेन के खिलाफ जो रहता था गांव में, वो कम हुआ है। जो अत्याचार है वुमेन एट्रोसिटी जिसे आप कहते हैं, वो कम हुआ है। जो शराब का अद्धा लेके आते थे, अब वो लोग जो है सब्जी लेके आ रहे, तो वहां पे महिलाओं के हित के लिए भी निसंदेह अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप गई हो तो मुंबई के मैरिन ड्राइव से अच्छा पटना का गंगा मैरिन ड्राइव पे बना है, जहां रात को 12 बजे तक कम उम्र के लड़के लड़कियां वहां पे मूवमेंट करते हैं। इतना गजब का लॉ एंड ऑर्डर है वहां पर। तो त्यागी जी, मैं आपको एक आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, एंड डोंट माइंड हाउ आई आस्क दिस क्वेश्चन, लेकिन एक तो इट्स अ रिमार्केबल विक्ट्री फॉर नीतीश कुमार, लेकिन उनकी सेहत के बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है। ही डिडंट स्पीक टू द मीडिया एट ऑल ड्यूरिंग दिस कैंपेन, लेकिन for him to return as chief minister yet again, will his health allow it? It's just a question I'm asking you, and is there a plan B, you know, कि JDU में उनके बाद कौन? नहीं, नीतीश कुमार जी के रहते हूँ आफ्टर नीतीश कुमार, ये कोई सवाल नहीं है। आपने पूरा कैंपेन देखा है,
छोटी मोटी जो सेटबैक है उसकी अनहेल्दीनेस की आपको दिखती है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा मीटिंग हमारी पार्टी में उन्होंने की है और जनसभाओं को संबोधित किया है। लिहाजा उनको मेडिकली अनफिट मानना या प्रचार प्रसार करना वो मैं ठीक नहीं मानता हूं। ही इज द ओनली लीडर एंड ही विल कंटिन्यू टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। Okay, Ruhi Tiwari has a question for you, Tyagi ji. त्यागी जी, ये कहना ठीक है कि नीतीश कुमार के रहते किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ऐसे पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बनती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बनती है, ऐसे सक्सेशन प्लान तो नहीं ड्रॉ अप होता है। ये प्रॉब्लम हमको बीएसपी में भी नज़र आ रही है मायावती जी के साथ, क्योंकि पार्टी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि कोई टियर 2 नहीं है, कोई सेकंड रंग नहीं है। क्या जेडीयू भी ऐसा ही चाहेगी? ऐसा तो नहीं चाहेगी। जाहिर है ये पार्टी जो बिहार में इतनी अपने आप को जमा चुकी है, ये ज़रूरी है। और स्पेशली जैसे निधि ने बोला, जब हेल्थ के कंसर्न्स है, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टी सोचना स्टार्ट करे कि अगले नेता कौन होंगे? थोड़ा एक सेकंड रंग तो प्रिपेयर करना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जेडीयू समाजवादी आंदोलन का पार्ट है। डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, कर्पूरी ठाकुर और उन्हीं का कार्डर, उन्हीं का ट्रेंड कार्डर जो है वो जेडीयू में कुछ में भी गया है। तो जो मूवमेंट है, सोशलिस्ट मूवमेंट, वो भी इस साल अपने 70 साल पूरे कर रहा है। लिहाजा मैं ये नहीं मानता हूं कि, और दूसरा ये वन मैन पार्टी नहीं है। ठीक है, नीतीश जी का आभा मंडल ने इस पार्टी को बढ़ाने में, रोकने में अपनी जगह काम किया है, लेकिन जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये सब काम करते हैं और ये पार्टी जस की तस चलती रहती है। आपके चित्र के पीछे बहुत ही क्रांतिकारी लोगों के चित्र लगे हुए हैं। चे गुवेरा का भी चित्र मुझे दिख रहा है। कर्पूरी जी की छवि तो नहीं दिख रही है, लेकिन लगता है उनका नाम लेकर के बहुत प्रसन्न आप लोग होते हैं। तो ज्योतिबा फुले की चित्र दिख रही है, सावित्रीबाई फुले की दिख रही है। तो एक तो कि लेफ्टिस्ट होके और भाजपा के साथ तालमेल कैसा रहा ये जर्नी आपकी? अब तो ये बात केवल तथ्यात्मक बातों से इसकी पुष्टि करें कि कैसे आपने ये गठबंधन का धर्म निभाया। और कर्पूरी जी की सहमति होती जिस रास्ते पे आप चले, या वो कुछ दुविधा में रहते कि उनकी थाती आपके पास है और आपका पथ ऐसा? मनीषा जी, आपने अच्छे सवाल किए जो मेरे हार्ट के काफी करीब हैं। 1978 में मैं और नीतीश कुमार इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल में क्यूबा गए थे और वहां की क्रांति के दो जनक थे, चे गुवेरा और फिडेल कास्ट्रो। तो हमारी एक बार उस समय जो है CIA के द्वारा एक एनकाउंटर में मार दिए गए थे, लेकिन उनकी वीडियो से हम मिले थे। तो मैं अपनी पीढ़ी, जो मेरी उस समय की पीढ़ी थी, उसका सबसे क्रांतिकारी चेहरा एक, और महिला एम्पावरमेंट जो आज बिहार में है, उसका सावित्रीबाई फुले को ही जाता क्रेडिट, जिन्होंने पहला महिला विद्यालय चलाया। और आप जानती भी हैं, कर्पूरी ठाकुर जब अध्यक्ष थे लोकदल के, तो मैं युवा लोकदल का अध्यक्ष था। उनसे जो मेरा करीबीपन है आपातकाल का भी, उससे पहला भी। और श्री बाबू के बाद मैं मानता हूं कि उनके जैसा नेता बिहार में नहीं हुआ, जिन्होंने बगैर भेदभाव के, देखिए मंडल को और आरक्षण को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां हैं। जब उन्होंने मुंगेरीलाल कमीशन इंप्लीमेंट किया था 1978 में, तो पिछड़ों का था, अति पिछड़ों का था, और पहला देश में पहला वुमेन एम्पावरमेंट कर्पूरी ठाकुर का था, उसमें भी महिलाओं का आरक्षण था और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी परसेंटेज था। लालू यादव जी ने मंडल कमीशन को तोड़ मरोड़ के पेश करके उसको जातीय युद्ध में बदल दिया था। तो कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार उस परंपरा के वाहक हैं जिसमें सबको न्याय मिले, सबको सम्मान मिले। नहीं, ये मैं मानती हूँ कि एक रेनबो कोalition आप चला पाए, और अगड़े पिछड़े की जो अति तीव्र गति की राजनीति थी लालू जी की, उसको आपने टेम्पर डाउन करके कहीं ना कहीं कर्पूरी की आइडियोलॉजी को आगे रखा, और पीछे आपने सच में सामाजिक गठजोड़ की लड़ाई जो है वो लड़ी। लेकिन इस चुनाव की पूर्व संध्या में सुशासन का एक महत्वपूर्ण कदम आप लोगों ने लिया था, वो था कि कृष्णैया IAS को, जिन्होंने खुले सड़क पे गोली मारी थी, आनंद मोहन सिंह जी, उनको फास्ट ट्रैक करके नीतीश जी ने जेल किया था। लेकिन इस चुनाव की पूर्व संध्या में उनको छोड़ दिया गया। आपकी सरकार तो खैर थी वहाँ,
तो आपको क्या लगता है कि सुशासन का जो तगड़ा कदम आपने लिया था, महिलाएं को आपने अपने साथ लिया था, महिलाओं को तो डर लगता है सड़क पर गोलीबारी से, महिलाओं का भरोसा होता है अच्छे आईएएस अफसर्स पर, तो क्यों आपने एक कदम वापस ले लिया? इतना अच्छा सुशासन का टैग था आप पर, आपकी पार्टी पर। ये बात चर्चा बहुत नहीं हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये रिस्क आपने लिया क्यों? मनीषा जी, आपका बहुत ही वाजिब सवाल है, और डे टू डे की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं वहां की, मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि बेसिकली मैं राज्यसभा में जरूर वहां से आया, मेरा कार्य क्षेत्र दिल्ली है और गाजियाबाद है, लेकिन मैं राजनीति में किसी प्रकार की भी इस तरह की एक्टिविटीज का समर्थक कभी नहीं रहा। लोहिया जेपी चरण सिंह के जो कार्यकाल में हमने काम किया है कर्पूर जी के, उसमें इन सब चीजों के लिए कोई स्थान नहीं था। We just have Alok. Before we go to Pradeep Bhandari of the BJP, we're just coming to you in a second, Pradeep. Alok Pandey is actually at the BJP office in Patna now, where I believe things are picking up, because we have leads for all the constituencies now from the Election Commission. So now it's a matter of converting those into results. And you can see it's a total contrast to when you were at Lalu and Tejasvi's house in the morning. Well, you're absolutely right, Nidhi. Things have warmed up considerably here at the BJP headquarters. In fact, there's a lot of crowd here now. All of them BJP supporters who are out here to celebrate. I can hear the sound of dhols also a little. And that's what's happening here at the BJP headquarters. I have a few BJP supporters here with me. आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रमोद सिंह हुआ। प्रमोद जी, आप लोग के गठबंधन की जो विक्ट्री हुई है, जो इतनी भारी बहुमत से आप लोग जीत रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फैक्टर आपके हिसाब से क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर है देश में मोदी जी का नेतृत्व, बिहार में नीतीश जी का सुशासन। जो डबल इंजन की सरकार है वो जनता के विश्वास को जीता है, उसका परिणाम आपके सामने है। तो आप लोग ये बात मान गए हैं कि अब नीतीश कुमार 5 साल और मुख्यमंत्री रहेंगे? शुरू में ऐसा लग रहा था कि आप लोग चाहते हैं नहीं कि 5 साल रहें, कोई और बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार की जनता उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया है और उनका 20 साल का सुशासन सबके सामने है। अब बैठ के तय करेगी हमारी शीर्ष नेतृत्व, उनका स्वास्थ्य ठीक रखे, भगवान से हमारी प्रार्थना है। हम एज ए कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता, हम भी चाहेंगे कि हमारा भी नेतृत्व बिहार का अपना मुख्यमंत्री हो, लेकिन ये अपना दोनों का पार्टी का एनडीए गठबंधन का ये विषय है, उसको बहुत ही प्रोएक्टिवली उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, उसको कोई बड़ा इशू नहीं है। आपका नाम क्या है? रजनीकांत। रजनीकांत जी, बताइए, ये इसको आप नीतीश कुमार के नेतृत्व की जीत मानते हैं? नहीं, तो एनडीए का भी, मोदी जी और नीतीश जी दोनों जोड़ी का जीत है। अकेले को जीत नहीं दिया जाएगा, लेकिन नीतीश के सुशासन में जो 20 साल विकास हुआ है बिहार का, वो जीत है। I'm just going to, Nidhi, stay with me for a bit. I'm just going to show you, this massive crowd has just come in. I'm going to be at a distance and try and show you this. I believe one of the bigger netas of the BJP has come here, or it is perhaps a JDU leader. I cannot see from here. I'm not going to go too much inside, but I will show you the celebrations. You can see that laddus are now out in full force, and so are dhols, and so are enthusiastic party workers, perhaps both of the BJP and the JDU, who are now distributing sweets and celebrating this as a victory. I think it's already late afternoon, so this victory is a conclusion, so to say. But right now you have this entire celebration on the streets of Patna, playing out on the streets of Patna. I'll just move a little to this side also to try and a little more of this. BJP headquarters in Patna. We'll come back to Alok in just a bit. We also have Pradeep Bhandari, national spokesperson of the BJP, with us this afternoon. Pradeep, congratulations, a big victory for the NDA, and certainly not a close fight as 1 or 2 exit polls were suggesting. So this time at least the general trend was correct of the exit polls. So how does the BJP look at this victory? Would you give full credit to Nitish Kumar, for taking this through along with you, of course?
Well, Nidhi, this is a decisive victory for pro-incumbency. This is a decisive victory for governance, and it's a stamp on the leadership of Prime Minister Narendra Modi at center, at the same time Nitish Kumar at the state. And this is just not limited to Bihar. If you look at elections post the Lok Sabha elections, whether it is Maharashtra, whether it is Haryana and Delhi, we have proven time and again that pro-incumbency has become a norm. A lot of analysts used to say that anti-incumbency comes in when somebody governs. But if you analyze the governance of Prime Minister Narendra Modi, whether it is Madhya Pradesh, Gujarat or any other state, he has set a trend of pro-incumbency. At the same time, if you study under Rahul Gandhi, the Congress party has lost 95 elections across states and at center. So there is a new trend in Indian polity where the opposition is discredited with anti-incumbency looked from their point of view and pro-incumbency at our point of view. Number two, I remember Manisha Priyamji, who's on your panel, and one of the panels earlier said that the poor of Bihar will decide whatever the verdict will come. 89% of Bihar is rural, and the rural India with test case as Bihar has spoken that they also believe in the governance. Also, if you look at it, many people used to study at the politics of Bihar from caste lines. But if you look at this result in detail, lot of bastions of caste have also been broken, and the new MY of Bihar, which is Mahila and Youth, have voted for Prime Minister Modi and NDA because we are touching or crossing 50% vote share, which is the most highest vote share which any alliance has got in the last 2.5 decades. So it's not a caste victory, it's not mere a 10,000 victory, it's a credibility of governance which has been established after long time and tireless effort among and being in the people of the country. Right, but Pradeep, is the question of chief ministership though now settled, done, now that the results are pretty clear? No question that it is Nitish Kumar who's chief minister? Well, that question was never there, Nidhi. If you recall, we've always said that our leadership is Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Nitish Kumar. And Home Minister Amit Shah in one of his rallies has also said that it is Mr. Nitish Kumar. In fact, there is no vacancy at the post of the Chief Minister. So there was complete clarity in the mind of the NDA. There was complete clarity in the mind of the Karyakartas and the various parties. Now, it's a procedural requirement where every MLA, those who have won the election, will sit and choose their leader. Okay, Pradeep, just stay with us. We have the BJP's Maithili Thakur joining us. She's herself a candidate in these elections and contesting from Alinagar. Maithili, so how is it going for you? Congratulations. Happy that I got this opportunity and people have believed on me. और मुझे इस विश्वास को आगे लेकर के जाना है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि पार्टी ने मुझे बड़ा मौका दिया 25 साल की उम्र में और मैं आगे बढ़ रही हूँ, इसकी मुझे खुशी है. But more than that, you made a big difference with your singing your song. Wonderful. Thank you. One favor, sing us a song. आवाज रिपीट सुनाई दे रही है मुझे. Sing us one song now. Okay. Sure. तो मैं मैथिली भाषा में सुनाती हूँ, जहाँ से ही मेरी उत्पत्ति हुई है, मिथिला से. अपना किशोरी जी के टहल बजे बई मिथिले में रह बई. हमरा ने चाही चारों धाम हे मिथिले में रह बई. हमरा ने चाही सुख आराम हे मिथिले में रह गए. Very good. Only one person who can sing as well as you is that Dorab. Just give us a small one verse. But Maithili, आपके लिए कैसा रहा this whole experience of campaigning? जैसे आपने कहा 25 साल की उम्र में ही आपने politics में you took this entry into politics, आप election लड़ी हैं, जीती हैं, तो आपके लिए कैसा experience था ऐसा? सबसे पहली चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की कि जो सोशल मीडिया पे देखते हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें बहुत का अंतर होता है. तो मैंने बहुत सारे नेताओं का देखा है सोशल मीडिया पे. तो मैं एज अ सोशल मीडिया कंज्यूमर, एज अ 25-year-old
इंडिविजुअल, मैं ऐसा सोचती थी जो जो मुझे दिख रहा है टीवी पे वही, जो फोन पे जो मुझे दिख रहा है वही सच है। लेकिन जब मैं ऑन ग्राउंड जा करके देखती हूँ लोगों के मन में जो इज्जत कमाया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो ये मेरी मेरी किस्मत इतनी अच्छी है। मैं बोलती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने अच्छे अच्छे नेताओं के बीच में, इतने बड़े नेताओं के बीच में मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिल रहा है, जिन पे लोग आंख बंद करके भी भरोसा करती। महिलाओं का जो इज्जत बढ़ाया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, तो ये एक चीज है जो मुझे लगा कि ये मेरा भाग्य है कि मैं ऐसे नेताओं के सानिध्य में रह करके काम करूंगी। अब हम विमेन वोट की भी बात कर रहे थे, महिला वोट के बारे में, एंड यू नो एज अ वुमन कैंडिडेट ऑल्सो, जब आपने कैंपेन किया मतलब कितना इम्पोर्टेंट रहा ये महिला वोट जो नीतीश जी और बीजेपी के लिए गया है, खासकर नीतीश जी? पूरे कैंपेन में मैंने सबसे ज्यादा महिलाओं को क्या बोलते हैं, कन्विंस किया कि प्लीज आप लोग सुबह जा करके वोट करिएगा। और जब मैं वोटिंग के दिन जो आंकड़े देखी, मान लीजिए एक बूथ पर 100 पुरुष ने वोट किया है तो 150 महिलाओं के वोट थे, तो ये बहुत बड़ा चेंज था। और फर्स्ट टाइम में इतनी सारी लड़कियां जो मुझसे काफी कनेक्ट कर पा रही थी, महिलाएं काफी कनेक्ट कर पा रही थी, तो ये कुमार जी का जो एक इम्प्रेशन है ना लोगों के मन में, महिलाएं जिस तरीके से उनको बहुत प्यार करती हैं, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे कि हाँ सब हमारा वोट दे भाई, मेरा चेहरा ही देख करके और मेरा झंडा लोग बोलते बेटा तू जा तू जी। तो ये जो लोगों का हमारे नेताओं ने ये इस जर्नी को आसान बना दिया। We just that signal is flipping a bit. You have a question? Want to try and shoot a question? If you sing, then I'll ask a question. That's not happening. Better not sing, actually. Do you have a question? मैथिली, आपका तो पहला चुनाव था, लेकिन अब आप आ गई हैं पूरी तरह से राजनीति में। आप कैसे पुश करेंगी कि और महिलाएं आपकी पार्टी से राजनीति में आए, उनको और रिप्रेजेंटेशन मिले? क्योंकि महिला वोटर एक तरफ से अपने आप को असर्ट कर चुकी है, वो बन चुकी हैं बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्टोरेट, लेकिन अभी भी नेता महिला हमारे पास इतनी कम है, पॉलिसी मेकिंग में नहीं है। तो आप आगे अपना विजन कैसे देखती हैं कि इस चीज़ को आप कैसे पुश करेंगी? क्या इसको आप एक अपना एजेंडा बनाना चाहेंगी? सबसे पहली चीज, नीतीश कुमार जी ने तो इस पे एक ऑलरेडी काम किया है, महिलाओं को आरक्षण, जो आपने जिसका न्यूज़ भी सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के आरक्षण के भी बारे में बोलते आए हैं। तो ऑफ कोर्स ये ऊपर ये चीजें पहुंची हुई हैं, और ये बात ऐसी है जो लगातार लोगों के मन में है कि महिलाओं को कैसे और अधिकार दिया जाए, और अधिकार है। मैं एक उसका जीता जाता उदाहरण हूँ। एक ऐसी सीट जहाँ पर बहुत सारे और बड़े बड़े नेता हैं, वहां पर एक यंग लड़की को मौका दिया, ये सब पार्टी के बस की बात नहीं है। तो बस यही है कि मैं अपने दम से, तो मेरे से जितना हो पाएगा वो मैं करती रहूंगी, लेकिन हमारे पार्टी के जो हमारे नेतृत्व है उनके दिमाग में ऑलरेडी ये बात है कि कैसे महिलाओं को आगे लेकर के विश्वास जो महिलाओं का जीता हुआ है हमारे नेताओं ने। Well, Maithili, all the very, very best to you, and congratulations. It's really good to see young women participate and win, and hopefully will be a force of change, at least for women, if nothing else. Thank you so much for joining us. Would you like to know that it is the lowest number of women participating this time in candidates in 15 years? In Bihar. Lowest number. And this is a state where you've seen women participation go up for the last so many elections. Yes, but the number of candidates lowest in 15 years. That is shocking. Imbalance is really unfortunate. Like, you give so much importance to women voters and you forget that you need them at the other end. Shocking. Let me also welcome Alok Vats from the BJP after a long time. Nice to see you here, Mr. Good Vats. to see you. Yes, thank you. And you know, just on that point about women voters, if Pradeep Bhandari, if you're still with us, and I think okay, I think Pradeep has left. Alok ji, let me ask you this point about ठीक है, you know, the Mahila vote has come to the NDA, but a time will come when you will have to also allow them to participate and pave the way for them to participate in elections. Tickets भी देने पड़ेंगे. This is a sad and shocking news that only in 15 years the lowest women were participating. But let me tell you, overall, the victory is due to Nitish Kumar, who had been sidelined for many reasons. You know, some people said. You're saying that as a BJP leader. Yes, what is the ground fact? I have to admit that. You see, people were saying he has dementia, he forgets things, he doesn't know what he's doing. You know, things like this, that he is almost retired, but he came back with a vengeance.
And the women who have turned out, they are largely turned out only because of Nitish. There are two factors involved in that, because I belong to a very remote place in Bihar and I keep going and coming there very frequently. See, in the evening there used to be chaos at all crossroads. People used to get drunk and there was a lot of tamashas going on there. मारपीट भी होती थी, कभी कभार मर्डर भी होते थे. And in the houses, especially in the lower rug, people used to get drunk and they used to, beat their wives. Beat their wives, yeah. This has almost stopped. Because if a woman goes to the police station that my husband has beaten me getting drunk, he is taken to task. Though I'll admit that liquor is not stopped in Bihar. In fact, we were told the police delivered to the Thana delivers it to your house. Sir, I will not admit that to that level. But not on TV. Not on TV. But the fact is that yes, there is door delivery, there is home delivery, there is courier delivery, everything. And I belong to the border state of Nepal. So all the unemployed youth from there, they just cross over Nepal, which is easy to go, and they bring 10-20 bottles and they make in the evening at least 1,000-1,500. So this has become a sort of job also. And the guy who's making the best house in the village, if you dig into him, then you'll find that he's into that trade. So is prohibition going to be stopped now? Is it going to be allowed? Sir, it has to be, because पहले तो ये borders seal करने पड़ेंगे. And then, it's never worked anywhere in the world. Police, अभी जो इतनी atrocities हुई हैं बिहार में, these murders and all, police is mostly involved in catching people who are bootlegging. उसमें दोनों तरीका है. Their income has also gone up and their duty has also gone up. You see? Income. Yeah. So, that's what we heard. Police income has gone up. Naturally, some places the bargain was not done, then he was shot. You must have heard that some police official was shot. So मुझे पता, it happened in my district. I was demanding 3 lakhs, he was giving 1 lakh. The guy didn't agree, so he shot him. You're very candid. Sir, this is Nitish Kumar's marquee agenda. Prohibition is entirely his baby. But does the BJP share the view on prohibition, or do they think, because in Gujarat also it's being slowly relaxed and it's not as stringent as it is in Bihar in any case. You can take liquor licenses. So good question, because Samrat Chaudhary told me I'm totally against it. We will stop prohibition. We'll go back to where we were. Nitish Kumar is adamant on that. Whatever BJP's views, he will crush it till he is in the mental. Right. Because he is very adamant on that, and he knows it that it is not. It is flowing. Yeah, that's a major. That is a major thing. That our main revenue, the highest revenue was from excise duty on liquor, which is true for a lot of states. Totally zero. Yeah. And to improve things and to improve the infrastructure, you need money. And also foreign investors aren't going to come and build factories. No, even Indian investors are not going to come. Foreign की तो बात बहुत दूर है. You see, who are the people who are businessmen, mostly from the Marwari and the Bania clan. So after this Khemka and all these murder, who would like to go and stake his life there unless there is proper, protection and there is a बिल्कुल cool atmosphere. तो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. अभी जो ये विक्ट्री है, ये 10,000 पे विक्ट्री हुई है, आप मानते हैं? You're saying that is the main, the game changer. Ma'am, a lady worker 250-300 की दिहाड़ी पे काम करने वाले को, if she gets 10,000 in her hand, it's a lot. For her, it's fortune. And they're grateful for it. Yeah. नहीं, grateful तो अलग बात है. They see it is going to come again because Nitish said हम 2 लाख तक देंगे. हाँ. Against that, a man has promised 2 times higher, 30,000. Right. On 14th, I will give you 30,000. They didn't believe him. Yeah. They believed in what is coming. They didn't believe in what is in the nest. Also because there's a track record there. We just go across to Alok Pandey back at the BJP headquarters in Patna. Alok, what's going on there?
At the BJP office, there's a lot of color now. A lot of BJP supporters have come over here. I also see now a lot of women who have come. Ma'am, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुषमा साहू। सुषमा जी, कहाँ से हैं आप? मैं पटना से हूँ, प्रवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता है। ये बताइए, इसको किसकी जीत माने? नीतीश जी की नेतृत्व की जीत माने, 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिए गए उसकी जीत माने, एनडीए की जीत माने, किसकी सबसे प्रेडोमिनेंटली किसकी जीत है? ये सबसे बड़ी जीत बिहार की जनता की, उनका नेतृत्व पर जो विश्वास था उसकी जीत है। और ये विश्वास धरातल पर दिखा। लोगों ने काफी डराया, धमकाया, लोगों को डराया, प्रशासन को डराया, लेकिन जो मैंडेट जो बॉक्स में ईवीएम में बंद हो चुका था, आज वो किसको एसआईआर को धमकाएंगे, एसआईआर के लिए डराएंगे, वोट के लिए करें, किस चीज के लिए? आज ये बिहार की जनता और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व की जीत है। Thank you so much. I'm just going to walk a little ahead. Munna, if you can just come with me. Let me just see what's happening elsewhere. So there are a lot of other women here too. Ma'am, what's your name? आपका नाम क्या है? Excuse me. आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीता सिंह है। रीता जी, ये बताइए कि बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि 10,000 रुपए का जो वादा था, जो 10,000 रुपए एक तरह से डोल दिया गया महिलाओं को, उसकी वजह से ये इतनी भारी जीत आप लोग की हुई है, आप क्या कहेंगे? अच्छा, माई बहन योजना फेल हो गया, इसके बारे में पूछिए नीतीश के, इनसे तेजस्वी जी के क्या कहेंगे? ये 10,000 रुपया आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला को दिया गया है, महिला के विकास के लिए दिया गया, नहीं कि वोट के लिए दिया गया। और आगे भी 2 लाख रुपया मिलेंगे। लखपति दीदी, करोड़पति दीदी, ड्रोन दीदी बनाने के लिए हुआ है, महिला के विकास के लिए ये सोचा जा रहा है, ये वोट के लिए गलत नहीं किया जा रहा है। आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम नेहा निश्चल है, मैं क्षेत्रीय प्रभारी महिला मोर्चा में हूँ। नेहा जी, इन्होंने कहा कि विकास के लिए वोट दिया, विकास के लिए ये पैसा दिया गया है, वोट के लिए नहीं। आपके विरोधी शायद ये कहें कि विकास के नाम पे वोट को एक तरह से मतलब पैसा देके सॉलिसिट किया गया। आप क्या कहेंगे? आपके विरोधी ऐसे कह रहे हैं। देखिए भैया, अब कुछ कहने और सुनने की बात तो है नहीं, जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। तो वही आज जो है वो दिख रहा है। हमने सिर्फ वादे नहीं किए हैं, हमने उसको निभाया है। हमने हर महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचा है, उनके बच्चों की चिंता की है, उनके घर के पुरुषों तक की चिंता की है, वृद्धों की चिंता की है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आज जो है वो दिख रहा है। What is your name, मैम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर पूनम शर्मा है, मैं पूर्व की प्रदेश मंत्री हूँ। पूनम जी, बताइए कि ठीक है, आप लोग का बहुत बड़ा जीत हो गया, आप ही लोग का गठबंधन 20 साल से बिहार में काम कर रहा है। बिहार इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड स्टेट्स इन इंडिया। तो अब इसको कैसे, जो बिहार में गरीबी है, जो बिहार में इंडस्ट्रीज की कमी है, इसको अब कैसे पूरा करेंगे अगले 5 साल? हमारी सरकार जो अभी गठबंधन की सरकार है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो नीति है, जो योजनाएं हैं, जो उनका विजन है, और हमारे मुख्यमंत्री का जो विजन है, दोनों मिलकर के अभी जंगल राज को खत्म करके यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की शिक्षा दी जाएगी और महिलाएं सुरक्षित है। आगे हमारा इसी तरह सरकार चलेगी। आपका नाम क्या है मैम? शोभा सिंह, प्रदेश मंत्री हूँ, इलेक्शन को इंचार्ज बिहार। अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने इनकम टैक्स गोलंबर के पास एक बड़ा सा बैनर लगा है जिसमें लिखा है बिहार मतलब नीतीश कुमार। आप मानती हैं इस बात को? देखिए, बिहार मतलब नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री जी मतलब डबल इंजन की सरकार है, तो स्वाभाविक बात है कि विकास की रफ्तार भी दोगुनी है और उसका असर दिखा है रिजल्ट के रूप में। जिस तरह से जनता ने हमें भर भर के वोट दिया है, हमें बिल्कुल उम्मीद थी कि इस तरह की प्रचंड जीत होगी और जनता ने ये मैसेज दिया है कि आप कितनी भी झूठ की राजनीति कर ले, झूठ चलने वाला नहीं है। नीतीश जी की पार्टी ने पिछली बार के मुकाबले इस बार काफी अच्छा किया है, ऑलमोस्ट आपके पार पे, मतलब योर एंड जेडीयू परफॉर्मेंस इज एट पार। इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, हम अलग मानते ही नहीं है, हम गठबंधन है, हम जो भी जीत है वो हम सबकी जीत है, हम इसको बिल्कुल अलग नहीं मानते हैं। जो जीत है हमारी जीत है। Thank you. So I think it was important to get all of these voices and to get a sense from them about what they think of this massive victory of the NDA. This side you can see a lot of holes that are playing right now. I'll not go a lot in because there's a lot of pushing and shoving that's happening there, but you can see that the BJP is now celebrating and celebrating in full force. I'm just going to try and move a little ahead. You may hear my voice a little faintly.
camera is a little ahead. But the BJP now celebrating in full force and saying that this is a victory of both the Janata Dal United, which is CM Nitish Kumar, and also a victory of the BJP. They are saying that it is a coalition that has actually got them this victory. I'm just going to stop speaking and get you 15 to 30 seconds of these celebrations, and then we'll pick up the thread again. Well, Alok, lots of color there, and you can probably expect the crowds to swell up. I'm sure later we will see that same color at the BJP headquarters in Delhi. The tradition has been that the Prime Minister goes and addresses BJP Karyakartas himself, and that is probably likely to happen again later today. Thanks very much, Alok. We're also going to be joined by Zafar Islam, the national spokesperson of the BJP, shortly. But before that, Doc, just to look at the numbers, just to look at the scale of the opposition's defeat for a moment, just take us through the strike rate of the individual parties of the Mahagathbandhan. We have a graphic, but while we wait for it, you insist? I insist, because it's really telling. Who's got the best strike rate? Who had the best strike rate of the Mahagathbandhan? CPI-ML Liberation, a 30% strike rate. Who had the second best? RJD with a 23%. Congress close behind with 8%. 8% strike rate. So 1 in 12 seats. Yeah. So it's been a resounding no to the opposition and a resounding yes to Nitish and the BJP. But we thought initially the left was looking very poor, but it's done pretty well. It's done better than... Only MLL. What about the others? CPI, they've lost. Yeah, they've lost. Got one seat each. But what is, Ruhi Tiwari, what does that tell you then about the opposition's campaign? Rahul Gandhi focused a lot on vote chori because this all happened in the midst of this SIR exercise. Tejasvi didn't seem so hot on that as a topic. So was there maybe a dissonance in how they wanted to approach the campaign and the narrative that they wanted to set? I don't know. Sure, no, I think there certainly was a disconnect. Tejasvi was very clearly uncomfortable with this focus on vote chori and SIR because that had zero resonance on the ground, and as you can see, the results speak for themselves. So one mistake was the Congress obsession with SIR and vote chori. There are other issues. It's an election where where day-to-day issues also matter for people, right? The second problem, I think, was that Tejasvi, of course, he announced the 30,000 for women, but he didn't focus as much on women as he did on the youth. I think he was hoping to create youth as a cross-cutting constituency, just as Nitish Kumar has cultivated women as a cross-cutting constituency. Sorry, and we'll come back to, here's the strike rate of the NDA alliance. Look at that. BJP 83%, JDU 75%, and Chirag Paswan not done too badly, 75%. He's done very well that way. Done very well, very well. HAMS and RLM. Even Manji, 4 out of 6. Yeah. And apparently it's just updated. BJP has gone up to 87% now. Wow, that's quite something. That is phenomenal. And JDU 78%. Paswan 75 still. And let's go on to the MGB strike rate. RJD 24. Congress gone from 8 to 10. Wow. Oh, sorry, it's come back down to 7. They keep losing more and more seats. No, there's some go back to that. Sorry. And left, who was not doing well earlier, the CPI-ML Liberation, highest strike rate among all of these. And like they have more seats than the Congress. They got more seats. Yeah. 27. 1/3. Amazing failure. CPI has lost one party we don't have up there is Prashant Kishore, ML is done well. which is, I mean, 0 seats. CPI has lost some traditional seats. Tegra and all were, they're very... Sorry, I interrupted. Just go across to Ruhi to finish her point, and then we'll go across to Zafar of the BJP. I was just saying that, Tejasvi tried very hard to cultivate the youth, but clearly it hasn't turned out the way he was hoping. Youth have many divisions, many different identities among themselves. They are not a cross-cutting constituency like women are. And second,
mean, he found the right problem, which was the lack of jobs and complete unemployment. But his antidote was really not something that landed very well. Giving government jobs to one person in every household, there were so many voters on the ground who scoffed at that idea because they realized, see, people are not foolish. Voters, they can't be just taken for a ride, and they realized that this promise was just a promise. It wasn't pragmatic. It couldn't be translated into reality. And while he found the problem, he couldn't find the right solution for it, and his vision really fell flat. I think that really cost the opposition quite heavily. Well, Zafar Islam, national spokesperson of the BJP, with us this afternoon. Congratulations, Zafar Islam, for that big win for the NDA. Your thoughts on this victory and why it's been such a big one? Well, as you rightly said, there's a resounding no for the opposition, and it's very true that people have blessed only the NDA, and primarily for the reason because their admiration, their confidence in the leadership of the Honorable Prime Minister, in the leadership of the Honorable Chief Minister, because they know that they need development, they need a good governance model, and something which has been delivered by the combo of the Honorable Prime Minister and the Honorable Chief Minister. The people, while the Mahagathbandhan, all the political parties within the Mahagathbandhan, they were primarily focusing on their own family members, their own how to adjust the family members, and more importantly, Rahul Gandhi is someone who is seen as a non-serious person when it comes to politics, because nobody, we consider nobody within our party would have been ever allowed to travel to South America while their election is underway. So that shows that people have zero confidence in the leadership of the Tejasvi Yadav and likes of Rahul Gandhi, and they have completely rejected them. And while people feel that the common man on the street in Bihar, they feel that there is a political party, Bharatiya Janata Party, NJDU, and all the parties of the NDA partners. They work for the welfare of the people. A lot of welfare schemes have been introduced. Their life has changed, their livelihood has changed, and all these things primarily because the concern which has been always expressed by the Honorable Prime Minister, and then he has come up with a solution for those concerns as well. So people concerns, their interests have all been safeguarded by the Honorable Prime Minister in the country, and something which people feel they're confident about the leadership of the Honorable Prime Minister. That's why when India was fighting this election under the leadership of the Honorable Prime Minister, people have reposed confidence and wholeheartedly supported the NDA party. So more credit to Mr. Modi for this victory or more credit to Nitish Kumar? Well, it's not giving credit, but definitely as Mr. Modi happens to be the leader of NDA, that definitely a lot of credit goes to the Honorable Prime Minister. But you can't take away the credit of the Honorable Chief Minister, because he is the one who has given a good governance model, which something people have seen Jungle Raj and then seen a good governance model, where they feel confident, they feel that they can breathe fresh air, and they feel comfortable, safe, and secure, and that is primarily credit goes to the Honorable Chief Minister. While the development is something which is important for them, and if you see last 20 years in Bihar, how Bihar has shaped up, how Bihar has changed. The good roads, good infrastructure, all this, I'm sure that people acknowledge that has been pushed come from the Honorable Prime Minister, and something which he has done across India, and various welfare scheme. Because earlier they were only worried about safety and security, but since 2014, lots of welfare schemes have been introduced, which has changed their lifestyle, and that is something which they feel very comfortable, and that's why they have given vote for the NDA partners, NDA bloc. And whether it's Chirag Paswan, whether it's Manjiji, whether it's Kushwaha ji, everyone has done well, and you can give credit to everyone for their for working for their party. But when you see NDA as a whole, obviously it is led by the Honorable Prime Minister. So definitely people will acknowledge the contribution of the Honorable Prime Minister and the Honorable question for you from Mr. Bajpai. So, given that Bihar has the lowest per capita income in the country, obviously people
are living on this fresh air in Bihar that you keep talking about. When do you think that you will be able to develop Bihar at least to the level of the other Bimaru states like Madhya Pradesh, Rajasthan, which have had governments from the BJP and maybe also from the Congress? I mean, you have not caught up with them in the last 20 years. Well, you will see a very strong push this time for the development. And as you see, the GSDP of Bihar and the growth in Bihar is very high, for around 14%. And this momentum will continue. A lot of infrastructural development and a lot of other developmental work will be undertaken in the next 5 years. And you will see no more Bihar is seen as the Bihamaru state. It used to be seen as Bihamaru state way back in 2005 or prior to that. But now it is not seen. But lots to be done, and this time you will see in next 5 years Bihar will undergo a sea change, and people from Bihar and all the Biharis will feel very, very proud of the achievement in next 5 years. Right, Zafar Islam, thank you very much. Congratulations again, as we said, on that huge win in Bihar, quite a decisive victory. I think we also need to take a moment to Dorab, just to ask you, to look at the stunning performance of Nitish Kumar. We were just discussing with KC Tyagi of the JDU, speculations about his health, and actually videos were used by the opposition in the course of this campaign to tell voters that, look, he's not, completely well, he's not going to be able to govern. And having been Chief Minister for nearly 20 years, he's come back very strongly. Yes, he has, but I think, he's got this reputation of kind, benign, which after Lalu, I presume, has made people think, old uncle, let's vote for him until you can carry on. And there's always, don't forget, there's always the backup, the BJP, which has got a strong cadre, a strong, presence in the place. It was a large party. So I think, I'm surprised that he's continuing. But the question is what we would expect is that he would, as you asked somebody, nominate a successor. Because he's not going to live forever, by the way. Really. Many people have thought about this, but he's not going to live forever. So he has to plan for succession. Because the main question is, what happens the day the party goes? Does the party split into two? Does it all merge with the BJP? And, I'm surprised that he's not concerned about that. In a corporation, when a leader thinks he's going to depart, at least few years beforehand, he puts some people in position, obviously his own people, but not to put anybody in place. I think if this was a corporation, it would be deemed irresponsible. That you don't have a leader. People tried to rope in his son, and they wanted him to contest the election, but he said no to it. Yeah, but then you find somebody else. It doesn't have to be. Every party except the BJP and the communists in this country is a private limited company. Very clearly that if Nitish Kumar will never, name his successor, he'll think he'll keep going. But the moment he disintegrates, his party will be divided into two halves. One half will go with the BJP, the upper front, and the other front will go with the upper front. The upper class. Upper class. Forward. But this means that finally you will again have a backward and forward party. Currently, they're all mixed together. And now, so Shikha. Yeah, I was saying that, are we seeing some kind of similarity here then with, say, Naveen Patnaik in Orissa? No successor, bureaucrats running the state. In Bihar also we hear, we don't know, but Bihar we hear that it's a very strong lobby of bureaucrats which is running the state for Nitish Kumar. So are we seeing similarities then, Doc, with Naveen Patnaik? Some similarities. When we went around Orissa, we even had dinner with Naveen Patnaik, and he was all there. He had a little bit of Parkinson's, but mentally absolutely fine. But the campaign the BJP ran against him was brilliant. And that really shows the difference. In Bihar, the campaign against Nitish by the Mahagathbandhan was pathetic. They had no impact, whether they didn't want to and they had higher ideals, I don't know. But they kept mentioning that he's not up to it, but
No impact at all. But the way they attacked Naveen Patnaik, huge impact. And then related him with the temple, Jagannath temple, and that he's doing. That also they had this terrific advantage. No, but the same thing here, that they just created. Yeah. But he was in charge, there's no question. But it was a brilliant campaign. Like I do feel, maybe it's not fully ethical campaign, but it was brilliant and it won. Same thing with the 10,000 rupees. Brilliant. I think in fact all these videos that the opposition was circulating of Nitish not being well, etc., it brought him more sympathy than any kind of resentment. There was a lot of sympathy for Nitish Kumar. There were voters saying that why is the opposition attacking him on his health? Because India is a country where we believe that politicians I'm not sure, because Naveen Patnaik it really worked. No, with Naveen it may have worked, but with Nitish Kumar it didn't work. It in fact because the way they did it, again, the campaign so it wasn't method designed was well. awful. Right, absolutely. And what you were mentioning about his son, that also worked in Nitish's favor because voters were saying, देखिए परिवारवाद नहीं करते हैं, and that is a big thing in voters' imagination in India today, lack of dynastic rule, right? So that also worked in Nitish's favor. We have Manish Kumar back with us from Patna. So Manish, what is your Vishesh Tippani on how it's going? Right now, Nidhi, nobody has any confusion left कि एनडीए की ही सरकार बनेगी. अब जो गेसिंग गेम चल रहा है, क्योंकि अभी दिन काटना है, तो हर आदमी चर्चा यही कर रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी या जनता दल यूनाइटेड. और अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है और 10 से 12 सीटों का गैप रहता है, तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे. लेकिन 90% लोगों का मत, जो बीजेपी के भी लोग हैं, उनका यही कहना है कि फिलहाल बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो टॉप लीडरशिप है, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कभी भी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस मैंडेट के बाद फिलहाल वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने का राजनीतिक जोखिम नहीं ले सकते हैं. इसलिए आज की तारीख में और अभी के समय में दो ही राजनीतिक सच है कि बिहार में एनडीए जीत रहा है और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. निधि जी, मगर मनीष, what you said, there is we have दिन काटना है. So that was a nice way of putting it, because we really don't know what to say anymore. It's so one-sided. But we were talking about Nitish, the whole opposition's campaign that centered around the state of his health. But when I asked KC Tyagi earlier about Nitish ke baad kaun, he took offense to that. But is there any talk at all within the JDU about the next sort of line, the next line of leadership in the party? एक तो राजनीति में कभी भी किसी का पॉलिटिकल ऑबिचुअरी नहीं लिखा जाना चाहिए, और नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं. क्योंकि 2020 में जब चुनाव का कैंपेन कर रहे थे, तब भी लोगों ने कहा था ये उनका आखिरी चुनाव है, और जब वो मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के लोगों ने यही कहा था कि बस अब तो ये उनका आखिरी टर्म है, इसके बाद तो बीजेपी टेक ओवर करेगी. लेकिन शायद किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ था कि नीतीश कुमार की सरकार 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करेगी, इतने पेंशन के पैसे बढ़ाएगी, जिसके कारण इतना बड़ा मैंडेट होगा. और उसके बाद जो स्लोगन लिखा गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, सच होगा, वही सच्चाई है आज की तारीख में बिहार की राजनीति का. देखिए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन पहले एक बात कहा जाता था कि बारात किसी की भी हो, यानी कि बीजेपी हो या आरजेडी, दूल्हा नीतीश कुमार ही रहेंगे. लेकिन ये सच आज की तारीख में, भले नीतीश कुमार पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो, लेकिन अब जो है आज के मैंडेट के बाद ये भी तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे. लेकिन जो मैंडेट आया है निधि, इसमें अब नीतीश कुमार के लिए मैन्यूवरिंग का चांस नहीं है कि वो बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के पास चले जाएं. अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी मजबूरी है और बीजेपी के लिए भी नीतीश कुमार सच्चाई है. Right, absolutely. Manish, we'll come back to you.
in just a moment. Sorry, I can't hear what they're saying. They're trying to tell me. मुझे आपके सवाल में अच्छा लगा, आपने ट्रेंड कहा, प्री मैच्योर सेलिब्रेशन जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब होता शुरुआती रुझान या प्रवृत्ति, और हमने इस तरह के रुझानों को बदलते और पलटते भी देखा है। थैंक यू। All right, that was Manoj Jha, the RJD's member of parliament, very close to Tejasvi Yadav. What did he say? I just caught the last bit. He said trend. Trend hai. But I think the trends are pretty clear now. I think one has to accept that this is clearly, as Manish said, a verdict in favor of the NDA and the BJP. Doc, anything interesting that you find, in the numbers in terms of how the alliance breakup is looking for both alliances? The BJP has again taken a lead over the JDU, as Manish also mentioned. What is actually interesting is that the NDA vote has gone up almost 7%. 6 of that 7% has come from others, independents, that has dropped 8% or 9%. Wow. While the Mahagathbandhan has dropped only 1%. The NDA has gone up 7-8%. Only 1% drop in the Mahagathbandhan. In other words, they've held their popularity, they haven't improved. But suddenly all the others, the electorate of the electorate, just one second, the electorate of Bihar has chucked out people who got no chance. And they've dropped from, what was that, 19.8% down to 12%. So suddenly, that's where the votes went from to the... So they've decisively voted in favor. Yeah, but all these, the people who voted independent last time voted NDA. It's not as though they got votes from the MGB. I thought that's quite interesting in the sense that it wasn't a swing away from the MGB, and that's what... MGB more or less same vote. But independence collapsed and all of that went to... And do we have any idea about vote share right now, where each alliance stands? Yeah, we do. So as I give you more and more work to do. Yeah, bloody hell. I think Here it is. You see, look here. NDA is currently 47%. It was 41% last time, including Chirag Paswan. So adjusted for that. So it's gone up 6. But look at MGB, down only 1. So it hasn't got its votes from MGB. As you said, those independents and others. Yeah, others down 8, some of it gone to JSP, and a lot of it gone to NDA. So Prashant Kishore hurt the Mahagathbandhan then? Is that fair to say? With his 3%, no, or we you don't never know. That might have it might have gone to NDA if it hadn't gone to him. It's difficult to can't conclude that. But what you can 2% he has cut across. Could be, yeah. NDA and 1% MGB. So he's heard both. Because there was a lot of speculation. But not very substantially. It hardly mattered, 1 or 2%. No, this drop of 8% and the rise of 6% is the key of this election. It's not that the Mahagathbandhan got swept away. They still held on 38, 39%. But they just lost the decline in votes from the independents. Squeezed across the country slowly and steadily. No, but it doesn't always go to one party. That's the key. Yeah, absolutely. I think Chirag Paswan said to us that when he fought the elections separately last time and did so badly, I think he said that he realized that at the end, the votes get polarized. It becomes a two-party system. Yeah. And maybe that's what... No, but we've seen this drop in independence, but we've never seen it, I haven't checked thoroughly, hasn't really gone all to one party. The independents go down, but they get spread out. Here, bang! I wonder why. Any thoughts on why independents went to previous vote for independence went only to NDA and not split? To a certain extent, but 10,000. Because but 10,000 didn't affect the MGB voters. That's interesting. That's interesting. The independents moved to the Nitish. I think they got their caste worked out right. I mean, the BJP, I think, focused
on the upper caste and the EBCs, because JDU would take care of the OBCs. You had Paswan with the Dalit vote. So I think they were able to manage the caste equation much better. I think that's absolutely right, because the NDA had a far wider caste coalition, while the Mahagathbandhan was relying on this Yadav Muslim, which is what, 30% perhaps, I think you would know the figure. Which is the traditional. But that's the sad part, Nidhi. I mean, after 2 years, if you can't go beyond 30%, 20 years, if you can't go beyond 30%, you can't bring the other leader down, and you've stuck to that 30%. I think this needs, I think both are probably. But really, we need to look at. And then the women's vote was caste neutral, which also went here. Yeah, so I think. But in a landslide victory like this, because you asked me a question earlier whether this is all because of the women vote, when you have a huge victory like this, now the NDA is now at 197, isn't it women plus? There has to be more. It all depends. No, Nidhi, I think votes and seats have no votes. As you increase the difference in votes, what is the overall performance? It is geometrical. It's not a one-to-one relationship. I don't know. You know, if you have, but is it fair to say it's only the women? Just thinking that maybe in Simhanchal, if the BJP has or JDU has done very well, that means women voters in Simhanchal have also clandestinely voted for the NDA, because their percentage of vote was 40%. And they could alone do things for their candidate. Right. So you have to see what is the performance of both the parties in Simhanchal, which has a substantial. We'll look at that. So MGB down 1%, Independence down 8%. That's down 9% total. 6 of that 9 went to NDA, and 3 to Prashant Kishore. We have Shravasti Dasgupta, senior political editor. Yeah. You asked whether it's hurt MGB. I would suggest probably, because an independent 6% would have gone there, and 3% if Prashant Kishore was not there may have gone to. Yes. Yeah, so it would have been 6-3, but they said if it's not, okay. Yes. Right. Sorry. No, we have a guest joining us. Shravasti Dasgupta is with The Wire and joins us this afternoon. Shravasti, thank you for being with us from where you are at the moment. What are your big takeaways, from this result today? Thank you so much for having me, Nidhi. I would say that the major takeaways this election is a lesson for the opposition in election strategizing, because as we can see that the BJP and the JDU have managed to keep their seats, but the RJD, which was the single largest party in the 2020 elections, has registered the biggest decline. But I think the largest story is also for Nitish Kumar and the JDU. We saw before the elections there was a narrative that was being created by the BJP on one side, and Nitish Kumar was not announced as the chief ministerial face. The kind of numbers that we're seeing from the JDU, especially in comparison to the 2020 elections when it was down to its lowest tally of 43, it has come up to about as close to the BJP as it has come as close to the BJP as earlier. Am I audible? Yeah, we can hear you. Go ahead. Go ahead. Hear you. Yeah, so I think that's a major lesson, that Nitish Kumar is definitely not down and out, and he remains a formidable force after 20 years. And that's what we found on the ground as well during the elections when I was in Bihar, that Nitish Kumar's supporters, especially in the face of such speculation about his role after the elections, they came to his side in a more solid fashion than ever before. They were vocally in his support. Now that's an interesting point that has emerged from this election, and it's a question also for the BJP, which did not want to announce Nitish Kumar as its chief ministerial face, that what are they going to do about Nitish Kumar after he has got this kind of numbers. And also I would say that for the Mahagathbandhan, the RJD, which contested the maximum number of seats from the alliance, the fact that it has been reduced to this tally at this moment from its single largest party position in 2020 calls for some introspection, but also the fact that it was banking too much on the youth to be the largest movers. We have found that the traditional, at least in our reporting, we found this is
anecdotal evidence at this point that the caste groups were at that time remaining with their traditional party bases. So the Mahagathbandhan has not, according to the numbers as we are seeing now, been successful in kind of getting voters from the NDA side to the Mahagathbandhan side, and the youth, the largest mover that Tejasvi Yadav focused his entire campaign on, has not come to his side as much as he would have liked. Right. We have Pawan Verma joining us. He's a spokesperson for Prashant Kishore's Jan Swaraj party. And it's great to have you, Pawan Verma, on the program today. So how do you feel about the outcome? No, for us, obviously the results are far below our expectations. With the NDA coalition, in particular the JDU and Nitish Kumar, after such a long period of incumbency to perform. As far as we are concerned, the only substantive caution we have is that we fought for the right cause. Our ideology was right. We raised issues. Mr. Verma, we're just having a problem with your connectivity, so let's try to reconnect with you and come back to you in a moment, because there's so much to talk to you about, not just about Prashant Kishore, but just looking at at the results as a whole. Shravasti, we were just discussing in terms of the big takeaways and just the Prashant Kishore sort of factor in this. I mean, there was so much hype around him in the media, and the media does tend to play up certain factors in an election which may not necessarily resonate on the ground. Meaning media is irresponsible? Aren't we? Sometimes. But in terms of his political trajectory from here, would it be too early to write him off? Like, you shouldn't write anyone off, but even with this 3% vote share, is this possibility of him starting something out and taking it forward from here? I think so, because as he himself has said in the several media interviews that he has done, he has, I think, given himself 10 years in this political space. So he has about 5 years more. And just to take off from what we found on the ground is that in this time, in this short period, I did not find anybody who was unaware of Jan Swaraj. Everybody had heard of Jan Swaraj. Everybody knew who the candidates were on the ground. Now, it's a different conversation about what their presence eventually was on the ground. Like, you would find Jan Swaraj's tents in villages and towns everywhere. But were there a lot of people there? Perhaps not. So, in comparison to the social media presence, their presence on the ground was a lot less. In fact, one voter said to me that unka social media mein hawa bahut hai, but I would say that the consensus on the ground is that people are aware, and there's what they are saying is that is baar unki bari nahi aayegi, abhi nayi party hai, आगे उनकी बारी आ सकती है. So I think it's too early to write him off. The entire Padayatra that he did across 5,000 villages has definitely registered a presence. People are aware of Prashant Kishore. People are aware of Jan Swaraj. Even the candidates people are aware of. So I don't think this is an election to write him off. If we remember, in 1995, Nitish Kumar had also won only 7 seats, but he has come back, and we are seeing a definitive return of Nitish Kumar. So I don't think it's the time to write him off. That would not be fair. Well, absolutely. We have a question from Shikha Trivedi for you. No, I'm just wondering that given that so much of Bihar's politics is driven by caste, Prashant Kishore being a Brahmin, will that work against him or in the future? I think he tried to move the youth as much as Tejasvi Yadav was trying to move the youth. Jan Swaraj's focus was also on the youth. He spoke about migration. He also told voters that kitni baar aap jati pe vote karoge. So there was an effort on his part to move young voters away from their caste denomination and vote beyond caste lines. But I would say, just looking at his ticket distribution, it was to some level, it was also on caste grounds. If you see in Darbhanga, for instance, R.K.
Mishra, who was the candidate over there, the former IG. He had been fielded against Sanjay Saravgi, who's the JDU's minister from there. So it was a Brahmin versus Brahmin. In another place, they have put Sahanis. So I think it depends. He is trying to create a politics where Bihar rises above caste lines, but whether that will, I mean, we'll have to see in the future what lessons he gains from this election and the kind of candidates he fields in the future, and whether he thinks that this beyond caste politics is working for him or not. Once Nitish Kumar goes, there'll be a totally new, look at the age of the leaders. The other ones, there is Paswan, there is Tejaswi, there is Jan Suraj, even Somnath Chaudhary is in his late 50s. I mean, a whole generational shift is going to take place. So one doesn't know how the realignments will occur. You just don't know how the realignments will occur. We have Sonali Anand of the Jan Suraj joining us as well. Sonali, thank you very much for being with us. I know it must be a disappointing day for you all. You obviously expected to do better, but it's a beginning, isn't it? Yes, it is. And thank you so much for having me here. And I would say that result would have been completely different if party would have contested the election on a fair field. So the whatever party, like the current incumbent government, I'm sorry, the sound is echoing. So it's creating little disturbance. Clearly. So when you're speaking, maybe take the earphone out and try, and then put it back. Okay. All right. Yeah. You don't want to problems. hear us anyway. Yeah. Okay. So what I was saying that the incumbent government like recently announced 10,000 incentive to the women, and that was complete. Like we can say, complete. Just to buy the votes of the women, Bihari women voters. And recently we have seen many announcements that increase in the salaries and honorarium of many cadre that is working in the Bihar, and that was especially in the rural areas. So what we say that the government has done is not playing on a fair field, and this has influenced the voter of the Bihar, and this has major impact. So whatever we and at the thing, and it's very important to say that we have tried to set the Bihar politics very different from the conventional politics, because we have raised the agenda and we have made agenda the center of the Bihar election. So we have been talking about migration and we have been talking about unemployment, and you can see that many parties have come on the same line and they're talking about the same thing. So earlier, if you will analyze, you will find all parties have been talking about other issues like caste, you say, or a religion base, you say, or you can say infrastructure. But they have never talked about human-centric development. And we have been the torchbearer and we have been flag bearer of these schemes. Tell us, what did you do wrong and what would you change for the next election? Can you repeat the question, please? Sorry? Sorry, yeah. What did you do wrong and what would you change in your strategy for the next time you contest? So definitely there must be definitely some shortcomings which could not bring the result which we expected. But we will start from scratch. As we said, we will never change the approach that we have made the development as a core agenda. Maybe we will be working more on the ground. We will include more cadres. We will be working every day and night. And we will not work just a few months before the election. We will be managing things. We will be dealing with the things as we have been doing in the past for 3 years. Now we have 5 more years and we will be working from scratch. And I think people of Bihar are a little maybe skeptical about as you said, they have to choose between the Jungle Raj and the current incumbent government. So that could be the possibility that people fear of getting Jungle Raj back to the Bihar. So they might not have accepted us in between us, but we definitely except that we have changed the narrative of the Bihar election. And major, if you will, at the end of the day, we will find the vote share and we will find
that definitely Jansraj has made its ground, and we have played well in this election. Right. Yeah, please. In one of his interviews, the Jan Swaraj leader said that if JDU gets more than 25 seats, I will retire from politics. Will he do that now? Good question. As I said earlier, that this election has not been contested by every party on a fair field. If some party is conducting misconducts, or somebody's party, some Leader party said this time and again. He said it in interviews. not going to pay for it. Will he retire or will he continue? Like the things have happened in the code of conduct, like the violation of code of conduct has happened, and you have tried to influence the voters, and you have managed it. But for this, Jansraj is not going to pay. Prashant Kishore is not going to pay for it, and ultimately Bihar people is not going to pay for it. We made this statement when we expected this, that every party will be fair in this election. But it's very disappointing that you used every entity of the government, you used all systems to bring voters in your favor, and you have been successful in doing so. All right, thank you very much, Sonali, for joining us. Sonali Anand there of the JSP party, which has just sort of made its political debut, not just about a year old, and stepped into the sort of election arena straight away. What's left to talk about? Manish, just to take up something with Dorab, a point he raised earlier, now with Nitish probably retiring in a couple of years, and Congress doing so badly, and the only younger generation left. What's going to happen? Looking ahead in Bihar, how does it? I wonder if Manish can hear us. He can't hear us right now. Yeah, I can hear you, Doctor. No, I can hear you. I can hear you. Yeah. So what's the future of Bihar when you look at the next election? Who's going to be contesting? What's going to happen to all the members of the party of the JDU? Because it's a horrible thing to say, but for Nitish Kumar, it was all about Nitish Kumar. He doesn't have a successor. He doesn't have any. It's not about an organization. So he hasn't got anybody. Congress is just decimated. It won 200 seats once here, and is down to what? Ruled for 24 years. Rules for 24 years. They're finished. So what is the next election going to look like in Bihar? Next election will be all about BJP versus RJD. Of course, in the days to come, it all depends on how BJP deals with Nitish. Because somewhere, Dr. Roy, if you have noticed that both BJP and RJD leaders like Tejasvi Yadav, they are very soft. When they talk about Nitish, they are very soft about him. Because somewhere both of them, BJP as well as RJD leaders, are eyeing the vote bank of Nitish, which is, in the worst of times. This was the worst election for Nitish, but they stood by Nitish. So somewhere that EBC vote bank, of course, if Nitish is no more in the thick of things, he is no more in the action, so there will be a two-way split. The majority will go with BJP, and there's a big splinter group would like to join, or to, they will prefer RJD. But till the time Nitish anoints his own successor, in his case, in the case of a regional party, it is always the son. But he is not very keen to, transfer the power or, announce his son as his successor, because his party's rank and file is willing to accept his son Nishant as his successor and as the leader of the party. But as of now, Nitish is not very keen on that. Very interesting. Sorry. What about your friend PK? सी पीके बाज आपको एक बात समझना होगा कि बिहार में जो 11 मुख्य राजनीतिक दल हैं, उनका कंपल्सन है कि वो किसी न किसी अलायंस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं। और पीके ये अगर सपना देख रहे हों कि वो अकेले मुद्दे उठा के, देखिए बिहार में आपको एक बात का क्रेडिट देना होगा,
चाहे तेजस्वी हो या प्रशांत किशोर, अगर 10,000 रुपये भी एनडीए गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किया है तो महिलाओं का मुद्दा या पेंशनर्स का मुद्दा इन लोगों ने प्रोमिनेंटली उठाया। लेकिन आपका, अगर आप चुनाव के परिणाम को देखें तो क्या आपकी भूमिका क्या रह गई? आपने एक आइडिया दिया जिसे आपके राइवल ने उसे कैच किया और उसको इम्प्लीमेंट कर उन्होंने चुनाव जीत लिया। तो आने वाले दिनों में, पहले तो प्रशांत किशोर की जो पूरे चुनाव में अगर आप देखें, मैं कुछ सीटों का देख रहा था जहां पर उन्होंने यादव मुसलमान कैंडिडेट डाले या अपर कास्ट कैंडिडेट डाले, लेकिन उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनका परफॉर्मेंस इतना पैथेटिक है कि वो, आप सही शब्दों में कहें तो वोट कटुआ के भी रोल में सही रूप से नहीं दिखे। यानी कि जनता जब तक आप एक किसी अलायंस के पार्ट नहीं हैं, जनता भले आपके बातों को डिजिटल मीडिया पे आपको खूब सुने, आपके इंटरव्यूज़ को खूब व्यूज़ आए, लेकिन जब वोट देने की बात होगी तो वो ये देखेगी कि आपके कैंडिडेट की या आपके पार्टी की विनेबिलिटी है या नहीं। मनीष जी, एक बात कहना चाहती हूँ, मनीषा प्रियम बोल रही हूँ, कि मुझे ये दिखता है कि प्रतीकात्मक राजनीति, सिंबलिज्म की राजनीति वो नहीं चली है बिहार में। जैसे राहुल गांधी जी भी पोखर में कूद गए और वहाँ वो पोखर में ताल में मछली मारने का काम कर रहे थे। जन स्वराज को देखिए, वो कभी दाल में तो कभी भात में। आधे दिन तक वो पहले तेजस्वी की बात करते रहे कि 9वीं फेल राजा या 9वीं पास राजा, फिर सम्राट चौधरी पे ढेला फेंकते हुए नजर आए। तो कहीं न कहीं बिहारियों ने राजनीतिक लफेबाजी और सूचनात्मक राजनीति को नाप दिया है। तो ये मुझे दिखता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केवल ऊपर से आइडियोलॉजी की पांग पड़ना या सोशल मीडिया पे जाना या एक डुबकी लगा देना, ये नहीं चलेगा। बिहारी राजनीति में लंबी डुबकी लगानी होगी, ये मुझे दिखता है। देखिए मनीषा जी, ये जो चुनाव था जिसके परिणाम अभी आ रहे हैं, ये चुनाव शुद्ध, या जो हम कहते हैं बिहार के शब्दों में विशुद्ध रूप से तुम मुझे नोट दो हम तुमको वोट देंगे वाला चुनाव था। पहली बार बिहार में कैश ट्रांसफ़र का चलन हुआ, क्योंकि इसके पहले जो मैं आपको बता दूं कि एक एम्पावरमेंट की बात होती थी, साइकिल या रिजर्वेशन 50% या ईवीसी को रिजर्वेशन दिया गया, या मुद्दों पर 7 निश्चय की बात की। इस बार एनडीए ने कोई आने वाले 5 सालों में वो क्या करेंगे उसके बारे में उनके भाषणों में कहीं नहीं दिखता था। यानी कि उनका जो मैनिफेस्टो भी था वो काफ़ी नीरस या काफ़ी लैकलस्टर था। शुद्ध ये जो चुनाव था वो ये था कि उन्होंने पैसा दिया, भले उनको पैसा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं आपको बता दूं थोड़े इस पैसे की कहानी के पीछे। ये जो पूरा स्कीम जो चला, इसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की एक अहम भूमिका रही। उन्होंने बिहार के जो एनडीए के लीडर्स हैं उनको कहा कि अगर आपने पैसे नहीं दिए, क्योंकि 2 महीने पहले तक जो सर्वे के रिपोर्ट आ रहे थे उसमें एनडीए काफ़ी पीछे चल रहा था। उसके बाद में केंद्र में अमित शाह, पीयूष गोयल सब ने एक तरह से इसका इकोनॉमिक कैलकुलेशन किया, क्योंकि बिहार बीजेपी के नेता ये मानकर चल रहे थे कि हमें भी जो प्रशांत किशोर या तेजस्वी वादा कर रहे हैं 2,500 रुपये हर महीने का, उसे मैच करना चाहिए। लेकिन उस समय ये कहा गया कि नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो बिहार का जो बजट है, बिहार आर्थिक कंगाली तक पहुंच जाएगा। और जिन जिन राज्यों में ये 2,500 रुपये महीना देने का चलन है, उसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विकसित राज्य हों या झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, उनकी आर्थिक स्थिति और ख़राब हुई है। इसलिए हम वन ऑफ दें, और इसलिए इस अमाउंट को 10,000 रखा गया। तो ये जो पूरा जो चुनाव था, 10,000 जब देने की घोषणा हुई और वो अकाउंट में जाना शुरू हुआ, उसके बाद से वो एनडीए के पक्ष में माहौल बनना शुरू हुआ और नीतीश के खिलाफ जो है जो भी चैटर था वो और कम होता गया। यानी कि पैसे ने सारे एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज किया है। तो ये बिहार का जो चुनाव है, और ऑफ कोर्स इसमें बीजेपी के नेताओं का जो इलेक्शन मैनेजमेंट है, मैक्रो मैनेजमेंट है, उसने भी एक अहम भूमिका अदा की है। लेकिन बाय एंड लार्ज चुनाव अगर किसी एक ने जीता है तो वो 10,000 रुपये ने जीता है। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है
कि चुनाव की पूर्व संध्या में जिस तरह से राइट्स बेस्ड राजनीति की बात की जा रही थी या वोट अधिकार की बात की जा रही थी, वो राइट्स बेस्ड राजनीति यहाँ नहीं चलेगी और टिकट वगैरह में भी झगड़ा वगड़ा सब देखा गया, वो सब छोड़ छाड़ के आप अंत समय आया तो उस समय आप क्या करते हैं? चुनाव के ठीक निकट समीप में आप यदि किसी आर्थिक दिक्कत को सीधे सीधे एड्रेस करते हैं तो सिर्फ वही चलेगा। तो क्या ये अब युग है ये देखने का कि चुनाव की पूर्व संध्या में आप क्या छोटा सा हाउस होल्ड रिस्क को सपोर्ट कर देते हैं, खासकर कैश के रूप में, उससे ही निर्धारित होंगे? तब तो फिर दलों का भी मतलब नहीं और कोई चिंतन या अधिकार या आइडियोलॉजी का भी मतलब नहीं। मनीषा, जो आप बोल रही हैं वो चाहे महाराष्ट्र जैसे डेवलप राज्य हों या कर्नाटका जैसे डेवलप राज्य हों, वहाँ भी चुनाव जो जीता गया, कर्नाटका में पैसे का वादा देके कांग्रेस ने चुनाव जीता और उसके बाद में उन्होंने उस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया। महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव के हार के बाद उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया और उसके बाद चुनाव जो है उनके पक्ष में आया। दूसरी बात है झारखंड जैसा राज्य जहाँ पे पूरी बीजेपी, वहाँ पे बाइपोलर इलेक्शन था और वहाँ पे बीजेपी के पूरे माइट के सामने हेमंत सोरेन ने केवल पैसे ट्रांसफ़र कर जो है वो चुनाव अपने पक्ष में किया। और बिहार आपको उसी कड़ी में देखना होगा, वो कंटिन्यूटी में आता है और ये कोई अपवाद नहीं। इस देश में वोटर्स ने एक तरह से नेताओं के साथ ये एक नया डील किया है क्योंकि अब करप्शन मुद्दा नहीं रहा। मनीषा जी, अगर आप देखिएगा कि पहले करप्शन का आरोप किसी पे लगता था तो वो ड्रॉप होता था। बिहार में प्रशांत किशोर ने एविडेंस के साथ में आरोप लगाए लेकिन उसको उन मंत्रियों को ड्रॉप नहीं किया गया। तो जनता भी एक तरह से सब कुछ देखती है और जनता ने कहा कि ठीक है, हमारा नेता करप्ट हो सकता है, ऑफिसर्स जहां भी जाए वहां पैसा देना होता है, तो आप मुझे पैसा दीजिए, हम आपको वोट देंगे। ये तो बड़ा सिंपल एक तरह का एक केमिस्ट्री कहिए या रिलेशनशिप उन्होंने कायम किया और ये सब जगह है। आप ये नहीं कह सकते कि बिहार गरीब राज्य है, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे समृद्ध राज्यों में भी यही हो रहा है। लेकिन झारखंड में भी मैया सम्मान योजना काम कर गई थी और गोगो बहना नहीं की। Can I ask you a question? Sure. Say, no, both of you actually, Manisha and Manisha. उसमें पैसे जा रहे थे, वो ongoing स्कीम था। If Nitish says, you know, I'd like to retire, I'd like to, and BJP, you select a chief minister, or all of you decide, who's the likely BJP leader that you can see? Samrat Chaudhary or unlikely? Yeah, I feel, you know, the BJP is exhibited, it's done everything that it's been doing in other states, right? It's done the cash transfer to women in other states. It's done the Parchi Mukhyamantri in other states. But I think one of the leaders whose names even Prashant Kishore did not take in the BJP and who's been very influential in the ticket distribution, including to Maithili Thakur, which was done at some risk of criticism from the RSS. I believe Nityanand Rai happens to have the confidence of the Home Minister. Remember, this is an election fought by Amit Shah, the Home Minister of India. This is so important for him. A regional politics led by a Gathbandhan comes into his bag in a North Indian state. Right. All this talk of this ideology being a no-go area for the BJP, अरे समाजवाद देखना उनको तो हरा देगा. Now here, this allows him and the Honorable Prime Minister to reinvent themselves as the, you know, the Prime Minister often copies or he's very fond of. Bet for a BJP chief minister. He is the most important leader. Another yogi? Putting in Nityananda Rai, wouldn't that be creating another yogi? So the last thing the PM wants is another yogi, I'm sure. No, I believe, you know, the equations are very straight aligned. With Yogi, it's confrontational. In the BJP, I believe it's cooperative politics, you know, and very clear lines. So with this, I feel the RSS definitely is in their place. This victory is not on account of the RSS of the Mahagathbandhan. So Manish, look at where they are. Same question to you. Look at where they are, not in the game. If Nitish retires, steps aside, who from the BJP is the most likely next
Chief Minister? डॉक्टर रॉय, एक तो उसे ओबीसी कम्युनिटी से होना होगा, वो यूपी की तरह से ठाकुर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप एक ओबीसी को रिप्लेस करेंगे तो वो ओबीसी या ईबीसी होगा। लेकिन जितने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, क्योंकि बीजेपी में अभी तक यही परिपाटी रही है कि वो सरप्राइज करना चाहते हैं, सस्पेंस रखना चाहते हैं। आपने भी देखा है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता है वो एक ही शब्द बोलते हैं, कुछ तो सस्पेंस रहने दीजिए। तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं है जो इस नाम को बता सके। हाँ, नामों की चर्चा बहुत सारी हो रही है, सम्राट चौधरी, लेकिन ये थोड़े दागी हैं क्योंकि इन पे काफ़ी गंभीर चार्जेस लगे हैं। लेकिन ये आज की बीजेपी है जो चार्जेस पे आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। नित्यानंद राय, चूँकि वो अमित शाह के काफ़ी करीबी हैं, एमओएस स्टेट हैं, और एक बिहार बीजेपी या अमित शाह को ये लगता है कि अगर बिहार में उन्होंने किसी यादव को ब्रेक दिया या उसको कुर्सी दी तो हो सकता है कि एक बड़ा जो सेगमेंट है, 15% यादव हैं बिहार में, वो वोट जो है उनके साथ वो अपने साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन जो बिहार बीजेपी के पुराने नेता हैं उनका कहना है कि अगर आपके साथ कोई डोमिनेंट कास्ट आता है तो उसका काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। तो शायद बीजेपी को उसके बारे में अंदाजा अभी नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जो भी नाम होगा, अगर आज की तारीख में तो नीतीश कुमार लग रहे हैं कि उनको एक और टर्म देना होगा, भले वो 5 साल का हो या 2 साल का हो या 6 महीने का है। लेकिन अगर बीजेपी अपना कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, What's your name? I think Samrat Chaudhary has a fair chance. Samrat Chaudhary. As a fair. Okay. Well, let's just go across to Tom Vadakan, BJP spokesperson, who's been waiting patiently as we do this back and forth. Well, congratulations, Mr. Vadakan, on your party's performance in Bihar. You know, that question that Manish was being asked about who in the BJP in Bihar would step up for the top role if needed. Any names that you would like to hazard a guess? See, let's face it, we have just come out of the victory trail, an extraordinary victory. This is time to concentrate on what we promised and what we have been delivering for so many years. Nitish ji has been quietly helping the combine in his contributions, particularly the reservations that he was giving women, prohibition for one. And there was also this issue about, the reservation for women, educational reservation, and this was a continuous process. Now, all this kept in mind. As to the question of a replacement for Nitish, right now, there's no vacancy. Who will come after Nitish's time? That is, I think, up to the some of the astrologers will be better because our tradition is that it was rightly mentioned by some of your panelists that we pick up people with a background of serving people. They may be unknown. When they get to the seat, they deliver because the agenda is set for them. Now, this is the kind of practice that the BJP has been following. And this is why results come. It is not something that is, something that happens out of the blue. Now look at this. There are 2-3 things that have happened, and that is important to get to the background. This Mandal issue. Mandal issue sprouted a few parties. SP was there, then RJD was there. And their plight today is something which I wouldn't like to mention at this juncture, but RJD out of power, Congress out of power for 35 years. Will these parties survive this kind of defeat? You can make promises. You can say that, well, RJD did a promise about giving employment per family, and when they went into the statistics,
it was discovered that it went beyond the budget of the Bihar government. And then when he was asked this, he said, we'll take care of it because we'll increase the budget. That is all it. Then he talked about a blueprint. Now, I don't know whether you heard about any blueprint that was submitted before elections. Nothing was there. It said that he had the blueprint for development. You see, Bihar is a state which I think is extremely politically active, learned. All of them may not be educated, but their views on politics is very clear. They have this understanding that if you need stability, can I just interrupt for a second? Sorry to interrupt you. I just want to take up something you mentioned about prohibition. Are you going to continue with prohibition? Because Samrat Chaudhary has said on record, on camera, that it should not continue. Are you going to continue with it? This is a question that should be addressed to Nitish ji, because he has delivered. And you see, I come from a state where prohibition is not at all fashionable. The excise income from prohibition is extraordinary, and nobody in a leftist state would ever dream of such a thing. But here it has happened. Women passing across the road where the liquor vendors find insecurity. Security is a major issue, not just men, but women. And the story is also about Generation Z, you know. So continue with this. You're in favor of it? I'm in favor of it, yes. But whether it is a decision to be taken by Nitish ji, who has got the pulse of the place, and he knows what he's doing, and if he has done it successfully, well, so be it. Okay. Crosses the 200 mark now. Yeah, that's quite something to cross the to cross the 200 mark. I mean, every time 206 is the record. Someone messaged me saying every time I look up at the screen, the Mahagathbandhan's numbers keep coming down and the NDAs keep going up. Decimation of the Mahagathbandhan. And yet the vote share is, as you said, only not changed. Yes. not really changed. It's the seats that, because of the switch from independence to them. It's There's an interesting thing in Purnia area where AIM has managed to hold This is the one you were talking about also. Yeah. Down 8%, up 6%. You know, but that's something that should give Tejasvi some solace, because politics is about patience. It's a long-term game, and he's young. He has age on his side, and if his vote bank remains intact, he has something to build upon. But he needs to move beyond the Muslim of course, he needs to. Same caste. Let me just give you the objection to this. There is an Akhilesh Yadav, 212 forms a government, then down in the dumps, and a very aggressive Yogi government goes across, whether she remains with him or not, walks across to Sonal Patel's widow, calls her Maha Mata, etc., gets in Bhola Ram Tufani, gets in Inderjeet Saroj, gets in Mr. Pasi, and trims down his family. It was right under his eyes that his sister-in-law Parna Bisht went toward the Yogi. Mulayam Singh Yadav's own daughter-in-law going that side. Now on this side, I don't see Tejasvi getting out to form that coalition. Not yet. Even with members of his own party. I know, for example, I've been to conferences, etc. in Bihar after a long time. Sudhakar Singh, for example, I have said, a very important member of parliament, who wins in his own steam when the BJP has kind of swept the whole arena in the Bihar Lok Sabha. Now, I don't see him, I don't see Abdul Bari Siddiqui, I don't see an effort to move beyond. His own sister, Rohini Acharya, loses the Chhapra seat by 13,000 votes only. What is the kind of campaigning she's done? What is the mass base that she has? You tell me, what is the recollection of Misa Bharti speaking in this parliament? Sanjana Jatav, say what you may of the Congress, but from Rajasthan, a Sanjana Jatav is brought into the Lok Sabha. Tell me, like Lalu Yadav, who brought in Abo Devi, we agree with it or not, brought in a Ramai Ram, what is the newness of this politics? And you ask any RJD person, they'll tell you, they see Tejasvi as being surrounded by a clique. I just want to ask Manish one question, which on what you raised. Manish, this victory of the NDA is because independents, people who voted for independence switched to voting for NDA.
So was that tactic of attacking NDA a mistake, and should they have just tried to win over independents? And maybe the independents will not be as solid NDA supporters as earlier. Just tactically, they were mainly attacking NDA. Should they have been trying to win over independent supporters who are tired of independence? How would they do that? Tactical mistake or not? डॉक्टर रॉय, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं कि जब चुनाव का विड्रॉल चल रहा था उस समय अमित शाह ने आके कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां पर जन स्वराज के कैंडिडेट जो स्ट्रांग थे उनको फीडबैक आया कि ये जो जन स्वराज के कैंडिडेट्स हैं ये 10,000 वोट से ऊपर इनको आ सकता है, तो वैसे कैंडिडेट्स को रीच आउट किया, उनको बुलाया, उनसे मुलाकात की और उनका जो नॉमिनेशन था उसको विड्रॉ कराया। वैसे ही कुछ इंडिपेंडेंट्स ऐसे थे जो उनको बीजेपी के पक्ष में चुनाव के दौरान, जैसे मैं आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी जहां तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर बीएसपी के कैंडिडेट तक को बैठाया गया क्योंकि उनको लग रहा था कि हो सकता है कि बीएसपी के कैंडिडेट के कारण जो है ये चुनाव फंस सकता है। तो बीजेपी उस तरीके का मैक्रो मैनेजमेंट कर रही थी, लेकिन महागठबंधन में चूंकि सारा दारोमदार जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर था और तेजस्वी यादव अपने चुनावी सभाएं कर रहे थे। वो ठीक है, वो 15-16 सभाएं कर रहे थे क्योंकि इस बार जो चुनाव का कैंपेनिंग का जो समय था वो 10 से 12 दिन था। लेकिन जब आप बीजेपी के एनडीए का जो अलायंस है, ना केवल इसका वोट जो बैंक है वो इससे एक्सट्रीम ऑफ सोशल कोलिशन, सोशल इनका जो कोलिशन है वो इट्स ए कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम्स है, अपर कास्ट, नॉन यादव, बैकवर्ड, पासवान और सारे दलितों का एक बड़ा वर्ग जो है इनके साथ है। लेकिन साथ ही साथ इनके लिए चुनाव मैनेजमेंट कौन कर रहा है? वो खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। वो जेडीयू के, अगर आपको याद हो कि हम जब मधुबनी मिथिला हाट में थे तो अमित शाह हमसे 5 घंटे पहले वहां पहुंचे थे और एक एक सीट का वो फीडबैक ले रहे थे। नेक्स्ट डे भी उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे, राहुल गांधी आते थे, 2 सभाएं की, फिर वापस दिल्ली। कोई मैक्रो मैनेजमेंट का जो है वो पूरा अभाव दिख रहा था और चुनाव में ये सारी चीज़ें एक बड़ा रोल प्ले करती है और इसका आपको फ़ायदा होता है जो बिहार में एनडीए को हुआ और खामियाजा जैसे बिहार के केस में महागठबंधन को उठाना पड़ा। लेकिन डॉक्टर रॉय, मैं एक साथ साथ एक बात और आपको कह दूं कि मैं जनसुराज के कुछ कैंडिडेट्स को ट्रैक कर रहा था, कुछ सीटों को मैं ट्रैक कर रहा था, जैसे जहां पर उन्होंने यादव मुस्लिम डाले हैं या अपर कास्ट डाले हैं, तो वहां पर मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा वोट उनको नहीं मिला है, कुछ हजार वोट मिले हैं और जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जनस्वराज का कैंडिडेट नहीं होता तो शायद एनडीए को जीत नहीं मिलती। कहीं ना कहीं एनडीए जो जनस्वराज है या इंडिपेंडेंस, लोगों का जैसे बिहारियों का मैंने एक पहले से भी ये ऑब्जर्व किया है कि वो जीतने वाले को या जो रेस में रहता है उसी को वोट देते हैं। मनीष जी, रूही तिवारी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रही थी। आपने जिक्र किया कांग्रेस का, इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ। सबकी बात हमने कर ली है, जेडीयू की, बीजेपी की, आरजेडी की। कांग्रेस के जो नेता हैं, जो भी बचे कुछ नेता हैं बिहार में, आपने जब उनसे बातचीत की, क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, ग्राउंड पे रहे हैं, उनसे आपको किस तरह का फीडबैक मिलता है? जो ये वोट चोरी का एक मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, क्लियरली उसका ज़मीन पे कोई भी रेजोनेंस नहीं था, कोई मतदाता उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। क्या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में, नेताओं पे, ग्राउंड पे? क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस तो हम देख ही रहे हैं। देखिए, ये कहना गलत होगा कि जो एसआईआर का मुद्दा और उसके ऊपर जो कैंपेन किया वो गलत था, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब एसआईआर के मुद्दे पर पूरा आंदोलन चल रहा था उस समय सुप्रीम कोर्ट की 3 हियरिंग हुई। 2 हियरिंग में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा, वर्बल उन्होंने ऑब्जर्वेशन ऑर्डर दिया था ईसी को कि आप आधार को भी एक बेसिस मानिए। लेकिन उसी दौरान जब आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने जिन लोगों को मृत डिक्लेयर कर दिया गया था उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया, उसके बाद कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि आधार विल बी ऑल्सो
required ये basis for the as a voter, for a legitimate voter, वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, बहुत बड़ा कॉन्सेशन आप कहिए कि जो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उसके लिए तैयार नहीं था। तो उस आंदोलन का एक फायदा तो जरूर हुआ, लेकिन चुनाव के दौरान जो है उसका इको सुनने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस बीच में एसआईआर के आंदोलन के बाद बिहार सरकार ने एक और फैसला लिया था, वो था पैसे ट्रांसफर करने का। और जब एक बार पैसा ट्रांसफर होने लगा तो वो सारे मुद्दे गौन हो गए। मैं बार बार कर रहा हूं कि इस बार का चुनाव जो था वो 10,000 रुपए का चुनाव था। Right, Shikha, you have a question? Manish, the CPI, ML and the left, now they don't indulge in symbolism. They are a cadre-based party. They did so well in the last, in the Lok Sabha elections. What happened this time? Why have they not performed well if they tick the right boxes? मुझे लगता है शिखा कि कहीं ना कहीं जो CPI-ML या लेफ्ट का जो कार्डर वोट था, एक तो क्या था कि मैं आपको बताऊं कि CPI, CPM और CPI-ML उस मामले में कब रहा, इन्होंने काफ़ी एडवेंचरिज्म भी किया। इनके कारण कई सारी सीटों पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी हुआ। जैसे आपको याद हो बछवाड़ा की सीट में अगर आप देखिए CPI और कांग्रेस के वोट को अगर आप जोड़ेंगे तो वो अभी जो बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ पे जो आगे चल रहे हैं उससे कहीं अधिक है। लेकिन CPI का एक जिद था कि नहीं, हम कुछ 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक CPI-ML का इस बार का स्ट्राइक रेट इतना पुअर है, उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं 10,000 का जो मुद्दा है वो एक काम किया है, जिसके कारण उनकी महिलाओं ने, क्योंकि जो जीविका दीदियां होती हैं उसमें OBC, EBC और दलित वर्ग की महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और सेंट्रल बिहार में CPI-ML के जो काडर हैं वो बहुत ज़्यादा जीविका में शामिल होती हैं, एक्टिव हैं। तो हो सकता है कि पैसे के दबाव में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पुरानी लॉयल्टी को सेट असाइड करके जिसने पैसे दिया उसको वोट दिया। शिखा, कहीं ना कहीं सेंट्रल बिहार में CPI-ML को सीधा टक्कर भाजपा दे रही थी। जाति की राजनीति भी उसने बहुत प्रखर की, पिछड़ों को बहुत टिकट बांटा, कुशवाहा, राजवंशी, कानू, उन्होंने देखा कि CPI-ML से आखिर कौन जातियां जीत रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि इस इलाके में भाजपा ने पिछड़ों की राजनीति की और आइडियोलॉजी के ऊपर, वामपंथ की आइडियोलॉजी के ऊपर पिछड़ों की राजनीति और कैश ट्रांसफ़र दोनों मिल करके लगता है कि वो परचम जो है वो लहरा गया। पिछड़ावाद और एक तरह से विमेंस वोट के लिए कैश ट्रांसफ़र। औरंगाबाद की भी सीट लूज़ की थी बीजेपी ने, जिस जगह को कि चित्तौड़गढ़ कहा गया था ठाकुरों का, वहाँ एक कुशवाहा कैंडिडेट जीते थे लोकसभा में, लेकिन उस जीत का भी बदला भाजपा ने वहाँ के कैंडिडेट त्रिविक्रम सिंह को बदल के और निकाल लिया है। तो कहीं ना कहीं मगध शाहबाद बेल्ट में CPI-ML को चोट बहुत लगी है। उसके कारण 2 हो सकते हैं, 1 नहीं। So we've got 3 results now, and the Congress will open its account because they've won 1 seat or held 1 seat, so they will not go down to 0. And the other 2 have gone to the JDU. We should be getting a lot more results soon, and I think. So do you want to sit here and talk about the results for the next 6 hours? I'll leave that to the next lot of people who wish to. Because it's so one-sided. It's like such a sweep. It is a sweep. It's a sweep indeed. I mean, we can't see these figures, but for Raghopur, Tejasvi to be trailing, I think it's huge. He's back in the lead, though. He's back in the lead. Yes, he's back in the lead. But I believe that the BJP did not leave any strategy, to get Tej Pratap to have a helicopter. Trailing. He's trailing again. Yeah. But that's the thing about the BJP campaign, isn't it? That they fight every election, whether it's a municipal election, to a national election, to a state election, like it's life and death. And they will carpet bomb the place like they did in Bihar. But I really contrast this when I still don't understand why Rahul Gandhi jazzed off to South America in the middle of this campaign. I just don't understand because, the Bihari Rajniti is all about getting actionable intelligence from the other person's house.
So Lalu's time, Lalu would have known what was happening in the Nitish household, what was happening there. I think at this point of time, the person who had an inkling of these results is Lalu himself. Those who were able to meet him did say that. What did he say? He was cautious. He was very quiet, but very cautious on Raghopur, and he did believe that he's led it so far, but whether his children will be able to take it forward or not, those were question marks. Lots of question marks, even on Misa. But he will never come out and say a word about his family in public. So that's the man, a changed man after 1995, 97, definitely. But he knows politics on the tips of his fingers. So how much of it is? I think political leadership is not an intergenerational transfer from one political tire to another. You have to learn it like Lalu did, in a very, very native and vernacular sort of way. All the bellwethers have held except one. One has fallen. 11 out of 11. Raniganj. Wow. That's fallen. Wow, otherwise, so all the bellwethers have held. So Tejasvi is trailing by 3,000 votes. You may make it out. They'll fix them. How many rounds in his seat to be counted? 10 out of 30. Oh, that's a long one. He may win the... That's what the election commission is saying. Wow. 30 rounds. Tej Pratap to get a helicopter to campaign this election. I mean, come on, we've never seen so many helicopters in Patna. It was a delight to watch them. We know maybe where that came from. Yeah, that's progress. In fact, I was coming back on a flight and people would tell me, वो देखे यहाँ प्रधानमंत्री जी की हेलीकॉप्टर है, ये भारतीय वायुसेना की जहाज है. So I think, yes, we had our time and we enjoyed it. Seeing such visual delights, 6 to 8 helicopters. I think one of the best videos though that I saw, on a lighter note as we kind of wrap it up and hand it over, was that apparently a BJP helicopter was coming in to land and they accidentally, when they were approaching, they realized it's an RJD rally, so there were RJD flags, so they took off. So it just kind of came in, buzzed in and ran away. No, but that was fun to see. That I've been to many of these rallies and the helicopter lands surrounded by people. Yeah, it's just... It's a fascinating sight. Yeah. No, it's so dangerous. I think there's no precautions. Something terrible is going to happen. They need to do something before an accident happens. Yeah. And the dust that comes with it, like it's a huge... It's not an eco-friendly way of campaigning. Not at all. So I think... We're done for today. Things well, not for today. Not for today. Things for a few hours. That's right. I mean, anything can happen. Surprises. Actually, a point for you, Durab, since it is Nehru's birth anniversary today, and he was Prime Minister only for 17 years, do you think he did more for India than Nitish has done for Bihar in 20? Nitish is less than Naveen Patnaik. No, he's less than No, I said Nehru. Well, we will be back in a few hours because once the entire picture in Bihar unfolds and we get reactions, we haven't really heard, interestingly, by now you do normally hear from the top leaders, so nothing even from the winners, frankly, from the top leadership, but I think by the evening we will hear from the Prime Minister downwards. And Manish, I'm going to hand it over to you. Sayonara. निधि अभी जो है सबको मालूम है कि चुनाव का जो काउंटिंग अभी जारी है, जीतेगी एनडीए, यानी एनडीए जीत गई है, लेकिन कुछ सीटों पे थोड़ा सा फेरबदल हो रहा है. जनता दल यूनाइटेड के कैंप में थोड़ी मायूसी है क्योंकि वो चाहते थे कि अगर जनता दल यूनाइटेड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाती तो निश्चित रूप से जो इतने स्पेकुलेशन हो रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, उस पे वो शायद उस पे विराम लगता, क्योंकि अब एक ही चीज़ पे बहस हो रही है या जो भी चर्चा हो रही है वो इसी चीज़ को लेके कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें मानेंगे या नहीं. हालांकि इसकी संभावना काफ़ी प्रबल लग रही है, काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि उन्हें हटाने का कोई कारण नहीं दिख रहा है और उन्हें रखने के सारे कारण दिख रहे हैं. तो इसलिए अब सब लोग यही वेट कर रहे हैं कि जो फाइनल नंबर से एक बार आ जाएं, कम से कम अभी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, करीब 150 से ज़्यादा ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर अभी 20 राउंड की मतगणना बाकी है
और इसमें अभी कुछ समय और लगेगा, यानी कि कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे। और बीच में साथ साथ जो है उन्हें जो पोस्टल बैलेट की गिनती है उसे भी पूरी करनी है, क्योंकि सुबह में पोस्टल बैलेट का काउंट हर 243 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने पूरा नहीं किया था। निश्चित रूप से आज के रिजल्ट परिणाम के बाद जो है आरजेडी कैंप में काफ़ी ज़्यादा मायूसी है, क्योंकि उन्हें इस प्रकार के अप्रत्याशित हार की संभावना कहीं से उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन वो भी जान रहे थे कि जब से लोगों के खाते में पैसे जाना शुरू हुआ था, उन्हें लगा था कि एनडीए जो है उसने पूरे चुनाव में कमबैक किया है और उसका उसे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसलिए तेजस्वी यादव ने चुनाव के बीच में कहा कि वो 30,000 रुपये देंगे। और उसके अलावा लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि हर घर में जहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं है वहाँ पर वो उन परिवार के लोगों को नौकरियां दी जाएगी, लेकिन उसके बारे में कभी विस्तार से बात नहीं किया, जिसके कारण जो है जितना उसका इम्पैक्ट होना चाहिए था वो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था। हाँ, लेकिन ये जीत कैसे हुई, इस जीत में जो है पूरी कहानी में बीजेपी, जेडीयू और पूरी जो सरकार की जो मशीनरी है उसने आप कह सकते हैं कि तन मन से काम किया, जिसके कारण ये इतनी बड़ी जीत संभव हुई। क्योंकि जैसे ही ये निर्णय लिया गया कि 10,000 रुपये हमें ट्रांसफ़र करने हैं, उसके बाद सारे अकाउंट्स चेक किए। बहुत सारे अकाउंट्स में केवाईसी नहीं हुआ था, करीब 5 से 10 लाख ऐसे अकाउंट थे, लेकिन उन लोगों को तुरंत रीच आउट करके एश्योरेंस दिया गया कि आपके खाते में जैसे ही चुनाव खत्म होगा आपका केवाईसी होगा, उसके बाद ये पैसे जो है आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस 10,000 के कारण जो है पूरी तरीके से महागठबंधन का जो परंपरागत वोट बैंक था वो एक तरह से उसमें वो एक तरफ फ्री फॉर ऑल हुआ है। जो जहां पुरुषों ने वोट किया वहां महिलाओं ने वोट नहीं किया है, और जो भी उम्मीदें की जा रही थी वैसा ये चुनाव नहीं था। हालांकि ये कहा जा रहा था कि इस बार 2020 के तरह ना कोई सोशल पोलराइजेशन है ना कॉम्युनल पोलराइजेशन है, लेकिन इस सोशल और कॉम्युनल पोलराइजेशन भले ही ना हो, लेकिन जो मनी ट्रांसफ़र था उसके कारण जो सोसाइटी में पोलराइजेशन था खासकर महिला वोटरों में, उसका पूरा असर जो है आज के परिणाम में देखने को मिल रहा है। कुछ चुनाव आयोग से लोगों की शिकायतें हैं, चुनाव आयोग ने उन शिकायतों को दूर करने में कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन सच्चाई यही है कि ये जो चुनाव था ये 10,000 रुपये का चुनाव था। और इस 10,000 रुपये के अलावा जो पेंशन की राशि बढ़ाई गई, स्कॉलरशिप के पैसे दिए गए, सरकार से जो भी लाभान्वित थे, सरकार के पास जिन भी लाभान्वितों के अकाउंट थे उनके खाते में पिछले 2-3 महीनों के दौरान जमकर पैसा ट्रांसफ़र किया गया, जिसका लाभ जो है आज एनडीए सरकार को बिहार में मिला है। ये इसका पूरा क्रेडिट आप नीतीश कुमार को नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो योजना हुई इसमें केंद्र के भी जो मंत्री थे वो भी इसमें शामिल रहे, उन्होंने भी अपनी सहमति दी, क्योंकि इतनी बड़ी करीब 30,000 करोड़ का अमाउंट था, तो वो पैसा कहाँ से आता, उसमें केंद्र सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी एक अहम भूमिका थी, जिसने सब ने फैसिलिटेट किया, जिसके कारण इतने रिकॉर्ड समय में ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ और वो आप कह सकते हैं कि सीधा वोटों में कन्वर्ट भी हुआ। इसका एक दूसरा दिलचस्प पहलू ये भी है कि जब नीतीश कुमार को इस स्कीम के बारे में बताया गया तो वो थोड़े से उनका रिजर्वेशन था, उनका कहना था कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना किया है तो पैसे देने की क्या ज़रूरत है, महिलाएं उनको अपना, तो महिलाएं जो हैं वैसे ही उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखती हैं। लेकिन उनको जब बताया गया कि देखिए ये पैसा देना हमारी मजबूरी है, क्योंकि तेजस्वी यादव हर साल 30,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं और प्रशांत किशोर का भी जो वादा है वो भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में उसका इको देखने को मिल रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी सहमति दी और सरकार ने आनंद फानंद में इस स्कीम को रोल आउट किया। अब हमारे साथ निधि कुलपति हैं। निधि जी,
बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। तो लगातार हम डिकोडर पर सुबह से ही जो बिहार के विधानसभा चुनाव हैं उनका आकलन, विचार मंथन सुन ही रहे हैं। तो ये बहुप्रतीक्षित जो विधानसभा के चुनाव हुए बिहार के, उसके नतीजे आ ही गए हैं और एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत एक तरह से हम कह सकते हैं हमें मिली है। बिहार जो है वो विचारों की भूमि रही है, विचारधाराओं की भूमि रही है। कर्पूरी ठाकुर, जेपी, लोहिया, इनकी भूमि रही है। और कहा जाता है जो चंपारण की भूमि है यहाँ पर, वहाँ पर असली ज्ञान जो एम.के. गांधी, जो हमारे गांधी जी हैं, वो बापू यहीं से बने थे। क्योंकि यहाँ पर एक कहानी है कि जब वो आए यहाँ पर, उन्होंने एक महिला को मैले वस्त्रों में देखा और कहा कि भाई तुम अपने वस्त्र धो क्यों नहीं लेती हो? तो उसने कहा कि अगर हम इसे धो लेंगे तो हम पहनेंगे क्या? तो इतनी गरीबी थी लोगों के पास उस समय वहाँ पर कि लोगों के पास दूसरा वस्त्र नहीं हो पाता था पहनने के लिए। तो वो गरीबी है, हालात बदले हैं, लेकिन क्या उस गरीबी का हाल है? क्योंकि हमारा जो देश है उसमें अब ये भी कहा जाता है बिहार जो है अब भी बहुत गरीब, सबसे गरीब तबके में आता है। तो इस सबका निवारण करना है। और जो आज के जो हमारे नतीजे सामने आए हैं, उन्होंने कई चीज़ें हमारे सामने साफ कर दी हैं। ये साफ कर दिया है कि किस तरह से नीतीश कुमार के प्रति जो लगाव है, स्नेह है लोगों का, वो बना हुआ है। उनकी जो आप रणनीतिक कास्ट मैट्रिक्स कह सकते हैं, उस पर उनका जो भी जिस तरह से वो सफलता उन्होंने पाई, लेकिन लोगों का स्नेह बहुत बना हुआ है। दूसरी तरफ जो नीतिगत फैसले महिलाओं के लिए साल दर साल लेते गए 2005 से और अब तक आप देखें, और अंत में जिन्हें कल्याणकारी योजना कहा गया, उनका क्या असर हुआ? उनका ये असर हुआ तो महिलाओं ने उनका साथ निभाया है। और साथ ही ये भी एक तरह से साफ हो गया है कि विपक्ष को अपनी रणनीति है उसमें एक बार फिर से विचार मंथन करना होगा। तो आइए इस सिलसिले को, जो सुबह से ही चर्चाएं चल रही हैं, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और जो नतीजे सामने आए उनको और गहराई से समझेंगे। और क्योंकि अब दोपहर का समय हो चुका है, नतीजे हमारे सामने लगभग एक तरह से साफ हो ही चुके हैं, उसमें कुछ बड़े बदलाव नहीं होने वाला है। तो अब आगे की राह कैसे होगी हमारे बिहार की, वो किस तरह से कई मानकों में आगे बढ़ा है, लेकिन और उसको मजबूती से आगे बढ़ना है। क्योंकि जो बिहार के निवासी हैं, बिहार में नहीं लेकिन जो बाहर जब वो जाते हैं तो प्रतिष्ठित संस्थानों में सबसे उच्च पदों पर वो लोग बैठे हुए हैं। किसी भी क्षेत्र में आप देख लें तो क्या कारण है कि हम अपने बिहार को मजबूती से आगे अब तक नहीं बढ़ा पाए हैं, जिसको और मजबूती से बढ़ाना है। बहरहाल हमारे साथ कई मेहमान अभी भी बने हुए हैं। जूही तिवारी हमारे साथ बनी हुई हैं, आलोक जी, आलोक वत्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ आप भी मौजूद हो। तो सबसे पहले आलोक जी आप ही से, क्योंकि आप बने हुए हैं हमारे साथ, और जिस तरह से बधाई एक तो बीजेपी को, लेकिन जब जीत आती है तो जीत के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक दायित्व आता है। 20 साल का भले ही ये राज्य शासन रहा हो, उसको और मजबूती से आगे बढ़ाएं, ये भी एक दायित्व सामने आता है। तो पहले अगर नीतीश जी की बात कर लें, जो मैं सुबह से भी सुन रही थी, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि नीतीश जी के प्रति बहुत लोगों का स्नेह था। मैं तमाम आर्टिकल्स पढ़ रही थी, मैं बिहार तो नहीं गई इस बार, लेकिन लोगों ने बोला कि उनको बहुत प्यार से अगर करेंगे तो विदार जीत के साथ ही करेंगे। हाँ, तो ये माना जाए वो मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही। जो उनके नेतृत्व में जो लोगों का भरोसा है, क्या उस पर एक बार फिर से एक ठप्पा लगा है? देखिए निधि जी, इसमें कोई शक है क्या कि उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, और जिस 20 साल बहुत लंबा सफ़र होता है, खासकर भारतीय राजनीति में इतना लोग टॉलरेट नहीं कर पाता है किसी नेता को, उनके एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई हो जाता है। लेकिन 20 साल के बाद इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से और इतनी अभूतपूर्व ऐतिहासिक 243 में क्लोज टू 200 एनडीए को है, अभी भी चीज़ें काउंटिंग चल ही रहा है। तो ऐसा तो एक जिसको कहते हैं इंग्लिश में डेसिमेटेड, द ऑपोजिशन हैज बीन कंप्लीटली डेसिमेटेड। तो ये नीतीश कुमार के जो नीतियां थी, सबसे बड़ी चीज़ थी, हम लोग अमन चैन चाहते हैं। जितना वहाँ पर खुराफात और खून खराबा ये सब चल रहा था और अपहरण का दौर था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, शाम को कोई युवती सड़क पे नहीं निकल पाती थी, इस सब को अगर किसी ने ख़त्म किया है, लगभग ख़त्म किया है, पूरी तरीके से तो
क्राइम पूरे दुनिया में कहीं नहीं खत्म हो सकता है, मेरा अपना ऐसा मानना है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि नीतीश कुमार ने कई चीज़ों को चेक में रखा, ये श्रेय भी जाता है। तो जो एक सामाजिक समरसता बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है और उसका श्रेय नीतीश कुमार, सामाजिक समरसता और सामाजिक शांति और समरसता भी बनाए रखना नीतीश कुमार। शिवम बिज हमारे साथ है। शिवम, मैं आपसे, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये नतीजे सामने एक तरह से आ गए हैं और रुझान और नतीजे हम सबके सामने एक तरह से हैं, आपका आंकलन, व्हाट इज द बिग टेक दैट यू टेक अवे अभी दोपहर में? द बिग टेक अवे दिस वाज अ नीतीश इलेक्शन, ये नीतीश कुमार का चुनाव था। नीतीश के नाम पे लोगों ने वोट दिया है, एनडीए भाजपा मोदी के नाम पे भी दिया है, लेकिन द बिग, मैं एक हफ्ते घूमा तो जो मैंने कीवर्ड सबसे ज़्यादा सुना वो नीतीश नीतीश नीतीश। चुनाव में क्या हो रहा है, नीतीश, कौन जीतेगा, किसको दोगे, नीतीश नीतीश। तो अब इसमें एक सरप्राइज़ की बात यह है कि 5 साल पहले 2020 में ऐसा लग रहा था कि बिहार की जनता नीतीश से ऊब गई, हटाना चाहती है ना। एलजेपी अलग से लड़ी थी सिर्फ नीतीश के खिलाफ एक गुस्सा था। उस गुस्से को बहुत सारे लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया कि अब नीतीश खत्म हो गए, लेकिन वो गुस्सा उस समय उसका एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट था, वो था फर्स्ट कोविड लॉकडाउन का इकोनॉमिक एंगल। इसीलिए तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरी का प्रॉमिस था, उसको एक थोड़ा सा रेजोनेंस मिला, इसलिए महागठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया। उस 2020 के रिजल्ट को कई लोगों ने मान लिया कि अभी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, नीतीश जा रहे हैं, लालू जी, रामविलास पासवान का निधन हो गया है, पुरानी लीडरशिप खत्म हो रही है। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि पिछले 5 साल में उस इकोनॉमिक एंगल पे नीतीश ने काम किया, कहीं नौकरी, कहीं पैसे बढ़ाए। अब चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपये, बिजली फ्री यूनिट, ये सब करके जीविका, आंगनवाड़ी वर्कर, कुछ ना कुछ करके उसको एड्रेस करने की कोशिश करी। दूसरा, जो बिहार की पॉलिटिक्स हैज़ रिवर्टेड टू द मीन, जो एक बेसलाइन पॉलिटिक्स थी, अब वो गुस्सा नहीं है नीतीश के खिलाफ। थोड़ा बहुत जो एंग्स थी लोगों की, लोकसभा में निकल गई, थोड़ी सीट कम कर दी लोगों ने। अब जो ईबीसी तबका है, जो स्विंग वोटर है, जो नीतीश कुमार ने इसको कल्टीवेट किया है, वो कंफर्टेबली बैठा हुआ है। मैंने पूछा कई ईबीसी वोटरों से कि लेकिन 20 साल हो गए, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बिहार में भी सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, अभी भी आप नीतीश को दे रहे हैं। कहते हैं ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, एक नहीं 2 तो ऑल्टरनेटिव है, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। तो कहते नहीं, ये वो घुमा फिरा की बात ये आती है कि एक तो यादव है, एक ब्राह्मण है, तो ऑल्टरनेटिव हमें चाहिए। लेकिन ईबीसी तो अभी जो है, जो ईबीसी तबका है, वो एक तरफ अपर कास्ट डोमिनेशन से डरता है, एक तरफ यादव डोमिनेशन से। तो शिवम, क्या आपको लगता है कि जो नीतीश कुमार ने ओवर द इयर्स जो तमाम सेगमेंट्स को कल्टीवेट किया, अब वो कुर्मी समुदाय से आते हैं लेकिन वो बंधे नहीं रहे। आरजेडी हमेशा वो यादव और मुस्लिम उसमें बंधा रहा, उनको और खुलने की ज़रूरत है, आगे हम चर्चा इस पर कर सकते हैं। लेकिन नीतीश ने जो ईसीबी उनको और महिलाओं को उन्होंने किसी, अब जिस तरह से महिलाओं की बात वो किसी जात में नहीं बनी है, हाँ मैं आऊँगी रूही के पास उस पर, लेकिन जो उन्होंने तमाम जो और समाज है, वर्ग हैं, जातियों के हिसाब से अगर कह दें, उनको वो सफलता से एकजुट उन्होंने एक अम्ब्रेला के अंदर कर लिया। बिल्कुल, वो मुझे लगता है खाली ईबीसी से वो चुनाव जीत रही थी एनडीए, उसके ऊपर जो उन्होंने 10,000 रुपये और दे दिए, उससे 2/3 हो गई। पहले जीत रहे थे, मुझे कोई इस पर शंका नहीं थी। बट एक जो महिलाओं का वैसे भी नीतीश कुमार ने बहुत कल्टीवेट किया है, पर अभी मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि 10,000 रुपये आपसे रूही, हम लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपये ने दैट वाज अ गेम चेंजर इन द एंड, जैसे आइसिंग ऑन द केक हो सकता है। लेकिन 2005-06 में एक बड़ा आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें था कि जब वो साइकिल सबसे पहले लेकर आए थे, और वो महिलाएं अब बड़ी हो गई होंगी, भले ही वो बहुत ज़्यादा आगे चलकर पढ़ाई लिखाई ज़्यादा उन्होंने नहीं की, लेकिन उस समय जो एक महिला में जो आत्मविश्वास आता है साइकिल के साथ, जो फ्रीडम आता है, वो उन्होंने तब मिला। हालांकि अब ये स्कीम बताया जा रहा है सेंट्रलाइज्ड हो गई है, तो 1-2 साल से शायद थोड़ा धीमी गति से उसमें साइकिल या ये पैसे दिए जा रहे हैं उसके। फिर 50% आरक्षण प्राइमरी टीचर्स के लिए, 50% आरक्षण पंचायत में, फिर सिविक बॉडीज़ में 2007 में 50% आरक्षण, 35% बिहार पुलिस में, फिर 5,000 रुपये वन टाइम ग्रांट, और फिर लगातार 2010 में उन्होंने ये स्कीम बॉयज़ के लिए भी खोल दी। तो ये नहीं है कि आप सिर्फ कह दें महिलाएं महिलाएं महिलाएं,
हालांकि एक ये आंकड़ा भी था कि इस बार सबसे कम उम्मीदवार महिलाओं को बनाया गया है इस 10-15 साल बाद, 15 साल में 15 साल बाद। तो वो अपने आप में वो भी एक वाकई में, क्योंकि ये तो गुजारिश होगी केंद्र से और राज्य से कि भाई आप महिलाएं आपका साथ देती हैं तो आप भी डिसीजन मेकिंग में उनको लेके आइए। तो आपको ये लगता है कि महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी है? 10,000 रुपये जिस तरह से लगातार बात हो रही है। जी निधि, मुझे नहीं लगता ये सिर्फ 10,000 की बात है, और कहीं ना कहीं हम बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से देख रहे हैं। अगर हम ऐसा कहें कि सिर्फ ये 10,000 रुपये देख के महिलाएं पहुंच गई है वोट देने और नीतीश कुमार का उन्होंने समर्थन किया है, जैसे कि आपने कहा ये एक 20 साल पुराना रिश्ता है जो नीतीश कुमार ने 2005 से बनाना स्टार्ट किया, और वो विजनरी थे। उन्होंने अपने कॉलीग्स के कहीं आगे उन्होंने ये बात सोची महिलाओं के साथ किस तरह से वो पेश आए, किस तरह से उनके लिए पॉलिसीज़ लाएँ, नीतियाँ लाएँ। तो ये क्या ये हम कह सकते हैं कि अगर ये 10,000 की स्कीम नहीं होती तो महिलाएं जाके वोट नहीं देती या नीतीश कुमार को नहीं देती? शायद नहीं। ये 10,000 एक गार्निश कह सकते हैं आप, एक डिश में जो नीतीश कुमार ने 20 साल में तैयार रखी थी, और ये एक रिश्ता है जो कि नीतीश कुमार ने बनाया है महिला मतदाता के साथ, जहां आरजेडी पूरी तरह से फेल हो गई है। इस चुनाव में उन्होंने कोशिश की अपना 30,000 रुपये जो भी बोल के, लेकिन उन्होंने, मुझे नहीं लगता इस बात को सीरियसली लिया। कहीं ना कहीं ये सोच है ऑपोजिशन में कि आप बाईपास कर दे वुमेन वोट को, आप दूसरी क्रॉस कटिंग कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट करें। तेजस्वी ने सोचा कि वो यूथ को वैसी कंस्टिट्यूएंसी बनाएंगे, लेकिन यूथ और महिलाएं एक सी नहीं है। जो यूथ की डेप्रिवेशन है, वल्नरेबिलिटीज है, वो महिलाओं जितनी नहीं है। महिला क्यों क्रॉस कटिंग कंस्टिट्यूएंसी बन सकती है? क्योंकि चाहे आप अपर कास्ट वुमेन हो, चाहे आप मुस्लिम वुमेन हो, चाहे आप दलित वुमेन हो, चाहे आप ओबीसी वुमेन हो, आप हमेशा मेन से सेकंड ही रही हैं। तो महिलाओं का जो एक समाज में पोजीशन है, आप किस भी कास्ट, किस भी धर्म से हो, आपका जो वल्नरेबिलिटी और डिसएडवांटेज है वो कॉमन है, एंड दैट इज व्हाट बॉन्ड्स वुमेन एंड मेक्स देम वन कॉमन इलेक्टोरेट, वन इलेक्टोरेट दैट कैन सरपास अ लॉट ऑफ अदर आइडेंटिटीज। गोपाल अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हमारे साथ मौजूद हैं। कारोबार को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं गोपाल जी। महिलाओं ने एक कह सकते हैं मोटे तौर पर बहुत मजबूती से साथ दिया है नीतीश सरकार का, एनडीए सरकार का बिहार में। अगर हम पंचायत आंकड़ों की बात करें तो विश्व भर में, पूरे देश में हम देखें तो 44.4% महिलाएं जो हैं ये पंचायती इंस्टीट्यूशंस में हमारे देश में सबसे अग्रणी हैं दुनिया भर में, लेकिन डिसीजन मेकिंग में शायद पीछे होंगी। मजबूती से और उनकी भागीदारी हो और वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, या आप किस तरह से देख रहे हैं उनको, क्या होगा उनके लिए आगे? और देखिए दीदी जी, ये बात आवश्यक है कि महिलाओं की भागीदारी हमारे देश में और बढ़नी चाहिए। वैश्विक स्तर पर भी इसकी आवश्यकता है, क्योंकि 50% के करीब जनसंख्या के रूप में वह पूरे समाज को आगे लेके जाती हैं। परिवार को भी आगे बढ़ाने के लिए उनकी आवश्यकता बहुत अच्छी जरूरी रहती है। अब उसके लिए कैसा रास्ता हो, केवल चर्चा से तो होगा नहीं। बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगती है कि जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनकी आर्थिक स्वतंत्रता वह बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खोला, मैं तो उस योजना से काफी जोड़ा था, और कॉलेज, महिला कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह में, इंस्टीट्यूशंस में गए भी थे उस स्कीम को लेके। तो लोगों ने जिस तरह से महिलाओं ने उस बात को लेके बात कही कि जिस समय हमारा बैंक अकाउंट खुल गया और उसमें कुछ पैसे आ गए, तो जो स्वाभिमान और आत्मविश्वास उनका बढ़ा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण पहली चीज है। उसके बाद कई योजनाएं चली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योजना है कि उनकी इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस रहे। और अब आप देखिए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इतना सक्सेसफुल मॉडल जो एनडीए हमारी सरकार ने, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में शुरू किया है, यह भी बहुत पावरफुल एक इंस्ट्रूमेंट है जो उनको एम्पावर कर रही है। अब हम लोग तो पूरा इस योजना को लेकर जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो ग्राउंड लेवल पे बहुत काम करता हूं, आपने पहले भी लैंड एक्विजिशन के इश्यूज में भी देखा होगा। तो जिस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन ने दिया ही, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से जो छोटे छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग है, वो भी एम्पावर कर रहे हैं। तो
ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और आप 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में अगर आप देखेंगे तो हर स्कीम के सेंट्रलाइज पोजीशन में महिला महत्वपूर्ण भूमिका अपना रही है। अब ये छोटी सी बात और मैं बताऊं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जगह जगह मकान बन रहे हैं, झोपड़ियां टूट रही हैं, उसकी जगह अच्छे पक्के मकान बन रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि उसकी रजिस्ट्री महिला के नाम पे होगी। अब इससे कितना बड़ा उनका एम्पावरमेंट होता है। तो अब ये जो क्योंकि आप इकोनॉमिक्स को इतने बेहतर अर्थव्यवस्था को समझते हैं ठीक से, बिहार के अर्थव्यवस्था ठीक से और मजबूत हो, वो क्यों इतने निचले पायदान पे, क्यों अब अभी तक हम उसे एक बेमारू राज्य कहते हैं या सबसे गरीब राज्य कहा जाता है? क्यों हम इसमें बदलाव नहीं ला पाए? क्योंकि अब तो डबल इंजन सरकार भी है। देखिए, बदलाव एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, टाइम लगता है, एक टाइम गैप है। क्योंकि देखिए, कई बार हम चर्चा करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज को, जब मैं देता हूं, और अडवाणी जी ने 2004 में जब इंडिया शाइनिंग के रूप में हम बहुत अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था को उनके अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में मजबूत करने में सफल हुए, लेकिन फिर भी 2004 का इलेक्शन हार गए। तो उन्होंने कहा, इज गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स? ये एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने खड़ा किया। लेकिन मोदी जी ने पिछले 11 साल में ये एक नैरेटिव स्ट्रांगली खड़ा किया है। और बिहार, कई बार हमारे भारत के इतिहास को भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इंडिया के बारे में हमारी किताबों में लिखा होता है, इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय पुअर। बिहार, उसका कारण है कि मानसिकता के रूप से इकोनॉमी को पॉजिटिव तरीके से अपने जीवन के हर कार्य में आत्मसात करने की कमी थी। मनमोहन सिंह जी को बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट मानते हैं कई लोग, लेकिन मैं कहता हूं कि उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि जो इकोनॉमिक में पॉजिटिव सेंटिमेंट है उसको कभी भी उन्होंने लीवरेज नहीं किया। मोदी जी ने विकसित भारत का बहरहाल मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पॉलिसीज थी वो अपने आप में उन्होंने हमें कई क्राइसिस से भी बचाया है। लेकिन कार्तिक बत्रा मैं आपके पास आऊंगी। आप किस तरह से देख रहे हैं जो फिलहाल हमारे सामने जो ये नतीजे सामने आए हुए हैं, और ख़ास तौर से अभी हम महिला वर्ग की और अब हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। कई पैरामीटर्स में बिहार आगे गया है, उन पैरामीटर्स को भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन कई पैरामीटर्स पे अभी भी वो नीचे है। अगर आपने वहाँ पे दौरा किया हो, क्या आपका आंकलन रहा? थैंक यू निधि जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक जो छवि है बिहार की कि बहुत ही पिछड़ा, जैसे कहते हैं बैडलैंड्स, वो स्थिति नहीं रही। सड़कें हैं हर जगह, स्ट्रीट लाइटिंग है, एक सर्टन सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। बस ये है, लेकिन जो आपने बिल्कुल सही कहा कि आर्थिक पैरामीटर्स पे अभी भी बिहार ऊपर उठ नहीं रहा। और इसमें हम कहते नहीं है, आंकड़े ये बताते हैं। मतलब सबसे निचला राज्य है अगर हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करें। और निधि जी, आप जब जाएंगी बिहार में अलग अलग इलाकों में, आप पाएंगी कि कई इलाकों में एस्पिरेशन कहीं ना कहीं इतनी कम है कि कम में भी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे अगर आप मिथिलांचल, सीमांचल जैसे इलाकों में जाएंगी तो वहां इतना बैकवर्डनेस था कभी कि आज की तारीख में अगर इनको एक अच्छी सड़क भी मिल जाती है, राशन मिल जाता है, पैसा मिल जाता है थोड़ा सा, तो वो उसमें बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन फिर आप कुछ थोड़े समृद्ध और इलाकों में जाते हैं, आप चंपारण जाते हैं, आप मगध भोजपुर जाते हैं, वहां एस्पिरेशन है, वहां नौकरी चाहिए, वहां राशन से काम नहीं बन रहा, वहां सिर्फ रोड बनाने से, क्योंकि वहां रोड पहले बन चुकी थी, तो अब वो कह रहे हैं हमारे पास नौकरी क्यों नहीं। चाहती हूँ, आपको थोड़ा रोकूंगी। हमारे सहयोगी आलोक पांडे के साथ संभवी चौधरी आ गई हैं। जी आलोक, ओवर टू यू। A word about your party's performance. आप 21 सीट इस बार अभी तक एज पर प्रोजेक्शंस जीत रहे हैं. What does this mean for your party? I think if there is one word in which I have to talk of Lok Janshakti Party's victory, that one word would be spectacular. I think बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्रदर्शन लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेतागण का रहा है, क्योंकि जब हम लोग चुनाव शुरू कर रहे थे तब लोक जनशक्ति पार्टी के
बारे में कई तरह की नेगेटिव चीज़ें कही जा रही थी कि जानबूझ के हारने वाली सीटें ले ली गई हैं, विनेबिलिटी नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी अंडर परफॉर्म करेगा अपने बाकी परफॉर्मेंसेस से। एंड उसमें हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी विक्टोरियस इमर्ज किए हैं। उनकी जो लोकप्रियता है और उनको जो आशीर्वाद और समर्थन है वो हर जाति हर वर्ग के लोग से मिला है, और ये दर्शाता है कि श्री चिराग पासवान जी ने एक वोट कन्वर्जन और वोट कंसोलिडेशन दोनों ही करने में वो सफल रहे हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ हैप्पी डे फॉर लोक जनशक्ति पार्टी एंड ऑल इट्स पार्टी वर्कर्स। We accept the mandate that the people of Bihar have given, and we can only try to live up to our promises and their expectations. I think that is what is next for us. Is there a larger role for Mr. Paswan in Bihar politics? We've heard so much about him being projected as the chief ministerial face. I know the number of seats at the moment don't really talk that story. But, I mean, at a later stage, what do you think? I mean, and is Nitish Kumar your alliance's chief minister for the next 5 years? Nitish Kumar ji is definitely our chief minister for the next 5 years. That is pre-decided. It was a pre-poll alliance, and our national president Shri Chirag Paswan ji was very clear that there is no vacancy for a CM post right now, and he does not wish to contend for it, and that is what the party also decided for him. But we don't know what the future holds. Shri Chirag Paswan ji definitely has emerged as a, you can say a definite force in Bihar politics, and his acceptability, wide acceptability, has proved to be beneficial for the NDA alliance. And there has been a spectacular response to Chirag Paswan ji being a part of NDA, because if you compare it to 2020's result, then NDA did suffer a little bit because Chirag Paswan ji contested alone. So definitely he's not a part of the alliance that you can ignore or you look over. Definitely this will be given attention in the near future. I think that is for our national president Chirag Paswan ji to decide, and that is for the party to decide. Right now our prime focus is to deliver on our promises and to live up to the party workers' expectation and do well for the party and do something well for Bihar also. Ma'am, are your words a pitch for a greater role for the LJP at the centre? Is that what you're saying? I think right now, since the last few months, our focus has only been on testing largely and winning largely, and that is what we've always discussed about or talked about. This is not something that we have even discussed of playing a greater role in the centre or the state. Chirag Paswan ji was always very clear that this Vidhan Sabha you have to give your 100%. And Vidhan Sabha should be your focus. Now that we've made our impact, and now that the Lok Janshakti Party has performed, we will definitely sit together and try to form a roadmap for what happens for the party in the future. May I just ask you one question, ma'am? As a younger MP in a state like Bihar, it's one of India's poorest states. I know that, much has been said about how Nitish Kumar has brought it, गड्ढा भर दिए हैं जो बात यहाँ सुनते रहते हैं. लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, 10,000 का आपने महिलाओं को सहायता दी. I know that you and your allies don't want to call it a dole. But how do we then translate it into something a little more concrete, ma'am? You see, giving 10,000 rupees right now, fine. Maybe it's helped you electorally, maybe you will say that no, it was not related to elections. But what do you do, can you list 2 priorities that your government will have that will actually make Bihar come out of this poverty that it is mired in, the lowest per capita income across India, no industries, so on and so forth. I can list 20 things, but I mean, can you list 2 things that you think should be the focus of this government to bring about actual change in the state? I think there has been a striking change in the last 20 years in Bihar's progress. And if you talk about, if you compare it to other states, then we might be low, but our economic growth rate has sustained itself in the last 20 years, and it is on the upward trend. So it's not like we are degrading anywhere. From 2005, we have picked an upward trend and we are moving in the right direction. So definitely, if you compare it to other states, then we have started working from 20 years prior to what we started in 2005. Because we all remember that the RJD and Congress depreciated, if you say, our GDP, and then there was a decreasing trend, and then from there we worked together, and so on and so forth. So definitely it's not like there has been no change in Bihar. We started working from bare minimum. I remember Nitish Kumar ji's pet project was Saath Nishchay, and we started with water and electricity. That is from where NDA government started, and we've reached 100% electrification. We've reached tap water. If you look at the infrastructure now, there's been a boom in the infrastructure, and that is something that is clearly visible. Empowerment of women we have worked on. But if you ask me the 2 priorities that is there for the next 5 years, I think it's going to be moving from infrastructure to more
industries, enabling more private industries and forging a plan for higher investment in Bihar. And the second would be to empower women and financial independence. Joblessness is one priority, to work for the youth and center their focus towards creating better job opportunities and equal job opportunities in Bihar. Just my final question to you, as a student of politics, not as an MP or a politician of the LJP, is giving out doles the ideal way in politics ahead? Say a 10,000 rupee dole that your opponents say is a dole. Is that the way forward? I don't see that as a dole, because see, you only look at I think restrictively people are looking at 10,000 rupees that were given to the women, but Nitish Kumar ji from 2005 has continuously been working for women. If you talk of Poshak Yojana, if you talk of Cycle Yojana, if you talk of domicile in Bihar, if you talk about 50% reservation in Panchayati Raj institutions, if you talk about including women, creating job opportunities for rural women through yojanas like Didi Ki Rasoi. These are some kind of policies that have really empowered the women, and the women have been with NDA they were with NDA in 2015 also, they were with NDA in 2020 also, and they're still with NDA. So I think it's a very restrictive way to look at it कि अरे 10,000 रुपए दे दिया चुनाव के जस्ट पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है. महिलाओं के रोजगार और स्वरोजगार के लिए जो बिहार सरकार है वो लगातार प्रयासरत थी कि हम लोग अलग अलग योजना के माध्यम से, अगर आप वो बच्ची का साइकिल देखिए जिसको 2005 में साइकिल और पोशाक मिला होगा, उसको 2025 में नौकरी भी नीतीश कुमार जी ने दिया. So this is a cycle that Nitish Kumar ji has followed, and he says he's taken this inspiration from Ram Manohar Lohia ji, and I remember his speech where he quoted it saying कि जब तक नारी को हम लोग समाज में नहीं लेके जाएंगे, हम लोग का political relevance नहीं बनेगा. So definitely this is a positive change for Bihar and for the nation. It is something that the nation needs to learn from Bihar, that if you really empower women politically, their participation is dominant now. Thank you so much, ma'am. Thank you. So, Niti ji, there you have it. Shambhami, a younger politician in Bihar, an MP from the Lok Janshakti Party, making a big pitch for the NDA alliance, saying that the 10,000 rupees, Niti ji, उसको डोल नहीं कह रही हैं, उसको ये कह रही हैं कि women empowerment के लिए एक step है. अब जाहिर सी बात है, देखने वाली आगे बात यही है कि जो मुद्दे हम डिस्कस करते आए हैं बिहार की पॉवर्टी के ऊपर, बिहार की जो स्थिति है उसके ऊपर, क्या उस पे एनडीए की ये जो नई सरकार बनेगी वो काम कर पाती है और कितनी इफेक्टिवली काम कर पाती है, ये देखने वाली बात है. महिलाओं को बहुत उम्मीदें होंगी, और जिस तरह से हम शंभवी को सुन रहे थे, काफ़ी वो पॉलिटिकल पिच की बात कर रही थी, भागीदारी की बात कर रही थी. देखना होगा कि आगे की सरकार कैसे बनेगी. धन्यवाद. फिलहाल आलोक, आप आगे भी बने रहेंगे हमारे साथ. अब सौरभ शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पूर्व सहयोगी, लेकिन अब यहाँ पर डिकोडर में हमारे साथ एक बार फिर यहाँ पर मुलाकात हो रही है. और सौरभ के साथ मैंने 2015 में हम लोगों ने एक साथ बिहार जब चुनाव हुए थे 14-15 में हमने दौरा किया था, और इस बार तो सौरभ खुद 1 महीने वहाँ पर रहकर आए हैं. मैं तो नहीं गई, और सौरभ अब हमारे साथ स्टूडियो में हैं. तो सौरभ, आपके लिए ये नतीजे इस समय, अगर मैं आपसे ये पूछूं 2015 और अब में, क्योंकि 15 में हमें याद है जब हम गए थे तो रोड्स बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत वेल लाइटेड अच्छी रोड्स थी. उसके बाद से अब क्या बदलाव देखा आपको वहाँ पे? देखिए, 2 चीज़ें हैं. पहली बात तो हम 1 महीने थे, आई थिंक डॉक्टर रॉय और हमने साथ में एक ही दिन तेजस्वी यादव का इंटरव्यू किया था, प्रशांत किशोर का. हम सब लोगों से बात कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे थे. एक बात थी कि नहीं, महिलाएं पूरी तरीके से उनकी तरफ थी. इनफैक्ट जब फर्स्ट फेज की पोलिंग हुई तो अगले दिन सुबह तेजस्वी यादव का फ़ोन आया हमें, और उन्होंने पूछा, जैसे जर्नलिस्ट से पूछते हैं पॉलिटिशियंस की, कैसा देख रहे हैं आप. तो हमने उनसे बोला था कि शायद जो आप लोग एक बहुत डिपेंड कर रहे हैं, जो डिप्यूटी सीएम के फेस हैं आपके मल्ला, जो मुकेश सहनी हैं, और ताती तत्व वाले आई.प. गुप्ता, तो उसमें पुरुष तो थोड़ा बहुत दे रहे हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं वो आपकी तरफ शिफ्ट नहीं हो रही हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी बीजेपी और जेडीयू की, वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. हम समझ रहे थे कि जेडीयू के लिए, नीतीश जी के लिए सिंपैथी है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 1 महीने की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद ये पॉइंट हमें समझ में आता है. नीतीश कुमार की बैकबोन है जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स. जैसे यूपी में आंगनबाड़ी महिलाएं होती हैं, उनमें जो सुपरवाइजर्स होती हैं उनको कहते हैं कम्युनिटी मोबिलाइजर्स. 2007 से नीतीश कुमार उनमें काम कर रही हैं.
जब उनको ये लगा कि नीतीश कुमार को हटाने की बात कर रहे हैं, विपक्ष तो उनको हटाने की बात कर ही रहा है और विपक्ष का एक नैरेटिव था कि बीजेपी भी इनको नहीं बनाएगी, तो वो इमोशनल हो गई। इस चुनाव में जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स ने नीतीश कुमार के लिए बीएलए का काम किया, बूथ लेवल एजेंट्स का। उन्होंने, क्योंकि वो हर गांव में मार्किंग है कि ये महिला है, उन्होंने निकाल के महिलाओं का वोट डलवाया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक ग्राउंड रिपोर्टिंग में, क्योंकि बाकी लोगों को निकालने पड़ेंगे अपने वोटर्स, लेकिन महिलाओं को वो उनके बीच रहती है, शादी ब्याह साथ में वो लोग कम्युनिटी में काम करते हैं। दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, पैदा करने में भी जी, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि फर्स्ट फेज के बाद विपक्ष ने हल्ला मचाना शुरू किया, ये 10,000 तो लोन है और ये पैसे वापस ले लेंगे। सेकेंड फेज की पोलिंग थी 11th को, 8th को सारे अखबारों में बिहार के, देखिए बीजेपी के पास पैसा है, बल है, ताकत है, सब है, वो करवा लेते हैं हर काम। दैनिक जागरण से भास्कर, हिंदू, जो अखबार आता है उसके फ्रंट पेज में ऐड था कि जो 10,000 रुपए आपको महिलाओं को दिए गए हैं हम आपसे वापस नहीं ले रहे हैं। तो ये आ गया। जिस दिन पोलिंग है, 6 तारीख की पोलिंग है फर्स्ट फेज की, हम लोग मोकामा में खड़े थे, सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे मोदी जी ये महिलाओं के लिए हमने 5 काम किए, सेकंड पेज है जेडीयू का। तो हर पोलिंग से पहले भी आपका नैरेटिव जो है हर घर में पहुंचा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपने बात की 2015 में सड़कों की, 2015 में सड़कें जैसी थी, लब्बो लबाब वही है वैसे ही है, लेकिन बिहार की बात यह है कि बिहार के लोग बिहार से ही अपने आप को कंपेयर करते हैं कि भाई पड़ोस का लड़का आईएएस बन गया, लेकिन हमारे घर में सब अनपढ़ थे, एक बच्चा 10th पास हो गया, देखो 10th पास हो गया, यही हमारा राजा बेटा है। आप अपने बगल के राज्य में देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं उनके सामने बिहार की सड़कें स्टैंड नहीं करते हैं। आप माइनस कर दीजिए मरीन ड्राइव और जेपी पथ को, ठीक है, आप झारखंड में जाइए, लेकिन बात अंत में आती ये है कि बिहार जहां पर सिर्फ 7% बच्चे ग्रेजुएट हैं, लोग ग्रेजुएट हैं और 12% इंटरमीडिएट हैं, गरीबी इतनी ज्यादा है कि वो सुबह सोचते हैं कि रात में हम खाएंगे क्या। आप अभी भी जाइए, हमने एक डॉक्यूमेंट्री की मुसहर टोले पर, एक महिला, उसने 60 साल में एक बार भी चप्पल नहीं पहने हैं। बच्चे ऐसे हैं कि उनको रोटी कमानी है तो चप्पल और रोटी के बीच चुनने वाली बात है। 10,000 आपके अकाउंट में आए। दूसरी बात, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ गई। एक आपको पहले देखिए, एक बुरी मशीनरी तो थी ही बीजेपी की 20 साल से, जेडीयू की महिलाओं के लिए, उनकी प्रधानमंत्री का किसानों को जो मिलने वाला पैसा है, मुफ्त राशन, वो तो सब था ही। और जो 10,000 रुपए मिल गए वो एक ओवरऑलिंग हो गई, वो एक ऑयल मिल गया उस मशीनरी को जिसने पुश किया। फिर मैं बोल रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, बहुत जरूरी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो उसके बाद आई थिंक सब लोग बोलेंगे, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग में समझ में आया। जो ये नीतीश कुमार जी ने इस बार कैंपेन बहुत अग्रेसिव किया है, उनका बहुत अग्रेसिव कैंपेन था। लगभग खुद उन्होंने 120 से ज्यादा, जी बहुत अग्रेसिव कैंपेन था। लगभग खुद उन्होंने 130 से ज्यादा रैलियां की। इनफैक्ट बहुत सोशल मीडिया पे चर्चा भी हुई। एक दिन बारिश हो रही थी तो तेजस्वी यादव ने फोन से रैली को वो किया और नीतीश कुमार गाड़ी से चले गए संबोधित करने के लिए। और नीतीश कुमार ने ये मेक श्योर किया कि उनका जो वोटर है उनको लेकर के इमोशनल हो। तो नीतीश कुमार ने ये काम कर लिया और वो उसका फायदा, आज मैं फिर बोल रहा हूं, भाई बीजेपी को सही लगे खराब लगे, आज बीजेपी भी इस स्टेज पे है तो जस्ट बिकॉज ऑफ नीतीश कुमार। 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बैगेज थे, आज 2025 में नीतीश कुमार लगेज है। लगेज भी है। और जी निधि, मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगी जहाँ तक महिला मतदाता का सवाल है। पहली बात यह है कि बात ये नहीं होती है कि आपने क्या उनको प्रॉमिस कर दिया, एक भरोसे की बात होती है और दोनों नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी डिलीवर कर चुके हैं जहाँ तक महिला मतदाता का सवाल है। चाहे नीतीश कुमार अपने 20 साल में हो या नरेंद्र मोदी अभी केंद्र में जितने भी साल अपने 3rd टर्म में है, दोनों डिलीवर कर चुके हैं। महिलाओं का एक भरोसा बन चुका है, इसीलिए वो उस दिशा में वोट कर रही है। महिला मतदाता ये नहीं सोचती कि आपने मुझे कुछ रिश्वत दे दी है तो मैं जाके वोट करूंगी। वो चाह रही है कि कुछ कॉन्क्रीट उनको मिले। दूसरी बात है, ये मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लगता है कि मेल पर्सपेक्टिव से इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि महिलाओं को हमने रिश्वत दे दी है, महिलाओं का वोट खरीद लिया है। क्या लगता है हमें कि 10,000 रुपये लेके महिला घर पे बैठ जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिला उस 10,000 से अपने लिए कुछ ज़रूर ऐसा करेगी जिससे कि वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड बना सके। ये हमने हर राज्य में देखा है, चाहे मध्य प्रदेश की कैश ट्रांसफ़र स्कीम हो, चाहे वो महाराष्ट्र की कैश ट्रांसफ़र स्कीम हो, चाहे वो असम की अरुणोदय स्कीम हो। हर जगह महिला जो कैश ट्रांसफ़र है उसको लेके एक छोटा सा कोई व्यापार, छोटा सा कोई व्यवसाय अपने लिए स्टार्ट करती है, उससे वो अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाती है, उससे वो
अपने आप को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाती है। इस कैश ट्रांसफ़र को एक भीख समझना, इस कैश ट्रांसफ़र से ये समझना कि महिला एक बेचारी लाभार्थी है, ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वो बिल्कुल बेचारी नहीं होगी, क्योंकि आप जानती हैं रूही कि तुमने भी देखा होगा सौरभ, जो महिलाएं हैं वो किसानों ज़मीन में बहुत काम करती हैं। जब कटाई होती है तो सबसे ज़्यादा महिलाएं आपको कटान करती हुई दिखती हैं, घर का काम करती हैं, लेकिन मगर आप उसको बुआई में भी काम करती हैं महिलाएं, लेकिन उसको किसान का दर्जा नहीं है। तो अभी तो हमारी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को बहुत काम करना है महिलाओं के लिए। बिल्कुल। वो अगर वो खेत में काम कर रही है, आप उसको किसान नहीं देंगे, किसान का दर्जा नहीं देंगे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसको उसका वो हक मिले या उसका वो ना मिले, वो तो आपको बकाया पूरे हाथ से लौटा भी रही है अगर आप उसको कुछ दे भी रहे हैं। बहरहाल अगर हमारे साथ अग्रवाल जी मौजूद हैं, क्योंकि अग्रवाल जी, कार्तिक भी हमारे साथ है, कार्तिक और शिवम भी यहाँ पर मौजूद हैं। शिवम, महिलाओं की तो हम बात कर ही रहे हैं, अर्थव्यवस्था की भी बात कर रहे हैं, अभी जिस तरह से सौरभ ने बताया महिलाओं का रोल रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में घूम फिर कर वही आ जाता है कि उम्मीदवारी महिलाओं की इस बार बहुत कम थी। 15 साल में सबसे कम उम्मीदवार महिलाओं के इस बार बिहार में उतारे गए, जो डेटा यहाँ पे सामने आया। वो ड्यू नहीं दिया गया, लेकिन ओवर द इयर्स अगर महिलाएं हैं वो एक सॉलिड बैकबोन बनी रही हैं नीतीश की। नहीं, महिलाओं की उम्मीदवारी तभी बढ़ेगी जबकि पार्टी को ऐसी कैंडिडेट मिलेंगी जिनको लगता है कि वो कुछ अपने नाम पे वोट डालती हैं, कुछ जीत सकती हैं। और वो प्रोसेस आसानी से नहीं होगा, क्योंकि पुरुष महिलाओं को राजनीति में नहीं आने देते हैं जल्दी। वो तभी हो सकता है जब देश में प्रियंका गांधी ने किया था, 40% सीट्स दी थी। और रिजल्ट क्या हुआ? क्योंकि लड़कियों को दी थी, लेकिन कितना लड़कियों लड़ सकती हूँ, उन्होंने 30% के ऊपर दिया था, लेकिन वो 40% दिया था। लेकिन जब हमारे लेजिस्लेचर्स में रिजर्वेशन दिया जाएगा महिलाओं के लिए, नहीं, हैंड होल्डिंग चाहिए। अब हैंड होल्डिंग डजंट मीन कि हाथ पकड़ के, मतलब ये है कि आपको टीम लगानी पड़ेगी। आप देखिए, बीजेपी ने अगर एक 25 साल की लड़की को, मैथिली जो गाने वाली है, उसको मैदान में उतारा, साथ में पूरी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता या उनका पूरा पैराफर्नेलिया साथ में था, और वो हमने देखा है। तो क्योंकि वो झिझक रहती है, वो शर्म रहती है, तो इसलिए इतना आसान नहीं है। भागीदारी चाहिए, लेकिन साथ में वो बैकअप भी चाहिए। मेरे ख्याल से महिला रिजर्वेशन जब आएगा असेंबलीज में, तो उससे रियल प्रोसेस किक स्टार्ट होगा। उससे ऐसी महिलाएं राजनीति में आएंगी जो पहले नहीं सोचती थी राजनीति में आने का। हमने देखा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी से और भी कम्युनिटीज़ को आगे बढ़ाया गया। तो रिप्रेजेंटेशन का एक सवाल बहुत ज़रूरी सवाल है। मुझे लगता है कि बिहार जैसी स्टेट्स में जहाँ महिलाओं को बहुत एम्पावर किया नीतीश कुमार ने, और बहुत सारी महिलाएं पूरा सब अपने आप करती हैं, क्योंकि पुरुष माइग्रेट लेबर है, बाहर हैं, तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा महिलाओं का। एक प्रोसेस है। अभी एक महिला वोट पूरी तरह कल्टिवेट हो गया इंडिया में। हर स्टेट में इलेक्शन से पहले महिलाओं के लिए स्कीम देने के बाद 2/3 मेजोरिटी आ रही है, हम ये देख रहे हैं। तो अभी एक सेकेंड स्टेज पे जाएगा इसके बाद, जब ये एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कैश ट्रांसफर्स की एक लिमिट है। जैसे जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप है बिहार में, ये नवीन पटनायक उड़ीसा में पहले कर चुके हैं। तो इस तरीके का ये हर स्टेट पे जब ये ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेज में लगता है रिप्रेजेंटेशन का सवाल आएगा। निधि, मैं एक बात ये कहूँगा कि हम लोग महिला विकास की बात कर रहे हैं, बट आई विल जस्ट एम्फसाइज दैट नीतीश कुमार के 2 लेग्स हैं, 2 पैर पे खड़े हैं नीतीश कुमार। एक है महिला, एक है ईबीसी वोट। बिल्कुल। तो ईबीसी वोट को जैसे उन्होंने कल्टीवेट करके पकड़ के बना के रखा हुआ है, मैंने बहुत सारे 36.1% उनकी भागीदारी, अति पिछड़ा जो है। बिल्कुल। तो मैंने बीजेपी सपोर्टर्स और जेडीयू सपोर्टर्स दोनों से एक सवाल पूछा, क्या बीजेपी बिहार में अकेले नहीं लड़ सकती, कभी अकेले नहीं आ सकती? और दोनों ने कहा बिल्कुल नहीं, बिहार में तो मिली जुली। तो ईबीसी को अकेले बीजेपी में विदाउट नीतीश भी कॉन्फिडेंस नहीं। जो कह रहे थे अभी सौरभ कि नीतीश के बल पे बीजेपी है, वो क्यों है? क्योंकि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग वोट है, ईबीसी वोट, ये नीतीश के साथ ऐसा जुड़ाव है। और टुडे नीतीश कुमार्स डे, बट यू नो, जब भी बिहार में पोस्ट नीतीश फेज आएगा तो एक बहुत बड़ा ईबीसी लीडरशिप का वैक्यूम है, क्योंकि कोई और नेता है नहीं पैन स्टेट जो ईबीसी। एक ये कार्तिक हमारे साथ है। कार्तिक, आप भी इस ग्रुप पे कहना चाहेंगे, जो मजबूती जिस तरह से शिवम बोल रहे थे, उस बात को आगे बढ़ाएंगे आप? कार्तिक जी,
अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। प्लीज अनम्यूट। ईबीसी की बात करी निधि जी, उसमें महादलित को भी जोड़ दीजिए। और ईबीसी में भी देखिए मुस्लिम ईबीसी है और हिंदू ईबीसी है। 36% का ब्लॉक टोटल बनता है ईबीसी का। उसमें से अगर आप 8-9% मुस्लिम ईबीसी निकाल भी दे तो 26% का जो जैसे पचपनिया समाज कहते हैं बिहार में, और इसमें आप जोड़ दीजिए महादलित समाज जो तकरीबन 8-10% है। ये 34% का जो कास्ट बेस्ड वोट है वो है नीतीश कुमार जी का। और ये हमें समझना होगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जी की अपनी जातिगत समीकरण है वो कुर्मी समाज से आते हैं। 2.5% का उनका वोट है। उसमें अगर आप एक सिस्टर कास्ट भी जोड़ दीजिए जिसे कोयरी कहते हैं, वो 4.5% की जाति है, तो टोटल 7% के वो नेता है एट बेस्ट। तो 2005 में शायद वो समझ गए थे कि उन्हें बियॉन्ड अपने कास्ट ग्रुप जाना है और उनको ओवर रिलायंट नहीं रहना है इन ग्रुप्स पे, और उन्होंने वहां से ही सोशल इंजीनियरिंग शुरू की। और ईबीसी ग्रुप क्योंकि उस समय जो यादव अग्रेशन है कहीं ना कहीं उससे दबा हुआ महसूस कर रहा था और उसके पास कोई संगठित नेता नहीं था। ये जो मल्ला, ये जो यूपी में राजभर, ये सब अभी रीसेंट फिनोमिनन है। ये जैसे मंडल 2 कहते हैं कि कास्ट विद इन कास्ट, सब कास्ट विद इन द लार्जर ईबीसी ओबीसी अम्ब्रेला, ये आज शुरू हुए हैं ये। लेकिन नीतीश कुमार जी ने इनको संगठित करने की मुहिम 2005 में शुरू कर दी थी। तो जब आप इन समाजों से जाके बात करते हैं तो उनको आज भी जो यादव राज है, खासकर मिडिल एजेड मैन और मिडिल एजेड वुमन, किसी से भी बात करिए आप, उनको उस यादव राज की मेमोरी है। और उनको इस बात की मेमोरी है कि नीतीश जी जब आए तो हमें एक तो राहत मिली, सुरक्षा मिली। सुरक्षा बहुत जरूरी है। आप साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है मैस्लोज हायरार्की। सबसे पहले हम अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में सोचते हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ। फिर हम अपनी सिक्योरिटी नीड्स के बारे में सोचते हैं। तो पहले मुझे राशन चाहिए, फिर मुझे सुरक्षा भी चाहिए। तो नीतीश जी उनको सुरक्षा भी देते हैं, राशन भी देते हैं। तो ये बहुत अहम है और उनकी साइकोलॉजी में ये एम्बेडेड है कि जब तक नीतीश जी हैं, जब तक आरजेडी नहीं है, तब तक हम सुरक्षित हैं। और नीतीश जी हैं तो हमारे पास प्लस भी कुछ है। और उस प्लस में फिर आप जोड़ दीजिए जो महिला का पूरा उन्होंने एक कंसोलिडेट किया, तो उनकी जो 3 वोट बैंक्स है, महादलित, ईबीसी, महिला, इन तीनों ने कहीं ना कहीं नीतीश जी में फिर से एक बार अपना कॉन्फिडेंस दिखाया। और मैं एक बात और जोड़ दूं, देखिए 2020 का चुनाव देखने में लगता है बहुत क्लोज था, 37.2, 37.3। एक्चुअली वो मिसरेड इलेक्शन है क्योंकि पिछली बार एलजेपी अलग लड़ी थी, कुशवाहा जी अलग लड़े थे। अगर आप वीआईपी को वोट शेयर एनडीए से एमजीपी में जोड़ भी दें तो एमजीपी शुरू कर रही थी एक 4 परसेंटेज पॉइंट के गैप से। उसको वो 4 परसेंटेज पॉइंट का गैप कवर करना था। तो उस गैप को कवर करने के लिए वो वीआईपी को लाते हैं, वो आईपी गुप्ता को लेकर आते हैं, वो प्रॉमिसेस करते हैं नौकरी के, महिलाओं को लेकर प्रॉमिसेस करते हैं। उनकी उम्मीद होती है कि कांग्रेस की वजह दलित वोट आएगा थोड़ा सा, लेकिन वो जो चुनौती थी 4% की, जो उनको 2.5% गेन करना था, उसके ऑपोजिट होता है। क्योंकि नीतीश कुमार जी और बीजेपी का अपना वोट तो इंटैक्ट रहता ही है, लेकिन साथ में वो जो डिस्कशन हो रहा था, जो मैटरनल वेलफेयर स्टेट बनाया नीतीश कुमार जी ने, उस वेलफेयर स्टेट को एक बूस्ट मिल जाता है लास्ट मोमेंट में, और जो चुनाव शायद वो जीतते वो स्वीप कर जाते हैं। एक चीज आखिरी में मैं जोड़ूंगा निधि जी, क्योंकि हम जब जमीन पे थे तो एक चीज तो ये दिख रही थी कि जेडीयू का जो जितनी सीटें थी वहां सिंबल पे वोटिंग हो रही थी, नीतीश जी के नाम पे वोटिंग हो रही थी। लेकिन जो बीजेपी की सीटें थी वहां पे बीजेपी के अपने कैंडिडेट्स को भी लेकर लोग सिंबल पर इतना नहीं, कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहे थे कि देखेंगे, सोचेंगे, जातिगत समीकरण है, हम युवा हैं, हमें बदलाव चाहिए, नौकरी चाहिए। ये पुरुषों में खासकर था। इसीलिए डर ये था कि प्रशांत किशोर अगर उन सीटों पर डेंट मारे तो वो ज्यादातर बीजेपी की वोटों को लेंगे। वो जो सीटें आई हैं बीजेपी की, वो बड़ी स्टोरी है इस चुनाव की। और उसमें मेरा ये मानना है कि बीजेपी की अपनी तो मेहनत जो रही, क्योंकि ये वही ईबीसी ग्रुप जो नीतीश जी को क्रेडिट देता है 75%, 25% मोदी जी का भी नाम लेता है कि हमें राशन मिला और हमें कॉलोनी मिली, कॉलोनी मतलब इंदिरा आवास। तो ये सब जब आप जोड़ देते हैं तो बीजेपी का एक अपना वोट है। लेकिन बीजेपी की सीटों में नीतीश कुमार जी ने भी कहीं ना कहीं उनको हेल्प करके उनको ये 101 में 92 का फिगर पहुंचा दिया, प्लस एलजेपी। अब आयरनी ये है, हो सकता है इस 92 के फिगर के बाद बीजेपी जेडीयू को ना चाहे कि वो फिर से सत्ता में चीफ मिनिस्टर का पद ऑक्यूपाई करे, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जिसे कहते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो नीतीश कुमार जी ने की थी 2005 में शुरू करनी, उसका रिजल्ट उनको आज फिर मिला है। और 2010 जैसा ये रिजल्ट है। बिल्कुल कहीं ना कहीं आगे जाके आरजेडी को अपनी फ्यूचर राजनीति सोचनी पड़ेगी। और मैं ये कहूंगा कि चुनाव केवल एक डायमेंशन पे नहीं, ये चुनाव एटलीस्ट 3 डायमेंशन पर लड़ा गया। मैं इसे एजीसी कह रहा हूं, एज जेंडर कास्ट।
तो कितना आप अपने कास्ट पे रिलाई कर सकते हैं, कितना आप केवल एक जेंडर पे रिलाई कर सकते हैं, कितना आप केवल एक युवा ग्रुप पर रिलाई कर सकते हैं, ये बड़े सवाल हैं आरजेडी के लिए। और विपक्ष कांग्रेस जिसके अपने प्रेसिडेंट जो है, बाय द वे एज वी स्पीक नीति जी, तेजस्वी यादव ट्रेल कर रहे हैं, जो अभी आपकी स्क्रीन पे भी आ गया, और कुटुंबा से कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी मेरे ख्याल से अभी ट्रेल ही कर रहे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट, और उनको रविदास समाज का नेता बनाकर कांग्रेस लेकर आई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, नॉर्थ ऑफ गंगा अगर आप जाते, आप किसी रविदास समाज पढ़े लिखे व्यक्ति से ही पूछते, उनको मालूम ही नहीं था कि राजेश राम कौन है और वो रविदास समाज के नेता। तो बिल्कुल जो ये सवाल उठता है कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या किस तरह से विपक्ष को भी हम समझेंगे, लेकिन जो कार्तिक के समय कह रहे थे कि इतना मजबूत सहयोगी आपको नीतीश कुमार में मिला है, कहीं अभी भी तो कोई सवाल तो नहीं है, वो मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे ना, क्योंकि लोगों का तो स्नेह नीतीश कुमार के साथ है। और क्या जेडीयू से फायदा हुआ बीजेपी को? देखिए, अभी जो सौरभ कह रहे थे, जो ग्राउंड रियलिटी थी, इन्होंने उसको बहुत अच्छे ढंग से, चूँकि मैं तो बिहार के सुदूर गांव का रहने वाला हूं, मैं तो उन चीज़ों से वाकिफ़ हूं, पर इन्होंने जो वहां पर घूमे फिरे और जो इन्होंने आकलन किया वो बिल्कुल सही है। ये जितनी महिलाएं हैं, जिसको इन्होंने कहा ना कि वो पिवटल पॉइंट, महिलाओं को जिस तरीके से आप देखी होंगी चुनाव में कि सुबह सुबह महिलाएं घर का नाश्ता पानी खाना छोड़ के आके लाइन में लग गई थी। बहुत महिलाओं से जब रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया तो कह रही थी अब जाके खाना बनाऊंगी या नाश्ता बनाऊंगी। इस तरह से सौरभ ने कहा था, और जीविका जो बहनें हैं वो दे वर्क लाइक एन एजेंट्स टू ड्रैग वुमेन आउट ऑफ द हाउस। और जो सबसे बड़ी बात हुई है बिहार के लिए निधि जी, कि इन महिलाओं ने जात पात तोड़ दिया। दे हैव वोटेड नीतीश कुमार अक्रॉस कास्ट, जो पुरुषों ने नहीं किया होगा। और मुझे आप मानते हैं इस बात को कि महिलाओं ने जो जाति का जो एक बंधन होता है उसको तोड़ा? अलाउ मी अ मिनट। और एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा बहुत देर से मेरे अंदर कौतूहल मचा रही है, लेकिन मैं वो फिगर देख नहीं पा रहा हूं कि व्हाट इज द रिजल्ट इन सीमांचल। बता दूंगा मैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वहां पर मुस्लिम महिलाओं ने भी तो बुरके के अंदर से नहीं वोट कर दिया है नीतीश कुमार को। अगर वो भी हो गया है तब तो बिल्कुल ही महिलाओं ने कास्ट की लाइन को ब्रेक कर दिया, जिस पर बिहार का पेडेस्टल बना हुआ था इतने दिन। सीमांचल में 47% मुस्लिम है, 47 और 40। आलोक जी, बस एक बात छोटी सी है कि इंडिया अलायंस का भी 33% वोट है, आप 100% मत दे दीजिएगा। 100 कहां दे रहा हूं, मैंने कहा दे हैव ब्रोकन द कास्ट लाइन। नो डाउट अबाउट दैट। आई हैव नॉट सेड कि दे हैव ब्रोकन। द होल आइडिया ऑफ टारगेटिंग महिला इज टू ब्रेक कास्ट। इट इज अ क्रॉस कटिंग कंस्टिट्यूएंसी। वो ही पूरी कि जहां पर वोट सिर्फ जातिगत होता है, वहां पर इस तरीके का वोट होना, यह भूतपूर्व वोट है सर, इट्स नॉट अ जनरल फिनोमिनन। पहली बात इट्स अनप्रेसिडेंटेड, ये बाढ़ आ गया है। बट ये समझना तो, ये लोगों को समझना है जरूरी। तो गया समझ में, बिल्कुल। देखिए आज तो गया समझ में। अरे आलोक जी, देखिए 2010 की बात करे हैं ये इन्होंने करी, शिवम जी ने 2010 में भी जो राघोपुर सीट जहां से तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, उस सीट पर राबड़ी देवी को हराया था इन्होंने, जो लड़ रहे हैं उमेश। ठीक है, तो ये 2010 का चुनाव है। आई कैन ड्रॉ सेवरल एग्जांपल्स। अब सीमांचल की बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ओवैसी फैक्टर है। अभी जब हम यहाँ आ रहे थे तो आई हैड कॉल्ड अप ओवैसी साहब, तो हमारा जो 2 बजे ब्रॉडकास्ट खत्म उन्होंने नहीं उठाया, देन ही कॉल्ड बैक। तो वो हमसे 82 मिले थे अभी सीमांचल में, तो उन्होंने बोला था 82 सीट हम जीतेंगे। तो हमने रात में बोला था कि आप जीत जाएंगे, और कांग्रेस के और आरजेडी के लोग इस बात पे डिनायल पे थे कि नहीं, हमारा इस बार डिवीजन नहीं है, हमें वोट मिलेगा, ओवैसी को वोट नहीं मिलेगा। आप देखेंगे 5 सीटों पर इस वक्त 5 सीटों पर ओवैसी आगे चल रही है, AIMIM आगे चल रही है, अभी 6 हो गई, और 4 सीटों पर वो डिसाइसिव है। बलरामपुर वाली सीट आ गई, जहां से जो एक सीट सेफ CPI-ML का सेफ सीट कहा जाता था, जहां से महबूब आलम जीतते थे पिछली बार 60,000 वोटों से जीते थे, वो तीसरे चौथे नंबर पर हैं। ठीक है, तो ओवैसी साहब को अच्छा वोट मिला। पहली बात यह है कि आपको समझना होगा कि पैन इंडिया या बिहार में भी राहुल गांधी को मुस्लिम्स बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम लोकसभा में राहुल गांधी को वोट देंगे।
विधानसभा में महागठबंधन सीमांचल की बात कर रहे हैं, तो उनको तो थैंक यू बोलना चाहिए ओवैसी साहब का। इनको तो लोगों को वो जो हार्ट वार्ट बना के इमोजी भेजनी चाहिए, क्योंकि 5 सीट तो वो खुद जीत रहे हैं, 4 सीट पे वो इनको जिता रहे हैं। 4 सीट पे एनडी आप एमजीबी के उम्मीदवार देखेंगे वो तीसरे या चौथे नंबर पे चले गए हैं। तो कंप्लीट डिवीजन ऑफ मुस्लिम वोट्स जो सीमांचल में ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अच्छा खासा वोट ले जाएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी से इन्होंने करीबन 35 रैलियां कराई है, इकरा हसन को ले गए उत्तर प्रदेश से, अखिलेश यादव प्रचार करके गए कि मुस्लिम वोट्स में डिवीजन ना हो। तो जो माननीय बीजेपी वाले हैं, जिस दिन मुकेश सहनी अनाउंस हुए, इन लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि 18% वाला मुसलमान अब्दुल दरी बिछाएगा और 2.5% वाला मल्ला उप मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, सीमांचल के अलावा मुस्लिम्स में आप डिवीजन नहीं देखेंगे, सीमांचल में देखेंगे, क्योंकि सीमांचल में मुस्लिम्स को ये लगा शायद वहां पर एक जो इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए, आर्थिक आधार पर लोग इतने मजबूत नहीं हैं, मुस्लिम्स उतने मजबूत नहीं हैं, और शिक्षा के अनुसार शिक्षा में भी देखेंगे तो मुस्लिम्स उतने मजबूत नहीं हैं। तो वहां ये लोग बोले कि देखो ऐसा है भैया, महागठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन ओवैसी के बिना ना बने, तो हमें यहाँ ओवैसी को मजबूत कर देना है कि महागठबंधन की सरकार बने तो ओवैसी साहब बाहर से सपोर्ट कर दें और वो हम चुनाव जीत करके चले जाएं। दूसरा एक पॉइंट, तेजस्वी जी ने एक बयान दे दिया ओवैसी जी को कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को टिकट नहीं देते हैं, वो भी एक सेंटिमेंट आ गया। तो इस समय आप समझिए कि 6 सीटों पर, ये 6 सीट किसकी हैं? ट्रेडिशनली 2020 का, आप 2015 का आंकड़ा उठा के देखिए, क्लीन स्वीप है महागठबंधन का। उन सब 6 सीटें जो ओवैसी साहब जीत रहे हैं वो क्लीन स्वीप है, और 4 सीटें वो हरा रहे हैं, यानी 10 सीटों का सीधा डेंट सीमांचल में ओवैसी साहब ने दे दिया इनको, रिबन बांध करके कि लीजिए आप तोहफा, और थैंक यू बोलिए ना बोलिए, बोलेंगे नहीं थैंक यू उनको, क्योंकि फिर थैंक यू नहीं इनके नेता बोल देंगे तो फिर महागठबंधन बोलेगी टीम भी है बीजेपी के। नंबर 3 जो भी जिताएगा उसको। नंबर 3 एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, निधि मैम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम्स को उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई हैव हेडेड एनडीटीवी ब्यूरो फॉर उत्तर प्रदेश, 2 साल हमने हेड किया और अभी काम करते रहते हैं। यूपी में पोलराइजेशन है और अक्सर स्टेट वर्सेस मुस्लिम। बिहार में जो कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है, बिल्कुल उसका एक बहुत क्रेडिट जाता है नीतीश कुमार को। वहां पर आपको मुसलमान मिलेंगे जो नीतीश कुमार से मोहब्बत करते हैं, उनके खिलाफ। और आप देखेंगे जब वोट शेयर आएगा, जब आएगा आंकड़ा निकल करके, तो जहां कमल सिंबल है वहां पर आपको वोट नहीं मिलेगा, जहां तीर है जेडीयू का वहां मुस्लिम्स ने वोट किया है, चाहे वो थोड़े पुरुष हो या महिलाएं हो। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट आई स्टिल डाउट कि वो बीजेपी को वोट करें मुस्लिम महिलाएं बुर्के के अंदर। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं तो जो हमने ये हिंदू मुस्लिम राजनीति होते देखी वो बिहार में नहीं हुई, तभी तो शुरुआत में योगी जी जाता है नीतीश कुमार को। योगी जी आए, वो बुर्का करने लग गए, बुलडोजर, लेकिन बाद में आते आते देखेंगे, हाँ बाद में, यस मैम, बाद में आते आते फिर नीतीश जी ने शायद वो पीछे हो गए। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू योगी रैलीज, इस चुनाव में जितना कम बीजेपी ने हिंदुत्व किया नैरेटिव में बिहार में, वो आई थिंक पिछले कई चुनाव में हमने नहीं देखा है। अच्छा रहा। हाँ, बट क्यों नहीं किया? क्योंकि दैट शोज देयर कॉन्फिडेंस। वो इतना आराम से जीत रहे थे कि उनको उसकी पोलराइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ स्टेट का स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग है। बट दे हैव ट्राइड हिंदुत्व 2015 में, फॉर एग्जांपल दे मेड बीफ एन इशू, 2020 में जब लगा कि एलजेपी नीतीश का थोड़ा सा नैरेटिव खराब होता है, डिड सम हिंदुत्व, बट इस बार तो बहुत ही कम किया उन्होंने। बट ऑन दिस ओवैसी फैक्टर, इन जस्ट वन सेकेंड, ऑन सीमांचल, आई थिंक ये बात सब लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि आरजेडी जो है एमवाई से बाहर नहीं जा पा रही। मैं कह रहा हूँ एमवाई में एम भी आधा नहीं बच रहा अब तो आप देखिए, ये ओवैसी ने पिछली बार सीमांचल में 5 सीटें जीती, अभी एज ऑफ नाउ 6 में आ गए हैं। ये आपको क्या बताता है? पिछली बार चलो लगा फ्लैश इन द पैन था, CNRC इशू था जो कि आरजेडी कांग्रेस ने ठीक से टेकअप नहीं किया। No, not only 1 seat. He made RJD lose another 5 seats. हाँ, बट वो 5 में 4 भाग के आरजेडी चले गए, उसके बाद भी ही इज डूइंग वेल अगेन इन सीमांचल। हमारे साथ आसिफ बामला बीजेपी के आ रहे हैं, पहले रूही अपना आप पॉइंट दे दीजिए। मैं जाते जाते सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, तेजस्वी यादव के इस समय सबसे बड़े राइवल, सबसे बड़े दुश्मन स्टेट में नीतीश कुमार नहीं है, भाजपा नहीं है, खुद उनकी पार्टी और खुद उनकी पार्टी का जो पास्ट है और खुद उनके लालू और राबड़ी देवी का जो
रिजीम है वो है, और वो बैगेज वो अपने से कैसे हटाएंगे वो ही उनका सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि आज भी तेजस्वी यादव को वोट ना देने का सबसे नंबर 1 रीजन ये है कि जो जंगल राज उस टाइम पे था 20 साल पहले, वो हमको अभी भी याद रहता है। तो वो जो घाव है वो कैसे तेजस्वी यादव मिटाए और कैसे उस चीज को ओवरकम करे। हालांकि तेजस्वी यादव ने कोशिश बहुत की एजुकेशन की बात करके, लेकिन वो बार-बार वो जो वर्ड विजन सामने नहीं आ पाया। विजन, हाँ, आपने बहुत अच्छी तरह से कहा कि वो विजन ठीक तरह से निधि जी, जो 35-38 साल के ऊपर का पुरुष या महिला था उसको याद, उसको सबको याद, उसको ये याद है कि जंगल राज में क्या होता था। बिल्कुल, दे वुड नेवर वोट फॉर हिम। आसिफ बामला हमारे साथ बीजेपी के मौजूद हैं। आसिफ जी, शुक्रिया और बधाई आपको। जिस तरह से बिहार में इस समय नतीजे और रुझान सामने हैं, हम लोग अभी सीमांचल की बात कर रहे थे और मेरे सहयोगी यहाँ पे सौरभ भी मौजूद हैं, वो भी सीमांचल का आंकलन कर रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है 5 सीटों पर आगे, 6 सीटों पर आगे चल रही है और शायद इस बार बीजेपी की कुछ सीटों को भी फायदा मिल जाएगा उनकी वहाँ पे मौजूदगी से। आप लोगों का क्या आंकलन है बिहार से? देखिए, सीमांचल में भी अगर आप देखें तो बड़ी मात्रा में महिलाओं ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया, क्योंकि हमारी जो प्रो महिला जो पॉलिसीज रही, जो स्कीम्स रही चुनाव के पहले, जो सेफ्टी स्कीम्स है, जो रक्षण सुरक्षण की जो स्कीम्स है भारतीय जनता पार्टी में, पहले अब अगर आप देखो तो कोई महिलाओं को शाम में 6 बजे के बाद बाहर निकलना सुरक्षित नहीं था। आज जो अगर किसी के कान में कोई बाली तो कान ही कट जाता था। ये भी दौर उस जंगल राज में बिहार ने देखा है। और अब आया हमारा राज, जब 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 नीतीश जी के नेतृत्व में और जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये जो सेकंड टर्म जो रहा, ये इतना फायदेमंद रहा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रो इनकम्बेंसी हो गया। और जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है सत्ता और सरकार में आए हैं, अगर आप देखें और अगर आप रिकलेक्ट करें तो 3 बार केंद्र में प्रो इनकम्बेंसी रही। और अन्य राज्यों में अमूमन तो यूं रहता था कि जी, वो तो हम जानते हैं, बिहार की चर्चा कर रहे हैं इस समय। और सीमांचल की खास तौर से आपका असेसमेंट, और जो यहाँ पे हमारे 2 युवा हमारे सहयोगी हैं जो एक महीना बिहार में रह के आए हैं, उनका आंकलन हम लोग सुन रहे थे और वो बता रहे हैं कि किस तरह से सौरभ, अगर आप ही बात को आगे बढ़ाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीमांचल को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। पहली बात तो जो 10,000 रुपए हैं वो बोल रही हैं, और सीमांचल के बारे में बात कर रहे थे कि देखिए उसमें जो जेडीयू और बीजेपी का जो वोट है उन्होंने अपना कंसोलिडेट करके रखा। ओवैसी साहब ने मुस्लिम्स वोट में डिवीजन करा दिया, तो खुद ले गए या डिवीजन करा दिया। तो आप देखेंगे कि जिन सीटों पर सीमांचल की अगर मान के चलें आप 70% सीटों पर जहां से सबसे ज्यादा उम्मीद थी महागठबंधन को कि वो होगा, वो नहीं होता दिखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी सीमांचल पर बात करते हैं। एक सीट है अमौर सीट। आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर बामला इस पे? नहीं, देखिए, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि इस बार जो है यादव और मुस्लिम जो है डोमिनेटेड पॉकेट्स जो है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का सीधा फायदा नजर आ रहा है। आप देखो तो अगर आप ये समझकर चलें कि लोगों ने तो ये नकार दिया था कि भाई सीमांचल तो चलिए एक विषय जो एक हमेशा सस्पिशन के दायरे में रहता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ है या नहीं। लोगों ने नीतीश जी के भी बारे में कई कहानियां कही, वोट चोरी, ये तमाम जो इनके अगर बॉडी लैंग्वेज देखो, देयर वाज नो सिनर्जी बिटवीन द कांग्रेस एंड तेजस्वी। लास्ट दम तक के उन्होंने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि तेजस्वी बने। तो देयर वाज अ डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट। और ऑन द अदर हैंड इफ यू सी देयर वाज सो मच ऑफ camaraderie between नीतीश कुमार जी पार्टी, ऑफ कोर्स वी हैड चिराग पासवान आल्सो हु हैज डन फैबुलसली वेल। तो एनडीए के लिए इट हैज ऑल वर्कड वेल। पीपल नो दैट फ्यूचर ऑफ बिहार, भविष्य बिहार का जो है एनडीए के रास्ते पर से ही जा सकता है। नहीं कह सकते बामला जी। एयरपोर्ट्स का काम ले लो, सड़कों का काम ले लो, एयरपोर्ट का काम ले लो, तमाम जो योजनाएं हैं जो सरकार की। देखिए, मैं आपसे कहता हूं, गिव मी 5 more seconds because I have been given very less time here. No, आप पूरा the voters
trust, listen to me, voters trust a party on the basis of credibility. And the credibility which our leader, Narendra Modi ji, has across the country, and not across the country, across the world, is unmatched. If you ask me, it is, the hardcore battle that started off with ended up with one-sided victory, and that is only and only because of the charm of the belief of the people of Bihar in the leadership of Narendra Modi ji, and that exactly is, you will see in the next few years. पिछले बार से बेहतर हमें जीत जनता ने दी है, इतने सारे संख्या में भर के वोट दिए। आज भी ये वही कहेंगे, वही पुराना, instead of interest, I am asking, where is the Congress leader Rahul Gandhi here? Can you find him? मिस्टर बामला, आप जो बीजेपी और जेडीयू की, बिल्कुल आपके भी सवाल वाजिब है, हम विपक्ष पर आएंगे क्योंकि विपक्ष को तो आपने धराशायी कर दिया ना, तो आप ही की बात करें, आगे की बात करें तो नीतीश कुमार तो अब मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं, उस पर तो कोई संशय नहीं है ना? देखिए, मुझे कोई संशय दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारे बीच में वो कलह नहीं है जो तेजस्वी, कांग्रेस और राहुल के बीच में रहा। अगर देखो, आखिरी क्षण तक भी टिकटों का जो है बंटवारों में मसलियात हुए, उसमें अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो एक दूसरे के प्रति, इट वाज लाइक अ ब्रोकन एंड इट वाज लाइक अ लॉस्ट बैटल। आपने चुनाव शुरुआत में के पहले ही आपने अगर अपनी हार स्वीकार कर ली हो तो जनता क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप? आज आप देखिए, बीजेपी इज एन इलेक्टोरल मशीन। इट्स नॉट दैट इलेक्शन आते तब हमारे नेता बाहर निकलते हैं, हम हार भी जाते हो तो हम हमारे नेता जो है खुलकर फ्रंट में जो है डिफेंड करते कि ठीक है हमारी कमियां हैं, जरूरी नहीं कि आप हर चुनाव जीते। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोगों ने समझा है, द प्रो इनकम्बेंसी जो फैक्टर रहा है, जो महागठबंधन जो था उसको डिमोलिश किया है बिहार की जनता ने। और जो जंगल राज, जो कट्टा राज जो हुआ करता था एक जमाने में, जहां लोगों में दहशत हुआ करती थी, चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, लोगों ने इसको नकार दिया। आज तेजस्वी तो 20 साल से तो आप ही की सरकार है, 11 साल से तो आप ही की सरकार है, बिल्कुल। और आप लोगों को शुभकामनाएं, और आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतना महत्वपूर्ण आंकलन किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया बामला साहब। और इसी बात को, चर्चा को आगे ले जाएंगे। और हमारे साथ बने हुए हैं कार्तिक, भी हमारे साथ बने हुए हैं। कार्तिक, इस समय जो बीजेपी खेमे में और जो जेडीयू खेमे में चल रहा है आंकलन को लेकर, ख़ास तौर से हम सीमांचल से भी उसको भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी ट्रेल कर रहे हैं राघोपुर में, अगर हम विपक्ष की अब बात करें, खामियां तो होंगी तभी हार हुई है। और अब देख सकते हैं राघोपुर से आरजेडी, तेजस्वी ने विपक्ष का एक तरह से पूरा लीड किया, लेकिन अंत में क्या जो 11 सीटों को लेकर जो थोड़ी सी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जिस तरह से तनातनी नज़र आई, बाद में सीएम चेहरा नहीं डिस्क्लोज किया गया, कहा गया कि नहीं घोषणा की गई, क्या ये सब फैक्टर्स थे, उसका असर पड़ा? जी बिल्कुल, ये जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में परफेक्ट स्टॉर्म, और तेजस्वी का मैं देख रहा हूँ। एक बात जिससे मुझे थोड़ी सरप्राइज हो रहा है कि उस सीट पर अभी 40% राउंड्स काउंट हुए हैं, सिर्फ 30 में से केवल 12। ये मेरी समझ के बाहर है क्योंकि 3 बज चुके हैं तकरीबन। ईसीआई की वेबसाइट पे तकरीबन हर सीट का 50% से ऊपर राउंड काउंटिंग का डेटा आ चुका है, कुछ को छोड़ दे तो। बट ये एक ऐसी सीट है जहां 30 में से केवल 12 राउंड काउंट हुए हैं, तो ये देखना होगा। लेकिन अगर ये होता है तो ये समराइज करेगा पूरा चुनाव बिहार का, कितना एक तरफा ये रहा। इसमें आप दीदी जी कुछ मतलब किसी इंडिविजुअल सीट के बारे में तो कहना बेईमानी होगी, क्योंकि और आपने जो सवाल पूछा कि सीएम फेस को डिक्लेयर करना, अगर इतना बड़ा लीड था और बीजेपी 95 सीट पर पहुंच गई है इस समय, मतलब ये तो थोड़ा सा मतलब उम्मीद से भी परे है, अपर एंड पर भी किसी भी उम्मीद से। एक एग्जिट पोल ने 91 सीट बीजेपी को दिए थे और हम सब उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, ये 95 सीट पहुंच रहा है, तो ये थोड़ा सा बियॉन्ड किसी कहते हैं इमेजिनेशन नंबर आ रहा है बीजेपी का। जेडीयू 82, परफेक्ट स्टॉर्म ऐसे, जैसा कि आपको मैंने कहा कि पहले ही 4 परसेंटेज पॉइंट का गैप था, उसके ऊपर अगर आप देखें तो
ये जो अलायंस की दिक्कत थी जिसका हमने जिक्र किया, तो वो कंपाउंड किया उस प्रॉब्लम को। और अंत में जो महिलाओं को कैश ट्रांसफर दिया गया, उससे जो पूरा सिस्टम रीबूट हुआ, तो उससे भी एक फर्क पड़ा। और प्लस हमें पता है कि लास्ट माइल पर जो प्लानिंग होती है बीजेपी की और अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ, वो बेहतर होती है कांग्रेस और आरजेडी से। लेकिन ये रिजल्ट अब उस टेरिटरी में जा रहा है निधि जी, जहां पे छोटे मोटे एक्सप्लेनेशंस देना मुझे लगता है सही नहीं है। सीमांचल में क्या हुआ, ठीक है, मैं विपक्ष पे ज्यादा नहीं कह रही थी, लेकिन ओवैसी साहब अगर 5-7 चीजों में डेंट कर रहे हैं तो क्या हुआ, वो सीटें भी दे दीजिए आप महागठबंधन को, तो क्या हो जाएगा। तो ये महागठबंधन जो है वो 30 से 40 पे आ जाएगा, 45 पे आ जाएगा। लेकिन दैट डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्शन। ये एक वाटरशेड इलेक्शन है उस हिसाब से। मुझे लगता नहीं है कि ये इसमें आप इसको रीजन वाइज चाह रहे हैं। बिल्कुल आपने बात रखी थी। जो 5-6 सीटें जीत रहे हैं वो एक सिंबॉलिक लेसन है विपक्ष के लिए, क्योंकि आप देखिए ऐसे पोलराइज चुनाव में जहां दो मेन साइड हैं, एक तरफ है इंडिया महागठबंधन, एक तरफ है एनडीए, इतना 2 साइडेड चुनाव है कि 3 साल पदयात्रा कर करके जनता समाज पार्टी की भी जीरो हैं। कोई सारी स्मॉल पार्टीज को चूज करना पड़ता है कि हम किस अलायंस के साथ जाएं। अगर आप वीआईपी हैं या आप कुछ वहाँ हैं, अलायंस के साथ अकेले कुछ नहीं होगा ऐसे इन्वायरमेंट में। और जबकि 5 पे 4 एमएलए आरजेडी छीन ले गया था पिछली बार, ओवैसी फिर से 5-6 सीट ला रहे हैं। कैसे और क्यों? मेहनत से। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम आइडेंटिटी से आ रहे हैं। मुस्लिम सीटें तो पूरे इंडिया में जीतती फिर एआईएमआईएम। ये ओवैसी और एआईएमआईएम सीमांचल में आज 2015 से लगे हुए हैं, 20 से नहीं। ऐसा नहीं कि 20 में एकदम से आ गया उसके बाद से हो गया। 2015 में सीमांचल में मैं खुद ओवैसी साहब से पहली बार मिला था। तो वो एक जो ग्राउंड की मेहनत है, एक कंटिन्यूअस मेहनत। अब इसको आप कॉन्ट्रास्ट करें आरजेडी कांग्रेस चुनाव से 1 महीना पहले गए, हेलीकॉप्टर हाथ हिला दिया, 5 साल कोई मेहनत नहीं, बैठे दिल्ली में। तो ये एक जो ये बात सौरभ ने जो बताई, जो मुझे नहीं पता थी कि खुद नीतीश कुमार ने 140-30 से ऊपर रैलीज की। सौरभ याद है 2015 में जब हम बिहार गए थे, तो जहाँ पे जिस होटल में रुके, तो बगल वाला रूम जब दिया गया तो पता लगा कि वहाँ पर बीजेपी अमित शाह जी पूरा वहाँ पे रह रहे हैं। और वहाँ पे 3 बजे रात में वो लोग कैंपेन करके आए, 3 बजे मीटिंग हो रही है। तो तब मैंने बोला कि अरे कितनी मेहनत, मतलब वो लगा हमें, अपने लग रहा था कि हम लोग पूरा दिन काम करके आए और हम लोग थक गए। लेकिन जो वो मशीनरी है, जिस तरह से वो लोग मेहनत करते हैं, राहुल ने मेहनत करी, पूरी वो यात्रा करी, उसको बहुत सराहा गया। और जिस तरह आत्मीयता से वो आम जनता से जुड़ते हैं, उसको भी सराहा गया। लेकिन वो बीच में गायब हो जाते हैं। क्या वो खामियाजा है? वो मोमेंटम नहीं बनता है। हाँ, बिहार में देखिए मैम 2 चीजें हैं। वोट अधिकार यात्रा 1 महीने आपने मैसेज की। देखिए पहली बात तो पॉलिटिक्स का काम पॉलिटिक्स से होना चाहिए, राजनीति से होना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी कोई एनजीओ तो चला नहीं रही है कि एनजीओ चला रही है तो हमें समाज सेवा करना है, चुनाव आयोग को सुधारना है। हमें भाई चुनाव आयोग को सुधारना है तो हमें चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। आप चुनाव जीतते हैं संगठन से। अमित शाह की आपने 2015 में बात की, हम लोग वहां थे मैम, अमित शाह मौर्या होटल में रुकते थे और वो वहां पर मैनेजमेंट करते थे। भले वो चुनाव हार गए, बीजेपी को तब समझ में आ गया कि नीतीश कुमार के बिना वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और 2014 में मोदी साहब की पॉपुलैरिटी पीक पर थी, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और लालू साथ आए और उन्होंने वो चुनाव में बीजेपी को ध्वस्त कर दिया। सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। इस बार भी जब मैम टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो बीजेपी में बगावत हुई। अमित शाह आए, 3 दिन वो मौर्या में रुके, साम दाम दंड भेद, जिसको प्यार से समझाना था प्यार से समझाया, जिसको जैसे समझाना था उन्होंने वैसे समझाया। जन स्वराज की 4 उम्मीदवार उन्होंने बैठा दिए अपने कैंडिडेट्स के लिए। तो वो बीजेपी संगठन का चुनाव मजबूती से जमीन पर लड़ती है। उन्होंने चुनाव से पहले CR पाटिल, धर्मेंद्र प्रधान और केशव मौर्य 3 नेताओं को भेज दिया, जाके मैनेजमेंट करो, जो जैसे माने मनाओ, समझाओ और बताओ। नीतीश कुमार ने एक काम किया है इस चुनाव में। नीतीश कुमार ने अपना खुद का जो कैंपेन था, आप देखेंगे वो पूरे चुनाव में बीजेपी के साथ कोई उन्होंने ज्वाइंट कैंपेन नहीं किया। मोदी साहब की रैली में नहीं गए, अमित शाह के साथ रैली नहीं की। इनफैक्ट जब मैनिफेस्टो लॉन्च भी था एनडीए का, तो वो 40 सेकंड या 1 मिनट के लिए आए और उन्होंने फोटो खिंचवाया और वो चले गए। नीतीश कुमार ने वापस से असर्ट किया है कि वो क्या है। आज बीजेपी कुछ भी बोले, बीजेपी आके बोले मोदी जी का करिश्मा है, वो ठीक है, जो है सो है। लेकिन मोदी जी का करिश्मा था 2015 में, क्यों नहीं जीते? वो नीतीश कुमार का करिश्मा है। नीतीश कुमार के लिए जो माहौल बनाया
कि नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, वो हाईजैक हो गया है, उसमें जो नेता के अगेंस्ट एक एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए वो सिंपैथी में तब्दील हो गई। 20 साल से हैं वो मैडम मुख्यमंत्री। बिल्कुल आपने ये सही बोला। और जो आपने कहा कि 130 रैलीज उन्होंने की हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत साफ सटीक हमें दृश्य दे देता है, भले ही इतना मीडिया में चर्चा ना हो। मैं बताऊं, नहीं मैं कोई बात नहीं, 3:15 हो गए, ये शाम का समय होता है चाय का और चाट का। तो आइए सीधे हम आपको पटना लिए चलते हैं। आलोक हमारे सहयोगी, मुझे बताया जा रहा है एक बहुत फेमस चाट की दुकान में वहाँ पे इलाके में मौजूद हैं। आलोक सर लव चाय चाट जी, आलोक ओवर टू यू। थैंक यू निधि। मैंने सोचा अब चुनाव थोड़ा छोड़ा जाए, वो थोड़ी पेट पूजा की जाए, खुद भी और आप लोग को भी दिखाया जाए। ये जो एरिया है ना पटना का, यहाँ पे मटन चावल मिलता है बहुत बढ़िया निधि। और मटन चावल, और जो लोग बिहार से वाकिफ़ हैं उनको ये मालूम है कि सादा खाना भी यहाँ का बहुत फेमस है सोटू से, तो सादा खाना भी यहाँ अच्छा मिलता है। पहले तो मैं यहाँ इन सज्जन से अनुरोध करूँगा ज़रा अपना ये दिखा दें। मनोज अगर आप इधर आएँ ज़रा और थोड़ा सा ज़रा ये दिखाइए सर, आप क्या खिला रहे हैं? मटन खिला रहे हैं सर। मटन खिला रहे हैं। हाँ। ये कितना मटन है? ये तो अभी लगभग 20 केजी बच गया है। 50 केजी मटन था मॉर्निंग में। 50 केजी? हाँ। तो आप 50 केजी मटन बनाते हैं? पर डे नहीं, डेट पर डिपेंड है, कौन सा दिन है उसी दिन पर डिपेंड है। आपके हिसाब से आज किस तरह का दिन है? अच्छा दिन है? अच्छा दिन है। क्यों अच्छा दिन है? एवरेज है सर। अच्छा। हाँ। नहीं, मैं राजनीतिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या राजनीति में भी आपके लिए अच्छा दिन है आज? हाँ, वो तो है ही किया सर। राष्ट्रीय पर्व का जो आ रहा है आपका मतदान का, बिहार का जो राष्ट्रीय पर्व ही मानिए ना इसको, जो मतदान का चुनाव का आया, रिजल्ट आया, तो उसी को लेकर अच्छा ही है। राष्ट्रीय पर्व क्यों कह रहे हैं आप? इसी पर पूरा हमारा बिहार के जितना आर्थिक सब इसी पर डिपेंड कर रहा है, क्या यहाँ पर विकास होगा क्या नहीं होगा, इसी पर तो डिपेंड है। आज ही के दिन पर तो डिपेंड है किसका सरकार हम बना रहे हैं। ये जिसकी सरकार बनी है आप उस चीज़ से खुश हैं? आपको लगता है वो डिजर्विंग है? खुश है सर, खुश है। क्या फैक्टर है आपके लिए, बताइए। अभी तो सर ये नहीं बताइएगा? नहीं, क्यों नहीं बताएंगे। सब देख ही रहे, चकाचौंध है यहाँ पे। पहले जैसा माहौल था उससे माहौल सब खत्म हो गया। बाकी सब माहौल देख नहीं रहे, आपके सामने जब दिखता है चोरी डकैती ये सब कम ही हो गया है, 0 लेवल पर आ गया है। खुद मेरा ही दोस्त दूसरे स्टेट में रहता है, वो लोग बिहार आना नहीं चाहता है, लेकिन अब वो लोग आना चाहता है। बिहार के डेवलपिंग देखते ही तो आना पसंद करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम विजय है। विजय जी। आपके हिसाब से जो रिजल्ट आए हैं वो आज आपकी खुशी के हैं? खुशी के हैं सर। क्यों विजय जी? ठीक है सर, जैसा मिला जुला के चल रहा है तो बढ़िया है, तो इसलिए सही है। फिर मैं इधर आपको ये भी दिखाना चाहूँगा निधि, मनोज अगर तुम थोड़ा सा इधर आओ। यहाँ सिर्फ मटन नहीं बन रहा है अच्छा, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम, लेकिन आप देख ही लीजिए। ये देखिए बड़ी अच्छी सी फिश भी बन रही है। तो इट्स नॉट ओनली जस्ट अ मटन चावल प्लेस, इट्स ऑल्सो अ फिश चावल प्लेस, इट्स ऑल्सो अ सादा खाना प्लेस, एंड दिस इज ऑल for those of us who've worked in Bihar, or those of us who've actually come to Bihar. It's no surprise that the best food is out here on the streets. I'm going to just walk a little more. थोड़ा सा अगर आप और मुझे समय दे दें, और इनके पास मैं आना चाहता हूँ। सॉरी, मैं आपको खाते वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूँ। व्हाट इज़ योर नेम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम है। गौतम, आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं अभी तो बीएड कर रहा हूँ, एबीसी कॉलेज है। एबीसी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज? ये प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज है। तो टेल मी समथिंग, आप लोगों के ऊपर कैंपेन का इस बार बहुत फोकस रहा है बिहार में, जॉब्स के ऊपर, नौकरियों के ऊपर, इसके ऊपर। आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट दैट्स कम? जी बिल्कुल, बहुत खुश हैं। और हमें ये उम्मीद भी थी कि हमारे जो विकास पुरुष जाने जाते हैं नीतीश कुमार जी, यही सीएम फिर से दोबारा आएंगे, बनेंगे। तो हमें उम्मीद भी थी और इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतजार था हमें। जी। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि वेयर आर द जॉब्स इन बिहार? देखिए नीतीश जी को तो 20 साल हो गए करते हुए। आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन अल्टरनेटिव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई और होना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 20 साल जब एक व्यक्ति या एक संगठन या एक अलायंस राज करता है, तो यूड एक्सपेक्ट कि बिहार की जो हालत होगी मे भी थोड़ी सी और सुधरेगी। आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, देखिए बिहार की हालत सुधरेगी, बट जो ऑपोजिशन में जो लीडर हैं, तो अगर आप 2 लीडर में कंपेयर करेंगे कि नीतीश कुमार के जगह पे कौन, तो वहाँ पे अभी कोई वैसा स्पेस फिल करने के लिए अभी कोई सुटेबल लीडर नहीं है हमारे ऑपोजिशन में। तो नीतीश कुमार इज़ द बेस्ट सीएम ऑफ बिहार। जल्दी से मुझे बताइए, खा के क्या खा रहे हैं बताइए? ये हम मटन खा रहे हैं। आज ही के जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, तो जस्ट कॉलेज से आके और फिर उसी के खुशी में मैं और मेरा दोस्त हम लोग मटन पार्टी कर रहे हैं। आपका नाम क्या? रिसू नाम है मेरा। रिसू। आप भी मटन पार्टी में ही शामिल हैं आज? जी जी। रोज क्या खाते हैं? रोज तो घर का भोजन करते हैं। अच्छा, यू आर नॉट फ्रॉम आउटसाइड, आप पटना से ही हैं? पटना से ही। व्हाई डू यू थिंक दिस रिजल्ट इज सैटिस्फैक्टरी फॉर यू? आपको क्यों मतलब ऐसा लगता है कि ये अच्छी चीज़ हुई है जो हुई है बिहार में?
क्योंकि नीतीश कुमार जी अच्छे काम कर भी रहे हैं, विकास काफ़ी हुआ भी है अब तक। सड़क काफ़ी, उनका पुल के लिए काफ़ी उनका नाम जाना जाता है। नीतीश कुमार जी ने काफ़ी बिहार को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। लेकिन एक बात हमको बताइए, आप कॉलेज में बीएड कर रहे हैं, अज्यूमिंग आप भी बीएड ही कर रहे होंगे, आप बीएड कर रहे हैं, इसके बाद आपको बिहार में नौकरी मिल पाएगी? विल यू गेट अ जॉब इन बिहार? हाँ, नीतीश कुमार जी को ये तो करना चाहिए कि रोज़गार को काफ़ी और देना चाहिए, क्योंकि युवाओं बाहर ना जाएं, बिहार में उनको मौका मिले रोज़गार का। डू यू थिंक हिज गवर्नमेंट, उन्होंने इतना किया है, काफ़ी किया है इन द लास्ट सम टाइम? आप अभी कितने साल के हैं, फिर डोंट माइंड माय आस्किंग? 23 साल के हैं। इन द लास्ट 5 ईयर्स, 18 साल के जब आप थे, अब आप 23 के हो गए, डू यू थिंक ही हैज़ डन इनफ? काफ़ी किया है उन्होंने? नहीं, काफ़ी तो नहीं किया, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए उनको। हाँ, चलिए, आई नॉट कीप यू फ्रॉम योर फूड एनीमोर, आप अपना खाना एंजॉय करिए। आई एम सो सॉरी बॉदर्ड बोथ ऑफ यू, प्लीज़ कैरी ऑन। निधि जी 2 मिनट मुझे और दीजिए, मैं थोड़ा सा और आपके साथ मनोज के साथ आगे चलना चाहता हूँ, थोड़ा सा और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पूरी जो लाइन है ना निधि जी, और मनोज भी हमारे साथ आ रहे हैं, ये पूरा यही मटन चावल का लाइन है। थोड़ा सा अगर हम और आगे जाएं, आपको थोड़ा सा और दिखा दें, और आप देखिएगा पूरा भीड़ रहता है। अभी दिन का मेरे ख्याल से 3 बज रहा है, लेकिन तब भी ये पूरा एरिया जो है ना, ये उसी तरह से अभी उतना ही बिजी है जितना पहले था। एंड एवरीवन जस्ट फिनिशिंग द मील, सम आर कमिंग इन, तो इट्स नॉट लाइक ये पूरा खत्म हो रहा है, ये चले ही जा रहा है। क्या कह रहे हैं सर? जंगल राज का नाम सुने आपसे? खा रहे हैं आप? बोलिए ना, ये आप अभी कह रहे थे कुछ जंगल राज शब्द का प्रयोग कर रहे थे, मैं तो जा रहा था, मैंने सुना, आपसे पूछूं कि क्या कह रहे थे आप? जो वर्डिक्ट आया है उससे आप खुश हैं, जो बिहार में जो रिजल्ट आया है? नहीं, जो रिजल्ट आया, जो जनादेश मिला है जनता की तरफ से, उससे बेहतर रिजल्ट नहीं हुआ, ये काम पे मिला है। नीतीश जी का जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में ये खरा उतरे हैं, और जनता भी इनका साथ भरपूर दिया है। उनके अलायंस जो था बीजेपी, उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया, फिर भी जनता इनके साथ रहा, और आज उसका रिजल्ट है। जेडीयू तो कह रहा है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री से शुरू से ही, आप कह रहे हैं चेहरा नहीं दिया। चेहरा नहीं दिया। कई बार जेडीयू के जो है प्रभारी, प्रवक्ता, उनके जो भी है पदाधिकारी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप जो है मुख्यमंत्री का घोषणा कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। बोला रिजल्ट के बाद जो होगा, विधायक दल की बैठक, उसके बाद होगा। तो अब नीतीश जी बनेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री? एकदम बनेंगे। हाँ, उनके अलावा बिहार में कोई नहीं है। श्री बाबू के बाद अगर कोई बिहार में है तो वो नीतीश कुमार है, दूसरा कोई नहीं। सर, आप भी जल्दी से बताइए, आप सहमत हैं इनसे जो कह रहे हैं? हाँ। क्यों? वो अच्छा बोल रहे हैं। वो अच्छा बोल रहे हैं, तो आप भी कुछ बोलिए। अच्छा, वो जब बोल ही दिए तब हम क्या बोल रहे हैं? पहले आप खाने पे ही कॉन्सेंट्रेट करिएगा, बात में फ्री बोल रहे हैं। आप टीवी तो देख रहे हैं इधर, वही चीज। हाँ, देख रहे हैं, खुशी का माहौल है, जनता नीतीश के साथ है। पूछता आपका नाम क्या है? जी, आप नहीं बोलेंगे तो भागिए मत, नहीं बोलिएगा तो भागिए मत। सर, आपका नाम क्या है? पप्पू जी। पप्पू जी, कब से आप ये मटन का दुकान चला रहे हैं, कितने दिन से? 10-15 साल चला रहा है। 10-15 साल यहीं चला रहे हैं, इसी जगह पे? पहले पीछे था, घेराव लग गया तो घेराव कर दिया तो आप लोग फुटपाथ पे आ गए। कितने का बेचते हैं एक प्लेट? 180 रुपया, 2 पीस मटन, रोटी चावल सब। 2 पीस मटन, रोटी चावल सब मिला के 180 का बेचते हैं। लास्ट टाइम दाम कब आप बढ़ाए थे? इधर 1 साल से बढ़ा है, पहले 70 था। 70 था, 10 रुपये बढ़ाना पड़ा। ओके, बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं या आपको लगता है ठीक ठाक है इतनी महंगाई जो है? वही 50-60 किलो बनाते हैं। 50-60 किलो। महंगाई ज़्यादा हुई है पिछले कुछ दिन में या नहीं? लेकिन इधर महंगाई कुछ बहुत कम है। कम है आपके? प्याज व्याज, लहसुन, नींबू मान ये सब पहले की अपेक्षा बहुत थी, लेकिन मटन का दाम बहुत ज़्यादा है। चलिए, वो भी कम हो जाएगा। तो दीदी जी देखिए, आप सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने सोचा आपको थोड़ा से बिहार के साइट्स एंड साउंड्स खासकर पटना के, जहाँ एक्चुअली लोग आके खाना खाते हैं, वो आपको दिखा दूँ। बट यहाँ भी मत आप देखिए, हमने रैंडम सिलेक्शन करके लोगों से बात किया, लेकिन लोग अभी यही कह रहे हैं कि जो भी अभी मत आया है बिहार के लोगों का, जो भी काउंटिंग में रिजल्ट आए हैं, उनके हिसाब से ठीक हुआ है। कम से कम यहाँ जो लोग हैं उनका यही कहना है। बिल्कुल आलोक, आपके पास आते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लोग खा रहे थे, पेट पूजा कर रहे थे और आप उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। बहरहाल सौरभ, हम लोग जब ये बातचीत हो रही थी, प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर का आना और जिस तरह से उनका प्रदर्शन, और मुझे हमारे साथ बताया जा रहा है महेश शर्मा बीजेपी के नेता भी जुड़ गए। महेश जी,
बधाई आपको। बिहार में जिस तरह से नतीजे आए हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। और श्रेय आप किसको देंगे? पूरी तरह से नीतीश कुमार को, उनकी नीतियों को, गठबंधन को? अनम्यूट योरसेल्फ सर। 125 हो गया माइनस नीतीश। आरएलएसपी और अनम्यूट करिए महेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। ये बात बोलिए। जी महेश जी। अभी जुड़ेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे जी। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप देखिए टैली देखेंगे, बीजेपी 95, एलजेपी 20, हम 5 और आरएलएम 4। यानी बीजेपी आज इस हैसियत में है कि नीतीश जी को डंप करके भी सरकार बना ले। तेजस इसको चिराग को, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी को लेकर के, मतलब ये तो उन्हीं के ही है ना। तो जेडीयू के लोग यही तो हल्ला कर रहे थे कि चिराग को जेडीयू की सीटें दे दी। पहले तो 29 दे दी थी, बाद में फिर नीतीश कुमार जी ने पिछला चुनाव देखा तो ही था, आज इतना कम बीजेपी इतनी कंफर्टेबल है कि नीतीश कुमार को अब वो मुख्यमंत्री नहीं भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनके पास नंबर्स हैं। वो बीएसपी का एक एमएलए आगे बीएसपी ले लेंगे तो 125 के 126 हो गए, 123 चाहिए ना, 126 तो बीजेपी माइनस जेडीयू तो बैठी हुई है। तो बड़ा ये तो अब आज ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जब कम था तभी भी उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था, तो शायद अभी भी नहीं करेंगे। मैम नीतीश जी के लिए अब बीजेपी कमजोरी भी है और मजबूरी भी है, ठीक है। अभी तक वो अपनी शर्तों पे चलाते थे। आप देखना होगा कि होम डिपार्टमेंट, देखिए अब क्या होता है कि जरूरी नहीं है सीएम हो, लेकिन अब तक सीएम रहते थे नीतीश कुमार जी, अपना चीफ सेक्रेटरी, अपने अधिकारी खुद चुनते थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट किसी राज्य में होता है वो विभाग होता है होम डिपार्टमेंट, वो किसके पास? वो पुलिस डिपार्टमेंट। इस बार नीतीश जी अपने मन के मंत्रालय, अपने मन के डिपार्टमेंट नहीं रख पाएंगे और यहां से बीजेपी का जो वर्चस्व है बिहार में वो शुरू होता है। और नीतीश कुमार जी देखिए, इसी पे आलोक वर्मा को ले लेते हैं, महेश शर्मा जी को। महेश जी, जिस तरह से बीजेपी का प्रचंड जीत अपने आप में अपने बूते ही नजर आ रही है, नीतीश कुमार की भूमिका रहेगी ना वहां पे? सीएम बनाएंगे उन्हें कि नहीं? बिल्कुल सबकी भूमिका रहेगी और कोई भूमिका गौर नहीं है और हर एक भूमिका का अपना अपना महत्व है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, एनडीए चुनाव लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के जो शिखर नेतृत्व है, देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से वहां एक माहौल जो है विकास के रूप में जो एक सरकार का सुशासन स्थापित हुआ, या कह लीजिए कि जिस प्रकार से नीतीश जी के नेतृत्व में लगातार विकास का पहिया जो बढ़ रहा था, चल रहा था, उसको जो हम उसके ऊपर जो एक जो परसेप्शन क्रिएट करना चाहिए था, उसका एक जो माहौल बनाना चाहिए था, वो इस चुनाव में 100% हम बनाने में सफल रहे। दूसरी तरफ हमें जो मदद किया वो चीज मदद किया जो कहीं लोगों को एक सरकार की वजह से कहीं एहसास हो रहा था कि हाँ बिहार में कहीं विकास हो रहा है, कहीं लोगों को पक्के मकान मिल रहे हैं, कहीं महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है, कहीं उनको स्वावलंबन की दृष्टि से उनको पैसे दिए जा रहे हैं, कहीं युवाओं को लग रहा था कि भाई रोजी रोजगार भी हमें मिलना शुरू हुआ है। तो ये एहसास कमोबेश ये चीज जो है कहीं दिखाई दे रही थी। और दूसरी तरफ जो युवा पीढ़ी थी, मैं तो ये कह रहा हूं कि एमवाई का समीकरण जो उनके तरफ था, एमवाई का समीकरण जो एनडीए की तरफ था, दोनों में फर्क था कि वो मुस्लिम और यादव पे डिपेंडेंट थे और इधर हम जो है महिला और युवा पे डिपेंडेंट थे कि अगर ये सेक्शन कहीं मजबूत होगा तो बिहार निश्चित रूप से मजबूत होगा। तो इस तरह की एक रणनीति जो है हम शुरुआती दौर में ही बनाने में सफल रहे और उसको हम उस पैनापन को, या कह लीजिए कि उस धार को हमने जो है कुंद नहीं होने दिया, या वो बेशक रैलियों में हम जाके बोलते रहे, या कह लीजिए कि प्रधानमंत्री जी के मंच से वो जो चीज सुनाई देता था तो लोगों को दूसरी तरफ से क्या सुनाई देता था कि लोगों को लगता था कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि वोट चोर, चुनाव आयोग। अच्छा, दूसरी तरफ चुनाव आयोग का जो एसआईआर है उसमें खुद इनके बीएलए, इनके एजेंट जाके कहीं लोगों के साथ उनका एक इंटरेक्शन होता था, लोगों को कहीं बताते थे, समझाते थे कि आपको इस तरह से अपने वोट के को लेकर ये फॉर्म भरना है। और
दूसरी तरफ चुनाव आयोग को चोर बता के, भारतीय जनता पार्टी को वोट चोर कह के, और पता नहीं कितने तरह के मतलब मनगढ़ंत बातों को निकाल के कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, तो हम कभी नाइट्रोजन बम फोड़ रहे हैं, मतलब बेतुकी बात, बेसिर पैर की बात। और लोकतंत्र के हित में क्या मतलब इस तरह की पॉलिटिकल परसेप्शन बना के और कोई चुनाव जीता जा सकता है क्या? वो भी अब इस जमाने में, जबकि सोशल मीडिया, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर युवा जो है जागरूक है, वो अपनी जो है हित में क्या है वो समझता है, उसको इस तरह से राजनीतिक महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जब मोबाइल हाथ में हो तो लोग अपना हित समझने लगते हैं, उनको और अच्छी तरह से समझ आता है। सौरभ को जाना है, लेकिन सौरभ ये मैं आपसे इस समय पूछना चाहूँगी, जो आप महेश जी से पहले बात कर रहे थे कि बीजेपी अपने बूते भी बना सकती है लेकिन नीतीश जी वहाँ पे रहेंगे, ये इस समय क्या परिस्थिति नज़र आ रही है जो सरकार वहाँ पे बनेगी? आपने कहा कि होम तो नहीं होगा, वो अब उस फ्रीडम के साथ नहीं चुन पाएंगे, उसका असर क्या? नीतीश जी भले ही सीएम बन जाएं पर शर्तें बीजेपी की होंगी। जैसे कई डिपार्टमेंट है, कई मंत्रालय, जैसे होम डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पुलिस किसके पास है, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये बहुत सारे वो डिपार्टमेंट्स हैं जो बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। पहले भी डिप्यूटी सीएम थे, मंगल पांडे हेल्थ मिनिस्टर थे, तो ये कुछ डिपार्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होम डिपार्टमेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, शर्तें जो है वो बीजेपी की होंगी, क्योंकि अब नीतीश जी के बाद जेडीयू में कोई सेकंड रैंक लीडर है नहीं ऐसा पैन, जो वहां पर आप जेडीयू के कार्यकर्ताओं को ही पूछेंगे तो बोलेंगे कि ललन सिंह हो या अशोक चौधरी हो। अब अशोक चौधरी की बेटी से बात कर रहे थे अभी, आलोक शाम्भवी, वो एलजेपीआर से हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी को भेज रखा है चिराग पासवान की पार्टी में, खुद वो जेडीयू के साथ हैं, पहले वो कांग्रेस से आए हैं, ठीक है। तो आप अशोक वो संजय झा हो, तो सब वो नेता हैं सेकंड रैंक के जो बीजेपी के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। नीतीश कुमार अलग थे कि वो अपनी जो पोजीशन थी वो अपना रुतबा कायम रखते थे और अपनी अथॉरिटी असर्ट करते थे। अब वो नहीं हो पाएगा। पहली बात तो बीजेपी हमें लगता है बना देगी, हमें इफ एंड बट समझ में नहीं आता, जितना हम पॉलिटिक्स समझते हैं बिहार की, क्या जमीनी असर होगा जितना हम समझते हैं, लेकिन शर्तें डिपार्टमेंट वो बीजेपी के मन के होंगे, अधिकारी बीजेपी के मन के होंगे, सीएम शायद अब एक फेस होंगे नीतीश कुमार, सरकार शायद बीजेपी चलाएगी। बिल्कुल। शिवम जी, इसमें दो तीन बातें ऐड करूंगा। मैं मोटा मोटा सौरभ की बात से सहमत हूं, लेकिन एक तो मैं ये रिमाइंड कराना चाहूँगा कि केंद्र में बीजेपी जेडीयू पर निर्भर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जेडीयू कोई पत्ते नहीं है। दूसरा ये बात सही है कि अब जेडीयू के पास बिहार में जो एक कार्ड था कि हम पलट सकते हैं, वो ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग से नीतीश कुमार का अपमान नहीं करना चाहेगी। हो सकता है प्रशासन में बीजेपी के पास अपर हैंड हो, लेकिन उस प्रशासन में भी और कैबिनेट में जो अभी तय होगा कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, बीजेपी ऐसा परसेप्शन नहीं बनने देगी कि उन्होंने नीतीश का अपमान किया है, क्योंकि एक पोस्ट नीतीश सिनेरियो में मैं सहमत हूं सौरभ से कि जेडीयू में कोई सेकंड रंग नहीं है, नीतीश कुमार के बाद जेडीयू पार्टी खत्म है। ऐसी सिचुएशन में बीजेपी जो नीतीश का ईबीसी वोट है उसके लिए नीतीश कुमार की लेगेसी को अप्रोप्रिएट करना चाहेगी, उसके लिए कुछ समय चाहिए, उसके उस समय के अलावा वो अपमान नहीं कर सकते नीतीश कुमार का। अभी आप पिछले 10 साल में देखिए, 2014 से पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलायंस तोड़ा कि हमें मोदी के साथ नहीं जाना। 2010 में नीतीश कुमार ने फेमसली नरेंद्र मोदी से थाली छीनी थी। उसके बाद आप देखिए 15 में बीजेपी को हराया, उसकी बीजेपी के खिलाफ कितनी बार बोले, वो पर्सनल अटैक्स किए नरेंद्र मोदी अमित शाह पे, उसके बाद 2-3 बार पलट चुके हैं, तब भी बीजेपी को ले लेती है चुपचाप। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग टर्म थिंकिंग कि वो ईबीसी वोटर के सेंटिमेंट का वो ख्याल रखते हैं। ईबीसी वोटर नीतीश कुमार को जो मानते हैं एक टॉल लीडर, अपना एक लीडर मानते हैं, उस लेगेसी को बीजेपी चाहेगी कल को अप्रोप्रिएट कर अपना बना ले। बिल्कुल। कार्तिक, आपसे, क्योंकि आपको भी जाना है, जो जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन इस समय दिख रहा है जेडीयू से आगे मजबूत, इसके क्या मायने? इसका मायना सबसे पहले निधि मैम ये है, एक ट्वीट डाला गया था जेडीयू द्वारा कुछ समय पहले कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो ट्वीट डिलीट हो चुका है।
ये अभी आप एक्स पे देखिए इसको, ये डेवलपमेंट चल रहा है। तो मैं शिवम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दो ऐसे राज्य थे उड़ीसा और बिहार, जहां बीजेपी वेट कर रही थी कि जो पेट्रियार्क हैं उस राज्य के वो फेज आउट हो और हम एंट्री मारें, तो इसलिए उनको रिस्पेक्ट दे रही थी नवीन पटनायक उड़ीसा में और बिहार में नीतीश कुमार जी। लेकिन इससे बेहतर मोमेंट मुझे समझ नहीं आता बीजेपी के लिए क्या हो सकता है। 95 सीट्स उनकी आ चुकी हैं और अब जो जिस अनसेरेमोनियस तरीके से बीजेपी वो जेडीयू को बिल्कुल साइडलाइन नहीं करेंगे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन इसी माहौल के अंदर बहुत से सेरेमोनियस तरीके भी हैं जिस तरीके से बीजेपी डायरेक्टली भी सरकार बना सकती है, ऐसा मेरा मानना है। जो सौरभ कह रहे हैं वो भी हो सकता है, जैसे कि मध्य प्रदेश राजस्थान में उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्रियों को हटा के कोई और व्यक्ति को बनाया और नॉमिनेशन दिलवाया वसुंधरा राजे से, कि जब वो जो मीटिंग हुई उसमें वसुंधरा राजे जी ने ही प्रपोज किया उनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर्ची आई उनको। तो क्या सेम मॉडल यूज नहीं हो सकता बिहार में? क्योंकि ये तो कहते ही है बीजेपी वाले कि 20 में भी नीतीश जी तो नहीं कह रहे थे हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हमने उनको बनाया, तो कांट ही रेसिप्रोकेट द फेवर दिस टाइम। तो ये सब ऑप्टिक्स की गेम है। मुझे लगता है अगले 24 घंटे में सिचुएशन काफी क्लियर होगी, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ बीजेपी कम्स इन विद देयर ओन चीफ मिनिस्टर। क्योंकि नंबर्स देखिए आप नंबर्स देखिए मैम, जैसे शिवम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में बैसाखी है जेडीयू की एनडीए में, तो हम जानते हैं हाउ बीजेपी ऑपरेट्स, राइट? उसको वो पार्टी का पार्लियामेंट में उस पार्टी के नाम से रहे ना रहे, इसकी भी क्या गारंटी है? तो मुझे लगता है कि दिस रिजल्ट चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होऊंगा। इस समय जीत का जो दिन है, जीत का दिन है और जीत का श्रेय एक तरह से नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को जाता है, तो अपमान ईसीबी वोट के लिए वो नहीं करेगी। हमारे साथ नए मेहमान अब स्टूडियो में आ गए हैं। हमारे साथ ताबिश पटेल हैं, कांग्रेस के नेता हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए ताबिश जी। बिहार में क्या हो गया, ये क्या आंकलन? आप आए स्टूडियो में, ये भी शुक्रिया इसके लिए। नहीं, शुक्रिया की बात नहीं है, जो बात जो जनता का जो नहीं, क्योंकि ये सवाल बीजेपी पूछिए कहाँ है कांग्रेस के नेता? नहीं, जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा। और सिचुएशन क्या था, इसके बाद जो है सो मेहनत बहुत किया गया है, हमारी योजना भी बहुत चली, उस पर हम लोगों ने काम पिछले 6-8 महीने से कर रहे थे। और इस योजना के जैसे माँ बहन योजना है, झंडा तोलन है, और भी 2500 रुपये महीने देने का योजना है, ये सारे काम इसी बात में मैं आपको अब टोक कर पूछूंगी बीच में कि जो आप कह रहे हैं 7-8 महीने से, अब आप जन स्वराज पार्टी, हालांकि उनकी सीट ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम तो 2 साल से हड्डियां गला रहे हैं। राहुल गांधी ने ज़मीनी यात्राएं की, करीब, फिर बीच में वो चले गए, फिर दोबारा आए। क्या जो टाइमिंग थी वो थोड़ी पहले हो रही थी? जैसे अगर हम तेजस्वी की भी बात करें तो बहुत अच्छी योजना के साथ आए कि भाई पैसे देंगे महिलाओं को, लेकिन बहुत पहले कर दिया क्या? क्योंकि बाद में एनडीए ने अपना पूरा देखा, समीकरण समझा और फिर वो 10,000 रुपये की बात आई। तो कहाँ पे मिसमैच हुआ? ये आज बहुत जल्दी है पूछना आप लोगों से, या आप लोग अभी इस बारे में चर्चा कर भी रहे हैं? नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी जो आप बोल रहे हैं कि जल्दी है, नहीं, ये तो काम हमारा शुरू से चल रहा था जिस पर हम लोग काम कर रहे थे, रेगुलर बेस्ड काम कर, योजना पे, इस पे अगर जल्दी होता तो जनता तक वो जितनी जनता हमारे पास है, जितने डिस्ट्रिक्ट से उसको पहुंचना मुश्किल हो जाता। बीजेपी ने जिस तरह से काम किया और अपनी योजना को देखकर, मतलब हमारी योजना थे उसके को देखते हुए अपनी योजना पे काम किया। जो सबसे पहले जो थी जनता को जो खरीदा गया 10,000 रुपये दे के, आप उसको कल्याणकारी भी कह सकते हैं, आप उसको रेवड़ी भी कह सकते हैं। नहीं, रेवड़ी नहीं, बजाबती इसको हम कह सकते हैं कि एक तो SIR पे इन्होंने जो काम किया, उसके बाद वो नुकसान सबसे बड़ा रहा जनता के लिए, जिनका नाम कटा था, जो वोटर्स का नाम फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार चल जाएगा, आधार चल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और अपनी ही चीज़ों पे वो जैसे कि आधार कार्ड को बनवाने में मोदी जी ने क्या कि आधार कार्ड बनेगा, हर चीज़ से लिंक्ड किया गया उसको, सारे आधार कार्ड को। आपने भी तो कहा स्टाइपेंड देंगे 2,500 रुपये महीना। तो बोल ही रहा हूँ कि माँ बहन योजना में हमने बोला था ना, तो फिर जब वो मैं इसलिए समझने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, मैं टाइमिंग की बात पूछ, मैं इलेक्शन के बाद मैंने कहा था, मैंने ये नहीं बोला था कि अभी मैं दे रहा हूँ, ठीक, मैं इलेक्शन के बाद, इन्होंने तो अभी तुरंत दे दिया। 10,000 रुपये जो दिया गया, 10,000 रुपये में क्या रोजगार मिलता है? क्या रोजगार आप कर पाएंगे? बहुत होता है 10,000 रुपये भाई, बहुत होता है 10,000। नहीं, 10,000 रुपये में क्या आप रोजगार कर पाएंगे? कोई ऐसा रोजगार नहीं, मगर इससे वोटर को खरीदा गया है।
मेरे हिसाब से इस वोटर को खरीदा गया है, जिसपे वोटर जो है सो इनके फेवर में वोट दिया। खास के औरतों ने जो वोट दिया है वो इस पे बहुत ज़्यादा वोट पड़ा इनको, 74%। तो आप ये मानते हैं कि ये जो 10,000 रुपए थे ये चले? हाँ, ये नुकसान हुआ है। हाँ, आप लोगों को हम लोगों को नुकसान इसका हुआ है। और जबकि इतना, लेकिन और फैक्टर्स नहीं है जिसका नुकसान हुआ होगा? सीट बंटवारे को लेकर, टिकट जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, शिवम वगैरह यहाँ पे बहुत जानकार हैं, विश्लेषक हैं, ये तमाम चर्चाएं हो रही है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। आपके जहन में शिवम क्या सवाल है? ताबिश जी यहाँ पर मौजूद है। ये 12 सीटें जहाँ पे अलायंस में दोनों ने कैंडिडेट खड़े करती हैं। हाँ बिल्कुल, वो 11 सीटें। हाँ, 12 की 12 महागठबंधन हारी है। वो आप 12 में से आधी भी जीत गए होते, थोड़ी सी और टैली होती। आप लास्ट मिनट में लड़ाई चल रही है कि डिप्टी सीएम कौन होगा और सीएम कैंडिडेट होगा कि नहीं होगा। छठ पूजा तक तो कोई कैंपेन ही नहीं था ना, मुश्किल से 10-15 का कैंपेन हुआ है। ऊर्जा नहीं है ताबिश जी, क्यों? मतलब वो जो मेहनत बीजेपी लगातार करती है, और ये हर चुनाव के बाद हम ये इस बात पे चर्चा करते हैं। नहीं, ऊर्जा के साथ मैं खुद कैंपेन में था, मैं खुद पूरे बिहार घुमा हूँ, ऐसा नहीं कि ऊर्जा नहीं था। अब बहुत पहले से हम लोग घूम रहे थे, ठीक है, सोशल मीडिया से भी लेके मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करे वो अलग बात है, मगर आप देखिएगा जितना भी सोशल मीडिया के साथ हम लोगों ने काम किया है। अब राहुल गांधी का यात्रा जो चला उसमें भी ऊर्जा थी। तेजस्वी ने, तेजस्वी की यात्राओं को सराहा गया, उनकी जिस तरह से आम लोगों के साथ मिलकर आत्मताप करते हैं वो सराहा गया, लेकिन वो स्पोराडिक होता है, हुआ और फिर वो चले गायब हो जाते हैं। क्या ये इस बार लग रहा था वो सिलसिला रहेगा? क्योंकि बिहार एक बहुत ही क्रूशल राज्य के विधानसभा चुनाव थे, कहा जा रहा था कि बिहार के चुनावी नतीजों का असर केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा, ये तक कहा जा रहा था। राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, पहली बात तो एकदम से यात्रा आई और यात्रा जाने के बाद कुछ और हुआ नहीं। महागठबंधन का जो कैंपेन था उसमें पीक पॉइंट था वो यात्रा, और वो यात्रा बहुत पहले ही खत्म हो गई, उसके बाद वो पीक कभी दोबारा आ नहीं पाई। और वो यात्रा का भी जो सब्जेक्ट था वोट चोरी, उसका कोई वोटर में रेजोनेंस ही नहीं था कोई। अगर वही यात्रा अगर बेरोजगारी पे हुई होती, पलायन रोकने पे हुई होती, बिल्कुल, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता। तो वो एक तरीके से नेशनल कैंपेन का हिस्सा था, क्योंकि बाकी सीट में वोट चोरी की बात हो रही थी। बिहार चुनाव से 4 दिन पहले हरियाणा का कुछ एक्सपोजे आ रहा है। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस जो है बिहार में एक सेकंड पहिया है, मेन तो आरजेडी है। तो एक तो इनका समन्वय नहीं बन पा रहा आपस में, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के साथ पीछे लगी हुई है। आरजेडी अच्छा नहीं कर रही, आरजेडी वजह से कांग्रेस खराब कर रही है। लेकिन यहाँ देखिए, बीजेपी इस बार आगे निकल गई जेडीयू से। हमेशा ये कहा जाता था कि जो बीजेपी है वो जेडीयू से पीछे रहेगी, छोटी बड़ी। अब सुबह तक हम सोच रहे थे छोटा भाई बड़ा भाई, लेकिन अब देखिए क्या है यहाँ पे। 2020 में भी बीजेपी कहीं ज्यादा आ गई थी, परफॉर्मेंस हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तब एलजेपी जब अलग से लगी थी। लेकिन कांग्रेस के लिए एक सवाल, मेरे पास 2 सवाल हैं। एक सवाल ये कि अगर अलायंस में इतनी दिक्कतें हैं और आप आरजेडी के साथ ऊपर उठते हैं नीचे गिरते हैं, तो क्या कांग्रेस को बिहार में अकेले अपनी जमीन बनानी चाहिए, आरजेडी को छोड़? जो आरजेडी का जंगल राज का टैग है, एमवाई का टैग है, सब आप पे आता है। भारी पड़ता है क्या उस पे? आपको क्या जमीन पे? उससे ज्यादा अगर क्राइम देखिएगा तो इनके नेतृत्व में भी हुआ है, नीतीश जी के इसमें भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। क्राइम का वो तो एक डेटा से कभी चुनाव नहीं है, परसेप्शन चुनाव। हाँ, परसेप्शन इन्होंने बनाया है, उस परसेप्शन को हम तोड़ने में बहुत पीछे रह गए। मुझे जहाँ तक लगता है कि हम परसेप्शन को, मगर उससे ज़्यादा अगर आप क्राइम, हालांकि इस पे चैनल्स पे इसके बारे में बहुत ज़्यादा बहस भी हुई है, और आरजेडी के भी कुछ प्रवक्ता ने बात की है, कांग्रेस के भी प्रवक्ता ने बोला है, मगर जो परसेप्शन क्रिएट करना था उन्होंने परसेप्शन क्रिएट करके उसको हम लोग डिमोलिश नहीं, उसको ये नहीं कर पाए, टर्निश नहीं कर पाए परसेप्शन। मगर आप देखिएगा कि उस हिसाब से जब तक नीतीश जी थे, नीतीश जी के भी इमेज को डैमेज किया इन लोगों ने। शुरू में आपने देखिएगा कि पहले भी डैमेज किया, अभी भी डैमेज किया। जो एमवाई कॉम्बिनेशन था इनका, तेजस्वी का, और एक तरह से महागठबंधन आज सुबह से पहले मान रहा था कि सीमांचल में तमाम वोट हमें मिल जाएगा, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। ये पूरा ये कोलैप्स कैसे हुआ? एमवाई कोलैप्स कैसे हो गया? नहीं, मुझे लगता है कि इस पे अभी समीक्षा करनी पड़ेगी कि इतना बड़ा मैंडेट जो मिला है, ये मैंडेट में कहीं ना कहीं कुछ गैप है।
इसको मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एकदम कि कहीं गैप, इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिल सकता। जिस हिसाब से मैंने कैंपेन किया, जिस हिसाब से जनता का रुझान था, जिस हिसाब से जनता ने आगे बढ़ चढ़ के कैंपेन में हिस्सा लिया था, हर मतलब पलायन के मुद्दे पे हिस्सा लिया था, एजुकेशन के मुद्दे पे, हेल्थ के मुद्दे पे ये भी हिस्सा लिया था, उस हिसाब से तो मैंडेट पे अभी तो बोलना मुझे बहुत अर्ली हो जाएगा। मुझे लगता है कि कोई इसमें गड़बड़ी है कि करीबन 9-10% वोट शेयर का डिफरेंस आ रहा है। पिछले चुनाव में 5% था। अब इतना पैसा बांटने के बाद महिलाओं को 10,000 रुपये और वृद्धा पेंशन बढ़ाई है और आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स के पैसे बढ़ाए हैं, फ्री बिजली दी है, उसके बाद 5% और बढ़ गया। कोई इट इज़ नॉट अन अनबिलीवेबल इंक्रीज इन वोट शेयर। देखिए, आपने 1 लाखपति दीदीज़ की 1 करोड़ लाखपति दीदीज़ की बात की थी, लेकिन जिस तरह से जीविका दीदी ने नीतीश कुमार के लिए ज़मीनी, जैसे सौरभ थे यहाँ पे बता रहे थे किस तरह से ज़मीनी ग्राउंड वर्क पे पूरी एक तरह से भूमिका निभाई। ग्राउंड में कांग्रेस का जो संगठन है वो यहाँ पे भी नहीं बना। देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में क्या बना कि नहीं बना, आपका क्या आंकलन है? मैं बोलता हूँ कि संगठन बना हुआ है, पुराने संगठन भी जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और संगठन बना भी, उस पर हमने काम भी किया है। हमारे एक मुद्दा था कि भाई हम हर घर एक नौकरी देंगे 5 साल का। उस मुद्दे में भी हमने पूरी तरीके से उसको जनता के बीच गए, इस मुद्दों को नहीं किया उस पे। अब क्या रिजल्ट के हिसाब से न, तो इससे बाद पिछले बार 17 महीने की तेजस्वी की सरकार थी, जिसमें उन्होंने जितनी नौकरी देने का वादा किया था उतनी नौकरी भी दिया था। ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं दिया तेजस्वी ने, तेजस्वी जी ने नौकरी भी दिया। उसके बाद से कि हर साल हम हर घर एक नौकरी देंगे, जो स्कीम थी उसकी वो भी हम देंगे, मगर उस पर हम पता नहीं जनता ने अभी तक को, मुझे लगता है कि मैंडेट जो आया है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप है। मुझे जो मुद्दे आप लोग उठाते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने वोट चोरी का मसला उठाया, वो इतना रेजोनेट नहीं किया। क्या आपको लगता है जिस तरह से शिवम कह रहे थे पलायन का या बेरोजगारी का मुद्दा ज़्यादा पुरजोर तरीके से उठाते तो वो रेजोनेट ज़्यादा करता, वो लोगों को ज़्यादा समझ आता, उस पर थोड़ा और बढ़ा जा सकता था? पलायन पे तो हम लोगों ने हर वक्त बात किया, हर मतलब सभाओं में, हर आप चाहे नुक्कड़ सभा बोलिए, चाहे आप कहीं भी ये बोलिए, सब में हम लोगों ने बात किया है, पलायन पे बात किया। हमने अपनी नौकरी देने की बात की है, ऐसा नहीं कि नहीं दी, मगर SIR के बाद से जिस तरह से इनके पकड़ाने हैं इसके वोट चोरी के, और उसके बाद जिस तरह से एक आदमी के 10-10 जगह वोट हैं, अलग अलग तरीके से वोट एक आदमी डाल रहा है, तो वो सिस्टम थोड़ा सा करप्ट सिस्टम था जो जिसको एक्सेप्ट नहीं किया। बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि चलिए NDA ने हमने मान लिया कि पैसे बांटिए, वोट खरीद दिया, कुछ गैप है, गड़बड़ी हो गई, ये कैसे है कि इस समय कांग्रेस की 1 सीट आती दिख रही है और AIMIM की 6 सीट आ रही हैं जो किसी अलायंस में नहीं थी, और उन एरियाज में आ रही हैं, उन वोटर से आ रही हैं जो ट्रेडिशनली RJD कांग्रेस के वोटर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की पार्टियों की अपनी कमजोरियां हैं, अपनी कमी है मेहनत में, उनकी प्रॉमिस में, उनके ग्राउंड असेसमेंट में, उनके कैंपेन में, जो कि वो मानने को तैयार नहीं सा लगता है। बिल्कुल वो आत्मसात करने में समय लगेगा कि ये इतना बड़ा ये लैंडस्लाइड कैसे NDA को मिला है, लेकिन अपने आप में जो श्रम और जिस तरह से लास्ट मिनट चेंजेस जो करते हैं, शायद उसका भी फ़ायदा हुआ। और जो कांग्रेस के कैंपेन में जो मुद्दे जो आप सामने रखते हैं, जिस और बेहतर तरीके से रख सकते थे, शायद ये भी लगता है, और शहरों में खड़े कर देते थे, ये देखिए यहाँ के हेड है मगर बिहार में नहीं है, ये इस संगठन के हेड है बिहार से लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, पलायन को इस तरह से दिखाते। देखिए, अब तो जो हारने के बाद, जो आपको मैंडेट नहीं मिलने के बाद तो क्वेश्चंस तो बहुत और हार में सवाल भी बहुत होते हैं, सवाल होते हैं और ये होते हैं, तो इसलिए इसमें कोई बहुत इसकी बात नहीं है। हमारे साथ देवेश सिंह भी हैं, ये भी विश्लेषक हैं। देवेश जी, आप किस तरह से आंक रहे हैं इस समय जब बीजेपी मजबूती से JDU से भी आगे निकल गई है? ये देखिए, ये पहले से ही ऐसा कॉल था कि बीजेपी ही बड़ी पार्टी बनेगी, ये JDU के लिए प्लस पॉइंट हो गया, क्योंकि 50 से सीधा अभी 85 समथिंग है, सो उनके लिए तो फायदा ही हुआ, प्लस LJP के लिए फायदा हुआ, तो बीजेपी के साथ आने में उनको फायदा हुआ। बीजेपी ऑलरेडी पहले से ही था कि वो बड़ी पार्टी बन के निकलेगी। जी, हेलो,
जी देवेश, सुन पा रहे हैं आपको जी। जी, सो मेरा मतलब जो मेरा पहले से आकलन रहा है वो यही था कि बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, ना कि जेडीयू। बट जेडीयू इतना अच्छा परफॉर्म करेगी ये सरप्राइजिंग है। बट बीजेपी को लेकर कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि वो बड़ी पार्टी नहीं बनती, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी का ग्राफ गिर रहा था बीच में काफी, तो उससे ये था कि बीजेपी ही बड़ी पार्टी निकलेगी। बट जेडीयू सरप्राइजिंगली बहुत बड़ी पार्टी निकली है। और डिक्लाइन जिस तरह इसका हुआ है राजद का, वो काफी मतलब सोचने वाली बात है। उनको फिर से एनालाइज करनी सीटें आ गई हैं। हाँ जी, एलजेपी की भी 19 सीटें आ गई हैं। मैंने पहले ही बताया कि एलजेपी और जेडीयू को ही फायदा हुआ सबसे ज्यादा। और बीजेपी को बहुत ज्यादा मतलब मार्जिन है उसके पास, बट पिछली बार भी वो एक बड़ी पार्टी ही थी। राजद जितना गिरा है उससे ज्यादा बढ़ के एलजेपी को फायदा हुआ और जेडीयू को फायदा हुआ है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा देखिए, वो भी बढ़ गया इतना, 1 थी या 0 थी, इस बार 4 या आरएलएम को 4 सीटें मिल रही हैं। एनडीए मतलब एक तरह से पूरा एक हो गया है, वो अच्छा हुआ, क्योंकि महागठबंधन में काफी प्रॉब्लम्स दिख रही थी, सभी को दिख रही थी। आप एआईएमआईएम को ही ले लीजिए, उन्हीं को महागठबंधन ने लेने का प्रयास किया होता तो शायद कुछ और भी बेहतर स्थिति होती उनकी, बट उन्होंने उनको भी दरकिनार किया। सो आई थिंक मतलब एनडीए एज अ ग्रुप बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और महागठबंधन हर बार की तरह वहां उनमें आपसी ही तालमेल नहीं दिखा है, जिसका वो नतीजा दिख रहा है। शिवम, आपसे जो ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भी आ गई, पिछली बार 0, इस बार 4 आ गई हैं। हिंदुस्तान आवामी मोर्चे की पार्टी, उसको भी ज़्यादा नहीं थी, 1 नहीं थी तो 5 आ गई हैं। तो ये छोटे ग्रुप्स ने भी बहुत अच्छा कर लिया। ये ओवरऑल इफेक्ट है इसका। जो दोनों पार्टी मेरे ख्याल से एनडीए का पार्टी, हाँ, तो वो तो एनडीए का रिपल इफेक्ट है। वही मैं पूछी, क्या उसी का रिपल इफेक्ट? उसी का रिपल इफेक्ट है, क्योंकि आप देखें जैसे कि जो मुकेश सहनी जी हैं वीआईपी पार्टी के, वो एनडीए से शिफ्ट होके महागठबंधन में आ गए हैं, और उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं हुई है। बल्कि उनके जो मल्ला वोटर में एक जगह जाके मिला, तो वो कह रहे थे कि वो एनडीए के साथ ही जुड़ेंगे, क्योंकि उनको उनका नरेंद्र मोदी के साथ भी जुड़ाव है और नीतीश कुमार के साथ भी जुड़ाव है। ये जो छोटी पार्टीज़ हैं, कुशवाहा पार्टी, मल्ला कास्ट की पार्टी, ये या जो हैम पार्टी है, महादलित पार्टी, ये पार्टीज़ का एक लार्जर देन देयर नंबर्स सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है अलायंसेस के लिए टुवर्ड्स दोज कम्युनिटीज़। तो एज अ होल फॉर ईबीसी कम्युनिटी, ये पार्टीज़ ऑफन उस तरफ जाती है जहाँ चुनाव की हवा चल रही होती है। तो अगर वो लोग उस तरफ हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि एनडीए जीत रही है। तो उसका मतलब ये है कि जो मसले जिन्होंने, वो मुद्दे जिन्होंने मदद की बीजेपी और जेडीयू को, या नीतीश कुमार का जो बीजेपी का जो 10,000 रुपये का था, या और भी जो नीतियां थी जो उनको फ़ायदा हुआ, वही इनको भी हो गया। ऐसे मतलब एक सिनर्जी होती है। दे ब्रिंग देयर कास्ट वोट, और दे ब्रिंग देयर विश्वास लोगों को इस गठबंधन पे ज्यादा हो गया। जातीय राजनीति में जब एक पूरे ईबीसी समाज को ट्रस्ट करना है एनडीए के लिए, तो आप देखिए सब कुछ मिल रहा है। नीतीश कुमार भी है, कुशवाहा भी है, यानी मैं खाली कास्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। छोटे एलाइज भी हैं, अहाम भी है, दलित वोट के लिए भी। तो सारे पत्ते एक तरफ आ गए एक तरीके से। खाली मुकेश सहनी जी इनके साथ थे महागठबंधन के साथ, बट वैसे ही तो इनका अम्ब्रेला, जातियों का अम्ब्रेला भी बड़ा था। बिल्कुल था। और पिछले चुनाव में हमने देखा 2020 में कि कैसे सीपीआईएमएल ने भी अच्छा किया महागठबंधन के साथ, कैसे कांग्रेस को भी फायदा मिला। वही कांग्रेस जो आज 1 सीट आ रही है, पिछले चुनाव में 19 सीट लाई थी। वो भी रिपल इफेक्ट था, क्योंकि आरजेडी अच्छा कर रही थी और एनडीए भी डाउन थी, नीतीश कुमार डाउन थे। तो ये दीज अलायंसेज आर मेड फॉर अ रीजन। बिल्कुल। महेश वर्मा हमारे साथ बने हुए। महेश जी, जो जिस तरह से बीजेपी जेडीयू का अच्छा रहा है प्रदर्शन, उसी का असर ये भी दिख रहा है कि जो छोटे दल थे उनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है। तो पूरा समूह जो एनडीए है, मजबूती से फायदा उन सभी को एक साथ हुआ है। विश्वास जीता है आपने लोगों का? निश्चित रूप से जी।
ये आपका सवाल जो है प्रासंगिक है, और इसका फायदा सबको इसलिए मिला कि सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़े। मतभेद की बात जो है कई बार जो है उछाली गई, कई बार उसको लेकर दुष्प्रचार भी हुआ, प्रोपगेट भी किया गया, लेकिन सफल नहीं रहा, क्योंकि देखिए चिराग जी भी आके जिस प्रकार से लोगों को बताते रहे, मीडिया को समझाते रहे कि भाई आप लोग हमारे को लेके इस तरह का भ्रम क्यों फैला रहे हैं। उसी तरह से उपेंद्र जी को लेकर कहा गया, उन्होंने भी बड़ी स्पष्टता के साथ बात रखी। तो चुनाव तो पहले दिन से इतनी मजबूती के साथ एनडीए अलायंस जो है लड़ने के लिए तैयार हुआ। और दूसरी बात क्या थी कि जो अभी कहा जा रहा है कि भाई जाति के हिसाब से जो है ये अलायंस बहुत मजबूत था, या कह लीजिए कि जो इनके एक चुनाव को थ्रो करने का एक जो टाइमिंग था, वो टाइमिंग इन लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये सब चीजें तभी रिलेवेंट होती है, ये सब चीजें तभी मायने रखती है जब आपका काम कहीं दिखाई देता है। ठीक है, आपने काम ही नहीं होगा, ठीक है आप तो फिर आपको क्या मतलब, ये सारी चीजें, ये सारे ज्ञान गणित, ये सारी चीजें जो कि हम विश्लेषण करते हैं कि नहीं जी इस जाति का वोट इस तरह से आया होगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि महिलाओं को तवज्जो जो ज्यादा मिला, युवाओं को ज्यादा भरोसा दिया गया। ठीक है। दूसरी तरफ से जो भरोसा आया वो उसका कोई मतलब नहीं था। वो जब कसौटी पे 3 करोड़ लोगों को हर घर से सरकारी नौकरी देने की आप वादा कर रहे हैं, लोगों के गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही थी। इसी प्रकार से कई ऐसे मुद्दों को लेकर आप लोगों ने जब बात करी, आप कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए जो है वो चोरी हो रही है, और वो चोरी क्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा। आपके बीएलए खुद उस एसआईआर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लोगों का ये दोहरा चरित्र इनका दिखाई दे रहा था। बिल्कुल, एक और मसला है, ये मैं शिवम आपसे पूछूंगी। ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, ये नक्सल और इसको लेकर है, नक्सल और माओइज्म को लेकर, कि चोरमरा बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में, गया, जमुई और रोहतास में इसका काफ़ी असर देखा जाता था, जो 2022 से कंटेन हुआ। और इस बार जब लोग वोट करने आए तो गया में 67.5%, जमुई में 67% से ज़्यादा, रोहतास में 60% से ज़्यादा। और एक जैसे बाबूलाल कोडा का जिक्र है, 75 साल के पहली बार उन्होंने वोट किया, जैसे उनके लिए अलग इन इलाकों में जहाँ पे जो नक्सल और माओवाद से प्रभावित हैं अलग वोटिंग बूथ्स बनाए पड़ते थे। इस बार ऐसा नहीं हुआ, उनके क्षेत्र में वोटिंग बूथ्स बने। तो क्या ये धीरे धीरे जब ये इस तरह की खबरें निकल कर आती हैं कि भाई नक्सलवाद और ये भी जिन इलाकों में असर था इतना, वो उसको कंटेन कर लिया गया है, समाप्त नहीं हुआ लेकिन कंटेन कर लिया गया है, क्या उसका भी कानून व्यवस्था पर इसका विश्वास बढ़ता है लोगों का इससे? नहीं, देखिए जो सच बात है वो जैसा कि सर कह रहे थे, बहुत ही क्लियर है कि जो कानून व्यवस्था बिहार में जितनी अच्छी नीतीश कुमार के राज में आज से 10 साल पहले थी, आज वो नहीं है। और हो सकता है इस एरिया में नक्सलवाद कम हुआ, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन ये 1-2 जिलों की बात है। ओवरऑल बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है नशाबंदी की वजह से। नशाबंदी की वजह से क्राइम बढ़ा है। जो नशाबंदी का जो व्यापार कर रहे हैं वो लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, फिर वो बंदूकें लेना शुरू कर देते हैं, और वो जो पैसा कमाते हैं इलिसिट पैसा, वो क्राइम में फीड करते हैं। और जो पुलिस प्रशासन है उसका इतना ज़्यादा ध्यान नशाबंदी में लगा हुआ है कि वो क्राइम पे थोड़ा ध्यान कम दे पाते हैं। ठीक है, नलिन कोहली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए। नलिन, बहुत बहुत आपका स्वागत और बधाई आपको जिस तरह से बिहार के नतीजे रहे आज, क्या आंकलन? नहीं, इसमें निधि जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकई ऐतिहासिक एक निर्णय है। मतदान शुरू में काफी हुआ और मतगणना में जो नतीजे आए हैं वो हमारे लिए बहुत सुखद है। कहीं ना कहीं ये एक संदेश गया है कि बिहार में पुराने दिन जो थे वो जनता नहीं चाहती किसी भी हालात में कभी आए। इसमें बहुत स्पष्टता थी। महिलाओं ने जिस अधिक मात्रा में वोट दिए, वोट देते समय अपने मन की बात कही कि हम पुराने जंगल राज को आने नहीं देंगे, जो होता था वो लौटने नहीं देंगे। उससे ये स्पष्ट था कि भाजपा और जेडीयू की एक अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन इस हद तक हो ये बिहार की जनता का आशीर्वाद है।
और उसके सामने हम नतमस्तक। बिल्कुल। बीजेपी ने बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है, जेडीयू से ज़्यादा सीटें पाई है, पिछले चुनाव में भी था लेकिन इस बार और ज़्यादा है ये। किस तरह से देख रहे हैं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे या उस पर भी कुछ विचार हो सकता है? निधि जी, बहुत अरसे से हम लोग एक साथ टीवी पे आते रहे, कई दशकों से जी। और आप जानेंगे हमारी पार्टी में हमेशा ही ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, एक प्रक्रिया है, इसमें कभी भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। जो प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में जिनके पास अधिकार है इसके बारे में कहने के लिए वो कहेंगे। भाई हमने सरकार साथ लड़ा है, सरकार में हम साथ हैं, अब जो प्रक्रिया है वो अपनी जगह होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ साफ सुनिश्चित नहीं है, जो जिस तरह से कहा जाता है प्रक्रिया है उसी का पालन होगा? मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैं देखिए ऐसा है जी, एज वी से, मेरी फाइल नहीं है ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है। ठीक है, ठीक है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के कोई सदस्य इस पे बोल पाए? बिहार बीजेपी के भी कुछ नेता ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। सम्राट चौधरी बोल चुके हैं और लोग बोल चुके हैं। ये अंत में बोले हैं, मतलब अभी बोले हैं, ये अंत में बोले हैं, यही चर्चा। रेगुलर इस पे क्वेश्चंस था कि कौन होगा, मगर ये जो है सो आपको अभी लास्ट में जब इन्होंने देखा तब बोलना शुरू किया है। एक सवाल और नलिन से मैं लेना चाहती हूँ क्योंकि वो ट्रैवल करें। नलिन, एक सवाल, जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो 10,000 रुपए दिए ये उसका असर है, लेकिन अब आप लोगों का अब जो जीत के बाद दायित्व बढ़ जाता है कि उनकी हिस्सेदारी भी हो और उनका डिसीजन मेकिंग में भी कुछ हो, क्या उस तरह का कुछ बदलाव देखेंगे? निधि जी, हम भाजपा की 2 मिनट बात करें। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है, हर चुनाव में हम लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी मतलब बीजेपी लड़खड़ा रही है, कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन चुनाव में प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। ठीक है, चुनाव हारते भी हैं, लेकिन अधिकांश रूप से आप देखेंगे तो हम जीतते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता, जो बोलते हैं वो करते हैं, और हम लुभावी बात नहीं, हम एक एजेंडा गवर्नेंस को लाते हैं। तो मुझे लगता है महिलादारी है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में ये भी सोचा है कि आगे जाके एक संशोधन हुआ है हमारे संविधान में, महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, उस दिशा में काम हो ही रहे हैं। तो ये तो समय की बात है, ये सब होते ही जाएंगे, इसमें कोई दो शंके की बात नहीं है, शंका का कोई बात नहीं। करें नलिन अंत में, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, बिहार में डबल इंजन सरकार काफी समय से रही है, लेकिन अर्बनाइजेशन या अंडर डेवलपमेंट रूल, उसका जो ग्रामीण परिवेश है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है और सबसे निचले पायदान पर है बिहार। आंकलन, मतलब आपका आंकलन ऐसा क्यों नहीं सुधर पा रहे हैं हालात? कुछ इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं। अब मैं किस रूप से कहूं, अगर लंबे एक पॉइंट पे देश में जो बिल्कुल ऊपर दर्जे पे थे, सामाजिक रूप से, शिक्षा के रूप से, प्रशासन के रूप से, फिर उसके बाद एक समय आया, कई राज्य आगे पीछे हुए, कुछ आगे बढ़ गए, कुछ पीछे पड़ गए। बिहार में एक दौर आया जिस पर जंगल राज का नाम पड़ा, जहां पर फिल्में बनती थी अपहरण को लेके, वहां पर दिखाया जाता था कि एक जंगल राज है, गुंडा राज है। वो दिन हम सब ने टीवी पे वोट कैसे लिए दिए जाते हैं, कैसे वोट कैप्चरिंग होती है, सब देखा है। तो अब एक बहुत निचले स्तर से जब पूरे समाज की बात करते हैं तो बहुत इंडिकेटर्स में तो फर्क हुआ है, कुछ इंडिकेटर्स में ज्यादा हुआ है, कुछ में और करने की आवश्यकता है, लेकिन दिशा और दिशा भी अच्छी। बिल्कुल। तो जिस तरह से हमारे साथ नलिन थे, वो ट्रैवल कर रहे हैं, ये कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। शिवम, अब बीजेपी तो आगे उसकी भावी उसकी बात करेगी, लेकिन इस समय अब शाम के 4 बज चुके हैं और मोटे तौर पर हमारे सामने अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि किस तरह से ये इस गठबंधन ने मजबूती से अपनी कमान अपने हाथ में ले ली है। 208 सीटों पर अब बीजेपी आ गए, तो जो पहले का 206 का, शायद 2010 का रिकॉर्ड, 2010 का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ गया। ये बीजेपी के लिए अपनी क्या मायने, क्योंकि
चुनावों से पहले हम कह रहे थे कि बिहार के जो नतीजे वो केंद्र की राजनीति पर असर डालेंगे, बहुत अहम सवाल ये खड़ा कर रहे थे, लेकिन अब इसका क्या असर केंद्र पर? नहीं, कोई केंद्र पर नहीं पड़ेगा। चाहे जो भी मतलब अनलेस द बीजेपी इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी बैडली, केंद्र पे कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन केंद्र में स्टेटस को चलेगा। बट इतना है कि जो लोकसभा में 240 सीट आके बीजेपी को थोड़ा सा झटका लगा था, थोड़ा सा उससे ऊपर वो उससे उभरते ही जा रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, है ना, एक झारखंड को छोड़ के अब ये बिहार, दैट 240 एवरी इलेक्शन लुक्स लाइक एन एबरेशन। तो इससे जो आगे आने वाले राज्यों के चुनाव हैं, और ओवरऑल केंद्र में भी जो बीजेपी अपनी नीति लाना चाहती है उसके लिए बीजेपी और मजबूत हो गई है। और ये दिखता है कि जो पब्लिक मैंडेट है वो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है और बीजेपी के साथ है, राइट। बीजेपी यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो बीजेपी जब पॉलिसीज़ लाती है जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आती हैं, लोग कहते हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक है, पर बीजेपी का कहना है कि हमको तो वोट मिल रहा है जनता से, राइट। तो आप कैसे कह सकते हैं अनडेमोक्रेटिक? तो एक तरीके से बीजेपी और ज़्यादा पावरफुल हो रही है, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। आई लाइक बैलेंस, बट इसका ये विपक्ष को भी पूछना चाहिए कि लोकतंत्र में जो भूमिका होती है विपक्ष की, उसको आत्ममंथन हम हर चुनाव के बाद कहते हैं, लेकिन एक पुरजोर तरीके से आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। देखिए, विपक्ष के साथ जितने भी अगर सेंटर से बात करें तो जिसे हमारा जो मैंडेट पिछले बार सेंटर में आया है तो ग्रोथ किए थे हम लोग, उसके बाद हर स्टेट में। तो अभी आपको SIR के मुद्दे से लेकर और आप जहाँ जहाँ जैसे इन्होंने गिनाया कि दिल्ली है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, तो हर जगह ये तय हो गया कि ये वोट चोरी से ये लोग आए हैं, जिसको प्रूफ भी हमारे नेता राहुल, अब स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। हाँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। वो प्रूफ किया गया कि हाँ भाई इन्होंने वोट चोरी से यहाँ पे सत्ता में आए हैं। अब इन सब बातों को लेके कि अब हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जो है उनसे एक बार मंथन होना चाहिए कि हम नेक्स्ट इलेक्शन और नेक्स्ट चीज़ों को, बंगाल है, असम है, दोनों है, असम है, बंगाल है, उसमें हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे करेंगे। इसमें हमारे अभी तो बहुत अर्ली है इसके इलेक्शन के बाद, आज का दिन के बाद फिर शीर्ष नेतृत्व क्या ये लेता है, क्या नाम डिसीजन लेता है, उस पर डिपेंड करता है ये सब सारी चीज़ें। तो हम लोग मेहनत करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। पार्टी में क्या कमियां हैं, क्या होना चाहिए, क्यों हारे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लगातार। जिस तरह से एक बात कही कि केंद्र में अगर एक पार्टी लगातार बहुत मजबूत होती है तो उससे और चीज़ें भी सवाल खड़े होते हैं लोकतंत्र को लेकर। लोकतंत्र तो डैमेज होता है, लोकतंत्र में खराबियां जो है, तो इसमें तो विपक्ष की भूमिका भी अहम विपक्ष होती है। देखिए आप क्या है ना कि इनके साथ जितने भी तंत्र हैं, जुडिशरी से लेके इलेक्शन कमीशन, CBI, IB, सब इनके साथ मिले हुए। अब आप कहीं भी आप देखिएगा, किसी भी चीज़ पे आप अगर हंगामा करते हैं, किसी भी चीज़ पे बोलते हैं तो उनके पास ED पहुंच जाता है, उसके पास IB पहुंच जाता है, उसके इलेक्शन कमीशन के डिसीजन फेवरेबल नहीं होते हैं। ये सब चीज़ ओपन है, देखा गया और देखा जा रहा है। फिर भी जो है सो उनके फेवर में चीज़ें ये आरोप अपने आप पे आप कह सकते हैं, विपक्ष आप हैं, लेकिन जब जाति समीकरण की बात बैठती है, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, तो मैं सुबह सुन रही थी लोग कह रहे थे भाई कौन बैठा था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बिहार में। ये सवाल उठ रहे थे यहाँ पर शिवम कि वो आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम लोग भी जाति के समीकरण के हिसाब से ही टिकट दिया था, जाति और कैंडिडेट उम्मीदवार के हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ उम्मीदवार में पॉइंट क्या है ना, जब आप हार जाते हैं तो आपके ऊपर अंगुश नुमाई होती है, उंगली उठाई जाती है, और कई पहलू से अलग अलग तरीके से आपको बुलाया। जीत जाते हैं तो आपको स्टेट जीत, बहुत अच्छे स्टेट जीता। हम लोग भी ने उस काम को किया है, जाति समीकरण के हिसाब से हमने टिकट बंटवारा किया, और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने हर जगह सर्वे किया गया है। एक सर्वे, 2-3 सर्वे करके AICC के सर्वे, उसके बाद जैसे हमने माओवाद और नक्सलवाद की खबर पड़ी, एक बारबीघा शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे EC20 पासवान मांझी थे। तो जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए रोड्स अच्छी हैं, हाँ हालांकि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, रोड्स हैं अच्छी, लेकिन रोज़गार हमें चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, पर वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का वो नहीं चला, वहाँ पर वो नहीं, उस पर नहीं चला।
तो हिंदू मुस्लिम उसी का क्या एक्सेप्ट नहीं करता है, नहीं करता, वही बात हिंदू मुस्लिम तो ये आरोप नहीं लग सकता बीजेपी पर कि भाई हिंदू मुस्लिम नहीं, इन्होंने करने की कोशिश किया, नहीं बोला है। इन्होंने योगी जी गए हैं, उन्होंने अपने भाषण में बोला, मोदी जी गए हैं अपने भाषण में बोला, गिरिराज जी बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं सब, मगर वहाँ की जनता नहीं एक्सेप्ट कर पा रही इस चीज को। देखिए कि ऐसा ऐसा है, मोदी जी ने भी बोला जाकर वहाँ, ऐसा नहीं कि नहीं बोला। मगर क्या होता है कि जाति समीकरण भी हमने उसी हिसाब से टिकट बंटवारा किया। अब ये तो अब थोड़ा 2 घंटा या 1 दिन के बाद जो रिसर्च होगा, इस पे बातें होंगी, क्यों हम हारे हैं, तो बहुत सारी चीज निकल के आएगी कि क्या होनी चाहिए। जैसे ये मुख्यमंत्री साइकिल योजना थी 2005 वाली जो नीतीश कुमार की थी, वो तब हुई और लगातार चली आ रही है। कितनी मजबूती से अब है वो अलग बात है। 7 अफ्रीकन कंट्रीज ने उसको एंडोर्स किया था, है ना, और उससे लगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और हुआ भी। तो इस तरह के जो सकारात्मक पहल और वो हैं, हालांकि बात की गई तेजस्वी वगैरह ने, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा, लेकिन जो एकदम एक तरह से पकड़ बना ले। देखिए, जब तक मौका नहीं मिलेगा आपको, जनता मौका नहीं देगी, तब तक आप पकड़ बनाना आपके लिए मुश्किल होगा। आप अपने स्कीम्स को लेके जाएंगे मार्केट में, आप अपने इसको जनता के बीच जाएंगे, एक्सेप्टेंस तब होगा जब आप सत्ता में रहकर उसको परफॉर्म कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ। अभी आप देखिए करप्शन जिस हिसाब से बिहार में है, बिहार में करप्शन है, पुल गिर रहे हैं, सड़कें बह रही है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत जगह नहीं पहुंची। मैं जिस विधानसभा से मैं खुद ही ये कर रहा था, टिकट मांग रहा था, टिकारी विधानसभा, वहाँ पे अनिल शर्मा थे, उनके बीच झगड़े भी हुए। झगड़ा क्यों हुआ? तो भाई रोड हमारे यहाँ नहीं बने हुए हैं। उनका कहना था कि भैया हमारे यहाँ जितना भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, वहाँ रोड नहीं बना रहे हैं क्योंकि भूमियार समुदाय से आते हैं, वो चाहते नहीं है कि यहाँ इस काम एक आंकड़ा था कि 3 रेलवे मिनिस्टर इस राज्य से आए हैं, 28 साल से कुछ प्रोजेक्ट्स, 53 प्रोजेक्ट्स से उनका इंतजार हो रहा है, और 3 रेलवे मिनिस्टर इस राज्य ने दिए हैं। लेकिन ये सब चीजें हैं, लेकिन वो विकास की हैं, वो बात करेंगे। राहुल जी, इस आंकड़ों में बिहार इतना गरीब दिखता है। मैंने लोगों से जब पूछा कि आज भी 20 साल नीतीश कुमार के राज के बाद आज भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, लोग कहते नहीं विकास हुआ है। तो हम और आप कौन होते हैं उनको आंकड़े बताने वाले? अगर उनको लगता है कि विजिबल विकास कुछ हो रहा है, सौरभ ने बहुत अच्छी बात कही कि वो बिहार को बिहार से कंपेयर करते हैं कि बिहार पहले कैसे था, तो वो 5 साल में इम्प्रूवमेंट। इस बार ट्रैवल करते वक्त मैंने कई जगह देखा, नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, पटना में फाइनली नया टर्मिनल खुल गया एयरपोर्ट का, राइट, कई जगह नए एयरपोर्ट आ रहे हैं। तो if there is a sense of some visible progress, people are okay with that, because it also matters to people the caste safety कि ईबीसी नीतीश कुमार बचा रहा है ईबीसी को, अपर कास्ट बच रहा है यादव से, राइट। इट ऑल्सो मैटर्स टू पीपल दैट नीतीश कुमार महिलाओं को पैसे दे रहा है, पीछे से कुछ खाना पूर्ति हो रही है। और एक बात मैं निधि कहना चाहूँगा कि हम सब लोग जो हैं एनालिस्ट, पत्रकार, कमेंटेटर और दिल्ली के पॉलिटिशियन भी, हम लोग बिहार जाते हैं कब? चुनाव से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले। लेकिन नहीं, आप बिहार के होंगे, लेकिन मैं जो बिहार, फिर हम अपना परसेप्शन बना लें। हाँ, लेकिन जो बिहार की जनता है वो तो 5 साल एक सरकार को देख रही है। हो सकता है कि पिछले 5 साल में नीतीश कुमार से गवर्नेंस हैज नॉट बीन बैड। हाँ, नहीं, वो बहुत सजग जनता है। दिस रिजल्ट इज सच अ, ये तो वेव इलेक्शन है। बिल्कुल सजग जनता है वहाँ की। बिल्कुल। सोनाली आनंद हमारे साथ जन स्वराज के हैं। सोनाली, आपसे बहुत उम्मीदें थी जन स्वराज को, लेकिन इस समय आप क्या आकलन करेंगी अपनी पार्टी के प्रदर्शन का? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर पार्टी के पर्सपेक्टिव से हम देखें और सीट को हम अगर एक पैरामीटर बनाएं, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही संतोषजनक नहीं है, सेटिस्फाइंग रिजल्ट्स नहीं है। बट अगर आप संगठन के तौर पे हमें देखें और हमारे साथ लोगों का समर्थन देखें, तो हम उसमें अपनी सफलता मानते हैं। जिस ढंग से हमने लोगों के साथ अपील किया कि आप निकलिए, हमने वोटर्स को अवेयर किया और उनके वोट्स का उनको महत्व समझाया, और जिस ढंग से जनता बाहर निकली और उन्होंने वोट किया, चाहे किसी के पक्ष में भी किया हो, ये मायने नहीं रखता, बट उन्होंने अपने वोट की ताकत को समझा, इसमें हम अपनी उपलब्धि मानते हैं। और हम इसमें भी अपनी उपलब्धि मानते हैं कि जिस ढंग से
हमने बिहार की राजनीति को शेप करने का काम किया है, और जिस ढंग से हमने जो कहते हैं डेवलपमेंट सेंट्रिक एजेंडाज को सेंटर में रखा है, जो आज तक बिहार के कास्ट के आसपास घूमती थी, बिहार के रिलीजन के आसपास घूमती थी, अब बहुत मेजरली हम अगर बात करें तो सड़क और बिल्डिंग्स या फिर रोड्स के आसपास ही घूमती थी। हम कभी उन पहलू को छू ही नहीं पाते जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करती है, क्योंकि मैं बचपन से ही बिहार में रही हूँ, तो यहाँ की मूल समस्याएं क्या है, या मैं बिहारी हूँ बाई बर्थ कह लीजिए, तो यहाँ की मूल समस्या को कभी भी छुआ ही नहीं गया। तो एक माइग्रेशन का मुद्दा हमने उठाया, आज हर एक पार्टी और एक नेशनल लेवल पे एक इशू बन गया, इसे हम डिस्कस कर रहे हैं और इसकी सीवियरिटी को आज हम समझ रहे हैं। तो एक मुद्दों को सेंटर में लाके बात करना, हम इसे अपनी जीत मानते हैं। और जिस ढंग से वर्कर्स कहते हैं कि इस पूरे इलेक्शन के ट्रेंड में 50 लाख से ज्यादा वर्कर्स बाहर से आए, और उसमें से मान लीजिए कुछ परसेंट अगर वापस जिन्होंने वोट कास्ट नहीं भी किया होगा, बट आई कैन से कि 40 लाख लोग यहाँ पर उन्होंने वोट कास्ट किया। तो एटलीस्ट एक जो लीडर प्रशांत किशोर एक रैडिकल नेता के तौर पर आए, उन्होंने कहा कि जो जात हावी हो गई है बिहार की राजनीति पे उसको नहीं मानना चाहिए। सड़क दर सड़क बहुत उन्होंने पैदल यात्रा की, और वो स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे थे, उनको बहुत उम्मीदें थी, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, पलायन की उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से बात की, और उसके बाद जो और दल हैं उन्होंने भी पलायन के मुद्दे को उठाया, तो उनकी भावना सही रही होगी। लेकिन जिस तरह से अब नतीजे सामने आ रहे हैं 207 सीटों या 2008 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, आपको लगता है कि घूम फिर के वो बात जातिवाद पर आई है और उसी पर सिमटी है, क्योंकि जो और छोटे अन्य दल साथ हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं एनडीए में? नहीं, मैं इस बात को अभी भी नहीं मानती कि ये जात या कास्ट बेस्ड अभी इलेक्शन ड्रिवन रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस ढंग से लास्ट 2-3 महीने में बिहार गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज लाई हैं और जिस ढंग से पैसों को उन्होंने डाइवर्ट किया है डायरेक्टली काडर के हाथों में, चाहे वो बिहार के ग्राउंड पे जो काम कर रहा था उसका बहुत ही मेजर इन्फ्लुएंस रहा है, जो जिन्होंने वोटर को इन्फ्लुएंस किया है। सबसे बड़ा रोल जो हम महिला रोजगार योजना की बात करते हैं, और जिस ढंग से अगर क्यूमुलेटिव अमाउंट इसका काउंट किया जाए तो ये 30,000 करोड़ रुपए थे जिन्होंने बिहार की जनता में बांटा गया लास्ट के 2 महीने में। और अगर आप इसे क्लोजली फॉलो भी करें तो आप ये पाएंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट के ड्यूरेशन के दौरान भी ये अमाउंट लोगों में ट्रांसफर किए गए हैं। तो इसका बहुत ही मेजर रोल रहा है, और इस जैसे योजना को पहले रोल आउट नहीं करके अंतिम किस्म में रोल आउट किया गया, ताकि दिमाग में वोटर्स के ये डाला जाए कि यही सरकार है, ये सारी चीजें कर रही है। तो ये हमारा हर फर्स्ट डे से कहना है इस मुद्दे पे स्पेशली, और हम आज भी यही बात कह रहे हैं कि इस स्कीम्स के थ्रू वोटर को मैनेज किया गया है, वोटर को इन्फ्लुएंस किया गया है। और ये शायद अगर इलेक्शन को थोड़ा सा एथिकल बेस पे हम अगर कंटेस्ट कर रहे होते तो शायद ये रिजल्ट्स थोड़े से डिफरेंट दिखते जो आज दिखाई पड़ रहे हैं। अगर सरकार ने फ्री बीज की घोषणा ही नहीं की, जिस ढंग से बिजली की 125 यूनिट की बात की, जो आप 10,000 की बात कह रही हैं कि दैट वाज अ गेम चेंजर इन इलेक्शंस में, वो खूब चला यहाँ पे, तो क्या प्रशांत किशोर अभी तक आए हैं, उनका कुछ आंकलन सामने आया है? नहीं, ये तो सबके सामने है ना कि जिस ढंग से अगर ये आपके बजट में इसका प्रोविजन था और अगर ये प्रोग्राम बहुत पहले से डिजाइन हो रहा था, तो व्हाई डिड यू वेट फॉर लास्ट टाइम? व्हाई डिड यू अनाउंस इट इन दी फ्यू मंथ्स बिफोर द इलेक्शन? यू कुड हैव डन इट अर्लियर। आप इसे बहुत पहले कर सकते थे, बट आपने बिल्कुल स्ट्रेटेजाइज तरीके से इस पॉलिसी को फ्रेम किया, इसे रोल आउट किया, इम्प्लीमेंट किया। तो ये तो मीडिया भी जान रही है, बिहार की हर एक जनता जान रही है, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज भारत की हर एक जनता इस चीज को जान रही है। ये इस स्कीम के नाम पे, एक सोशल वेलफेयर स्कीम के नाम पे कैसे वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया गया है। और मैं फिर बार बार यहाँ पे कहती हूँ कि सिर्फ 10,000 रुपए की बात नहीं है, यहाँ पे कई ऐसे स्कीम्स अगर आप लिस्टिंग करना शुरू करें, मे बी शायद आपको 2 मिनट लेना पड़े हर इस चीज को काउंट करने के लिए जो बिहार गवर्नमेंट में अंतिम 2 महीने में किए हैं। चाहे वो फ्री बिजली हो, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो ऑनरेरियम बढ़ाने की बात हो, चाहे वो सैलरी बढ़ाने की बात हो। आज तक 10 साल से या 20 साल से सारे कैडर कम वेज पे अगर आपके यहाँ कार्यरत थे, तो आपने अंतिम समय में ये सारी घोषणाएं क्यों की? और अगर अभी भी आप बिहार के बजट या डिपार्टमेंट्स को एनालाइज करें, जी जन स्वराज जब आया तो ये कहा गया, जब आज सुबह ये एक तरह से एक आंकलन जब लग रहा था, सवाल से उठ रहे थे क्या ये महागठबंधन को या आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगा? इस समय जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं, क्या असेसमेंट? नो, आई थिंक जनसुराज का 3% वोट शेयर दिखा रहा है वहाँ पे। 3%। उसके बाद भी मैंने कई सीटों में देखा तो बहुत कम सीट ऐसी होंगी जहाँ के जनसुराज
आइदर पार्टी को डैमेज कर पाया है। कहीं भी डैमेज नहीं, कहीं का ऐसा कोई डैमेज नहीं है। तो उसने अपनी 3% वोट बना लिए हैं। हाँ, बल्कि AIMIM ने ज़्यादा डैमेज किया है 4-5 सीटों में। सीमांचल में, सीमांचल उत्तर संसद बाहर भी एक आध सीट हो, सीमांचल। लेकिन इन टर्म्स ऑफ द वोट कटुआ चार्ज तो कहीं ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है। आई थिंक जन समाज पार्टी despite its failure has been able to introduce some fresh narrative in the election, in the political conversation in Bihar. Okay, लेकिन देखिए जनसुराज का फेलियर भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जनसुराज 3 साल से कह रही है कि आपका क्या हाल है, आपके बच्चों पे कपड़े के पहनने कपड़े नहीं हैं, आप 10,000 रुपए के लिए ट्रेन में धक्के खा के जाके काम मजदूरी करते हैं। उसके बाद भी जनता ने इनकम्बेंट नीतीश कुमार एनडीए बीजेपी अलायंस को छप्पड़ फाड़ के वोट दिया। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जनता को विजिबल प्रोग्रेस कुछ दिख रही है, जनता उस नैरेटिव से अग्री नहीं कर रही है। जनता कह रही है कि नीतीश ठीक हैं, विच टेल्स यू दैट मे बी दिस वॉज नॉट अ रिजेक्शन ऑफ जनसुराज और महागठबंधन, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रो इनकम्बेंसी कैंपेन। एक तो होता है कि मैंने आपको कंसिडर किया, आप मुझे अच्छे नहीं लगे, मैंने मना कर दिया, लेकिन नीतीश को जब हटाने की चाह होगी तब जनता कंसिडर करेगी महागठबंधन या प्रशांत किशोर, एंड उस सिचुएशन में हो सकता है जनसुराज माइट डू वेल, हु नोज। दूसरी बात यह है कि जनसुराज कोई जातीय समीकरण नहीं बना पाए किसी भी तरीके का। इतनी बुरी हार के बाद भी महागठबंधन का मेरे ख्याल 33% वोट शेयर आ रहा है। तो वो जब आप बुरी तरह हारते हैं, आपका 29 सीट्स हैं लेकिन 33% वोट शेयर दिखा रहा था कुछ टाइम पहले, राइट? तो दैट सॉलिड वोट शेयर गिव्स यू अ फाउंडेशन, हारते हुए चुनाव में भी आगे आप रेलेवेंट हैं। वो वोट शेयर आता है जातीय समीकरण से और थोड़ा आइडियोलॉजी से। जन समाज पार्टी कोई भी कोर वोट नहीं दिखा पाई कि हमारा एक कोर वोट है, उसके ऊपर हम स्विंग ले आते हैं, एडिशन ले आते हैं, वो नहीं हो पाया एक। बिल्कुल। और वो ओवर कमिटमेंट, मुझे लगता है कि जन स्वराज का ओवर कमिटमेंट रहा कि भाई ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। कोई एक पॉइंट्स को लेकर अगर आप चलते हैं तो उसमें जैसे हमने अगर कांग्रेस की बात करें तो हमने 2-3 चीज़ें को पॉइंट्स पकड़ा था। एक तो कहा था कि हम रोजगार पे बात करेंगे, प्लान यहीं बिहार की इंडस्ट्री जो यहाँ से लोग ट्रेनें खोल दी गई है कि यहाँ से आप गुजरात जा रहे हैं, यहाँ से पंजाब जा रहे हैं, जिस तरह से ट्रेनों को रेगुलराइज किया गया ज़्यादा ताकि यहाँ के लेबर गरीब जनता जाए वहाँ से कमा किया। तो हमने एक वादा किया था कि भाई यही इंडस्ट्रीज खोलेंगे, बिहार के लोग बिहार में ही रहेंगे। तो उसका भी पता नहीं, अभी तो आकलन करना मुश्किल है कि क्यों नहीं वोट आया। उसके बाद फिर यह है कि एजुकेशन पे हमने बात की थी कि जितने स्कूल्स बंद हो गए हैं उसको ओपन किया जाएगा। रोजगार में शुगर मिल्स जो हमारे बंद थे उनको लाया जाएगा। डालमिया इंडस्ट्रीज थी, जो इतने बड़े डालमिया इंडस्ट्रीज डिहरी ऑन सोन में था, उसको ओपन किया जाएगा। हमने सारे पहलू जो चीज़ है, नालंदा यूनिवर्सिटी पे काम करना होगा। ये बिल्कुल नालंदा यूनिवर्सिटी पे तो सारे लगभग सब लोग सेम ही करते हैं। नहीं करते नहीं सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इस तरह के जनसुराज ने भी यही सब इसी टाइप के प्रॉमिस किए। नहीं, मैं कह रहा हूँ हम ऑलरेडी काम करके दिखा चुके हैं 17 महीने में। तो जनता का ये अब तो देखिए कि अभी बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बोलने के लिए, मगर आप रिजल्ट में नहीं है, इसलिए आप बहुत कम चीज बोल पाएंगे। ठीक है, हमारे साथ अस्करी जी मौजूद हैं, वो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अस्करी जी, इस समय आपका क्या एनालिसिस, जिस तरह से जो ये मजबूती से एनडीए का परफॉर्मेंस रहा है, बम्पर वोट मिले हैं एनडीए को? हाँ, ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लेवल पर एनडीए स्वीप करेगी। ये तो मैं समझ रहा था कि ऑफ कोर्स मेजॉरिटी में आएंगे और सरकार बनाएंगे, बट अभी अगर हम देखें तो ये भी लगता है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द जेडीयू माइट बी डिस्पेंसिबल अगर दूसरे छोटे अलायंसेस के पार्टनर्स को कॉबल अप कर लें, और जो एनडीए और जो महागठबंधन के कुछ छोटे अलायंसेस हैं उनमें से अगर तोड़ लें अगर, सो दैट इज़ वन थिंग। द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू से इज़ कि बिहार में पहले ये लग रहा था कि कांग्रेस ने अपने कैंपेन को पिच कर दिया था, वोट चोरी की बातें बहुत तेजी से हो रही थी, वो कैंपेन पेनिट्रेट भी किया था काफ़ी हद तक, क्योंकि लोग उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे थे, बच्चे इस्तेमाल कर रहे थे अपने प्रोटेस्ट में।
तो मैसेजिंग तो थी, बट हुआ क्या, मुझे लगता है इसमें कई सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि जब AIMIM ने ये कहा कि आप हमारे साथ अलायंस कर लो, हमें 5 से 8 सीटें दे दो, तो इन्होंने मना कर दिया, इनफैक्ट रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। एंड थ्रू आउट दी यात्रा वहाँ पर लोग प्लैंक या प्लैकार्ड्स लेकर के खड़े हुए थे, ये कह रहे थे कि ये अलायंस हो जानी चाहिए ना। आई थिंक स्पेशली आफ्टर ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, जब मुकेश सहनी जी को अनाउंस किया गया दैट ही विल बी दी डेप्यूटी CM फेस, तो हुआ ये कि मुसलमानों के बीच में ये मैसेज चला गया एंड ये JDU BJP ने कंबाइंड कैंपेन और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर करके ये मैसेजिंग कर दिया कि देखो यार, तुम लोग तो सिर्फ दरी बिछाने के लिए हो, झंडे ढोने के लिए हो, सारा कुछ मैनेज करने के लिए हो, बट यू पीपल आर नॉट लीडर्स। तो मुझे लगता है दिस हैज लेड टू अ पोलराइजेशन, और इसका बेनिफिट असदुद्दीन ओवैसी को हुआ, MIM को। इनफैक्ट तो अगर हम देखेंगे तो कई सारे सीटें, 6-7 सीटें MIM ने डैमेज भी की हैं, क्योंकि आप उनको देखेंगे तो वो या तो नंबर 2 पे है या नंबर 3 पे, तो एक साइजेबल चंक वो वोट का लेकर के चले गए हैं, और इसका नुकसान डायरेक्टली महागठबंधन को हुआ। द नेक्स्ट थिंग दैट आई सी इज कि जब कांग्रेस अपना कैंपेन कर रही थी और उसी टाइम पर ये जब सीट शेयरिंग पर डिसीजन लेना था इन्हें, ये ले नहीं पा रहे थे। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक स्टेट वाइड इशू नहीं बल्कि एक नेशनल मुद्दा बन गया था, जब ये हर टेलीविजन चैनल पे फ्लैश होने लगा कि CLP कांग्रेस के, PCC कांग्रेस के, या फिर जो प्रभारी इंचार्ज, इन लोगों को भीड़ मारने के लिए दौड़ी एक ऐसी जगह पे जो कि पटना का एयरपोर्ट है, नया नया कंस्ट्रक्टेड एयरपोर्ट। तो वहां पर ये जो मैसेज था ये पूरे देश भर में चला गया कि देखो यार, यहाँ पे तो यूनिटी नहीं है इनमें, ये कैंपेन क्या कर पाएंगे। 11 सीटें ऐसी है जहां पर इन्होंने फ्रेंडली फाइट्स कर ली, उन सीटों में भी अगर हम देखेंगे तो 6 से 7 सीटें ये आराम से निकाल सकते थे अगर ये लोग अच्छे से कॉम्प्रोमाइज करके सहमति के साथ लड़ते और एक ही कैंडिडेट फील्ड करते। इसके अलावा बिहार के अंदर मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार ने जो अपने वोट बैंक को जो कंसोलिडेट किया है, देखिए ही इज अ सोशलिस्ट, देयर इज नो डाउट। इफ यू रीड अबाउट हिम, इफ यू लुक एट द वे ही फंक्शंस, आपको ये पता चलेगा कि फॉर हिम एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी। पॉलिटिक्स इज सर्टेनली इंपॉर्टेंट, लेकिन उनके लिए उनकी जनता भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने विमेन को बहुत एम्पावर किया और वो तो सारे लोग जानते हैं, सो आई विल नॉट गेट इनटू दोज डिटेल्स, बट द लास्ट स्ट्रॉ ऑफ इट वाज जहां पर 10-10 हजार सबके अकाउंट में दिया गया। लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क जो इन्होंने बना लिया था वो था 1.4 करोड़ का विमेन का जो नेटवर्क है, जो जीविका दीदी जी ने कहते हैं। तो ये पूरे के पूरे कैंपेन को, पूरे के पूरे वोटर्स को ये ग्राउंड पर मोबिलाइज करते हैं, बूथ लेवल पे। बीजेपी, मुझे लगता है बीजेपी का वो वोटर होता है जो शायद इनके रैलीज या इवेंट्स को ना अटेंड करे, बट वो साइलेंट वोटर होता है और वो वोट करता है। तो मुझे ये लगता है कि देखिए ओवरऑल कैंपेन पिच कांग्रेस का, आरजेडी का अच्छा था, बट वो पीक मेंटेन नहीं कर पाए, वो स्लोली डिक्लाइन कर गया। जहां पर हम एनडीए की बात करें, एनडीए ने बूथ पे भी चुनाव लड़े हैं, एनडीए की कुछ अच्छी मैसेजिंग हुई है। जैसे मोकामा वाली सीट थी, वहां पर ललन सिंह कह रहे थे कि सबको रोक देना है, बंद कर देना है, वोट नहीं करने देना है। वो भी पैन बिहार मैसेजिंग हो गई। हालांकि बिहार बहुत ज्यादा कम्युनल अभी तक नहीं हुआ है और इसीलिए शायद इस पूरे कैंपेन के दौरान बहुत हाई पिच कम्युनल स्टेटमेंट्स नहीं देखे। कुछ एबरेशंस थे जरूर, जैसे मैं उनका नाम भूल, गिरिराज सिंह हो गए, उन्होंने बोला, या फिर जो स्टार कैंपेनर्स आए जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा आ गए, या फिर योगी आदित्यनाथ आए, इन लोगों ने कुछ कुछ बातें बोली। अगली एक बात ये थी कि शायद ये मैसेजिंग के देखो यार, ये जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये जो बिहार में आकर के बस गए, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये मैसेज बहुत डीपली पेनिट्रेट किया, बट रिजल्ट्स को देखने से ये जरूर लगता है
कि कुछ नहीं तो कम से कम एक मैसेज तो जरूर गया है बीजेपी के कोर वोट में, जो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होकर के निकल करके वोट किया है। वो ये है कि यूपी में सरकार हमारी आई तो हमने मुस्लिम्स को कम से कम कंट्रोल कर लिया। सो वी आर गोइंग टू डू अ सिमिलर थिंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। एंड मुझे लगता है कि अगर हम इन सारी चीजों को देख लें तो टू टॉप इट ऑल ऑफ इट, आई थिंक द लास्ट थिंग दैट आई वुड से इज कि कपिल सिब्बल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये भी बताया था कि कैसे माइग्रेंट वर्कर्स को लाया गया बिहार में वोट डलवाने के लिए, ऑल ऑफ इट फंडेड बाय द एनडीए एंड इट्स अलायंस पार्टनर्स पार्टीज जो भी है। तो आई थिंक दैट हैज आल्सो लेड टू अ सर्ज इन द वोट्स। बट इस एक्सटेंट पे अगर हम देख रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि बिहार के को हमने एक एक सीट नहीं जीता है। एसेंशियली द एंटायर स्टेट ऑफ बिहार हैज बीन पेंटेड बाय अ सिंगल ब्रश। इस तरह का हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ये सारी वजह है। तो कुछ वेलफेयर पॉलिसीज भी हैं, कुछ पोलराइजेशन भी है, और पोलराइजेशन अमंग्स्ट मुस्लिम्स आल्सो इज, या स्प्लिट अमंग्स्ट मुस्लिम्स इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। असदुद्दीन ओवैसी हैज इमर्ज्ड एज अ पार्टी स्ट्रॉन्गर देन बिहार। जी अस्करी जी, आपने बहुत अच्छी एनालिसिस की और जिस तरह से आपने समझाया कि जो मुस्लिम वोट है वो भी स्प्लिट हुआ है, ये एक अहम बात है जो साफ निकल कर सामने आई। जेडीयू को ऐसे भी मुस्लिम वोट करते हैं। पहले भी जेडीयू को बीजेपी को नहीं, जेडीयू को वोट करते हैं मुस्लिम्स, इसलिए कि हमेशा से जब भी जेडीयू की सरकार रही है उसमें मुस्लिम्स का प्रोटेक्शन हुआ है। बीजेपी की सरकार जहां भी रही है मुस्लिम्स के लिए नुकसान हुआ है। तो इसलिए मुस्लिम्स ने ये जानते हुए कि जेडीयू के साथ बीजेपी है, मगर इससे पहले जो भी सत्ता चलाई गई थी उसमें नीतीश जी जो है सीएम रहे हैं और उन्होंने कई ऐसे खासकर कि पसमानदा मुस्लिम थोड़ा बहुत काम किया है। इस पे सिर्फ एक प्रॉब्लम ये जरूर रही है कि बीजेपी के लोग जिस तरह से मतलब जहर घोलना चाहते हैं समाज में, वो नहीं हुआ, वो नहीं हो पाया। हम सीधे चलेंगे आलोक पांडे के पास। हमारे सहयोगी आलोक पांडे पटना में मौजूद हैं। कुछ देर पहले वो लोगों से बात कर रहे थे जो कुछ लंच कर रहे थे। आलोक, अब आप कहाँ हैं? आप किन लोगों के साथ हैं? निधि जी, मैं अभी बीजेपी ऑफिस के बाहर हूँ और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द बीजेपी ऑफिस। यहाँ पे अब काफ़ी भीड़ हो गई है, देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड ओवर हियर। अभी तो एक सेकेंड रुकिएगा, ये खत्म हो जाए फिर मैं और बोलता हूँ। ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। यही हो रहा है बीजेपी दफ्तर के बाहर बहुत देर से। काफ़ी पटाखे बज रहे हैं, काफ़ी कुछ ये जो विक्ट्री है इसका जो सेलिब्रेशन है वो अब जोर शोर से हो रहा है यहाँ पे। एंड दैट्स वाई वी आर आउटसाइड हियर एक्चुअली। हम इसीलिए हम यहाँ पे बाहर हैं। और अंदर भी अगर मैं मनोज से कहूँगा थोड़ा सा मेरे साथ अंदर भी आ जाएं, पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे लोगों से। थोड़ा सा हम अंदर भी चल लेते हैं एंड आई विल शो यू व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। तो अंदर आप दूर पे देखिए, वहाँ पे अगर मनोज आपको दिखाए, देयर इज लाइक अ वेरी विगरस डांस हैपनिंग। काफ़ी देर से वहाँ पे जोरों शोरों से विक्ट्री का सेलिब्रेशन हो रहा है। एक डीजे आए हैं जो काफ़ी तीव्र ध्वनि में फिलहाल गाने बजा रहे हैं, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। देव हैड अ वेरी मेजर विक्ट्री द एनडीए अलायंस हियर। तो ये सामने अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ इससे पहले कि बहुत तेज़ आवाज़ आने लगे। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ये दिखा दूँ, उसके बाद जैसा कि मैंने कहा लोगों से बात करूँगा। तो आगे को इस तरफ काफ़ी जोरों शोरों से जो लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा नाच गाना हो रहा है। सो आई थिंक इट्स वेल डिजर्व्ड फॉर द बीजेपी एंड द जेडीयू इन बिहार एंड ऑफ कोर्स द स्मॉलर एलाइज चिराग पासवान की पार्टी। सो आई जस्ट 2 सेकंड में मनोज से कहूँगा थोड़ा सा आपको दिखा दें, उसके बाद मैं और बोलता हूँ। सो आई जस्ट गिव यू सम साइट्स ऑफ साउंड्स हियर एंड देन आई टॉक। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? प्रसाद
जो बीजेपी सपोर्टर, बीजेपी के समर्थक हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस विक्ट्री है जो आप लोग की जीत हुई है, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल जीत होना ही था। ये तो मतलब जो है कि जो एक जंगल राज की जो बात अभी हम लोग को भी, जो नीतीश कुमार की सरकार थी, तो कहने का मतलब है कि जब उनके लोग जो एक बना रहे थे अपने आप में कि इनको अब दबा दिया जाएगा, इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है, ये वो, तो एक अंदर से डर सा हो गया था, जिसका आज जो है हम लोग को वो सफलता मिल गया। लेकिन ये कहेंगे कि ये जो डर वाली बात है, ये 20 साल पुरानी हो गई। नहीं, जो है वो आपको मानना पड़ेगा। उनका कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ना, ऐसा जो बयानबाजी किया गया, उसमें तो साफ साफ डर दिख रहा था। हमारी रात में परिवार में चर्चा हुई तो इस बात का डर हो रहा था, तो ये डर तो रहेगा। थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू मूव अ लिटिल अहेड। यहाँ पे बहुत शोर आ रहा है, so I'll just try and move a little ahead before I speak to people. But जी general atmosphere here is of festivity, निधि जी। यहाँ पे जो माहौल है वो फेस्टिविटी का है और काफ़ी लोग यहाँ पे बीजेपी के समर्थक आए हुए हैं। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, खासकर कुछ महिलाओं से, यंगर पीपल से बात करने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार हुआ। क्या करते हैं दीप जी आप? हम सरकारी शिक्षक हैं। सरकारी शिक्षक हैं, बीजेपी समर्थक भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी चीज थी इस कैंपेन में जो जनता में स्ट्राइक की और इस तरह का मैंडेट मिला है? सबसे बड़ा तो हिंदुत्व की लड़ाई थी। हिंदुत्व की लड़ाई थी। हिंदुत्व की लड़ाई थी, लेकिन बीजेपी और जेडीयू तो कह रहे हैं विकास की लड़ाई थी, जंगल राज की लड़ाई थी। लड़ाई थी, लेकिन ज्यादा जो लोगों पे इफेक्ट डाला ये हिंदुत्व पे लड़ाई कह रहे हैं। हमको एक बात बताइए, आप ही लोगों का तो सरकार 20 साल से है, हिंदुत्व को खतरा किस चीज से है? खतरा तो यहाँ जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, वो जो हमारे देश में घुसपैठिया लोग कुछ आ गए हैं, उसको खत्म करना है हमको सबसे पहले। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा आगे भविष्य में ना हो, ऐसा अटैक दुश्मनों से, उससे हमको लड़ना है, तो बीजेपी को आना बहुत जरूरी था। और आपको क्या लगता है बिहार में, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार ही रही है मोटा मोटी 20 साल से, जितना विकास हो सकता था वो हुआ है आपके हिसाब से? बिल्कुल हुआ है। दम जो एक स्तर पे एक जमाने में दम गड्ढे पे था, नीतीश कुमार ने बहुत ऊपर उठाया है। और अभी जितना दिन तक रहेंगे हमारे जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश बाबू, वो महिलाओं के लिए खास करके बहुत अच्छा करेंगे। कितना दिन रहेंगे नीतीश बाबू? आप लोग तो चाह रहे थे कि कोई और बन जाए मुख्यमंत्री, ऐसा सुने हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग सभी महिलाएं उनके साथ हैं, सब महिलाएं उनको पसंद करते हैं, बीजेपी के साथ चाहते हैं। अच्छा। और विकास के लिए बहुत जरूरी था। और देख लेते हैं 5 सालों में क्या करते हैं महिलाओं के लिए। ये तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि शास्त्री है और हम एक वोटर हैं, आम जनता हैं। तो आज वोट दिए हैं और आज मिठाई खाने और डीजे पे डांस करने आए हैं और कहने आए कि बम बम बोल रहा है काशी, माँ अन्नपूर्णा भैरव बाबा, कोई न रहा बाकी, बम बम बोल रहा है काशी। हमको ये बताइए कि बिहार आप ही लोगों की सरकार, जैसे मैं कहूँ बीजेपी जेडीयू की, आपकी नहीं कहूँगा, बीजेपी जेडीयू की सरकार रही है, आपको क्या लगता है कि जो विकास का स्तर होना चाहिए था या जो विकास की एक रफ्तार होनी चाहिए थी, वो बिहार को मिली है पिछले कुछ साल में? आम जनता होने के नाते हम हर अपने घर परिवार के सदस्यों से हर जिले में आना जाना लगा रहा है। इस सिलसिले में हम देखे हैं कि हमारे घर परिवार, जैसे नालंदा हमारा नानी घर हुआ, हमारा पटना में घर हुआ, तो हम जब आना जाना होता है तो सड़कों के माध्यम से देखते हैं कि बहुत अच्छा विकास हुआ है। स्वास्थ्य के विषय पे जाते तो कहीं कहीं थोड़ा सा त्रुटि है, शिक्षा पे भी हल्का त्रुटि है, जो इन सब विषयों पे काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर वही 20 साल के पीछे जाते हैं तो जितना बड़ा गड्ढा हो चुका था, उस गड्ढा को भरने के लिए JCB लगाया गया, जिसके माध्यम से प्लेन होते होते तो 20 साल लगा है। 20 साल में गड्ढा भरिएगा? कितना बड़ा गड्ढा था? देखिए, हमारे नेता जो बने हैं यहाँ पे एनडीए और जदयू से जो है, तो हम लोग उनका सपोर्ट करें, उनका विकास के देखते हुए। और इस बार भी दिया गया है कि अब जो सारा विकास हो गया, अब रोजगार के लिए आपको फैक्ट्री, युवाओं को रोजगार जितना ज्यादा से ज्यादा आप दे सके, क्योंकि हम लोग एनी टाइम खड़े हैं सरकार के साथ, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे दिन हो या रात हो। विकास क्योंकि हो रहा है, दिख रहा है, विजन दिखता है, तो हम लोग दौड़ते हैं पीछे पीछे। और उस विजन के साथ हम आह्वान भी करना चाहते हैं कि अब इस बार रोजगार पे इतना ही तेज गति वो दिखाएं। नहीं हुआ तो क्या करिएगा? हम लोग आम जनता है तो नहीं होगा तो क्या करेंगे? सरकार
में जो फेस होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके अंदर विजन होता है, उनके साथ जनता जाती है, ये तो सब कंफर्म है। ओके, थैंक यू सो मच। आई जस्ट मूव अ लिटिल अहेड, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेट्स सी इफ वी कैन स्पीक टू सम अदर पीपल, पर्टिकुलरली सम वुमेन इफ पॉसिबल। आई आस्क मनोज टू कम विद मी हियर। मनोज थोड़ा सा इधर आ जाइए। मैम, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका जी, ये बताइए कि आज जो आप लोग की जीत हुई है, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आप किस चीज़ को मानती हैं? विकास को, सुरक्षा को, निरंतर आबाद गति से जो बिहार में विकास हुआ है, और महिलाओं की सुरक्षा, सेफ्टी, और एनडीए का रोजगार भी। विपक्ष ये कह रहा था कि जो महिलाओं के लिए नीतीश जी ने देखिए बहुत सालों से किया है वो सबके सामने है, लेकिन जो 10,000 रुपए जो नीतीश ने अनाउंस किया चुनाव से पहले, इट वाज लाइक मतलब विपक्ष का ये आरोप था कि वो वोट खरीदने की एक चाल थी। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ये एकदम आरोप निराधार है। नीतीश जी लगातार महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि बिहार में रेलवे में जितनी महिलाएं लोको पायलट हैं, रेल चला रही हैं, अभी मेट्रो में भी सारी महिलाओं का भर्ती हुआ है। उसके अलावा सारे जगह पे महिलाएं काम कर रही हैं, गाँव से लेके, जीविका दीदी से लेके, और स्वयं सहायता समूह से लेके। और अभी आपको कल का हम बात बता रहे हैं, हमारी जो जमुई की विधायक हैं और वर्तमान प्रत्याशी श्रेयसी सिंह, उनको आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे कितनी भद्दी धमकी और गाली दी गई है। अभी उनकी सरकार नहीं आई थी तब ये हाल है। अगर आ जाती तो जब विधायक के साथ ऐसे हो सकता है, तो हम लोग आम महिलाओं का क्या होता है? इसीलिए महिलाओं ने अपने सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए एनडीए को वोट दिया है। मैम, आपका नाम क्या है? अगर आप आगे आ जाएं तो आपसे ही बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा आगे आइए आप जी, यहाँ आ जाइए। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? समिता पांडे। ये बताइए कि आपके हिसाब से क्या ये महिलाओं का वोट था, जो भारी संख्या में महिलाएं निकल के आई, उसका फायदा आपके गठबंधन को मिला या कोई और फैक्टर था? नहीं, ये पूरा ओवरऑल विकास का ही मुद्दा, विकास को ही लेके आए हैं। और मोदी जी, आप केंद्र से लेके आप देख रहे हैं, कुछ भी इसके अलावा, विकास के अलावा कुछ भी नहीं है। समझिए कि जो सारा पब्लिक जो है, आम जनता है, उसको आप ये जो वोट चोरी वगैरह का लगा रहे हैं, आप खरीद नहीं सकते हैं, है ना? विपक्ष तो ये भी कहेगा कि आप लोग भी वोट खरीद रहे थे 10,000 रुपए देके। सुनिए ना, वो बोलेंगे, अब आरोप लगाएंगे, उसका क्या करेंगे आप? लेकिन आप काम अच्छा करेंगे तो आपको जनता चाहेगी। आप, है ना, आप आज पर्टिकुलरली लीजिए कि आप एज ए पर्सन कुछ अच्छा करेंगे तभी आपको लोग चाहेंगे। तो बीजेपी अच्छा कर रही है, तो उसी के आधार पे उनको वोट मिला है, और बाकी बात बोलने के लिए क्या करें। आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम उषा हुआ। उषा जी, ये बताएं कि विकास, ऐसा लोग कह रहे हैं विकास के नाम पे वोट दिया है। अगर विकास के नाम पे वोट हुआ है, मैं एक सवाल से आपसे जानना चाहता हूँ, तो 20 साल से तो यही सरकार है, तो बिहार एकदम आगे क्यों नहीं है, अग्रिम श्रेणी में क्यों नहीं आता है, अभी भी पिछड़े राज्यों में क्यों आता है? बिहार आगे नहीं है तो पीछे भी नहीं है सर। बैलेंसिंग पीछे की सरकार ने इतना ना गंदा कर रखा था। तो 20 साल 25 साल पहले की बात हो गई मैम। नीतीश जी तो 20 साल से हैं। 20 साल से हैं सर। धीरे धीरे विकास हो रहा है और होगा, उम्मीद है। जनता, हम लोग जब भी वोट करते हैं, इसी सुरक्षा की गारंटी है। क्योंकि आज हम यहाँ हैं तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार के कारण ही है, क्योंकि हमें घर से बाहर उन्होंने निकाला है, और वर्क प्लेस हो या कहीं भी हो, सुरक्षा की गारंटी देता है कि हम सुरक्षित घर जा सकते हैं शाम में, इसीलिए पेरेंट्स भी बाहर जाने देते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहेंगी कि अब जो आपकी सरकार बनेगी, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहती हैं उस पर ज़्यादा फोकस हो या ज़्यादा काम हो? बिल्कुल, और ये पलायन रुके, नौकरी दी जा, बेरोजगारी दूर की जाए, यही। आपको लगता है इसका ब्लूप्रिंट है आपकी सरकार के पास, बीजेपी और जेडीयू के पास? इसका ब्लूप्रिंट है बीजेपी और जेडीयू के पास, आपको लगता है? क्यों नहीं, सरकार चाहे तो कर सकती है, हर चीज कर सकती है। क्योंकि इतनी बड़ी खाई थी, उसको तो सरकार ने ही पाटा है। जो महिलाएं घर में शाम को सूरज अस्त होने के बाद हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, आज बाहर निकल रहे हैं, तो इसी सरकार ने किया है, और उम्मीद है आगे और करेगी हमारे लिए। मैम, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? आगे आ जाइए। सर, शुभांगी पांडे सर। कैन यू कम हियर? आप यहाँ आ सकती हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड दिस विक्ट्री? It is the change. It is the work which make it change, and they work for us. Finally, a party came who wants to give a central fund, sir. It's the basic theory in constitution. If the main party who is in central, they are serving in state, now we are going to growth.
Now Bihar getting its growth and time of change finally. Coming year, Bihar will see the coming change for the face. It's a best jeet for the youth, and as being a younger person, and the BJP will give us. May I just ask one thing, ma'am? I was posted in Bihar in 2009. Then I was posted again in 2013. I heard the same thing. कि गड्ढा था, गड्ढे को भर रहे हैं. अब विकास करना है. अब चेंज की दरकार है. We need change. So and but how long will this go on? I mean, we still see that Bihar is one of India's poorest states. Per capita income बहुत कम है आप लोगों की. तो ऐसी स्थिति क्यों है अगर बीजेपी और नीतीश जी 20 साल से सरकार में रहे हैं? जी बिल्कुल. अभी 2 चक्के की सरकार थी. आज का प्रदर्शन देख रहे हैं. As you are seeing, Adani's are invested in Bihar. New companies are invested in Bihar. सिर्फ पब्लिकली बोलना कि बिहार में प्रगति है और बिहार में प्रगति करने वाली पार्टी का आना जरूरी था. हम पूर्ण बहुमत में नहीं थे. ये जो भी सरकारें थी, जो 2009 में थी, 2005 में थी, 99 में थी और कब से थी, हम उनके साथ मजबूरी में थे. लेकिन इस बार हमारी प्रदर्शन ने दिखा दिया कि हमने जो सेंट्रल में काम किया, जो हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, वही उस लेवल की बिहार में काम होगी. तो जो आपने 2009 में देखा, 13 में देखा, वो 26, 28, 30 में नहीं देखने वाले हैं. बिहार इज टेकिंग द चेंज इन वेरी फॉरवर्ड मोशन. अमृत भारत की स्पीड में चेंज होगा. आप बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा मजबूत बता रही है मतलब? बिल्कुल है सर. हमारी केंद्र की पार्टी है. जदयू फंड ला पाई, जदयू विशेष राज्य का दर्जा दिला पाई. तो कैसे हम जदयू को बोल रहे हैं? हम तो मिलजुल के उसी के साथ सरकार चला रहे थे. उनका सहयोग था. लेकिन अब हम पूर्ण बहुमत में काम करेंगे तो फिर अलग ही नजारा होगा. मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे. इट इज अनप्रेडिक्टेबल. अब तो कुछ दिन का वेट है. अब आपको तो मीडिया पे दिख ही जाएगा. इट्स आई एम नो वन टू प्रेडिक्ट इट. नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस. इट इज द गेम नाउ. मैं अभी यहाँ डिस्क्लोज कर दूं. जस्ट वेट एंड वॉच. आप लोग डिस्क्लेमर में दिखा दीजिएगा अब चैनल में. Thank you so much. Thank you. So, an interesting perspective from all of these ladies. I'll just come back to you, ma'am. I'll just come back to you. So, I think a very interesting perspective from all of these ladies here, especially the one who said that उनको ये लगता है कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बनेंगे. 100% नहीं है, बट जो नेता हैं वो इस तरह के दावा नहीं कर रहे हैं. जो नेता हैं वो डेफिनेटली यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार शायद मुख्यमंत्री बने. I'll just go across and try and show you some more sights and sounds as we speak. यहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा है. So I'm just trying to go a little outside and then मैं probably फिर से वापस आ जाऊँगा. मैं मनोज से कहूँगा कि थोड़ा सा मेरे साथ आगे चलें और आपको बाहर का भी माहौल दिखा दें. बाहर भी काफ़ी भीड़ होते जा रही है. Lot of people coming in, a lot of people जो दूसरे जिलों में हैं जिनके रिजल्ट अब शायद डिक्लेयर हुए हैं, वो लोग भी आ रहे हैं. और उसी तरह से जैसे कि मैंने कहा, भीड़ काफ़ी होती जा रही है और काफ़ी नेता लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी जो लोग जीत गए हैं. सर, आप एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आप लोगों की विक्ट्री हुई है, इसमें सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा फैक्टर आप क्या मानते हैं? देखिए, ये जीत, लोकतंत्र देश का काफ़ी परिपक्व हो गया है और वोट होगा काम का. इस देश के प्रधानमंत्री, मैं कहूँ विश्व के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में एनडीए के नेता मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने काम किया है. धरती पर दिख रहा है काम. अब लफा सोटी से काम चलने वाला नहीं है. काम का वोट होने वाला है. इसलिए चूंकि ये 75 साल हम क्रॉस कर गए, हमारा मैच्योर्ड है लोकतंत्र, निश्चित इस बार काम का वोट हुआ है. नरेंद्र मोदी और नेतृत्व के नीति और नियत का वोट हुआ है. आपके हिसाब से नीतीश जी अगले 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री तो नीतीश जी रहे हैं आगे रहेंगे. Thank you so much. So there you have it, more perspective here from other politicians, winning candidates who are all coming in after their victories in their respective constituencies. तो इसी तरह का माहौल है. मैं आपको और भी थोड़ा बहुत दिखाना चाहता हूँ. मैं चाह रहा था कि मैं उस तरफ चला जाऊँ जहाँ चाय की दुकान है, लेकिन अभी इतनी भीड़ है, मुझे लगता है पॉसिबल नहीं होगा. बट आप देख सकते हैं बहुत लोग आ रहे हैं. आपका नाम क्या है सर? माही पासवान. कहाँ से आए हैं पासवान जी? फुलवारी विधानसभा जगनपुरा से. कहाँ से? फुलवारी विधानसभा जगनपुरा. अच्छा, ये अपना फुलवारी से आए हैं. ये बताइए कि आप लोग का जो जीत हुआ है, इसमें आपके हिसाब से सबसे बड़ा चीज किस चीज को लेके जीत हुआ है? देखिए, हम लोग का विकास का शुरू से नीतीश कुमार का काल में विकास पर वोट मिला है. हमारे माँ बहनों जो है छूट के इस बार हर बार 5 साल पर हर बार इस बार महिला लोग वोट दिए हैं. उसी की जीत है. पहले जनता की जीत, तब हमारी जीत है. या जदयू रहे या बीजेपी रहे, पहले हमारा जनता की जीत है, तब हमारी पार्टी की जीत है. हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगे, विकास के नाम पर वोट हमको मिला है. इस पक्ष ये कह रहा था कि महिला विकास के नाम पे
10,000 रुपए देना एक तरह से वोट को अपनी तरफ लुभाने वाली बात है। नहीं, उनको तो विवाद कहना है, उनका कहने दीजिए ना। हमको जो महिला के जो अमान सम्मान दिए हैं, जो रात में 6 बजे से लेके 5 बजे से लेके 10 बजे रात के अभी जहानाबाद गया अरवल चल जाते हैं, उनको जीवन में हम जा नहीं सकते थे। फिर उसी जंगल राज के प्रभाव पड़ता, फिर उसी जगह पर जाते हैं। जो हमको पटना से निकल के जहानाबाद जाना था तो हम नहीं जाते हैं, फिर हुए रह जाते हैं। इसके चलते बोले पासवान जी, यही बात हम 2009 में भी सुन रहे थे, हम यहाँ पोस्टेड थे उस टाइम। यही बात 2013 में भी सुनते थे, यही बात अभी भी सुन रहे हैं। जंगल राज को तो बहुत दिन हो गया जी। प्रभाव तो बढ़ेगा ना। अगर मान लिया कि अभी हमको जाना है जहानाबाद, अगर हम जहानाबाद जाते जहानाबाद पहुंच में अभी नीतीश कुमार के काल में हम जहानाबाद के अरवल गया चल जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं। एकदम पहले नहीं जा सकते थे, 10 साल पहले भी तो जा सकते। 10 साल पहले नहीं जा सकते थे, नहीं जा सकते। नहीं, उसी का परिणाम आज मिला है हमको। उसी का परिणाम मिला है आज। हाँ, थैंक यू पासवान जी। So there you have it, another very interesting perspective here. I'll just go inside again. I'll just ask Manoj to come with me inside while we try and get you more sights and sounds of this election that the BJP and the JDU have won very handsomely. Again, if you see a lot of crowd to this side also, that's where all the senior leaders are. To that side is where all the senior leaders of the BJP are. I saw Samrat Chaudhary of the BJP also come in a while ago. I also saw some other leaders come in a while ago. So I'm just going to go a little to that side and try and see if I can speak to a few people. What's your name? आपका नाम क्या है? I'm Manish Pandey. Where are you from? Are you from Patna? Basically I'm from Buxar, but I'm currently residing in Patna. I'm working for the Bharatiya Janata Party. Tell me something. What is the biggest factor? I've been asking everyone the same thing. What is the biggest factor according to you in this election that's given you this victory? The biggest factor is popularity of Prime Minister Modi ji, the developmental politics which we are doing in Bihar, and the factor that the acceptance of Nitish Kumar ji is also very high in Bihar. And if you add each and every factor, it will count on votes. Basically, we have done so many things and so many schemes for our women. The women-led development in Bihar is also a key and driving factor in Bihar. And whatever the key aspects of voting were included in our policies, and the policies were very fertile and they produced votes. In your assessment, is this Nitish ji's victory or is this the Prime Minister's victory? This is a very, you can say, hypothetical question, but we can go by the name of Modi ji, because we are working for Modi ji. Modi ji are factor. He is the most popular leader currently in the world, and we are working from him. So basically, we can accept the fact that whatever votes we have garnished or whatever popularity we have garnished is by the name of PM Modi ji, and his acceptance is so much high into the weaker sections of the society and amongst the masses. So he is the most massy and most vote garnishing man in India currently. There is no. Okay. In your assessment, should Nitish Kumar remain the Chief Minister for the next 5 years? You are the single largest party. Basically, we are just karyakartas. Our party is the deciding factor. Our leadership is the deciding factor. They have accepting the leadership of Nitish Kumar. So I'll not go by any name. Whatever party decides, he will be the CM, and whatever party decides, we will abide by this. Thank you so much. आपका नाम क्या है? What's your name? आपका नाम क्या है? विकास आनंद। विकास, आप ये बताइए, आपके हिसाब से ये जो विकास डेवलपमेंट का पिच था, आप ही के नाम का जो पिच था, वो आपके लिए काम कर गया अच्छे तरीके से, आपको लगता है? हम लोगों ने हमेशा जो बोला है, जो कहा है, वो किया है, और जनता उसी के भरोसे हम लोग के ऊपर वोट की है। हम लोगों ने राम मंदिर बोला, किया, 370 बोला, किया, बिहार में जो भी कमिटमेंट आज तक किया, चाहे वो नीतीश जी हो या हम लोग, मतलब एनडीए एकजुट होकर के बिहार के लिए काम की है। तो याद है, लेकिन बहुत साल पहले, आज से 4-5 साल पहले, नीतीश जी स्पेशल स्टेटस की मांग करते थे और आप लोग देते नहीं थे। स्पेशल, देखिए, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया के लिए जिस चीज़ का जो चाहिए था, वो क्राइटेरिया बिहार के पास है नहीं। समुद्र होना चाहिए, पानी का रास्ता नहीं है। रेलवेज का स्ट्रेंथन किया गया है, रेलवे अब बहुत हद तक ठीक हो चुकी है। सड़क मार्ग जो एक एक्सप्रेसवे होना चाहिए, वो अब जाकर के तैयार हो रही है। तो में भी हो सकता है कि अब अगर जरूरत हो तो इस सरकार में हम लोग उसको भी पूरा करें। विकास, आगे के 5 सालों में आपके हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए क्या है? क्या ऐसा एक काम है जो वॉर फुटिंग पे होना चाहिए आपके हिसाब से? यू आर ए यंग पर्सन।
देखिए, पहले हम लोग चुनाव लड़ते थे, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सारा चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बस उसको ग्राउंड लेवल पे अब लाना है, वो हम लोग लाएंगे और बिहार को आगे लेकर के जाएंगे। बट इन योर ओपिनियन विकास, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। 20 साल से यू बीन इन पावर, नीतीश जी और आप एक साथ ही रहे मोटा मोटी देखा जाए तो, बट हैज दैट नॉट बीन एनफ? बिजली सड़क पानी की बात हम कर ही क्यों रहे हैं अब? The coming 5 years, we are going to industrialize Bihar, and industrial revolution is going to be a very key thing. And this is our priority in the coming 5 years, and we will achieve those things. Actually, we have also opened so many engineering colleges, the management colleges, and we have been able to set up the industrial sector in each and every district. बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। ऐसे में बिहार की जनता ने एक मजबूत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार हमारे एनडीए के गठबंधन पर जताने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस एक जवाब ने कई सवालों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया। पर मैं मानता हूं कि अब यहीं से जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, तो ये कतई संभव मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिना नहीं हो सकता था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले साल सवा साल में जब से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से उन्होंने निरंतरता में बिहार आकर बिहारियों को प्राथमिकता में रखकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो नरेंद्र और नीतीश इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है, और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे गठबंधन की ताकत है। शुरू से मैंने कहा था कि पांचों दलों का ये गठबंधन एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, एक विनिंग अलायंस है। मैंने ये भी कहा था कि 2020 में भी अगर हम लोग एकजुट होते, अगर ये यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी होता तो भी हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते। पर आज एक तरफ जहां यूनाइटेड एनडीए की ताकत देखने को मिली, तो वहीं राजद जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था, और अहंकार की परिकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं तो परिणाम यही होता है। ऐसे में जो लोग समझ रहे थे इतने समय से कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई मुझ पे ये इल्जाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें ऑन रिकॉर्ड, आई हैव सेड दिस, कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती, और आज कमोवेश वही परिणाम देखने को मिले हैं। तो जहां जंगल राज वालों को आज पता चला कि बिहार की जनता में वो कहां
खड़े होते हैं, तो वहीं बिहार की जनता ने जिस तरीके से एनडीए और तमाम हमारे प्रत्याशियों को सराखों पे उठाने का काम किया, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं और एनडीए के तमाम घटक दल जिस एकजुटता के साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। ये एकता की ताकत को बिहार की जनता ने सराखों पे बिठाने का काम किया। मुख्यमंत्री कई लोग आपको अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि 10 सीट लेंगे चिराग तो काफी होगा। देखिए, जो लोग मुझे और मेरी पार्टी को, और मैंने हमेशा इस बात को सहज स्वीकार किया है कि मुझे कई बार ना एग्जिट पोल में मुझे ज़्यादा दिखाया जाता है, और ये मेरा 2014 का से मेरा अनुभव है। 14 में जब 6 सीटें जीते तब भी मुझे 2 दिखाई जा रही थी, 19 में जब 6 की 6 जीते तब भी 2 दिखाई जा रही थी, और 24 में जब 5 की 5 जीता तब भी मात्र 1 सीट दिखाई जा रही थी। तो ऐसे में इस बार भी बिना एग्जिट पोल पे कोई भी उंगली उठाए हुए, क्योंकि वो अपना सर्वे करते हैं, बट मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है, ना किसी के सर्वे पर। मैं शुरू से कॉन्फिडेंट था कि हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मैंने स्ट्राइक रेट को लेकर भी काफ़ी ताने सुने हैं, बट गठबंधन का स्ट्राइक रेट खूबसूरत रहा है, ये भी मेरा विश्वास डे 1 से रहा था। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कम आंकने की गलती की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको जवाब जनता ने दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। विपक्ष की करारी हार का कारण उनका अहंकार है, और हम लोगों की प्रचंड जीत का कारण डबल इंजन की सरकार पर, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार जिसका मजबूती से समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच कर रहा है, एनडीए के तमाम घटक दल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन की एकता पे बिहार की जनता का विश्वास और महागठबंधन का अहंकार उनको ले डूबा है, और हमारा विश्वास ने हमें जीत दिलाई। क्या कोई डिप्टी सीएम होने वाला है? डिप्टी सीएम की मांग करेंगे आप? ये सारी बातें मैं पुनः कहूंगा। मैंने हमेशा गठबंधन की मर्यादाओं का पालन किया है, और मैंने हमेशा कहा था कि जब सही समय आएगा ये बातें हम लोग गठबंधन के मंच पर रखेंगे। मैं मानता हूं कि आज रात से लेकर कल दिन भर तक कई राउंड्स ऑफ मीटिंग, अलग अलग चीज़ों को, सरकार कैसे बनेगी, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, सरकार में किस दल की क्या भूमिका होगी, इन तमाम बातों पर विस्तार में चर्चा की जाएगी। फिलहाल समय सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने का है, अपने प्रत्याशियों का जो विधायक बन गए हैं उनका मुंह मीठा कराने का। चिराग जी, आपके प्रदेश में राहुल गांधी यहाँ आए, वोट अधिकार यात्रा की, वोट चोरी का आरोप आरजेडी और कांग्रेस ने भी लगाया। एसआईआर के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव था। वो जो आरोप लगाते थे, अब नतीजे सामने हैं, उन तमाम आरोपों पे क्या कहेंगे अब नतीजों? मुझे लगता है इस एक जीत ने तमाम उन सवालों पर भी पूर्ण विराम लगाने का काम किया जो भ्रम विपक्ष ने फैलाने का प्रयास किया। भले वो एसआईआर का मुद्दा हो, वोट चोरी की बातें, और मैंने बार बार कहा था कि राहुल जी ने जब जब मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप किया है, चौकीदार चोर है इससे पहले कहना, अब वोट चोरी की बातें करना, जिस तरीके से उनकी मां को लेकर उनको व्यक्तिगत तौर पर कि मंच पर नाचने लग जाएंगे, ये सारी बातें बिहारी संस्कारों के लिए भी जाने जाते हैं। शायद राहुल जी, कांग्रेस ये समझ ही नहीं पाई कि जितनी वो अमर्यादित बातें कहते हैं उतना ही सेल्फ गोल वो करने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने पूरी मर्यादा के साथ सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। गठबंधन ने पूरी जिम्मेदारी निभाई। आई कांट थैंक मेरी पार्टी के नेताओं को मैं जितना धन्यवाद दूं, जिस तरीके से हमारे तमाम प्रत्याशियों ने अपना। तो चिराग पासवान हम उनको सुन रहे थे, एलजेपी के प्रमुख, इस बार 29 सीटों पर लड़े और 19 सीटों पर ये आगे चल रहे हैं। अगर हम वो टैली हमारे सामने नजर आ रही है किस तरह से बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी, 92 सीटों पर आगे चल रही है, जीत है। जेडीयू 101 सीटों पर लड़ी, 82 सीटों पर है। लोक जनशक्ति पार्टी 29 पर, हम 6 सीटों पर और 5 पे जीत रही है। और आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो ये पार्टी है, इसको भी 6 सीटें मिली थी और ये 4 पर। इस तरह से ये जो अप्रत्याशित जीत मिली है, इसका श्रेय अभी हम सुन रहे थे रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को, और वो कह रहे थे
जो ये गठबंधन बिखरा नहीं, उसका ये श्रेय उसको दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को वो श्रेय दे रहे थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वो बात इस समय कर रहे थे। और 2020 पर जब वो अलग होकर लड़े थे और किस तरह से एक आंकलन में कहा गया था कि उसका खमियाजा नीतीश कुमार की जेडीयू को भुगतना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि वो बिखराव का नतीजा था, उनके अलग होने का नहीं। बहरहाल तमाम चीज़ें उन्होंने कही और विपक्ष के नकारात्मक जो प्रचार है उसकी बात उन्होंने सामने रखी और जिस तरह से एकजुट होकर एनडीए लड़ा उसका तमाम श्रेय उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उनका पूरी तरह से मानना है। तो बहुत दिलचस्प और अहम दिन रहा आज बिहार में, जिस तरह से 2025 के विधानसभा चुनाव रहे। और आइए हम आगे शाम में आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ सोनाली आनंद मौजूद हैं, जनस्वराज पार्टी की, अच्छा वो नहीं हैं, अस्करी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर आप बने हुए हैं, पाटिल साहब बहुत बहुत आप तो बने ही हुए हैं हमारे साथ। तो अस्करी जी, अगर मैं आपसे पूछूं इस समय जिस तरह से चिराग ने पूरा एनालिसिस किया, आंकलन किया, उन्होंने कहा कि गठबंधन एकजुट रहा और जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ और विजयी हासिल हो रही है इधर, क्या आपका आंकलन चिराग का जो स्टैंड इस समय हम देख रहे हैं उसको लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए, अगर आप एनडीए की मोडस ऑपरेंडाई, स्पेशली बीजेपी की मोडस ऑपरेंडाई देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि बीजेपी वो पार्टी है जो धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रेंथन करती है और उन्हें इस बात से कोई परहेज नहीं है कि वो 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, बट उनका जो एम होता है वो ये है कंप्लीट कैप्चर ऑफ पावर। तो अगर मैं कहूं कि जो चिराग पासवान जी कह रहे थे वो कुछ अच्छाई गिना रहे थे। वो कह रहे थे कि कैंपेन बस पॉजिटिव, चुपचाप शांति से हमने काम किया, मैसेजिंग अच्छी थी, डेवलपमेंट हमने किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। और मैं सुन रहा था लोग भी ये कह रहे हैं कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट मुझे ये लगता है कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़्यादा है रादर देन द ट्रूथ और द रियलिटी। एनडीए में जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, स्पेशली बीजेपी, वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि वो बूथ पर लड़े। वो ये इंश्योर करते हैं कि हर एक पन्ने का जो इलेक्टोरल रोल होता है उसका एक प्रभारी हो। वो कॉल करता है, वो मोबिलाइज करता है, वो वोटर को लेकर के आता है। जहां तक अलायंस सिनर्जी की बात है, एलजेपी यहां पर इनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, बट ये कह देना कि ये अपने आप में अच्छा कर सकते हैं, अकेले लड़के अच्छा कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जो अगर हम देखें जो सर्वेज हुए और जो देख रहे थे पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा है, तो उसमें पॉपुलैरिटी चिराग की थी बट कुछ कम थी, सबसे ज्यादा तेजस्वी की थी। तो और जब हम देखते हैं कि इन्होंने परफॉर्म 2020 में कैसे किया था, तो 2020 में ये मात्र एक सीट लेकर के आए थे। इन्होंने जेडीयू की बहुत सारी सीट्स बर्बाद की थी, वोट काटा था इन्होंने। इनका वोट शेयर लगभग 5% के आसपास था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि इनका वोट शेयर क्या है। अगर इनके क्लेम को हम कहते हैं कि ये सही है, और क्या वो इंडिपेंडेंट वोट शेयर, क्योंकि फील्ड पर यह भी बात चल रही थी कि शायद जेडीयू एलजेपी में कुछ टकराव हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज एक कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट का रिजल्ट है, जहां पर अलायंस पार्टनर्स अच्छे से आकर करके इलेक्शन लड़े साथ में। ये बात जरूर सही उन्होंने कही है कि पब्लिक के ऊपर नेगेटिव कैंपेन्स का कैसा फर्क पड़ता है या असर पड़ता है। मेरे अपने अनुभव में, जहां मैं 6-7 स्टेट्स में काम, या 7-8 ज्यादा ही स्टेट्स में मैंने काम किया, वहां पर मैंने हमेशा देखा है कि जहां पर भी कैंपेन नेगेटिव होता है वो हमेशा बैकफायर करता है। तो कैंपेन पॉजिटिव हो उसकी हमेशा कोशिश करनी चाहिए। बट अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो अपना कैंपेन लॉन्च किया, उन्होंने लॉन्च किया
कि वोट चोरी का मामला है। उन्होंने प्रेजेंटेशंस भी दे दी और दिखाया कि कैसे डुप्लीकेशन ऑफ वोट्स है, कैसे ज्यादा वोट्स पड़ रहे हैं, गलत वोट्स पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, बट क्वेश्चन ये कि क्या ये नेगेटिव कैंपेन है या ये एक इम्पॉर्टेंट इशू को रेज किया गया जिसमें कांग्रेस बिलीव करती है। और साथ में ही मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर कांग्रेस इस चीज को बिलीव करती है कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट हो रहा है वोट्स को लेकर करके, इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज्ड है, ईवीएम्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो फिर ये इलेक्शंस आ करके लड़ते क्यों? एक तरफ ये कहते हैं कि भाई ये सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड है बट हम कंटेस्ट करेंगे, और जब हम कंटेस्ट करेंगे अगर हम जीत जाते हैं तो वेरी वेल एंड गुड, वी हैव डन अ वंडरफुल जॉब, बट इफ वी लूज देन इसमें तो कुछ सस्पिशियस है। तो या तो कांग्रेस बॉयकॉट करे या फिर कांग्रेस कॉन्सेंट्रेट करे कि वो, जैसे वो कहते हैं ना कि हम लीडर के कहने पर इलेक्शन लड़ते हैं, लीडर हमारा पॉपुलर होता है, वेव इलेक्शन हो जाता है, हम बूथ पर नहीं काम करते, या फिर वो ये काम करे या फिर वो इलेक्शन ही ना लड़े, इज व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल। और आपके एनालिसिस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है, तो मैं आइए पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। ये प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए एक नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अथक परिश्रम किया है। उन्होंने जनता के बीच जाकर हमारे विकास के एजेंडे को सामने रखा और विपक्ष के हर झूठ का मजबूती से जवाब दिया। मैं उनके हृदय से सराहना करता हूं। एक और ट्वीट है, उसी में प्रधानमंत्री ने लिखा है, आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये लंबा सा ट्वीट है, 3 चरणों में हम देख सकते हैं आया है, और उन्होंने इसे शासन की जीत, अच्छे शासन की जीत बताया है, विकास की जीत बताया है, और युवाओं और महिलाओं के लिए ख़ास तौर से उन्होंने कहा है कि उनके लिए मार्ग आगे का अग्रसर करेंगे, उनके विकास का, और ये और तमाम कार्यकर्ताओं का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। तो साथ ही हमारे साथ सोनल आनंद बनी हुई है जन स्वराज की। सोनल, अच्छा सोनल नहीं है तो यहाँ पर ताबिश मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, जिस तरह से अभी कैसर जी भी कह रहे थे, उनका भी ये आकलन था कि जो कांग्रेस की जो प्रचार होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव तर्ज पर होता है। जी का भी अभी जब वो आकलन कर रहे थे इससे पहले, अच्छा। तो उनका ये कहना था कि जो कांग्रेस है उसका जो प्रचार नेगेटिव टोन पे होता है उससे वो सामंजस्य जनता के साथ बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर आपको लगता ही है कि भाई सब कुछ गलत हो रहा है, ये वोट चोरी हो रही है, ये हो रही है, तो अब चुनाव भी तो लड़ ही रहे हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए, जनता के हम लोग कभी भी निगेटिव, कांग्रेस पर निगेटिव प्रचार नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा से पॉजिटिव प्रचार, अवेयरनेस देती है कि भाई अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई जैसे वोट चोरी का है तो वोट चोरी आखिर क्यों हुआ। एक एक वोटर्स के लिस्ट में एक वोटर्स के कई जगह पे नाम आ रहे, 10-10, 12 जगह पे ना आ रहे, कोई बाहर से मैनेज के, एक घर में लोग 200-250 लोग रह रहे, तो ये इन्फॉर्मेशन फॉर द पब्लिक है। अगर इसको आप निगेटिव वर्ड लें तो गलत है। पब्लिक को इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? इस पे मंथन करने की जरूरत है, अप्रोच, आपको अप्रोच में मंथन करना होगा। दीप्तिमान तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार इंडियन एक्सप्रेस के। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्तिमान। आपसे पहले आपका आंकलन, आप तो ट्रैवल भी किए होंगे बिहार में, आज जो नतीजे, अप्रत्याशित जीत मिली है एनडीए को, इस गठबंधन को, आपका आंकलन? देखिए, ये नीतीश कुमार की लीडरशिप पे पब्लिक ने कॉन्फिडेंस जो है वो जाहिर किया है, ये तो बड़ा ही क्लियर है। दूसरा क्या है कि पिछले 6 महीने में जो स्कीम्स जो हैं वो सरकार ने रोल आउट की हैं, जिसमें कि विमेन वोटर्स के खाते में डायरेक्टली जो है वो 10,000 रुपए गए हैं,
फिर उसके बाद 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है, 1 करोड़ जॉब्स देने का वायदा किया गया है, और भी कई सारे पैकेज और स्कीम्स जो हैं वो अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में एनडीए की तरफ से रोल आउट किए गए हैं। लगभग अगर हम देखें तो जितने भी प्रोमिसेस और वायदे महागठबंधन कर रही थी, उन सारे पे या कम से कम ज्यादातर पे एनडीए ने डिलीवरी शुरू कर दी। इवन बिफोर उन्होंने पेंशन की बात की तो इन्होंने पेंशन बढ़ा दिया 1100, वो महिला को 2500 रुपए देने की बात कर रहे थे, इन्होंने 10,000 उनके अकाउंट में डाल दिया। जॉब्स की बात उन्होंने की तो इन्होंने अनाउंस किया कि हम 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा हुआ कि महागठबंधन के तर्कश में जो तीर थे वो सारे तीर जो है वो एनडीए ने निकाल के चला दिए, जिससे ये हुआ कि पब्लिक had to make a choice between promise and delivery, and they went for delivery. It's as simple as that. Along with that, you know, the Mahagठबंधन has a credibility crisis, और वो credibility crisis ये है कि जब मतदाता ये सोचता है कि उसे किसे वोट करना है, और अगर वो मौजूदा सरकार से नाराज है, खफा है, तो वो ये देखता है कि जिन जिन चीजों से मैं खफा हूं उनको पूरा करने के लिए बाकी कोई पार्टी यहाँ पे है क्या जो कि उसको पूरा कर सकती है। अगर उसे लगता है कि नहीं, बाकी जो पार्टियां मैदान में हैं वो शायद इससे भी खराब हैं, वो शायद ये ना कर पाए, तो वो घूम फिर के मन महसूस के वो कहता है कि जहां हम बैठे हैं वो ठीक है, अभी इससे काम चलाते हैं, आगे कोई ऑल्टरनेटिव आएगा तो फिर उसे देखेंगे। और कई मायनों में कोई विकल्प न होना ये भी एनडीए के मतलब एनडीए के पक्ष में गया है, क्योंकि अभी तक जो जंगल राज का जो तमगा जो आरजेडी के ऊपर लगा हुआ है वो पब्लिक की मेमोरी से अभी तक गया नहीं है, और इसको बीजेपी ने भी और जेडीयू ने भी काफी भुनाया इस इलेक्शन में, और बार बार जो है अपने कैंपेन्स में जंगल राज की बात करते रहे कि भाई अगर हम नहीं आएंगे तो सोचो क्या होगा, तुम 5 बजे के बाद अपने घर से निकल नहीं पाओगे, तो किडनैप हो जाओगे, तो चारों तरफ अराजकता होगी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुदृढ़ होगा, थाने में सुनवाई नहीं होगी, और एक भय है जो खास करके जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट होते हैं या नॉन यादव ओबीसी कास्ट होते हैं उनमें बिहार में आप अगर घूमेंगे तो, और हम भी जब घूम रहे थे तो काफी जमीनी स्तर पे हमें ये सुनने को मिला कि उन्हें यादव राज का भय होता है कि एक यादव पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो हमने वो समय देखा है कि क्या हुआ था, कहीं फिर से वो समय वापस ना आ जाए जिसमें कि एक जमीनी स्तर पे गांव के लेवल पे जो है वो यादव एक डोमिनेंट कास्ट हैं और असर्टिव ज्यादा हो जाते हैं जब उनकी पार्टी पावर में होती है। ये हम यूपी में भी देखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब ऐसा माहौल बनता है कि एक ऑल्टरनेटिव तैयार हो रहा है तो एक रिवर्स कंसोलिडेशन होता है नॉन यादव ओबीसी और ईबीसीज में, वो भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत अहम पॉइंट्स आपने दीप्तिमान बताए, किस तरह से विश्वास जो नीतीश कुमार पर है 6 महीने में, लगातार 6 महीने से किस तरह से योजनाओं का जो आ रही थी और जो वादे कर रहे हैं, और यहाँ पे तो वो जारी कर रहे थे, प्रॉमिस एक तरह कर रहा था महागठबंधन, तो एनडीए तो डिलीवरी करनी शुरू कर दी। वही और क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, विकल्प ना होना। आपने जो ये जंगल राज की बात भी की और रिवर्स कंसोलिडेशन की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है ये आंकलन। दीप्यमान, अगर अभी हम इस समय से आगे का देखें, लेकिन क्योंकि लोगों की अब दिलचस्पी ये रहेगी कि सरकार जो एनडीए की बनेगी, जिस तरह से मजबूत प्रदर्शन रहा है जेडीयू और एनडीए का, सीएम के नाम पर हम सुन रहे थे, हमारे सहयोगी आलोक पांडे बीजेपी के दफ्तर में वहाँ पर पटना में गए और वहाँ पर जश्न बनाया जा रहा है। तो जो मैं एक महिला को सुन पाई वो तो कह रही थी अनप्रेडिक्टेबल है, देखते हैं कैसे पत्ते खोलें, लेकिन जो एक नेता है, 1-2 नेता है, उन्होंने कहा नहीं, नीतीश कुमार को इतना प्यार और इतना स्नेह और इतना सम्मान, वही बनेंगे। आपका क्या आंकलन आभास है, क्या कोई रिस्क लिया जा सकता है या नीतीश कुमार ही आएंगे, वही सीएम बनेंगे?
देखिए, नेचुरल है कि जब बीजेपी को जेडीयू से ज़्यादा सीटें मिली हैं और इतनी स्टुपेंडस विक्ट्री है, तो इस तरह की अटकलें लगाई जाएंगी। और बीजेपी एक्चुअली इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो बिना जेडीयू के सरकार बना सकती है। अगर वो एलजेपी, हैम और आरएलएम को लेकर सरकार बनाए तो भी उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ऐसा करेगी, क्योंकि पहली बात तो जेडीयू को कोई कम सीटें नहीं आई हैं, जेडीयू 80 के ऊपर है, तो वो भी एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में है। दूसरी बात कि अगर इस वक्त नीतीश कुमार को बीजेपी हटाना चाहे तो ये एक बड़ा ही बुरा संकेत होगा सारे एनडीए अलायंस पार्टनर्स के लिए कि आप साथ में एक आदमी को सीएम फेस बनाकर इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन में जब विक्ट्री हो जाती है तो आप उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं और किसी और को बना देते हैं, या उस पार्टी को अलग कर देते हैं, या उस पार्टी को तोड़ देते हैं। ये उनके अलायंस के लिए एक बुरी बात होगी। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ऐसा करना चाहेगी। लेट्स ऑल्सो रिमेंबर कि भाई सेंटर में सरकार जो है वो जेडीयू की सहायता से चल रही है और उसमें जो है वो चंद्रबाबू नायडू भी हैं। आप सोचिए कि अगर इस तरह का कोई वाकया होता है तो चंद्रबाबू नायडू के लिए भी एक संकेत होगा कि भाई रिलायबल पार्टनर नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी दोनों मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कदम बीजेपी उठाएगी, कम से कम इस वक्त। अभी मैं समझता हूं कि ये हो सकता है कि भविष्य में ये प्रश्न उठे, क्योंकि नीतीश कुमार की हेल्थ को लेकर बड़े सारे सवाल हैं। जनता में भी एक मन है कि एक नया लीडरशिप जो है वो उभरना चाहिए एनडीए में। बिहार में जो एनडीए के समर्थक हैं उनके बीच में ऐसा एक मत है। तो हो सकता है कि भविष्य के लिए ये सवाल फिर से खड़ा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी इस तरह की कोई भी बात होगी। नीतीश कुमार के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत लोग इसका पैरेलल महाराष्ट्र से ड्रॉ करेंगे, लेकिन हमें समझना होगा कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो एक तरह का रिवेंज एक्ट था बीजेपी के लिए, क्योंकि एक ज्वाइंट मैंडेट के साथ शिवसेना और बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद शिवसेना ने चीफ मिनिस्टरशिप के लिए पाला बदल के दूसरी तरफ जो है गठबंधन कर लिया और चीफ मिनिस्टर बन गए। तो बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा हर्ट था और एक तरह का बदला उन्होंने लिया उद्धव ठाकरे से। तीसरी बात है कि नीतीश कुमार जो हैं वो उद्धव ठाकरे से ज्यादा मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, उनकी पार्टी को तोड़ना आसान नहीं होगा। दीप्तिमान, अगर आप महागठबंधन के खेमे को इस समय आंक लें, उनके प्रदर्शन को देखें, जिस तरह से इतनी धराशायी हुए हैं, क्या मुख्य कारण आप इसके पीछे देखते हैं? क्या जिस तरह से 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई वो बात होगी, सीएम डिक्लेयर करना, या वो बार बार जंगल राज का जो आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगा, वो क्या गया ऐसा जो उनके फेवर में नहीं था, या कमियां खामियां कहाँ रही? देखिए, इस मैंडेट के बाद तो ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट कुछ भी उनके फेवर में नहीं था, क्योंकि एक तो सबसे पहले उन्होंने अपना गठबंधन करने में इतनी देर लगाई कि नॉमिनेशंस भी फाइल हो गए और उनका गठबंधन नहीं हो पाया। तो उससे भी इलेक्टोरेट में एक मैसेज जाता है कि भाई जो है पूरा गठबंधन पूरी तरह से तैयार ही नहीं है, ये तो आपस में लड़ रहे हैं और आप फ्रेंडली फाइट कुछ होती नहीं है, आप बेसिकली एक दूसरे का वोट काटते हैं। तो वो एक तरह की वोट कटवा फाइट होती है। उसमें अमूमन ऐसा ही होता है कि जो है तीसरी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत जाती है। यहाँ भी उन सब सीटों पे भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो है वो बीजेपी ज्यादातर में, मतलब एनडीए जो है वो ज्यादातर में विजयी रही है। तीसरा क्या है कि रोक के बता दूं, राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव चुनाव जीत गए। काफी समय से ट्रेल कर रहे थे तेजस्वी, लेकिन अब आखिरकार नतीजा आ गया है। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव जीत गए। एक राहत की सांस ली होगी आरजेडी ने, क्योंकि तमाम सवाल उठ गए थे उनके नेतृत्व में जिस तरह से ये चुनाव के नतीजे रहे, लेकिन अपनी सीट उन्होंने बचा ली है। जी दीप्तिमान, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जैसा कि आप बता रहे थे, ये अगर राघोपुर भी उनको इतनी मशक्कत के बाद जीतना पड़ा है तो ये उनकी परिस्थिति को बयां करती है कि कितनी बुरी परिस्थिति में इस वक्त महागठबंधन है बिहार में। और आप समझिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि इनके तर्कश के सारे तीर जो हैं वो एनडीए ने निकाल लिए। उनकी सारी प्रॉमिस जो है वो पहले ही डिलीवरी में बदल गई।
एनडीए के द्वारा, जिसके कारण कि जो वोट, जो भी थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी का सेंटिमेंट बना होगा बिहार में, वो एंटी इनकम्बेंसी का सेंटिमेंट कम हो गया। बिल्कुल, टाइमिंग का फायदा बीजेपी ने उठाया, टाइमिंग का फायदा बीजेपी ने उठाया तमाम करके। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं, अब सुबह से थे वो। मनीष, इस समय जो फ्लैश कर रहे हैं हम स्क्रीन पर वो है तेजस्वी यादव जीत गए हैं राघोपुर से, काफ़ी समय से ट्रेल कर रहे थे। महागठबंधन के इस सहयोगी अब खेमे में बड़ी राहत की सांस ली जा रही होगी, आपका आंकलन इस समय? देखिए, तेजस्वी यादव का जीतना जो है वो तय माना जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ ये भी सब लोग मान रहे थे कि इस बार उनका जो जीत का जो मार्जिन है वो कम होगा। उसका बड़ा कारण यह है कि वहाँ एक जो राजपूत उम्मीदवार खड़ा होते थे उनको किसी न किसी तरीके से बीजेपी ने, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जो बिहार के चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने उनको मनाने में, उनको बैठाने में वो कामयाब रहे थे। और उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि इस बार तेजस्वी जीतेंगे तो जरूर, लेकिन उनका मार्जिन जो है कोई बड़ा मार्जिन नहीं होगा। जहां तक बिहार के राजनीतिक स्थिति की सवाल है तो मैं यहां पर मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग के बाहर में हूं और एक अन्य मार्ग के आसपास के सारी सड़कों को, चूंकि आम लोग यहां पर भीड़ ना जुटाए तो इसे अभी बैरिकेड कर दिया गया है। केवल यहां पर मीडिया के वही लोग हैं जो यहां से लाइव कर रहे हैं या वो लाइव का अपना इंतजार कर रहे हैं। कोई भी आम लोग जो हैं यहां पर नहीं है। हालांकि जो यहाँ पर आने जाने के लिए भी रोड को अभी ब्लॉक नहीं किया गया है, लोगों से पूछकर उन्हें अनुमति दी जा रही है। अब सवाल यह है कि ये जो जीत हुई है ये क्या अप्रत्याशित है? देखिए, इस बार बिहार के राजनीति की एक सच्चाई है निधि, कि बिहार की राजनीति में 3 राजनीतिक दल हैं जिनके पास दोहाई का यानी कि डबल डिजिट का वोट शेयर है। और 2010 के बाद, 2005 के नवंबर के चुनाव के बाद 2010 का चुनाव हुआ, उसके बाद से ये एक पैटर्न सेट कर गया है कि इन 3 दलों में जब 2 दल साथ होते हैं तो तीसरे दल और उसके साथ के दलों की हार तय मानी जाती है। 2010 में अगर आपको याद हो तो उस समय जेडीयू और बीजेपी साथ थी, लालू यादव के साथ रामविलास पासवान थे, उसके बावजूद वो हारे थे और उनकी काफ़ी बुरी हार हुई थी, मात्र 22 सीटों पर वो सिमट कर रह गए थे। 2015 का चुनाव आप भी आए थे यहाँ कवर करने के लिए, बड़ा हाई प्रोफाइल इलेक्शन था, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पीक पर थी, लेकिन उस समय उस चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार साथ थे और बीजेपी के साथ कई सारे छोटे दल थे जिसमें रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी। उसके बावजूद महागठबंधन यानी कि लालू नीतीश का जो महागठबंधन था जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी, उसने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। 2020 के चुनाव में फिर से नीतीश और बीजेपी साथ हुए, भले ही चिराग उस समय बागी हुए थे जिसके कारण जेडीयू की सीटों की संख्या कम हुई, लेकिन जीत उन्हीं की हुई थी। इस बार के चुनाव में चिराग जब से आए थे तो ये माना जा रहा था कि जो विक्ट्री का मार्जिन होगा वो बड़ा होगा, और ख़ासकर जब से बिहार में 3 चीज़ें हुई। सबसे पहले 125 यूनिट बिजली मुफ्त की गई। इसका परिणाम ये हुआ निधि कि ग्रामीण इलाकों में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घर में 2 बल्ब होते हैं, 2 पंखे चलते हैं, उनका बिजली का जो शुल्क है, बिजली का जो बिल है वो 0 हो गया, यानी कि उनको एक तरह से कोई बिजली का शुल्क नहीं देना पड़ रहा था। दूसरी बात यह है, उसके बाद बिहार में करीब 40 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिसमें महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, 60 साल की उम्र के लोग हैं, जो जिनको 400 रुपये सरकारी पेंशन मिलता था, उनका पेंशन पिछले 3 महीने से 1100 रुपया कर दिया गया और उन्हें मालूम है कि आने वाले सालों में वो 1100 से और बढ़ेगा। ये बात अलग है कि ये पेंशन बढ़ाने की बात, बिजली मुफ्त करने की बात तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर पिछले 6 महीने से कर रहे थे, लेकिन वो 6 महीने से जो वो मांग कर रहे थे या वादे कर रहे थे उसके कारण सरकार, एनडीए की सरकार दबाव में आई। लेकिन इससे भी बड़ा जो गेम चेंजर साबित हुआ वो ये था कि जो ये 2 लोग थे, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, जो 2500 रुपये सरकार बनने पर हर महीने महिलाओं के खाते में डालने की बात कर रहे थे, उसके बाद एनडीए सरकार को लगा कि अगर इसका काउंटर नहीं किया गया तो चुनाव में इसका काफ़ी एडवर्स रिजल्ट उन्हें झेलना पड़ सकता है। और उसके बाद
जो बिहार की आर्थिक स्थिति है, जो बिहार का बजट है, उसमें ये हुआ कि 2,500 रुपये हम हर महीने तो नहीं दे सकते हैं, तो एक मुश्त हम 10,000 वन ऑफ देते हैं, बाद में नहीं देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं रखेंगे। और ये जो 10,000 रुपये करीब 1,60,00,000 लोगों के अकाउंट में अभी तक जा चुका है और लोगों के अकाउंट में कहा गया है कि चुनाव के बाद जाएगा। तो ये एक तरह का गेम चेंजर साबित हुआ। इसके कारण जातियां टूटी। अगर आज आप बात करें तो बिहार में सबसे बड़ी जाति है ये 10,000 लोगों की, जो लाभान्वित लोगों की जो संख्या है। क्योंकि अगर आप देखिए CPI ML CPI जैसी पार्टियां जो कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा है। उसका एक कारण ये कहा जा रहा है कि भले ही वो कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं, लेकिन इन पार्टियों की महिलाओं को, जो इनके कार्डर हैं, उनके घर की महिलाओं को इसका सबसे अधिक लाभ मिला है। और जिसके अकाउंट में पैसा पहुंचा उनको एक तरह से, चूंकि वो बिहार के बारे में लोग कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, तो इसलिए 10,000 का जादू सर चढ़ के बोला है। लेकिन निधि अगर आप देखें कि पिछले दिनों वो चाहे महाराष्ट्र या कर्नाटका जैसे समृद्ध राज्य हो या मध्य प्रदेश जैसे आप कह सकते हैं कि डेवलपिंग स्टेट हो या झारखंड जैसा गरीब राज्य, जहां भी महिलाओं के खाते में पैसा गया है या वो जाता रहा है, वहां पर इनकम्बेंट गवर्नमेंट, वो चाहे पार्टी की कोई हो, वो पार्टी री-इलेक्ट हुई है। और बिहार में भी कमोबेश वही हुआ है। कोई बहुत बड़ा बिहार में जादू नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन बिहार में जो जिस प्रकार से अपोजिशन का सफाया हुआ है और एक तरह से महागठबंधन के उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा है। जैसे बख्तियारपुर की सीट में आपको बता दूं, पटना से सटा हुआ बख्तियारपुर का सीट है, जहां पे जीतने वाला हो या हारने वाला हो, दोनों यादव जाति से आता था। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के एक उम्मीदवार थे जो बनिया समुदाय से थे और वो जीत उन्होंने दर्ज की है। तो उस जीत के पीछे कहीं ना कहीं ये 10,000 के लाभान्वितों का जो बेनिफिशियरी की जो संख्या है, उसने एक बड़ी भूमिका अदा की है। अब सवाल यह है कि क्या, चूंकि अभी का जो समीकरण है उसके अनुसार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और बीजेपी के जो दो शीर्ष नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों ने प्रचार के दौरान ये पत्ता नहीं खोला था कि भले ही वो नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हों, तो चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं। लेकिन जानकारों का कहना है, जो जानकार हैं वो चाहे बीजेपी के, क्योंकि बिहार बीजेपी के सभी नेताओं ने यही कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री रहेंगे। तो निधि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, जो उनकी रेस्पेक्टेबिलिटी है, वो अभी भी कायम है। उनका वोट बैंक, उनके वोट बैंक पे सबकी नज़र है। तो जो भी उनके वोट बैंक से मोहब्बत करता है या उसकी नज़र है, उसको अपनी ओर लाने की कोशिश, लक्ष्य उसका अगर है कि उस वोट बैंक को अपने से जोड़ा जाए, खासकर बीजेपी के लिए, तो वैसे में बीजेपी हमेशा उसकी कोशिश होगी कि कोई एब्रप्ट तरीके से उनको पावर से नहीं हटाया जाए। वो हमेशा उनके लिए एक ऑनरेबल एग्जिट रूट ढूंढा जाएगा। अब वो ऑनरेबल एग्जिट रूट क्या होगा, वो बीजेपी के दो शीर्ष नेता को ही मालूम है। लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि भले ही जेडीयू की संख्या थोड़ी सी कम रह गई हो, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। निधि, बिल्कुल ये बहुत अहम बात आपने कही। और क्योंकि आलोक पांडे कुछ ही देर पहले बीजेपी दफ्तर में मौजूद थे और तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे और वहां पर वो एक ही आवाज़ में लोग यही कह रहे थे कि नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की जोड़ी की वजह से जीत मिली। हालांकि एक कार्यकर्ता का रुख अलग था, बहरहाल उसको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे। नीति, मैं आपसे मनीष ये भी आंकलन चाहूँगी, क्या कुछ ऐसे इलाके रहे, जैसे हम कुछ देर पहले, क्योंकि आप दोपहर में नहीं थे, कि जो सीमांचल का इलाका है, कुछ ऐसा लगा आपको कि वहाँ से भी बिल्कुल मुस्लिम वोट बैंक है वो भी स्प्लिट हुआ, ऐसा आपका आंकलन है? क्योंकि कुछ यहाँ पे बात हो रही थी, उस इलाके की तरफ से आपका क्या नजरिया? देखिए, इस चुनाव में एनडीए की जीत होगी। इस जीत में 10,000 रुपये की भूमिका काफ़ी कारगर होगी, ये सब जानते थे। लेकिन सीमांचल के जिलों में जहां पर इतनी हेवी वोटिंग हुई थी और वहां पर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों का जीतना या आगे चलना थोड़ा सा लोगों को
पच नहीं रहा है, वो थोड़ी सी राजनीतिक रूप से उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाँ, उसमें ये कहा जा रहा है कि AIMIM वहाँ पर था, AIMIM के कैंडिडेट के द्वारा जो वोट काटा गया और जो उन्हें वोट मिला, उसके कारण महागठबंधन के उम्मीदवार हर सीट पे हार रहे हैं। तो थोड़ा सा सीमांचल में जो वोटिंग हुआ है और सीमांचल का जो चुनावी परिणाम है, वो थोड़ा सा उसके लिए, उसके पूरे विश्लेषण के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन आप कह सकती हैं कि जब किसी भी दल का लैंडस्लाइड विक्ट्री होता है, वैसे में हर हारा हुआ उम्मीदवार जीतता है और हर विपक्षी दल का जीतता हुआ उम्मीदवार कुछ वोटों से चुनाव हार जाता है। निधि जी बिल्कुल बिल्कुल। दीप्तिमान तिवारी भी हमारे साथ मौजूद है, इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार। दीप्तिमान, आप किस तरह से देख रहे हैं सीमांचल का जो नतीजा है? देखिए, सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया है, जो कि इस वक्त चुनाव के पहले कई समीक्षाओं में उनको जो है ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम यादव वोट बैंक कंप्लीटली कंसोलिडेट होके और आरजेडी की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कई जगह जहां हम भी घूम रहे थे, वहां पे हमें ऐसा दिख रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, उनकी पार्टी काफ़ी वोट्स को इन्फ्लुएंस कर रही है अमंग मुस्लिम्स। सीमांचल में भी ऐसा देखने को आया है। और आप एक तरह से देखिए तो मतलब बड़ी मुश्किल होती है किसी तरह की गहन समीक्षा करना किसी इलेक्शन का, जब इस टाइप की लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है। क्योंकि आप देखें, आरजेडी लगभग सभी क्षेत्रों में काफी बुरा प्रदर्शन कर रही है। आप पिछले इलेक्शन में उन्होंने मगध और शाहबाद रीजन में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, यहाँ तक कि लोकसभा की सीटें भी वो शाहबाद रीजन से काफी जीते थे। इस बार वो पूरा मगध और पूरा शाहबाद जो है वो भी जो है वो एनडीए के खेमे में चला गया है। तो कहीं ना कहीं जहां पे सिर्फ इस तरह के समीकरण हैं, जहां पे कि टोटली इंटायरली मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम वोटर 50% से 70% है, वहां पे आपको एक कंसोलिडेशन दिखेगा, या तो वो आरजेडी की तरफ होगा या असदुद्दीन ओवैसी की तरफ होगा। बाकी सब जगह तो महागठबंधन के लिए काफी दिक्कत का माहौल रहा है। बिल्कुल। मनीष, मैं आपसे जन स्वराज पार्टी के बारे में भी पूछना चाहूंगी। उनका किस तरह से आप आंकलन करेंगे जो प्रदर्शन रहा, क्योंकि जो जिस तरह से काम किया प्रशांत किशोर ने, एक रेडिकल उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तमाम वो जिस तरह से महागठबंधन के नेता लोग प्रॉमिस कर रहे थे, वो भी कह रहे थे, पलायन पर जोर दे रहे थे, गरीबी के मसलों पर बात कर रहे थे, स्कूल शिक्षा की बात कर रहे थे, वो जाति की बात नहीं कर रहे थे। सीट तो शायद कोई उनको नहीं मिली है, लेकिन वोट प्रतिशत शायद 3% मिला हो। आपका नजरिया? देखिए निधि, प्रशांत किशोर जो हैं वो हर चुनाव में, किसी भी राज्य में चुनाव हो तो एक व्यक्ति या एक दल ऐसा होता है जिसे जो चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव से पूर्व जो प्रचार मिलता है और जो उसको एक्चुअल वोट आता है, तो उसमें यही लगता है कि उनको जो पब्लिसिटी मिली वो डिस्प्रपोर्शनेट टू हिज वोट शेयर था। और यही शायद प्रशांत किशोर पे ये भी लागू होता है। दूसरा, जो वो प्रचार कर रहे थे, तो जो बिहार में अगर आप कहीं जाएं तो एक कहावत है, लोग कहते हैं, लोगों के मुंह से निकल जाता है कि इनका प्रचार अच्छा है, प्रसार अच्छा है, आसार अच्छा नहीं है, यानी कि इनका कोई भविष्य इनका अच्छा नहीं है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि बिहार की राजनीतिक सच्चाई क्या है कि बिहार में 11 प्रमुख राजनीतिक दल हैं जो यह मानकर चलते हैं कि वो एकला चलो, यानी कि अकेले वो चुनाव लड़ तो सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। वैसे उस बैकड्रॉप में अगर प्रशांत किशोर ये कह रहे हो कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो कहते हैं कि वो चुनावी रणनीतिकार भी हैं, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मिसमैच है, यानी कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीतिक सच्चाई को नकार रहे हैं। एक तो वो जिस जाति से, ब्राह्मण जाति से आते हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या बहुत ज़्यादा बेस वोट बिहार में नहीं है। दूसरा, अगर
जैसे नीतीश कुमार भी जिस कुर्मी जाति से आते हैं उसका बहुत ज़्यादा वोट बेस नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने शुरू से यानी कि 95 के चुनाव से ही उन्होंने CPI-ML और JMM के साथ में समझौता किया। बाद में उन्हें लगा कि ये वर्केबल नहीं है, तो तुरंत 96 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने BJP के साथ समझौता कर लिया, उनके साथ राजनीतिक तालमेल किया और लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके बावजूद, इन सभी राजनीतिक सच्चाइयों के बावजूद अगर प्रशांत किशोर ये दम भर रहे थे कि नहीं वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और बिहार की राजनीतिक स्थिति को वो पलट कर रख देंगे, इस बात में कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि वो चाहे 2500 रुपये की बात हो, फ्री बिजली की बात हो या भ्रष्टाचार के आरोप भी उन्होंने जितनी गंभीरता से लगाए। हालांकि बाद में उस पर भी वो बैक ट्रैक करते दिखे, क्योंकि उन्होंने अशोक चौधरी को एक अल्टीमेटम दिया और उसके बाद में उसको परस्यू नहीं किया। उससे थोड़ी उनकी राजनीतिक गंभीरता जो है और प्रासंगिकता जो है वो कम हुई। लेकिन इस चुनाव में जो एक बड़ी बात यह दिखी कि जो भी अदर्स को वोट आता था, यानी कि नंबर 3, नंबर 4 के कैंडिडेट को आता था, वो इस बार एक क्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे 243 सीटों पर, तो बहुत कम जगहों पर ही वो 10,000 का अंक जो है पार कर पाए हैं। और इसका कारण यह है कि जो बेनिफिशियरी का पूरा जो अम्ब्रेला है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ था, जिसके कारण जो है लोग या तो वो NDA को दे रहे थे या वो महागठबंधन के लोगों को दे रहे थे, और कहीं ना कहीं ये अदर्स का वोट NDA को गया है, जिसके कारण प्रशांत किशोर जैसे तीसरे पार्टी के नेता या दल को इसका राजनीतिक खामियाजा उठाना पड़ रहा है। निधि। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल। और अस्करी भी हमारे साथ मौजूद है। अस्करी, आप अगर जन स्वराज के बारे में बात करना चाहें, इस समय आकलन करना चाहें, रोल ऑफ प्रशांत किशोर। Right. So Prashant Kishore is a brilliant strategist. क्योंकि देखिए ना, in fact, although there were नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, तमाम नेताओं की जीत में एक बड़ी अहम भूमिका निभाई एज अ रणनीतिकार, लेकिन जब उनका अपना चुनाव आया तो कुछ अलग ही रहा। नहीं तो इसमें मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आप अगर इसे ऐसे देखें, मैं आपको ब्रीफली एक स्टोरी लाइन पे समझाने की कोशिश करता हूं। हिंदुस्तान में चुनावी प्रबंधन या कंसल्टिंग एब्सेंट थी, कुछ लोग कर रहे थे, बट प्रशांत जब आए तो प्रशांत ने अमेरिकन मॉडल को अडॉप्ट किया। हालांकि अमेरिका में ज़्यादा रहता है फंड रेज करने से लेकर करके इलेक्शन करवाने तक, इंडिया में वो मॉडल एब्सेंट था। वो भी रिसेंटली प्रशांत ही लेकर के इंडिया में भी आए हैं, बट एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन कर दिया प्रशांत ने। और उसके बाद उन्होंने जैसे काम करना स्टार्ट किया 2014, और उसके बाद लगातार अभी तक 2 या 3 ही चुनाव में वो शायद बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए होंगे, बट अदरवाइज ही इज अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट। अब एक बात ये है कि हो सकता है कि मैं गाड़ी आपको थियरी में बता सकूं कि कैसे चलाना है, बट एक्चुअली कैसे चलाना है उसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। तो प्रशांत किशोर फील्ड पर उतर गए। प्रशांत किशोर ने एक बढ़िया कैंपेन भी किया बिहार में, एंड मुझे लगता है कि जो इस बार हुआ कि पूरा का पूरा चुनाव इश्यूज पर लड़ा गया, चाहे वो NDA हो चाहे वो RJD हो, वो भी देन प्रशांत किशोर की है। अब बात यह है कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी डिसमल क्यों है। मुझे लगता है इस चीज को आंसर करने के पहले मैं बस एक बात आपको बताऊंगा। प्रशांत किशोर ने बहुत सारे इश्यूज को रेज किए। बिहार में अप्रॉक्सीमेटली 58% आबादी जो है वो बिलो द एज ऑफ 25 है, उस ब्रैकेट में आती है जो कि ज्यादातर स्विंग वोट्स में काउंट किए जाते हैं, अप टू 30। तो हिंदुस्तान का सबसे युवा स्टेट बिहार है। अब आप देखिए कि प्रशांत किशोर की कैंपेन का एक हिस्सा ये भी था कि वो बता रहे थे 2005 के पहले जब RJD थी तो बिहार का क्या हाल था। बोला जा रहा था जंगल राज, वो अलग, जंगल राज एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, वो अलग बात है कि स्टैटिस्टिक्स कुछ और कहानी बयां करता है। उसके पहले प्रशांत किशोर ने भी ये बात की, और मुसलमानों के बस्तियों में जब गए तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस ही थी जब भागलपुर राइट्स हुए,
और ये जब पिक्चर इन्होंने पेंट किया तो आप ये समझिए कि उस जनरेशन को या उन लोगों को ये चीज बताया गया कि बिहार एक दफा एक अबिस था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था इस स्टेट में, यहाँ कोई शाम को नहीं निकल सकता था। Although I've never personally experienced all of these things. तो आप ये देखिए कि आपने एक तरीके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर दिया। अब मैं इस चीज के पहले आता हूं। हुआ ये कि प्रशांत किशोर जब अपनी पार्टी लॉन्च किए थे तो उस टाइम बहुत सारे लोग ये चीज कह रहे थे कि शायद प्रशांत किशोर एक पार्टी लॉन्च कर करके शायद एक जेन्युइनली इलेक्शन कंटेस्ट कर करके पॉलिटिकल डोमेन में आना नहीं चाह रहे हैं। उस टाइम पर कॉन्स्पिरेसी थियरी ये थी कि प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी जो लॉन्च की अपने आप में एक कैंपेन मॉडल है जो कि एनडीए के द्वारा लाया गया है। सो दिस इज एन एंटायरली सेपरेट कैंपेन। आज इतना लंबा बात कर रहे हैं, 4% वोट उनको मिले। बिल्कुल आप कहा, आपने इंटरेस्टिंग विश्लेषण है। दीप्तिमान, मैं आपसे जानना चाहूंगी अब तेजस्वी यादव के लिए आगे क्या, आगे की राह आप उनके लिए कैसे आगे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव को सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि MY कॉम्बिनेशन के आगे उनकी पार्टी कैसे बढ़े। सबसे बड़ी समस्या आरजेडी के साथ, आप इसकी चाहे पहले का इलेक्शन देख लें, उसके पहले का इलेक्शन देख लें, अभी का इलेक्शन देख लें, इनका सबसे बड़ा स्ट्रगल ये रहा है कि मुस्लिम यादव वोट बैंक इनके पास बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक है। दोनों जो है मिलके 32% ऑफ बिहार पॉपुलेशन बनाते हैं, जो कि एक सॉलिड बेस है जिसपे कि किसी भी पार्टी को आगे बिल्ड करने में आसानी होनी चाहिए। लेकिन आरजेडी फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू इट, बिकॉज एक टाइम पे लालू यादव जो है वो अक्रॉस बैकवर्ड कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट and among Dalits used to be extremely popular, and that is how he used to win election after election. लेकिन कैसे इन्होंने अपने 15 ईयर के रूल में अपनी पार्टी को यादव मुस्लिम पार्टी बना दिया, जिसमें से कि बाकी सारे कास्ट जो हैं, नॉन यादव, ओबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ये सारे भाग गए और उन सबको जो है वो नीतीश कुमार ने अप्रोप्रिएट कर लिया थ्रू टेलर्ड स्कीम्स। उन्होंने इन सभी कास्ट ग्रुप्स को टारगेट किया और ईबीसी का एक वोट बैंक तैयार किए जो उनके साथ जो है वो हमेशा काफी समय से जुड़ा हुआ है। एक विमेन की कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार की, फिर उसके बाद उन्होंने महादलित कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार की और इस तरह से उन्होंने एक छोटे से वोट बेस जो कि 2.5% का उनका कुर्मी वोट बेस है, उसके ऊपर उन्होंने करीब 15-16% का वोट बेस अपना खड़ा किया, जो कि बीजेपी के साथ मिलके जो है अक्सर जो है वो 40 पार कर जाता है। सो ही क्रॉसेस द लाइन। यहाँ पे महागठबंधन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई वो अपना जो 30% उनके पास वोट है वो उसको जो है 40 के पार कैसे लेके जाएं, वो 10% वोट वो कहां से लेके आएंगे। उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप नॉन यादव, ओबीसी और ईबीसी को जोड़ें, तभी आप इस बाधा को पार कर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या है कि यादव जहां खड़ा है वहां पे नॉन यादव, ओबीसी और ईबीसी का रिवर्स कंसोलिडेशन हो रहा है। ये सबसे बड़ा इनका चैलेंज है। इनको अगर हम इस बार की जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आरजेडी ने 75 सीटें जो हैं वो ओबीसी कम्युनिटी को दी, उसमें से 51 यादव हैं। तो आपका मैसेजिंग तो इलेक्शन में ही ये था कि भाई हमारी जो है हमारा फोकस यादवों पे ज्यादा है, हम पहले यादवों को देखेंगे, बाकी लोगों को बाद में देखेंगे। आप अगर इसी चीज को हम यूपी में लेके जाएं और अखिलेश यादव को देखें तो उन्होंने 2024 के इलेक्शन में सिर्फ 5 सीटें यादवों को दी, वो भी अपने परिवार में। परिवार के बाहर उन्होंने एक भी सीट किसी यादव को नहीं दी। बाकी सीटें जो हैं वो सारी नॉन यादव, ओबीसीज, ईबीसीज, दलित्स में बांटी गई और उसका रिजल्ट हमने देखा कि अखिलेश यादव जो हैं राम मंदिर बनने के बावजूद भी अयोध्या जीतते हैं और बीजेपी से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं यूपी में, क्योंकि उनको अपने यादव वोट बैंक के ऊपर कॉन्फिडेंस था। शायद आरजेडी को अपने यादव वोट बैंक के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने 51 सीटें यादवों को दी। और यही होता है जब आप
काफी फोकस एक कास्ट ग्रुप पे करते हैं, खास करके एक ऐसे कास्ट ग्रुप पे जो कि काफी असर्टिव है सोशियो पॉलिटिकल स्पेस में, एक रूरल स्टेट में, तो समाज पे उसका फर्क पड़ना शुरू हो जाता है और लोगों का रिवर्स कंसोलिडेशन होता है। ठीक वैसे ही जैसे हरियाणा में होता है, जब आप बहुत ज्यादा फोकस जाटों पे दिखाते हैं तो नॉन जाट वोट्स कंसोलिडेट होकर दूसरी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज महागठबंधन के लिए ये है कि वो अपना सोशल बेस जो है वो कैसे एक्सपैंड करें, कैसे ये करें कि यादव मुस्लिम कंबाइन के साथ बाकी कुशवाहा, कुर्मी, नोनिया, दुसाध, चमार, ये सभी लोग आके जुड़ें। जब ये जुड़ेंगे तभी महागठबंधन की बात आगे बढ़ेगी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि महागठबंधन जो है वो क्योंकि उसकी सीटें कम आई हैं, 33 सीटें 34 सीटें आई हैं, तो महागठबंधन अब खत्म हो गया, इट इज आउट ऑफ द वे। इट कंटिन्यूज टू बी अ वेरी वेरी फॉर्मिडेबल पार्टी। बिहार की एक बहुत बड़ी पार्टी है आरजेडी, भले ही इस बार सीटें कम आई हैं लेकिन उनका वोट शेयर अभी भी काफी स्ट्रांग है और इसलिए उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपनी गलतियां सुधारने का और अपने पार्टी का सोशल बेस बढ़ाने का। बिल्कुल। मनीष, जो दीप्तिमान जिस तरह से कह रहे थे हम, अच्छा मुझे पता जा रहा है मनीष नहीं है, तो अपने आप में दीप्तिमान, अगर मैं आपसे ये सवाल आती हूँ एक कांग्रेस से पूछने से पहले आपसे, ताबिश जी आपसे, जो हमारे जो एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अपना सोशल बेस बढ़ाना होगा महागठबंधन में। अगर हम आरजेडी की बात करें तो उनको मुस्लिम यादव उससे बढ़ना होगा, आपको नीतीश कुमार से सीख लेनी है, बगल में अखिलेश यादव ने जिस तरह से परिवार में थोड़ा दिया लेकिन बाद में औरों को दिया, तो विश्वास बढ़ाना होगा और लार्जर समाज में। देखिए, ये जिस तरह से बात की जा रही है सोशल स्ट्रक्चर की, हमारी पार्टी जो भी है, गठबंधन की जो सरकार पार्टी है, वो हमेशा से, जैसे आपने बोला कि 56 यादव को, तो बनियारों को भी सीट दिया गया है, SC/ST को भी सीट दिया गया है, मुसलमानों को भी सीट दिया गया है। ऐसा नहीं कि नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग में कहीं पर से खराबी नहीं है। अगर आप जहाँ कहते हैं कि हार गए हैं इस वजह से, अगर आपने जो जनता ने इस पे क्या नाम है मैंडेट दिया है, इसको बीजेपी एनडीए को मैंडेट दिया है, और तो उसमें आप अभी तो कुछ भी बोल सकते हैं, इसका मंथन करना बचा हुआ है, बात करनी, इसमें शीर्ष नेतृत्व इस पे और क्या रिएक्शन करेगा, ऑब्वियस है इसमें मंथन की जाएगी। ये इसलिए कि ये इतने कम वोट से, तो ये लगता है ना आरजेडी है और कांग्रेस तो बाहर से आकर, एक समय कभी था कांग्रेस बिहार में थी, लेकिन अब ये कि कांग्रेस एक आकर एक सपोर्टिव रोल करके चली जाती है, उसमें क्या बदलाव की जरूरत नहीं है? एकदम बदलाव की जरूरत है कि कांग्रेस भी अपने आप में मंथन करे। हमारे श्रेष्ठ नेता राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, और भी जो हमारे स्टेट्स के जो नेता हैं उनको भी मंथन करना पड़ेगा सच्चाई से मंथन करके अगर आप आगे बढ़िएगा तो आपको आने वाले वक्त में क्या लगती है आपको कांग्रेस में? अब तो बता सकते हैं आप, क्या लगता है? खामी की बात नहीं, खामी का मतलब यह है कि हर आदमी अपनी जो जिम्मेदारी, कुछ लोग ही चला रहे हैं, ऐसा है। देखिए, कुछ लोग ही चलाते हैं, हर जगह चलाते हैं, लेकिन हर जगह। बीजेपी में भी क्या है कि नहीं, मैं बोलता हूँ कि बीजेपी में क्या है, पूरे देश में 2 आदमी पूरे देश को चला रहे हैं। ग्राउंड वर्क करते हैं ना, ग्राउंड वर्क लगातार, ग्राउंड वर्क सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं कि राहुल जी अगर काम करते तो उसके नीचे भी हर स्टेट्स में आदमी है। इनके यहाँ तो अमित शाह जी बैठे हैं, वहाँ पे जो भी आपको स्ट्रॉन्ग रूम था उसके में आप देखिएगा कि ईवीएम पैड जो है उसको चेंज किया गया, ईवीएम को चेंज कर दिया गया है। उसके बाद हार के बाद तो अब यही अभी है, नहीं, ये सारे वीडियो हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। कैमरे को ऑफ कर दिया गया है, कैमरा ऑफ करके उसके बाद जो है सो उसके ईवीएम को वहाँ से एक्सचेंज किया गया। ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी चीज़ें जनता में आम हो चुकी है और जीत हासिल किया है, इसलिए इस पे थोड़ा अगर रणनीति पर उस पर ध्यान दिया जाए तो वो शायद और बेहतर हो। दीप्तिमान जी, मैं आपसे अब एक सवाल कांग्रेस के उस पर भी पूछना चाहूंगी। जो कांग्रेस का प्रचार रहा, खामियां रही, आंकलन रहा, आप कैसे देखेंगे उसे? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में था वोट चोरी। अगर हम देखें, राहुल गांधी ने एक वर्ल्ड विंड कैंपेन सहरसा से शुरू किया, सासाराम से शुरू किया, और जो है वो वोट अधिकार यात्रा उन्होंने करी जिसमें तेजस्वी भी शामिल हुए। लेकिन हम जब ग्राउंड पे घूम रहे थे तो वोट चोरी का कोई एक्चुअली ट्रैक्शन नहीं था वोटर में। और
आप एक तरह से देखें तो वोट चोरी एक बड़ा ही इंटेंजिबल सा मुद्दा है, जो कि एक कांग्रेस बिल्कुल जायज है। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ गड़बड़ हो रही है, तो इस मुद्दे को उठाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जनता के सामने इस बात को लाना, ये उनका दायित्व है और ये अच्छी बात है। और लेकिन ये सोचना कि ये एक इलेक्टोरल इशू बन सकता है और इसके ऊपर वोट पड़ सकते हैं, वो मुझे लगा कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि ऐसा देखिए, ऐसा होता है कि जिसका वोट बन गया है, ठीक है, उसको इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, और जिसका वोट नहीं बना है वो इलेक्शन के लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप वोट अधिकार यात्रा करते हैं, और एक और चीज है, आपने वोट अधिकार यात्रा तो कर ली, उसके बाद आप गायब हो गए, उसके बाद आपने कोई सस्टेन कैंपेन उसको नहीं किया। बीजेपी जब कोई मुद्दा उठाती है तो उसको कॉन्स्टेंटली हैमर करती है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, अपनी मैसेजिंग के थ्रू लगातार उस बात को करती रहती है। आप वोट अधिकार यात्रा करते हैं, उसके बाद आप सीन से गायब हो जाते हैं। तो कांग्रेस के कैंपेन में ये कमी रही है कि एक तो जो उन्होंने मुद्दे उठाए वो डायरेक्टली पब्लिक को इम्पैक्ट नहीं कर रहे थे। जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया था वो डायरेक्टली पब्लिक को इम्पैक्ट नहीं कर रहे थे। और दूसरी प्रॉब्लम ये रही कि कंसिस्टेंट मैसेजिंग नहीं रही कांग्रेस की तरफ से। उसका प्रॉब्लम ये भी है कि कांग्रेस के पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ग्राउंड पे, क्योंकि आपको जो है कॉन्स्टेंटली वोटर के टच में रहना पड़ता है। आपका लोकल लेवल कार्यकर्ता जो है वो मैसेजिंग एट ग्रासरूट्स लेवल पे कॉन्स्टेंटली हैमर करता रहता है, उसके अलावा वो वोटर को मोबिलाइज करता है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की कांग्रेस में कमी है, क्योंकि आप समझिए कि 89-90 के बाद जब से मंडल पॉलिटिक्स बिहार यूपी के क्षेत्र में चला और उसके बाद मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई, तो उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गई और धीरे धीरे इसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी थी वो भी जो है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और इस वक्त कमोबेश आप देखें तो बिहार में सीपीआई एमएल की ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस से ज्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल ताबिश जी, कंसिस्टेंट मैसेजिंग नहीं रही, और जो आपने मुद्दे उठाया, भले ही बीजेपी पर जो भी आप आरोप लगा दें, लेकिन जो रेजोनेट ही नहीं कर रहे थे जनता में जो वोट चोरी का मामला, ऐसा क्यों? नहीं, हमने जैसे वोट चोरी का जो हमने यात्रा की, राहुल गांधी डायरेक्ट जनता से संवाद करना, डायरेक्ट मिलना, बात करना, रेगुलर हम लोग टच में रहे। एक जोन से सासाराम से हमने शुरू किया और आखिर तक हमने इसको किया। उसके बाद भी कई एहतजाज हुए, उस पर हम लोगों ने काम किया है। हमारे जितने भी मतलब डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहे, उनसे जनता से संवाद करते रहे, मिलते रहे 1 to 1 जितने भी लोग हैं वहाँ के, हर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, हर जगह के जो ये होते हैं जिम्मेदार हैं, वो इस काम को रेगुलर करते रहे। मगर क्या हुआ कि जनता कनेक्ट कैसे नहीं हो पाई, इस पे हम लोग ज़रूर ज़रा बात करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, और श्रेष्ठ नेतृत्व और लीडर इस पे ज़रूर मंथन करना पड़ेगा कि हम लोग की कनेक्टिविटी बढ़े, जनता पे भरोसा बढ़े और जनता भरोसा कर सके। बिल्कुल। देश रत्न निगम बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। निगम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपको बधाई। और इस समय शाम हो चली है, क्या आंकलन, क्या खबर आ रही है आपके लिए बिहार से? देखिए, खबर तो बहुत ही अच्छी है, सारी मिल बैठ के बात करेंगे। और लोग बहुत एमवाई फैक्टर बोलते थे, एमवाई का एक काउंटर फैक्टर निकल आया, और मैंने वो राघव से ही सीखा, आपके उनका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उन्होंने आपका एक जो कॉम्बिनेशन गया, तो वो एक काउंटर था एमवाई। तुष्टीकरण की राजनीति से इलेक्शन से युवा है। आपका कनेक्शन सर थोड़ा सा उसको ठीक करते हैं, आपके पास आते हैं, थोड़ा सा ठीक करते हैं और फिर आपके पास तुरंत आते हैं। तब तक दीप्तिमान हमारे साथ बने हुए हैं। दीप्तिमान, आपसे जानना चाहूँगी नीतीश कुमार के लिए आगे क्या?
जितना सम्मान तो सब उनका करें, जो लगाव जनता ने दिखाया, उन्होंने तमाम नीतियां, और वो बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन हैं, हम जानते हैं। जिस तरह से जो विपक्ष अनाउंस कर रहा था उसके ठीक बाद उनकी अपनी नीति थी, जो उन्होंने ट्रम्प कार्ड चला आत्म महिलाओं के लिए, वो बहुत कारगर रहा। आगे की राह किस तरह से आप देख रहे हैं? सीएम वो बनेंगे, ये बिल्कुल 99% माना जा रहा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस समय क्या आंकलन आपका? बड़े चैलेंजेस हैं चीफ द जेडीयू। आते हैं दीप्तिमान, आपके पास आते हैं। तो बहरहाल 6 बजने वाले हैं, शाम का वक्त है, और कुछ देर पहले हमने देखा था किस तरह से बीजेपी मुख्यालय में, पहले पटना में, और अब शायद ये दिल्ली के दृश्य आ रहे हैं। शायद ये दिल्ली बीजेपी दफ्तर के दृश्य हो सकते हैं, या ये पटना है, मुझे बताएंगे। ये दिल्ली का, बिल्कुल दिल्ली का हेडक्वार्टर्स है, देख सकते हैं अपने आप में। और ये जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री आएंगे, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण हैं, गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आ सकते हैं, और तमाम नेतागण आएंगे, और कुछ देर में प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। जिस तरह से अमूमन एक जीत के बाद बीजेपी में हम देखते हैं, बीजेपी दफ्तर में तमाम बड़े गणमान्य नेता पहुंचते हैं और जनता को संबोधित किया जाता है। जिस प्रदेश में चुनाव जीते जाते हैं, लोगों का, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद दिया जाता है। तो ये अभी कुछ ही देर में हम आपको बीजेपी के मुख्यालय में एक बार फिर से ले चलेंगे और दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह से इस समय एक बड़ी जीत है। देखिए, बिहार के चुनाव ऐसे थे, आज सुबह जब चुनाव नतीजे नहीं आए थे, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बिहार में किस तरह के नतीजे आएंगे। विचारधाराओं की भूमिका रही है, बड़े बड़े नाम इससे जुड़े हुए हैं, कर्पूरी ठाकुर जुड़े हुए हैं, जेपी, राम मनोहर लोहिया, प्रधान, जिस तरह से बापू का चंपारण दौरा रहा। तो शुरुआत में मैंने जो बताया था कि ये एक विचारों की, विचारधाराओं का और ये राज्य रहा है। अब जो अब बहुत युवा, सबसे युवा एक तरह से इसे राज्य माना गया है, और जिस तरह से वोट आज पड़े हैं और नतीजे जिस तरह से आज आए हैं, वो अपने आप में एक अलग तस्वीर बिहार की दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये सुशासन की जीत है। नीतीश कुमार का बयान आए तो अब ये सुनाएंगे। चिराग पासवान को हमने सुना, और विपक्ष जाहिर तौर पर आत्ममंथन कर रहा होगा इस समय कि कहाँ पे क्या खामी रह गई, किस तरह से आगे और बढ़ना है, और अगर आगे बढ़ना है तो कहाँ पे खामी रह गई। क्या हमेशा की तरह जो नकारात्मक या कैंपेन रहता है उसका ये खामियाजा है, या जो कनेक्ट है आम जनता से वहाँ पर कहीं चूक हो गई, ये अपने आप में समझना होगा। देश रतन निगम जी हमारे साथ जुड़ गए। जी सर। जी निधि जी, आपने बहुत सही पकड़ा है कि नकारात्मक जो कैंपेन था वो ही रहा। देखिए, आप दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात थी भरोसा। अगर विपक्ष बिहार में अगर बोलता है कि सबको 30,000 दे देंगे या हर एक को नौकरी दे देंगे, कोई वहाँ विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ एनडीए है, वो उनका डिलीवरी देखिए ग्राउंड पे। इलेक्शन से पहले भी उन्होंने 10,000 दिए। प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स हैं उनमें भी 6,000 किसानों को जाता है और रेगुलर जाता है। तो एक विश्वास और भरोसा है। अगर ये एनडीए 5 रुपए भी बोलेगा तो देगा, दूसरी तरफ अगर 50 भी बोलेंगे तो उनका भरोसा नहीं, जैसा कर्नाटक में देखने को मिला, हिमाचल में देखने को लेकिन मिला। निगम जी, ये तो आप मानेंगे कि विपक्ष ने आप पर दबाव बनाया, और तभी तमाम जो आप लोगों की योजनाएं थी या नीतियां थी, आप लोगों ने डिलीवर किया। वो लोग वादे कर रहे थे, लेकिन क्या विपक्ष के ऐलानों का दबाव बना था? क्योंकि वो लोग भी 2,500 रुपए हर महीने की बात कर रहे थे। देखिए, वो तो बहुत समय से कर रहे हैं। भाजपा की जो स्कीम्स हैं वो बहुत पहले से चल रही हैं। जो 6,000 रुपए वाली है, ये 10,000 रुपए वाला था, उसको देखा देखी उन्होंने 30,000 किया कि बाद में हम आपको 30,000 देंगे। तो वो देखिए बाद में आया, वो इलेक्शन के एक दिन पहले आया। दिक्कत यही है कि एक तरफ विश्वास और भरोसा है, दूसरी तरफ सिर्फ पूरी प्रॉमिसेस हैं और कुछ नहीं। दूसरा, अगर आप ये देखें, मैंने जैसे आपको बोला कि MY फैक्टर जो महागठबंधन का था, वो MY फैक्टर सिर्फ बहुत ही कन्फाइंड था, मुस्लिम और यादव। दिक्कत ये है कि उसके अपोजिट में काउंटर, मैंने बोला ना आपको कि राघव आपके जो टीवी में है, उनका एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था।
आपके एनडी टीम, उन्होंने बोला उसका काउंटर जो महिला और युवा का एक गठबंधन बना माई फैक्टर ने उसको काउंटर कर दिया। महिलाओं के बहुत ज्यादा 12% वोट बैंक का जो इंक्रीज हुआ है वो भी काबिले तारीफ है। दूसरा नकारात्मक कैंपेन वोट चोरी का, देखिए आपको जो फीडबैक मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? जनता से मिलेगा। जनता ने जब अपने चारों तरफ देखा कि जो मर गया उसका ही वोट कटा है, जो वहां पर नहीं है कई सालों से सिर्फ उसका वोट कटा है, उसका वोट कटा ही नहीं जो असल में सच्चे वोटर्स हैं, तो फीडबैक वहां से लेना चाहिए। वोट चोरी देखिए सोशल मीडिया कैंपेन बन गया, जमीन से उसका कोई लगाव नजर नहीं आ रहा था और वो रिजल्ट्स भी बता रहे हैं कि उसका लोगों पे असर नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने अपने चारों तरफ देखा कि कोई भी सच्चा जेन्युइन वोट नहीं कटा। दूसरा, अगर हम ये देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ, रोड्स अच्छी बनी बहुत सालों में, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा सुधार हुआ, तो ये सारी चीजें, और लिकर बैन जो शराब की पाबंदी है, महिलाएं आज भी उससे खुश हैं। लोग इधर उधर से खरीद के ले आते हैं गलत तरीके से, लेकिन महिलाएं बहुत खुश हैं इस चीज को लेके कि लिकर बैन या शराब के ऊपर पाबंदी और बैन अभी भी लागू है, तो ये बहुत सही बात है। दूसरा, जो SIR हुआ, जो उसमें से जो गलत वोट थे, फेक वोट थे, वो सारे निकल गए और इस बार 90 लाख वोट करीब ज्यादा पड़े हैं। अगर उसमें सामान्य जो बढ़ोतरी होती है 25-30 लाख की होती है एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन में, 65 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं, तो उसका तो आपको असर देखना पड़ेगा। उसमें युवा भी आए हैं, सभी तरीके के लोग आए हैं और घर से लोग बाहर निकले हैं, जमीन पर काम हुआ है। दूसरा, जो समन्वय था JDU और पासवान जी की पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में, वो भी एक दूसरे लेवल का था। यहाँ तक कि मिस्टर प्रधान है जो बीजेपी के, वो सारा ही इलेक्शन कैंपेन अकेले ही संभाल रहे थे, सबका कोऑर्डिनेट कर रहे थे। यहाँ तक कि JDU का कैंपेन भी प्रधान जी ने संभाला हुआ था। तो दूसरा, मोदी जी की 4 रैलियां बहुत क्रूशियल थी, योगी जी की बहुत ज्यादा रैलियां वहां हुई और उन्होंने चिन्हित किए हुए थे कहां कहां पर करनी है। और जेपी नड्डा शायद इस इलेक्शन के बाद वो दूसरा कोई प्रेसिडेंट आ जाए, लेकिन वो बहुत शीर्ष स्थान पर होके जाएंगे। बिहार को जो उन्होंने डिलीवर किया है, तो मोदी जी, योगी जी, नड्डा जी, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान और HAM वगैरह जो भी हैं, इनमें बड़ा अच्छा समन्वय था और लोग घर से बाहर निकले। तुष्टीकरण की राजनीति का एक अंत हो चुका है। यहाँ पर लोगों को, विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। उनके पास कोई एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी नहीं है। बीजेपी ने ये किया तो हम आगे क्या करेंगे? या तो उनकी पॉलिसी में गलतियां निकालिए, बोलिए इस तरह से सुधार करें, वो हमें देखने को नहीं मिला। वो बार बार मैं हर इलेक्शन में बोलता हूं कि आपके पास अगर बीजेपी का ये प्रोग्राम है तो इसके बाद आपके पास क्या है उससे बेहतर, वो उनके पास कभी नहीं दिखा। इस तरह से बोल देना कि हम 30,000 देंगे, हर घर से नौकरी दे देंगे, इतनी नौकरियां तो देखिए युवा को समझ में आता है सरकार दे ही नहीं सकती। चलिए, आप कह रहे हैं विश्वास जीता और वाकई में उसका असर दिखा है। बिहार एक युवा प्रदेश है। हमारे साथ खास मेहमान है RJ अंजलि, हमारे साथ हैं, जेन जी जैसे कहा जाता है। अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है। तो रिजल्ट्स आ गए हैं, कैसा लग रहा है बताइए ज़रा, क्या भाव आपके अंदर? थैंक यू सो मच निधि मैम, एंड थैंक यू सो मच डिकोडर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। एंड आई रियली वांट टू से कि ये वो मोमेंट है जहाँ पर बिहार ने विकास को चुना है। बिहार ने वो जो स्टीरियोटाइपिंग हमें सोशल मीडिया या फिर बाकी जगहों पर है कि भाई बिहार जो है वो जात पात को लेकर वोट करता है, बिहार मतलब एक माइंडसेट पर ही वोट करता है, वो चेंज जो है वो देखने को मिला है। एंड बिहार इलेक्शन 2025 सबसे ड्रामेटिक इलेक्शन था क्योंकि एंड तक किसी को नहीं पता था कि यहाँ क्या होगा नहीं होगा, पर जो रिजल्ट आए हैं उससे एक कॉन्फिडेंस जो है वो देखने को मिला है कि लोगों का जो मत है वो एक है। वो एक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिहार के लिए अलग अलग डायलॉग्स, अलग अलग वॉइसेस हमेशा से रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर ये एक मत आया है जो एक क्लियर जिसको कहते हैं जनता की तरफ से एक जवाब जो है वो मिला है। बिल्कुल। अंजलि, आप रेडियो मिर्ची पटना में मौजूद हैं। महिलाओं के लिए खास तौर से कहा जा रहा है, इस बार श्रेय दिया जा रहा है किस तरह से बढ़ चढ़कर महिलाएं आई, उन्होंने वोट दिया। पैसे की बात हो सकती है लेकिन तमाम काफ़ी समय से 2005 से नीतिगत जो फैसले लिए जा रहे थे, साइकिल वगैरह आई। आप तो बहुत यंग हैं, क्या आपको आभास
लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहा है पिछले कुछ बरसों में? क्या आपका उस लिहाज से आंकलन है? निधि मैम, मैं 18 साल से पटना में एज अ रेडियो जॉकी हूँ और मैंने 2007 से नीतीश जी का और यहाँ के हर एक इलेक्शन को मैंने बड़े करीब से देखा है। महिलाओं का जो रोल है वो डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट रोल था और ये जो हमसे पहले जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने जैसे कहा कि वो साइकिल योजना हो, वो बैन हो, लिकर बैन हो, ये सबका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। एंड दैट ट्रम्प कार्ड जो कि एकदम लास्ट मिनट पर कि 10,000 रुपीज़ जो है वो महिलाओं को स्पेसिफिकली जो है वो दिया गया, तो ये इन सबका एक बहुत बड़ा रोल ऑफ कोर्स प्ले होता है। एट द सेम टाइम हमको लगता है कि छोटे शहरों की महिलाएं जो है वो बड़ी वोकल हो रही हैं और इसका रीज़न अगेन सोशल मीडिया भी है। कहते हैं कि जो दिखता है वही आप सामने में लेकर आते हैं। सो ये एक बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग सारी तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो चीज़ें दिखाई गई, जिस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया गया, महिला वोटर्स जो हैं उन्होंने अपना रिजल्ट जो है वो इस इलेक्शन में दिखाया है। बिल्कुल। बिहार जो है कई मानकों में आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन कई मानकों में पीछे भी रहा है। क्या आप अपनी सरकार से कहेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया भाई ये तो सुशासन की जीत है, विकास की जीत है, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं या आप क्या चाहेंगी सरकार से कि जो अब इम्प्लीमेंट होना चाहिए? क्यों हम अपने आप को सबसे कमतर स्तर से उसका कंपैरिजन करें? क्यों नहीं आगे बढ़कर? जी एब्सोल्युटली, मैं कहती हूँ नियत साफ होनी चाहिए। बिहार को लेकर नियत जो है, क्रेडिबिलिटी जो है वो किसी भी पार्टी के हों और किसी भी आप गवर्नमेंट को बिलोंग करते हो, वो बहुत साफ होनी चाहिए। मुझे जो सबसे बड़ा मुद्दा लगता है इस इलेक्शन से या फिर जिस तरीके से वोट दिया गया, माइग्रेंट। हमें हमेशा माइग्रेंट कहा जाता है कि बिहार होकर भी बिहार में नहीं है हम। तो ये जो बिहारी छठ के टाइम में 20 लाख हमारे जो बिहारी हैं वो अपने घर आते हैं, तो वो 20 लाख लोगों के लिए घर नहीं छूटना चाहिए। जैसे कि महिला वोटर्स की बात हुई, तो महिला वोटर्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं, वो महिलाएं जो घर पर हैं और जिनके पति हैं, जिनके घर वाले बाहर कमा रहे हैं, उनको वापस घर पर लेकर आना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो रहा है। हम अभी भी बेसिक 3 चीज़ों पर ही बात करें, इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे यहाँ रोड्स है, ये बहुत ही बेसिक है और ये बहुत ही बेयर मिनिमम है। बेयर मिनिमम से अब बिहार को ऊपर उठना है। रोजगार, माइग्रेंट जो है, हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको बेहतर करना है। क्योंकि अगर आप दिल्ली एम्स में देखने जाएंगी तो शायद आपको पता चलेगा कि 70 से 80% पेशेंट वहाँ पर पटना के ही लोग रहते हैं। और मैंने किसी का इंटरव्यू पढ़ा तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ के पॉलिटिशियन का जो विजन है कि भाई इसकी पैरवी कर देंगे, उनका ट्रांसफर कर देंगे, वही रहता है। तो पैरवी नहीं और ट्रांसफर नहीं, असल में काम, स्कूल बेहतर होना, शिक्षा बेहतर होना या फिर स्वास्थ्य बेहतर होना, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए पॉलिटिशियंस के लिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। मुझे बताया गया आप गाती भी हैं, तो क्या हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाएंगी? दीदी मैम, हम गाना सुनाते हैं रेडियो पर, गाना गाते तो नहीं है, बट दिस इज द मोमेंट। हम बस यही कहना चाहेंगे, जिया हो बिहार के लाला। और जहाँ पे भी बिहारी हैं, कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी। तो ये जो इतना भारी भरकम हमने रिजल्ट दिया है, एक बहुमत जो सरकार को हमने दिया है, उनका भारी भरकम काम है वो बिहार को करके देना है। एंड यही एक विश होगी थ्रू दिस मीडियम। या नीतीश कुमार से आप क्या कहना चाहेंगी? नीतीश जी से हम बस इतना कहना चाहेंगे, उनके लिए एक इमेंस रिस्पेक्ट है। मुझे लगता है इस देश में ऐसे कोई नेता नहीं होंगे जिन्होंने इतना ज्यादा किसी स्टेट को सर्व किया है। उनकी इमेज जो है वो बोलती है, तो हम उनको बस रिस्पेक्ट देना चाहेंगे। एंड वो बस कहना चाहेंगे कि वो जो करते आए हैं, जो उनकी मंशा है वही मंशा रहे, और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके विजन को समझकर काम करेंगे तो बिहार का काम हो जाएगा। हमको लगता है नीतीश कुमार जो चाहते हैं, अगर वो उनके पार्टी के लोग, उनके लोग यदि वो समझ जाएं तो बिहार का काम हो जाएगा। अच्छा, जो विपक्ष के नेतागण हैं, तेजस्वी हैं, कांग्रेस के राहुल हैं, वो आते हैं, कैसा आपका असेसमेंट है उनका? जो आते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कनेक्ट कर पाते, या विश्वास नहीं बना पाते जेन ज़ी उनके साथ, ऐसा है क्या? आई थिंक
जो कुछ भी 20 साल का पहले रहा है वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। I mean, उनको काम करना पड़ेगा। और एक और चीज़ है कि नेगेटिविटी अब कोई नहीं सोचता है या बातें, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी स्टोरीज नहीं दे रहे हैं। आप उनको ये नहीं बता रहे कि वो क्या बदल सकते हैं। बदलना बस डायलॉग्स में नहीं, बल्कि ऑन पेपर, या फिर हाँ 5 साल में हम शायद ये प्लांट लगाएंगे और इससे 500 नौकरियां जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये इन्फॉर्म्ड जनता है, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, आपने बहुत अच्छी तरह बात रखी। और बता दूं, तस्वीरें जो बगल में देख रहे हैं वो बीजेपी मुख्यालय की हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए हैं और जाहिर है इसके कुछ ही देरों में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री भी आएंगे और मुख्यालय में तमाम नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं अगवानी के लिए। और ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी का है। प्रचंड बहुमत के साथ अब एनडीए जो है बिहार में सरकार बनाएगी, तो उत्साह जो है वो लाजमी सी बात है यहाँ पर लोगों का। साथ ही साथ अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद है, मनोहर खट्टर यहाँ पर तो बाहर ठंड हो रही है, चाट का आनंद लिया जा रहा है बीजेपी के दफ्तर में। देश रत्न निगम जी, बहुत महत्वपूर्ण रही एनडीए की ये जीत और बीजेपी मुख्यालय में जाहिर तौर पर एक महोत्सव सा माहौल है। हम देख सकते हैं लोग चाय का आनंद उठा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। आप बताइए, पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है बिहार की जीत। बिहार के चुनावों और उसके नतीजों को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी कि इसका देश की राजनीति पर भी असर होगा। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए निधि जी, ये एक टर्निंग पॉइंट है बीजेपी की अपनी राजनीति में, देश की राजनीति में। इससे एक चीज ये हो गई कि जात पात से ऊपर उठ के लोग वोट दे रहे हैं और तुष्टीकरण काम नहीं करेगा। ये दो चीजें अगर स्थापित हो गई हैं तो भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। और भाजपा का आगे देश में मेरे ख्याल से इसी तरह की रणनीति रहेगी। वैसे हर राज्य की अलग रणनीति होती है भाजपा की, जो कि हमने देखा है बहुत सालों में। लेकिन दो चीजें बिहार में स्थापित होना, जो कि सीमांचल वगैरह एरिया है जहाँ पे 70% से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ कहते हैं, कई सारे इलाके हैं, तो और दूसरी तरफ बाकी सारे लोगों का एक साथ आना, ये एक टर्निंग पॉइंट है भारत की राजनीतिक इतिहास में। और 202 तक पहुंचना, अभी जो आप खबरें आ रही हैं, और 35 महागठबंधन की आरजेडी की जो 35 सीटें, उसमें 4, 5, 6 सीटें ऐसी हैं जिसमें मार्जिन बहुत लो चल रहा है। 500, 400, 600 इस तरह का भी मार्जिन कम से कम 5-6 सीटों पे चल रहा है। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर वो भी अगर उसमें कई सारे अभी राउंड्स बाकी हैं, तो वो भी अगर आता है तो और भी ज़्यादा रिजल्ट भाजपा के और एनडीए के लिए सुहावने हो जाएंगे। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, मैंने 2 बिंदु जो आपको बताए कि जात पात से ऊपर उठ के वोट देना, विकास की राजनीति होना और तुष्टीकरण काम नहीं करेगा।
अपोजिशन पार्टीज को, विपक्ष को अब थोड़ी सी अपनी जो नीतियां हैं, रणनीति है, उसको बदलना पड़ेगा। और एंटी हिंदू और यहाँ तक कि मोदी जी का विरोध करते करते भारत विरोध जो होने लगता है, उस पर भी उनको थोड़ी सी लगाम लगानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद से ऊपर कुछ नहीं है। भारत को विश्व गुरु बनना है और समाज में सामाजिक समरसता रहनी है। तो इन सब चीज़ों पे सबको ध्यान देना पड़ेगा। ये किसी एक पार्टी का नहीं है, राष्ट्र की बात है। और दूसरा बहुत सकते हैं जी, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही थी। रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह भी आ गए हैं, बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। इन तस्वीरों को हम दिखाते रहेंगे। आशीष रंजन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आप तो बिहार गए होंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो ये तस्वीरें हम दिल्ली की मुख्यमंत्री हम देख सकते हैं, रेखा गुप्ता भी पहुंच गई हैं। तो आशीष, आपका आकलन, आप क्या गए थे बिहार और क्या आकलन है नतीजों पर? देखिए, हम तो थे, मेरी नहीं सबकी ऑलमोस्ट ये चीजें तो थी कि एनडीए को ये थी, क्योंकि अर्थमेटिक्स में जो है वो एनडीए आगे, हालांकि हमने एक पोस्ट को क्लोज प्रोजेक्शन किया था, क्योंकि हम उन चीजों से बचना नहीं चाहते हैं कि अब कुछ अलग हो गया तो ये का, लेकिन ये जो गैप बन सकता है आएंगे आशीष, आपके पास भी आगे आएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप बीजेपी मुख्यालय की देख रहे हैं। आप देख सकते हैं रास्ते में फूल बिछा दिए गए हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे और बीजेपी मुख्यालय के ये दृश्य थे। तो ये तमाम आज शाम हो चुकी है, शाम के 6:20 होने वाले हैं। बीजेपी में जाहिर तौर पर जश्न का माहौल है। देश रत्न निगम जो वरिष्ठ विश्लेषक भी हैं, उनका ये कहना है कि ये टर्निंग पॉइंट है एक तरह से बीजेपी की राजनीति के लिए। अपने आप में किस तरह से उन्होंने इतना मजबूत प्रदर्शन यहाँ पे किया है। अगर देश रत्न निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सर आप कह रहे थे बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट होगा, फूल बिछा दिए गए हैं। भावी राजनीति या क्या संकेत? प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि सुशासन की, विकास की राजनीति है। युवाओं और महिलाओं का उन्होंने धन्यवाद किया है। निधि जी, जब भी आप कोई वचन देते हैं कि एक कुछ भी आके आपने बोल दिया, इसलिए एक तरफ भरोसा था, दूसरी तरफ खाली शब्द थे, तो लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। दूसरा, कांग्रेस की अपनियां हैं। कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आजकल उसका आचरण हो गया है। अगर आप देखें जो साफ हो जाए उसका माफ़ी चाहती हूँ सर, माफ़ी चाहती हूँ। आपकी आवाज़ का ठीक कनेक्ट करेंगे आपको एक बार फिर से। और ये इस समय हम देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के दृश्य हैं। कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, नेतागण मौजूद हैं और पटना में भी बीजेपी मुख्यालय पर, वहाँ पर भी और जेडीयू दफ्तर में भी जाहिर तौर पर जश्न हो रहा होगा। अपने सहयोगियों के पास हम वहाँ पे चलेंगे, मनीष के पास जाने की कोशिश करेंगे, आलोक पांडे के पास भी जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह की रौनक है। और फिलहाल नतीजे तो तमाम सामने आ गए हैं, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने बोला था कि लोग, विधायक अपने जाके सर्टिफिकेट्स लें, और इस तमाम तरह की गतिविधियों के बीच आज शाम 6:30 बजे ये वो समय है जब बिहार में विधानसभा चुनाव के 2025 के जो नतीजे आए हैं, अप्रत्याशित जीत एनडीए गठबंधन को मिली है और तमाम वादों के साथ, वादों इरादों के साथ जो है नीतीश कुमार एक बार फिर से यहाँ पर सत्ता की कमान संभालेंगे। तमाम चीज़ें जो हैं वो पक्ष में गई एनडीए गठबंधन के। जिस तरह से एकजुट होकर यहाँ पर तमाम गठबंधन के नेताओं ने अपनी प्रचार किया, वायदे किए, दूसरी तरफ जो विशेषज्ञ आ रहे थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि एक तरफ वायदे हो रहे थे तो दूसरी तरफ डिलीवरी हो रही थी और इस तरह से क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस विपक्ष के तरफ थी, इधर कोई काबू नहीं थी। नीतीश कुमार एक चेहरा बने हुए थे, कोई विकल्प ना होना और जंगल राज का जो आरोप लगता रहता है वो
अपने आप में लोग बार बार सामने आ रहा था। तो लगातार हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगियों से बात करने की और हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं उनसे जुड़ने की और समझने की कि इस समय, क्योंकि हम बीजेपी मुख्यालय के दृश्य दिखा रहे थे और ये नतीजे सामने दिखा रहे हैं, तो यही आंकलन कि क्या इसके अब आगे मायने होंगे, आगे बढ़ें तो किस तरह से आगे का राह निकलती है बीजेपी के लिए केंद्र में और नीतीश कुमार और जेडीयू और बीजेपी के लिए बिहार जैसे राज्य में। तो प्रधानमंत्री का तो ट्वीट हमने आपको बताया जिस तरह से आया था, और ये अपने आप में कोशिश करेंगे हम बात करने की। अगर हमारे साथ देश रत्न निगम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनसे कनेक्शन मिल चुका है। जी मिस्टर निगम। तो मनीष कुमार मुझे बताया जा रहा है, कोशिश करेंगे मनीष से बात करने की, क्योंकि लगातार सुबह से मनीष बने हुए थे। तो आइए हम आगे बढ़ते रहेंगे लगातार और आपको इन ग्राफिक्स के ज़रिए जो आंकड़े हम सबके सामने हैं वो दिखाएंगे। एनडीए का देखिए इस समय 201 पर है, 243 तमाम रुझान आ चुके हैं और किस तरह पिछली बार 2020 के चुनावों से पहले 79 सीटों पर आ गए। बीजेपी 15 सीटों पर आगे चल रही है, जेडीयू 41 सीटों पर आगे है और ये बीजेपी से 5 सीटों पर कम है। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी हम देख सकते हैं 19 सीटों से हासिल हुई है और अब ये विपक्ष महागठबंधन 36, आरजेडी 25 सीटें मिली, कांग्रेस को 6, पिछली बार 19 मिली थी। आरजेडी को पिछली बार 75 सीटें मिली थी, 50 सीटें कम होना, 13 सीटें कम होना, 78 सीटें खुद महागठबंधन में हम देखें कम हुई हैं। सीपीआई एमएल हम देख सकते हैं 9 सीटों पर इसको खामियाजा भुगतना पड़ा है, 3 सीटें इस बार जीती है। तो ये अपने आप में बीजेपी मुख्यालय से भी ये तस्वीरें आ रही हैं और जो हम देख सकते हैं वोट शेयर एनडीए का पिछली बार से किस तरह से 6% बढ़ा है। महागठबंधन का सिर्फ 1% का नुकसान है। अगर देखा जाए जो वोट कंपोजिशन है 1% का ही नुकसान है। जन स्वराज पार्टी को 3% अपने वोट मिले और अन्य को 12 और पिछली बार 20, तो जो अन्य के कम हुए 8% लगता है वही एनडीए को इस बार फायदा ज़्यादा हुआ है। महागठबंधन को जो नुकसान हुआ है वो 1% का ही हुआ है। रेणु देवी बीजेपी की बेतिया से हैं, ये जीत गई हैं। पिछड़े वक्त से आती फॉर्मर डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री रहीं, ये चुनाव जीती हैं। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गोविंदगंज से ये चुनाव जीत गए राजू तिवारी। प्रमोद कुमार बीजेपी मोतिहारी से चुनाव जीत गए। समीर महासिर आरजेडी के हैं, मधुबनी से ट्रेलिंग दरभंगा इलाके में ये आता है और फिलहाल अभी यहाँ पे स्थिति स्पष्ट नहीं है, पीछे ही चल रहे हैं। नीतीश मिश्रा बीजेपी झांझरपुर से जीत गए हैं, दरभंगा इलाके से नीतीश मिश्रा जीत गए बीजेपी के। अख्तरुल रहमान एआईएमआईएम के जीते हैं। इस बार एआईएमआईएम ने खासा बेहतर प्रदर्शन किया है, अपने आप भी सीटें जीती हैं और अपने सहयोगियों को भी फायदा दिला दिया है। लेसी सिंह जेडीयू एनडीए से जीत गई हैं, धमदाहा से ये चुनाव जीती हैं। शकील अहमद खान कांग्रेस के महागठबंधन के थे, कटवा पूर्णिया रीजन से कद्दावर नेता माने जाते थे, ये चुनाव हार गए। महबूब आलम सीपीआई-एमएल बलरामपुर से पीछे ही चल रहे हैं और इनकी शिकस्त बड़ी शिकस्त मानी जा रही विपक्षी खेमे के लिए। जेडीयू एनडीए आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव जी आगे चल रहे हैं। ललित कुमार यादव आरजेडी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, ये भी पीछे ही चल रहे हैं दरभंगा ग्रामीण से। संजय सरावगी बीजेपी के नेता जीत गए हैं दरभंगा से।
अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के सीवान से हार गए। केसीलाल यादव आरजेडी के छपरा से पीछे ही चल रहे हैं। कई नेता विवादों में आए, बातें चली और शिवानी शुक्ला आरजेडी की लालगंज से हार गई। तेज प्रताप यादव, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, महुआ से चुनाव हार गए। तेजस्वी यादव आरजेडी के प्रमुख राघोपुर तिरहुट रीजन से जीत गए। जेडीयू के उमेश सिंह कुशवाहा मानार से जीत गए हैं, ये भी तिरहुट इलाके में ही आता है, चुनाव जीत गए। विजय कुमार चौधरी जेडीयू नेता सराय रंजन से आगे चल रहे, वरिष्ठ नेता हैं। तो आइए
बीजेपी ऑफेंस। और तो आप ये देख रहे थे जिस तरह के आज नतीजे आए हैं। बिहार के हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। मनीष, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में रौनक है, तमाम नेतागण वहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार हो रहा है प्रधानमंत्री आएंगे, संबोधित करेंगे। आप पटना में मौजूद हैं, वहाँ से क्या खबर इस समय? खासकर पटना में भी काफ़ी बीजेपी दफ्तर में आज पूरे दिन भर जश्न का माहौल रहा। जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में भी काफ़ी इस जो जीत हुई है उसका जश्न मनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में अभी भी जो परिणाम आ रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। इसलिए अभी भी जो बड़े नेता हैं जैसे संजय झा हो या ललन सिंह जैसे, तो वो अभी निकल के उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन लोगों का कहना है कि जब तक पूरा परिणाम नहीं आता है उसके पहले अपनी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। यानी कि एक एक सीट की मॉनिटरिंग हो रही है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि कई सारी सीट हैं जिसका मार्जिन काफ़ी कम है। और अभी अब अगले 2 से 3 घंटों में सारी 243 सीटों का परिणाम सार्वजनिक हो जाएगा। लेकिन निधि फिलहाल आप कह सकते हैं कि जहां तक जश्न मनाने का सवाल है तो वहां पर अभी थोड़ा से बीजेपी कहीं ना कहीं जेडीयू से आगे दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में काफ़ी मेहनत किया है, कई सारी 10-12 से अधिक उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया है। पिछले 6 महीनों से उन्होंने कहीं ना कहीं बिहार में अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया हुआ था। कई बार वो सरकारी कार्यक्रमों के बहाने बिहार में अलग अलग जिलों का उन्होंने दौरा किया, कई कार्यक्रमों में भाग लिया। तो निश्चित रूप से उनके तरफ से ये जो अभी बीजेपी मुख्यालय पर जीत का जश्न मनाया जाएगा उसकी एक अलग छटा होगी, उसको एक अलग तरीके से आप कह सकते हैं काफ़ी भव्य तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है तो थोड़ा सा वहां पर वेट एंड वॉच अभी भी चल रहा है। जीत को लेके किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जीत गए हैं, सरकार उन्हीं की बननी है। लेकिन एक तरह से जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नंबर को लेके कि किसका नंबर ज़्यादा होता है, हालांकि उसमें भी बीजेपी का नंबर साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट जो है कहीं ना कहीं जेडीयू से कहीं बेहतर रहा है। लेकिन अभी भी जेडीयू को उम्मीद है कि आखिरी के कुछ घंटों में जो है उनके उम्मीदवार जो है बाकी बचे हुए राउंड्स में अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपने विरोधियों को हराने में कामयाब रहेंगे, जिसके कारण जेडीयू और बीजेपी में जो सीटों का अंतिम जो आंकड़ा होगा उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। निधि, जिस तरह से आपने बताया कि जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के, उनके आवास में फिलहाल मंथन चल रहा होगा, वरिष्ठ नेता जेडीयू के पहुंचे होंगे। जो नीतीश कुमार है बहुत गहरे नेता हैं। आप जिस तरह से भी तमाम लोग यहाँ पे बता रहे थे, उन्होंने भी, नीतीश कुमार ने भी 130 रैलियाँ की। कहीं पर बारिश हुई तो वो चले गए थे, गाड़ी से चले गए लेकिन चले गए, बहुत मेहनत उन्होंने भी की है। अगर कम आते हैं आंकड़े बीजेपी से, पिछली बार भी आए थे लेकिन इस बार भी अगर कुछ कम आते हैं तो उसके क्या मायने, क्या उसके कुछ क्या असर उसका हो सकता है? कितनी परिस्थितियां पिछले बार के चुनावों में और इस बार के चुनावों में बदली हैं? पिछली बार ये एलजेपी अलग से लड़ी थी तो कहा गया उसकी वजह से कम सीटें आई हैं। इस बार 7 लड़े हैं और सबकी जो तमाम गठबंधन सहयोगियों सबकी सीटें बम्पर, सबको सीटें मिली हैं। नीतीश इस समय क्या उनके जहन में चल रहा होगा? आप तो करीबी से जानते हैं उन्हें। देखिए, नीतीश कुमार जिस प्रकार के राजनीतिक खिलाड़ी हैं, जितने अनुभवी नेता हैं, तो हर नेता की एक ही महत्वाकांक्षा होती है कि वो और उसका दल जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। और 2010 के बाद जितनी भी चुनाव हुए हैं उसमें नीतीश कुमार या तो नंबर 2 2015 में रहे थे, 2020 में नंबर 3 की पार्टी बनकर उभरे थे। इस बार उनको ये फीडबैक था कि जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार हैं उनका प्रदर्शन इतना बेहतर होगा कि जनता दल यूनाइटेड हो सकता है कि इस बार एक बार फिर 15 वर्षों के बाद नंबर 1 की पार्टी बने। और आज दिन भर जो चुनाव के परिणाम या जो रुझान रहे हैं उससे थोड़ी सी उनको इस जो उनका लक्ष्य रहा है
वो उसे ना पाने की कसक तो जरूर रही होगी, इसलिए वो अपनी प्रतिक्रिया देने में थोड़े से अभी आप कह सकते हैं कि अब बच रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोई पूरे चुनाव के दौरान कभी भी कोई साउंड बाइट या कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन जीत के बाद तो उनकी प्रतिक्रिया बनती है। लेकिन अब लग रहा है कि शायद ये सारी जो जीत के बाद की औपचारिकता होती है प्रतिक्रिया देने की, वो शायद कल हो, क्योंकि कल तक जो है आज रात 10 बजे तक सभी सीटों के परिणाम आ जाएंगे। कल तक कई सारे जो विजेता उम्मीदवार हैं, जो विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनकी संख्या काफ़ी अधिक है, तो वो भी उनके पास जुटेंगे। उसके बाद तय होगा कि एनडीए विधायक दल का बैठक कब होगा। लेकिन अभी यही माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने उनके चेहरे पर इतनी बड़ी जीत मिली है, तो एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही विधायक दल में निर्वाचित होंगे। निधि जी, मनीष, आपका आकलन जितने क्या कुछ बड़ा उलटफेर हुआ कुछ सीटों को लेकर, कुछ चेहरों को लेकर जिनको माना जा रहा था, भले ही वो विपक्ष के नेता हो कि नहीं वो तो जीतेंगे ही सुनिश्चित था, लेकिन वो हार गए, ऐसे कौन से चेहरे जिनको आप मेंशन करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे देखिए ये जब चुनाव शुरू हुआ और जब जैसे ही घोषणा हुई कि 1,60,00,000 लोगों के खाते में 10,000 रुपये जाएगा, तो लोगों को कोई इस बात को लेके इस चुनाव के आउटकम को लेके कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। दूसरा सच ये भी है निधि, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि बिहार में 3 राजनीतिक दल हैं, तीनों में से 2 जब भी एक साथ होते हैं तो तीसरे की हार होती है और जो 2 साथ होते हैं उनकी जीत होती है। लेकिन इतनी बड़ी विक्ट्री होगी, यानी कि ऑलमोस्ट ये 2010 का रिपीट है, तो उसके कारण जो है जब आपका लैंडस्लाइड विक्ट्री होता है तो आपके कई सारे पिछड़ते हुए उम्मीदवार जीत जाते हैं और जो आपके विरोधी होते हैं उनके जो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबल्स होते हैं, जो उनके कंटेंडर्स होते हैं, या जो कई सालों से, जैसे दरभंगा ग्रामीण एक सीट है, ललित यादव वहां से 1995 से वो सीट जीत रहे थे, लेकिन आज उनको हार का मुंह देखना पड़ा, मार्जिन भले ही कम हो। तो ये जैसे सीवान की सीट है, अवध बिहारी चौधरी वहां से 1990 से जीतते रहे हैं, हारे भी थे और आज फिर उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो ऐसे कई सारी सीटें, जैसे सेंट्रल बिहार में खासकर जो आरा रोहतास का जो रीजन है वहां पर सीपीआईएमएल का गढ़ माना जाता था, सीपीआईएमएल के उम्मीदवार हारे, आरजेडी के उम्मीदवार भी हारे हैं, मार्जिन भले ही कम हो। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब आपका अंडर करंट हो और वो लैंडस्लाइड में कन्वर्ट हो जाए, वैसे में आप बहुत सारी सीटें अप्रत्याशित रूप से जीतते हैं और आपके विरोधी को हार का मुंह देखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार आप तो अब बने रहेंगे, शाम तक डिकोडर पर ये चर्चा और मंथन चलता रहेगा। दूसरी तरफ मैं जानना चाहूँगी, वहाँ पर जो विपक्ष का खेमा है, तेजस्वी के घर से, लालू प्रसाद यादव के घर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई, या वहाँ पे उनके कुछ करीबी कुछ कह रहे हैं रिजल्ट्स को लेकर? देखिए, रिजल्ट्स का जो उनको अंदाजा था कि इस बार जो है जीत उनके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन जब कैंपेनिंग चलता है, तेजस्वी की सभाओं में जैसी भीड़ होती थी, तो शायद उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतनी करारी हार का मुंह देखना पड़ेगा। और जो वोटिंग के बाद भी उन्हें जो फीडबैक मिल रहे थे, उन्होंने नए अलायंस किए थे, तो उनको लगता था कि कहीं ना कहीं सोशल अलायंस के लेवल पे उन्होंने एक अच्छा खासा अलायंस फॉर्मेशन किया है, जिसके कारण जो है ये चुनाव क्लोज रहेगा, मार्जिन इतना बड़ा नहीं रहेगा। लेकिन आज के परिणाम के बाद सकते में हैं, सदमे में हैं, लेकिन हाँ, उनके लिए एक बड़ी बात ये रही कि तेजस्वी यादव फिर से राघोपुर से चुनाव जीतने में सफल रहे। भले ही उनका मार्जिन जो है पिछले 2 चुनावों की तुलना में इस बार कम रहा है, लेकिन वो फिर से विधानसभा पहुंच गए हैं, तो लालू परिवार के लिए ये बड़ी राहत की खबर रही। लेकिन हाँ, पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं अब मुखर हो रहे हैं और वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि जो बाहरी लोग हैं, क्योंकि खासकर तेजस्वी यादव के एक करीबी हैं राज्यसभा सांसद संजय यादव जो हरियाणा से आते हैं, उनको अब निशाने पर रखकर बड़े नेताओं की, पार्टी के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है
कि उनको इतना ज़्यादा अहमियत दिया जा रहा था और पार्टी के जो पुराने नेता हैं उनको सुना नहीं जा रहा था, जिसके कारण आज इतनी राजनीतिक दुर्गति का उनको मुंह देखना पड़ रहा है। निधि। बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस आंकलन के लिए। आप तो बने रहिए। मैं दोपहर 2 बजे से यहाँ पर इस मंच पे थी। फ़िलहाल मैं फ़िलहाल अभी मेरे साथ इतना ही, और कुछ ही देर में आप देखते रहेंगे कि जो नतीजे सामने आए हैं, रुझान सामने आए हैं, वो स्लाइड चलती रहेंगी, और कुछ ही देर में निधि राजदान यहाँ पर आएंगी डिकोडर पे, और डॉक्टर रॉय आएंगे, और ये चर्चा आगे बढ़ेगी। तो अंत में मैं बधाई देती हूँ एनडीए को, और जो विपक्ष है उनको इस समय मंथन करने की ज़रूरत है। एक तरफ बधाई तो दूसरी तरफ मंथन, विचार मंथन कि क्या खामियां रह गई, और जीत के बाद जब जीत मिलती है तो उसके बाद दायित्व और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ नमस्कार।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री मोदी जी को रिसीव किए हैं केंद्रीय कार्यालय में। प्रधानमंत्री मोदी जी के देख किस प्रकार से भव्य भक्त मोदी 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 नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, दोनों हाथ उठा के नरेंद्र मोदी 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 नरेंद्र मोदी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह 200 एनडीए की 4 सीटें जो आई है ये ऐतिहासिक है। अब यह इसलिए हुआ है कि मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी 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 मोदी। अपने नेता का किस प्रकार से स्वागत अभिनंदन केंद्रीय कार्यालय में हो रहा है। कार्यकर्ता स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हृदय से अभिनंदन और वंदन पानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कर रहे हैं। इतनी बड़ी ऐतिहासिक विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। फिर नारा लगाएंगे मोदी 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 नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और वंदन करने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार राज्यों में विजय भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, एनडीए को हो रही है। ऐसे अपने नेता जो गांव गरीब किसानों के मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, वह प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए आप सब आए हैं। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय कार्यालय में आ चुके हैं। भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ चुके हैं। माननीय गृह मंत्री जी आ चुके हैं। सभी का अभिनंदन और वंदन करते हैं। जोरदार तालियों के द्वारा अभिनंदन करिए। सभी नेताओं का अभिनंदन करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी बस शीघ्र ही मंच पे आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी 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 नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, वह उनको मसीहा के रूप में देखती है। जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी 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 नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी 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 नरेंद्र मोदी। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और जिन्होंने गरीबों के जीवन के उत्थान के लिए अनेकों काम किए हैं। गरीब है, किसान है, महिला है, सभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्नेह करती हैं, प्यार करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड अलग अलग राज्यों में जीत रहे हैं और बिहार में 204 सीटें एनडीए को जी मिली हैं अभी तक। यह जो रुझान मोदी जी के नारा लगाई है, मोदी जी के कारण। मोदी है तो नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी लगा नरेंद्र मोदी
मोदी मोदी मोदी मोदी। हम भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम सबके बीच में मंच पे भारत सरकार के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित भाई शाह का जोरदार अभिनंदन और वंदन तालियों के द्वारा अभिनंदन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी 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 नरेंद्र मोदी 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 नरेंद्र मोदी 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 नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। बिहार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड विजय हुई है। मैं आदरणीय जेपी नड्डा जी से, राजनाथ सिंह जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी कार्यकर्ता जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी 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 मोदी। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और देश भर के कार्यकर्ताओं को, जनता को संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस धन्यवाद सभा में उपस्थित हम सबके बीच में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और यहां उपस्थित देवी और सज्जनों, पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, कार्यकर्ता प्रेमी, पार्टी के प्रेमी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो आज इस जनता को धन्यवाद देने के कार्यक्रम में मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, भारत के करोड़ों कार्यकर्ता जो टेलीविजन से जुड़े हैं, बिहार के लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात एक किया और यहां उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है।
स्वागत के साथ साथ जो बिहार की जनता ने प्रचंड जो जनादेश दिया है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बिहार की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस जनादेश ने, जो जनादेश ही नहीं, नतीजे बताते हैं कि यह सुनामी है। इस सुनामी में इस बात को स्पष्ट कर दिया है, बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है। हम जानते हैं यह चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े स्पष्ट रूप से विकास बनाम जंगल राज के बीच था और लोगों ने विकास को जनादेश दिया, उस पर मुहर लगाई और विकास को आगे बढ़ाने का संदेश स्पष्ट बिहार की जनता ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट है, विकास की राजनीति, प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, प्रो एक्टिव गवर्नमेंट है और जो डबल इंजन की सरकार है, उसको स्पष्ट अपना जनादेश देकर बिहार की जनता ने सुनामी के रूप में स्पष्ट कर दिया है। जैसा मैंने पहले कहा, यह रोड मैप विकास का जो था, उसने जंगल राज को बिहार की धरती पर नो एंट्री का स्पष्ट संदेश दे दिया है। मैं यहां यह भी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, हमें जब 2024 में लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ कम हो गई। ये घटना भारत की जनता को और भारत के मतदाताओं को नागवार गुजरा है, नागवार गुजरा। उन्हें विश्वास नहीं रहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई और यह जो उनके मन में दर्द, यह जो कसक, यह जो टीस और जो मन व्यथित हुआ, यह जो पीड़ा हुई, भारत की जनता ने तय कर लिया कि अगले कोई भी चुनाव आएंगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास बताएंगे और जनता को बताएंगे। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम का नतीजा है और ये अटूट प्रेम और विश्वास भारत की जनता ने 2024 के चुनाव के बाद हर चुनाव में स्पष्टता से दिया है। हरियाणा में चुनाव हुआ, हमारी लोकसभा में सीटें कम हुई थी, उसका मुंहतोड़ जवाब हरियाणा की जनता ने दिया और तीसरी बार हैट्रिक सरकार बना करके दी, ये हमारे ध्यान में आया। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी लोकसभा में कुछ हमारी सीटें कम हुई, महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आया, महाराष्ट्र की जनता को नागवार गुजरा और जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने सूद समेत वापसी की और पूरी की पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाई। हम लोगों ने यहीं, आप सब दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने इसको स्पष्ट रूप से देखा कि जब दिल्ली के चुनाव आए तो आपके नेतृत्व पर अटूट विश्वास रखते हुए दिल्ली की जनता ने भी 3 दशक बाद पूरी ताकत के साथ
भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनाई। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला और अब भारत की जनता ने यह स्पष्ट मान लिया है कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हमें भारत को विकसित भारत आपके नेतृत्व में ले जाना है, आपके नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाना है, आपके नेतृत्व में भारत को विकास के साथ जोड़ करके चलना है। और इसलिए जब जब चुनाव हो रहे हैं, बार बार पूरी ताकत के साथ अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके चुनाव में जनता वोट दे रही है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यही हमको आज के नतीजों में भी बिहार की जनता ने बता दिया है। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट हमको देखने को मिला है। और आपने तो बहुत पहले चुनावी सभा में बताया था कि 14 तारीख का इंतजार करें और 14 तारीख को बिहार की जनता स्पष्ट संदेश देगी, और बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। ये अभूतपूर्व समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को अटूट प्रेम और अटूट विश्वास का नतीजा है। ये डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता को चाहिए, ये स्पष्ट संदेश है। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ अटूट विश्वास जनादेश ने दिया है, वहीं नीतीश कुमार के सुशासन पर भी मुहर लगाई है और उनको भी ताकत दी है। इसलिए जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो केंद्र सरकार का आशीर्वाद, मोदी जी का अटूट विश्वास और विकास की प्रगति पर चलने वाला बिहार, और उसको कार्यान्वित करने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ने पूरा काम किया है। इसको भी हमको धन्यवाद देते हुए, बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं। इस चुनाव में समाज के सभी वर्गों का हमें आशीर्वाद मिला है। उधर जो महागठबंधन था, वो समाज को बांट करके चुनाव की राजनीति कर रही थी। रणनीति उनकी ये थी कि समाज को खंडित करो, विभाजित करो और उसके माध्यम से राज करने की बात करते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति। वो बिहार को बिहारियों के सहारे नहीं चलाना चाहते थे, वो बिहार को घुसपैठियों के सहारे चलाना चाहते थे और उनका समर्थन करते थे। बिहार की जनता ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बिहार की जनता राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़ी है और राष्ट्रवादी ताकतों को आगे बढ़ाएगी। मैं महिलाओं को विशेष करके धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लिया और स्पष्ट संदेश दे दिया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और नीतीश कुमार जी के सुशासन ने वहां अच्छा काम किया है, उसको उन्होंने मुहर लगाई है। युवाओं का समर्थन हम लोगों को मिला, किसानों का समर्थन मिला, मेहनत का लोगों का समर्थन मिला, समाज के सभी वर्गों ने हमको आशीर्वाद दिया है। और इस आशीर्वाद के लिए पार्टी की ओर से मैं बिहार की मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महागठबंधन ने बिहार के लोगों का कदम कदम पर अपमान किया। सारे चुनाव प्रक्रिया को देखें तो उन्होंने बिहार के मतदाताओं को अपमानित करने के काम के बजाय और कोई काम नहीं किया। यहां तक कि मोदी जी का विरोध करते करते छठी मैया का भी अपमान करने में पीछे नहीं हटे, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने जो हमारे प्रवासी भाई हैं, जो दूर दूर के क्षेत्रों में जाकर के अपनी जीविका के लिए काम करते हैं, उनका भी अपमान किया। और तो और छोड़िए, प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता, उनको भी अपशब्द कहने से गुरेज नहीं किया, उसमें भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन बिहार की जनता ने
ऐसी पार्टी को और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देकर के एक स्पष्ट संदेश दिया है। राष्ट्रीय जनता दल राजद को तो इस चुनाव के नतीजे ने करारा जवाब दिया ही है। जो लोग बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए लगे हुए थे, घुसपैठियों के सहारे सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, उनको स्पष्ट संदेश तो बिहार की जनता ने दिया ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो कांग्रेस, जो परजीवी पार्टी है, आज उसकी बिहार में स्थिति क्षेत्रीय पार्टियों से भी कम हो गई और उनकी वो दुर्गति हुई है, वो भी हमको देखने को मिला है। इसलिए मैं पुनः बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कर्मठ कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने बूथ पर दिन रात एक किया, जिन्होंने इस सुनामी को ईवीएम में कैप्चर कराने में वोटरों के साथ खड़े होकर के उस वोट में तब्दील करने में जो उन्होंने योगदान किया है और जो उन्होंने मेहनत की है, उसके लिए मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में ऐतिहासिक विजय, प्रचंड विजय हुई है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। सभी कार्यकर्ता अभिनंदन कर रहे हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, अमित भाई, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और देश के कोने कोने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी देशप्रेमी नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहां उत्साह और उमंग से भरे हुए आप सभी साथियों, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग
हम तो जनता जनार्दन के सेवक है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा ये बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। साथियों, बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से मैंने बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। अब आज की ये विजय हमें संकल्पित कर रही है कि बिहार के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। साथियों, एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक
माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है और इसमें हर धर्म हर जाति के युवा है। उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा और उनके सपनों ने जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। मैं आज बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार की बहनों बेटियों को नमन करता हूं। मैं बिहार के किसानों, श्रमिकों, दुकानदारों, पशुपालकों, मछली पालकों, सभी को नमन करता हूं। साथियों, मैं एनडीए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नीतीश जी ने शानदार नेतृत्व दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने लगातार मेहनत की। हमारे जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग जी ने बहुत बेहतरीन लीडरशिप दिखाई है। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी